くできれば実感できるのさこの体の奥に眠る力がかけてく全て心実行できる日々没頭ミッション君自身にピンと合わし読みが甘くそうなくじけそうになる時には目閉じ下げるルート今夜はヤバそうだ生きるのも戻るのも困難舞台は荒れているフットワークから口から血から吸い上げる疾患期間胃がキリキリ舞うシックサ残すインパクトベントシーサッジグザグなゴーサイン出す回が汚いこの先には一体何が起きるのかななんやらこの界隈はそう簡単にはしなかったバイバイ残した俺という存在あいうえの倍合ばかりだったあの頃から何も変わんないなら残ってる俺の取り分はある地点まで行ったらもう戻れない到達しなければやりがいがない張り合いがないラッパーは虎の意借りたなんだかやりがいでも簡単に壊れちゃうんだ Yeah
쓰고 이르는 자리今すでにいる音の上 Cook it up, no type of slang Yeah, yeah This dish is spicy 君ら汗かくどうぞ try me 怖いものもないし相手になって somebody bite me Nothing of me 気にしないよだって I have no time to know ya Pass me some weed 落ち着きたいよだって飛び級いらない子から飛ばすテスラ Vroom vroom 誰も見たことない Move Let's go face to face Hey you, come on to the stage Hey, hey 作り出す new sound 無理やるおじさん私ちょっと生意気でもほどの the sun 揺らしな to the right Yeah, to the left フロアいつも lit マジで熱くさせて汗汗汗 Yeah 汗汗汗汗汗汗 Yeah 汗汗汗汗汗汗 Yeah 汗汗汗汗汗汗 Yeah 汗汗日が出るだけのバレバレ大人たちはみんな金無礼なエメでタゲバレ好きなよやるだけで騒がしてく負けこの目果てるまで足は止めずラネ揺らすフロアいつもレあげるセンスでもダーあれとは全然違うよく見ろやりすぎ来席飽きよもしかしたらさこれも陰謀俺とビートスティッチとリロ見たく相性も一緒ヘラに言うたる気象 You know 死ぬまで最先端 like クリスチャンディオ作り出す new sound 無理やるおじさん私ちょっと生意気でもほどの the sun 揺らしな to the right Yeah to the left フロアいつも lit マジで熱くさせて汗汗汗 Yeah 汗汗汗汗汗汗 Yeah 汗汗汗マジ半端ね俺マジ半端ね Yeah 俺のせい涙目になってるヘイターまだにらめっこおっさん言うてる俺らも言うてる間におっさん時間がない仕方ないトラウマタイズの結果全部直感 Hey 作り出す new sound 無理やるおじさん私ちょっと生意気でもほどの the sun 揺らしな to the right Yeah to the left フロアいつも lit マジで熱くさせて汗汗汗 Yeah 汗汗汗汗汗汗 Yeah 汗汗汗汗汗汗 Yeah 汗汗汗汗汗汗 Yeah 汗汗汗
Yo, final showdown. One more throwdown. Smoky when I'm zoned out. Gang all in, I don't fall out. Full house with house money. Bodyguards with a musket. You had one chance, but it's it. So now, yo, fold up and get folded. Cool off, but don't cool in. Walk out, keep walking. Yep, you've been told to the guy just fall back and get wasted. All black means basic. Face it, it's over. Look, fold up and get folded. Cool off, but don't cool in. Walk out, keep walking. Yep, you've been told to the guy just fall back and get wasted. All black means basic. Face it, it's over. Yo, done and dusted. Another one busted. We shouldn't have rushed it. We act smash and crushed it. Got a full house with house money. Bodyguards with a musket. You had one chance, but off it, so walk out. This was a must-see. Up ugly, they walked in for the talking, then the journey turned bumpy. Full house with a house money. Bodyguards with a musket. You had one chance, but so now you go. Charged, mad ting, raged up, amping, all out, no ramping. Yep, you've been told to the guy just fall back and get wasted. All black means basic, just face it, it's over.
Yeah, my body rock low, that way too expensive. Yeah, I pay for that till it get you minutes. Don't you worry about them dollar sign, worry about them digits. Then they'll purple lights at 9 o'clock, trigger finger itch. Yeah, I'm the addict, you ain't talking about no drugs. Every take a buzz, you know we going on. These Visa jeans and Beijing, this shit fitted. Yeah, it's a lean, I bought it, I got it straight from clinic. I ain't had no one, I ain't had no one, I ain't had no hope, I ain't had no one, yeah, I ain't had no hope. I ain't had no hope. Yeah, yeah. I ain't had no one, I ain't had no one, I ain't had no hope, I ain't had no one, yeah, I ain't had no hope. I ain't had no hope. Yeah, yeah. I ain't had no one, I ain't had no one, I ain't had no one. I ain't had no one, I ain't had no one. Yeah, I'm here days I couldn't stand no bread on no clothes. Let me frequency on my feet, I'm drip from head to toe. We get lit, middle day that you is in my highs and lows. You ain't built, I ain't got time for none of that, you already know. Yeah, I'm rockin' on red like I'm about to close. Yeah, I spot it, but plot forget too close. Yeah, red bottom shoe look like I'm just on the road. Yeah, these Rico and shoe no shoelaces on no. I ain't had no one, I ain't had no one, I ain't. This stream contains fast flashing images that may affect viewers who are susceptible to photosensitive epilepsy or other photosensitivities. Viewer discretion is advised. Four teams are ready to take the stage, and it's do or die if they want a shot at bringing home a trophy. Hello, everyone, and welcome to Day 4 of VALORANT Masters Tokyo, coming at you live from the Tipstar Dome here in the beautiful city of Chiba. Of course, I'm Golden Boy, and this pre-show is actually going to be off the rails and utterly unhinged because Brendan Sideshow are here on the desk with me here today. Hello, fellas. How are you doing? That's just rude, that intro. We are professionals of the highest caliber. Listen, I'm going to get my seat ready. I'm going to adjust my seat. You can see it right there. I'm not ready for that. I am an incredible professional. I've matched my attire to match the same color as the plat symbol in game as well. So it's going to reflect my analysis for the day as well. Wonderful. We cannot wait. All right, well, first, let's get into what happened yesterday because we had a triple header that could have very well had gone 9 games, and I think our production team's very happy that it didn't. But first, we kick things off with T1 and NRG. Now, I was so stoked for this game. It felt like the temperature of the room was like, we'll see, but I knew that this game was going to bang, and it definitely brought it. I mean, Brent, you couldn't have asked for a closer matchup between these two teams. No, this match was dope, I think, as well, especially because a lot of the expectations were that NRG was just kind of run away with it. Yeah. It was going to be a really clean fight, but T1 brought it to him, man, multiple times. They made it so damn close against one of the top teams at this event where people have predicted them, quite highly. And I'm amazed they did, because didn't they start down like 0-6 or 0-7 on the final map, and they still almost got it to OT? Like, ridiculous scenes. Yeah. But NRG prevailed. Yeah, they certainly did, and now they move on, and we'll see how far this NRG team can go, but all signs are pointing to the uncrowned Kings of NA looking quite good. But then we go to back-to-back elimination matches, and it's always sad to say goodbye to a team, but we start things off with FUT and Attacking Soul Esports. In this game, Sideshow, there's a lot that can be said about this game, but the one thing that I will say is it was nice to just see FUT go back to the fundamentals that brought them here to begin with. Yeah. And then Kiwi gets an ace. Yeah, I mean, Kiwi
self-proclaimed world's best Neon. There you see the kind of reasoning why. Foot looked good, and it's nice that they got that win under their belt at the international level. That match was proper jail Valorant. I mean, that was I was watching that, I was like, there is no nuance, man. The mid-round and out the window were taking fights. That's what you need. It was up front, man. It was up front as well. The gloves were off. Yeah. But hey, I was all for it. And then, of course, the gloves came off again, well, at least for EDG, as we talk about EDG versus Na'Vi. We were all, Sideshow, excited to see if EDG can pick up their first international win. If a Chinese team can do it, did they do it? Darn, they done did it. They done did it? Yeah, it was nuts. I mean, this was crazy. EDG and making it into OT. Name a more iconic duo. And then the level of clutches in this game. The level of individual skill in the game. Always. And this was an elimination match that sent Na'Vi back to LCQ. Yep. Oh my god. This match had it all. It had stakes, it had the storylines as well. The kind of pride that was on the line for a team like EDG. They came so close, so far at every single international event until now. Finally got that win over. And he was shaking at the end of the game. I'm not surprised, man. Shaking with there was some primal roars occurring from across the stage as well. I mean, we were casting it, man, but he was going crazy for good reason. Yeah. The guy is just an absolute savage. Yeah, popping off. This is exactly what you love to see. Also, with that win, Foot have solidified themselves top 3 EMEA. Yep. So, as you said, Na'Vi to the LCQ. And for Foot, well, I guess they're playing with house money. We know all about that in Americas with EG. So we'll see how that plays out for Foot. But with the first 3 days of Masters Tokyo in the books, here are the brackets. As we mentioned, EG, they march on forward. They're living life pretty, well, probably in a dungeon training, getting ready for their games, as they await the winner of DRX and Foot, which is going to be our first match of the day. Very excited about that one to see what they do with this quick turnaround, Sideshow, because this genuinely is not easy to do. Yeah, absolutely. I mean, playing back-to-back in this kind of fashion, it's not simple, but I think that's the rigor of playing at a tournament level like this. It's very different from the regular season, and some teams thrive under that kind of pressure. Oh, I couldn't agree more. And then, of course, later we're going to have T1 facing on EDG as we look at the other side of the groups here. And yes, we're going to have another rematch. You see it there. T1 got the better of EDG in the past. But, Bren, did that win against Na'Vi essentially light a fire under Edward and his gaming team? Yeah, I think this is, they've broken past the obstacle that they came here to play. They came here to get their first win. And now, honestly, the sky is the limit. Yeah, we use the phrase playing with house money to a degree as well. I think EDG just wanted to get that experience as well and make that top 8, right? They said that prior, I believe, that was their goal for the event. And so now they're one step away. One match away. But they do have to go up against T1, and they are feeling just as determined. The fact that T1 have had the mental composure to be able to bring back multiple maps against teams when they've been down, I think speaks worlds as well about their confidence levels as well coming into these matches. Yeah, absolutely fantastic. And of course, we'll see those teams take the stage in a little bit here. But here's the thing: when you look at the group stage brackets, are your ears ringing at all? Do you get a sense of deja vu? Because I kind of feel like we've seen these results before. You don't know how a group works. Yeah, I don't know how this is working. Foot down there, attacking Soul Esports. I'm having Foot going through. You're having Foot beat attacking Soul Esports? Yeah, I'm on board with that. That's what I'm going with, yeah. I think. We were doing a groupology segment. We were making the bracket ourselves. So far, we are 100% correct. 100% correct. You're looking at the oracle. But wait, look at his shirt pocket, and he vetoes it. Okay. It just creates carnage. So this is where the contention comes from here. And, here's the thing. We look at this and we're like, oh, this is great. Everyone's having a good time. We're making the bracket. It's fun. We didn't think that this was actually going to happen. And now here we are. We did. Yeah, we did. That's why we built it. But we did disagree about this match. I was forced to use my red card, my veto card, and I maintain I was correct. Okay, well, you know what? Here's the thing. I have to ask the question, because you guys clearly are on two sides of the aisle on this. It's a partisan divide. It is. Okay, do you still think DRX is going to win here today, Sideshow? Emphatically, absolutely. Unequivocally, undisputably, undisputably, yes, indubitably, DRX always winning groups. Look at that record. It speaks for itself. Wow. I don't need to know English because DRX, the numbers speak They always win in groups. What's the most recent result? A loss in groups. But the rest of the time, they always win in groups. DRX do not lose. That's why I use my veto, because Foot are not beating them here. DRX always make it out. Well, I wanted to have Foot going through.
against them. Okay, all right. So you think Foot are going to win this matchup? Go ahead, show your homework. I mean, with so much confidence, I think so, because guess what? I knew that Na'Vi were going to lose to EDG, and I knew that they were going to get their top 3 locked in. I knew that they were going to have champs locked in, and now it's going to be so much more free. And look, Los Angeles, we are coming. Listen, Foot have qualified for champs with this. They don't have to go back to LCQ. It's a tremendous weight off their shoulders, and I think it's going to be so much more freeing them coming into this matchup. They're playing their game. It was very adverse to the online performance that we saw from them when they're playing as well to kind of qualify for Tokyo, I would say. I think that they were lacking a lot of that in nuanced, intelligent play. It was very brutish at its core. That was their gameplay that I was seeing. And I know that they can do better. And I think... Objection! Wait, what? Objection! How? Your Honor. Yeah. Okay, I've forgotten my mallet today. Okay. But also, I don't have one either. I don't think the prosecutors have mallets, to be honest. No, I'm the one that's supposed to have a mallet. Objection. How do they call the objection if they don't have a hammer? Shut up. Sustained. Shut up. Sustained. Okay? What are you objecting? Foot are not going to be able to play Lotus today. Lotus, one of their best maps. DRX, get that gone. Get it gone. Okay. Take a look at the picks and the bans recently, okay? On the right-hand side, shut up. On the right-hand side, these are the maps that DRX have been banning. Lotus, 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 Lotus. These are the maps that Foot have been picking. Lotus, 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 Haven. Now, I will say, though, DRX have been doing a bit of trolling. Oh, really? They've been doing a little bit of trolling. Really? Is this a telly you presented for us? Yeah, it is. Okay, so look at how Stacks, he wastes his dog over there. He wastes his dog. Look, the wall's up, the nade's up, and they still send Foxy9 in to die. Oh no, they've used the Reckoning on the side. They haven't paused. They're just going in. They're just going in. The Viper Wall is still up. This is the same Viper Wall, and it's still up because they haven't taken a pause. They just send Foxy9 in to die. Oh God, what have I done predicting this team? Wait. Oh God. Wait, hold on. This makes no sense. So you're going back on your prediction? Well, there's a speckle of doubt, I must say. A speckle of I have a doubt. confession to make. What? I also am doubting. Do you guys just not hold on to any of your convictions? I'm going to be real with you, though. I don't think either of these teams has been looking particularly great. How? Well, Explain. okay, so there's been a lot of reliance on hero plays, for one. Like, a lot of people will look at this, and they're like, this is what Valorant's all about, you know, big 4K moments. But what I saw from Foot was a lot of nuance in their play in the playoffs. The Krax's supportive utility was amazing for them, I think, on the KO over and over again. They took really nice timings. What you were critiquing DRX for, Josh, was just bulldozing in and, you know, not taking those pauses in between to try and bait out utility and then trying to hit with an advantage. Yeah. Foot were doing that really quite well, I think, in the overall playoffs of EMEA. And they haven't been doing it so far in their matchup against ASC. They were really dragged down to just straight up gun duels. And it was the heroics that carried them through a lot of these big moments. And I think that plays out for both of these teams. DRX was saved by Mako and Buzz in multiple rounds so far in the match that they played. And the same can be said for Foot as well. When you're seeing players like Ada Captain as well, Mr. Fallen, having to really pick up the pieces. What you haven't realized, though, is that I have a telestrator today. So whatever you say doesn't really matter because... You have another telestrator? Why does he have a I've got another telestrator because you What? You are What is this? trolling. What is this? Trolling. This man, troll. This little fella over here. Oh yeah, that looks just like him. Troll. This is your Show the mustache, face. show the mustache. Yeah, this is your face when Foot lose. I'm trying to line it up. Hello. Oh my. My face when Foot lose to DRX. Foot are going to win against DRX today. Says the man who's literally just said he's got no confidence in either of these teams. Yeah, I mean, to be honest, I think it's going to be a bloodbath. I think it's going to be very funny. Frankly... I didn't even know we had the capability to do that. I didn't know we had the capability to do that. Oh, I knew we had the capability to do that. What? Zach, what else are you telling me, man? Come on, bro. Oh, wait a minute. Actually, guys, breaking news. No. Breaking news. No. Because unfortunately, we have to throw all of your nonsensical arguments out of the window because I just got word from the camp of DRX that Zest is playing today instead of Foxy9. How does this make you feel physically as well as emotionally? They are trolling. Kermie, he's got money in some very unorthodox places, I'm sure, if he's making decisions like this. Man, they cannot stick to a consistent roster. Every time... Wait a minute. I'm going to play devil's advocate. It's Zest. Right.
on. Yeah, it's Zest. Yes, it's a team that's gone deep in tournaments bro. before. It's Zest with no practice. It's Zest where they have to run all of their old strats because they haven't been practicing Bro, it's with him. killing me. Stax looks the most stressed I've ever seen him at the beginning of the event because he is having to offset this disadvantage. They are not getting good practice. They're chopping and changing the roster. They have to go back to all their old defaults, all their old server time, prep time. It's brutal for I them. will say, though, at least they won't be launching Foxy9 in like he's on a trebuchet to try an entry for them. Like their coordination. They send him in like a sacrificial lamb. Really do. Like it's unbelievable. Well, okay, you know what? Let's go ahead though, and let's not get too negative for a moment here. All right, and let's actually check in because we did manage to get some words with DRX when they arrived. Let's check this out. Buzz. Come here for a sec, please. Now, today is do or die. Your thoughts on your opponent's foot? 일단은 뭐 잘하는 상대라고 생각하지만 일단 이름이 푸신 만큼 저희가 이제 발로 짓밟아주고 올라가도록 하겠습니다. Well, they're a strong team, but you know, foot kind of sounds like FOOT. So yeah, we'll give them a stomping. Well, thank you very much, Buzz. Good luck. Jen saying it. I love that. I love that. Their name's Foot. We're going to give him a stomping. Oh, that's really good. Yeah, I mean, I'm glad he's confident. He's going to be out there playing entry, playing duelist today. Wow. Right? I mean, unless they're on Fracture, where RB plays duelist. Yeah, the roles still do switch. But I will say, like, this iteration of Zest, they just look better with. But it's been bizarre. This whole thought experiment where they're chopping and changing the roster all the time as well. But it's official. There he is. So literally every tournament this year, they have wanted to begin it with Foxy9, and they've ended up swapping with Zest. It started before they even began in Lock-In. They ran the whole of Lock-In with Zest. They lost in the upper finals to HyperX, panicked, and put Zest back in. And they're about to be eliminated, panicked, and put Zest back in again. But the thing is, they played the back-to-back best-of-5s in the lower bracket finals and the finals to even get here as well. And I think it exposed massive gaps in terms of their overall map pool when they're running Zest as well. It was so evident to me, the difference in terms of their Ascent and Fracture gameplay to every other map that they had in the pool, the deeper they got into those best-of-5s. But the thing is, I still think they look better with Zest in. My issue is that they just haven't been practicing with him. Yeah, sure. They need to stick to a consistent roster. And like we said, Stax' IGLing is really suffering as a result of that. Yeah, it's very evident that whatever's happening in the DRX camp right now, there's just a lot of uncertainty. Yep. And right now, in a competition like this, uncertainty is something you certainly do not want to have, especially. Hesitation is defeat. Yeah, that's true. Mike, put that on a scroll. Who's said that? I think that's from Sekiro. Okay. Moving on to their opponents, we actually have Yinsu standing by with Futz, Mr. Fallen, for a quick word. Let's check it out. Mr. Fallen Kanka, come join me real quickly. Congratulations on the win. You are one game away from making out of groups, but your opponent today has a very experienced IGL. How do you deal with Stax' mid-round calls today? Well, we know they have a good place and they're a good team, but I think we're going to show them right now what Turkish place and Turkish team is going to capable of right now here. I don't know, they will scare us. I'm not scared of them, so let's get it. Great answer, Mr. Fallen. Good luck today. I'm not scared of them. Yeah. Let's get it. My guys are ready. If there was ever a time to take down DRX, this is it, right? Because we're talking about DRX in such critical tones because they're a team that normally is capable of actually winning titles. They've not done it before, but they've gotten really close in the past. Yeah. And yet this is them in their most vulnerable state, where, as you're talking about, there's chaos in the camp. That's primed for Foot. All of the pressure's off. They've got their best chance ever at being able to take down a big scalp like this. And also another fascinating thing to keep in mind as well is that yesterday, you know, we were hearing from the Foot side of things that they were trying to play to ASE. They were trying to play to their opponent, and they realized it wasn't working. So they go back to what works for them. It's kind of like DRX to an extent, obviously, but they made the adjustments mid-game, and it's a little different of a, actually very different of a situation, so I'm trolling. But the point I'm trying to say is that it does feel as if Foot have, at the very least, a stronger base to work with. I think they have a very good chance, honestly, as well. If they look even 70% of their form that they were going in through the EMEA playoffs at as well, they still have the issues, I think, with their map pool, but that goes for DRX as well. Yeah. They're kind of in the same camp with this as well. Yeah. And I think that Foot have shown that they can play at
a really high potential, whereas DRX have kind of just looked shaky all throughout their playoff run as well to even get here. Yeah. Well, we'll see how this plays out. Obviously, there's still plenty of game left to play here. We haven't even started yet. It's going to be exciting, and I can't wait. But all throughout the event, as you guys know, make sure you use those hashtags as, you know, to get social with it, all right? Participate on the internet. I don't know why you would want to do that, but go on and have a good time with it. Use the hashtag VCT as well as Valorant Masters. Of course, we want to hear from you. And while you're over there, by the way, why don't you go ahead and cast your vote in today's poll? We want to know, who's right? Is it Bren's prediction for Foot? Is it Sideshow's case for DRX? Or do you think both of them are out of their flipping minds? Scan the QR code to scan. We can't both be wrong. I mean, no. Actually, yeah. Yeah, that's true. Yeah, we can't both be wrong. Absolutely true. I mean, we can both be wrong, like, in our reasoning. We can both be wrong in our reasoning. Where did you write it there? No. What? No, How did that get there? You have too much power. How did that get there? That's crazy. This cannot be a thing throughout the day. This is my desk, and I will not allow this man to just... No, unbelievable. In any case, guys, we're going to take a quick pause for the cause, and I think you're going to see what's on the other side of this break. Trust me, it's pretty awesome. We'll see you on the other side.
Welcome back to Valorant Masters Tokyo. With the high stakes of this event, social media, of course, is getting quite heated, and some would say rather unhinged. Yeah. And that means it's time to play a game of fan or fraud. Particularly favorite segment for me. Yep. Battle Fraud. Masters Tokyo edition. So the way how this works is I'm going to offer you 2 quotes as well. One of them is a real fan takeaway. Okay. The other one has been invented. It's fabricated. Okay. It's a Fraudulent. It's fraudulent. It's all over the like place. my life. It's been made up. Yeah, Okay. it's fake. It's a fraudulent quote, okay? Got it. And you two have to decide between them, and the audience can play at home as well Right. if you are watching as well. So You which guys one's a can real play fan, along. which one's a Which one's a fraud? real, yeah, exactly. Okay. And so let's pull up the first one. I mean, the first question, here we go. I am screaming in my house. Let's go, boys. At T1, hashtag Valorant Masters, or is it going to be B? I want to see T1 make it out of groups. Go, Sire player. Yippee! Nobody, Hashtag Valorant Masters. no one types It has to be yippee. B. No one types yippee on the internet. I'm telling you, man, it's so unhinged, it has to be B. There's no, okay. You think which one do you think is the fake one? I think the fake one is B. I think the Oh, fake one do is you know? A. But All right, well, no, Easier I'll let Alex do it. I think that's Okay, insanity, but give I'll me let this you. one. Give me this one. The fake one is A. Okay, the fake one is not A. It is actually B that was the fake one. A was written by Achilles. Achilles. Yes, from my memory, I believe A was written by Achilles. This is going Wow. off of my memory Feel as bad for well. his wife. Maybe we- Okay. Let's wipe that off the screen. I want to pull up the second question whenever production Fine. All right, is ready Josh. as well. Let's get I'll into follow this. your lead. I'll follow your lead, Josh. What's Yeah. the next one? Keep it going. Next one is, what in the... Even when it looked like Na'Vi had the momentum, for Edward and his gaming, it didn't matter. When you have that clutch gene and a ferocious team, that's a rhyme, it can help you snag an upset against all the odds. Edward wins, Na'Vi is gone. And then That's like a poem. it was a poem, wasn't it? Okay. Quite creative, whoever that was. B, when nobody is chasing you, life takes a fall. These That's are also also poetic. poetic. These are so poetic. I can't imagine any of the fans tweeting either of these. Yeah. These are kind of inspired. I actually don't know, G. Which one is fake? Which one is fraud? Oh my God. I think B is fake. I think B is fake. All right. What about you, Josh? I mean, I literally don't have any idea. Yeah, I let's could go totally for see some A. unhinged fans say A. Let's go for A being the real fan. Okay, well, I can safely say that you guys are correct. I remember this one as well. This B quote was actually fabricated by Jen, our Korean interviewer, as well. I was in the green room when she came up with it, and yeah, A is the real one. So there you go. That's the Wait, answer to that one. so Jen made A or B? No, Jen then- made B. Well, then they're both fine. They're Well, no, both real. but it was intended. No, it was fabricated. Well, she can be a fan. We can all be Sure, fans. I mean, we can all be fans, but no, you're not twisting this segment away from me. Okay, let's wipe this, and we have one more to do as well. I want to speed through this as well. Oh, We've been taking our gosh. sweet Yes, time. I don't know how yes, much time we look, actually have, but we have let's 1 throw it up. minute. A, why are all my teams losing? I don't know why I went with that accent. And B, this is translated from Japanese. What a show by Kiwi. ASC are strong as expected, but Foot came to play. That's bait. Congratulations to your That's first bait. win. I know, I B is think that's bait. real. I think the Japanese fans do tweet politely. Oh, no, they 100% do. They're awesome. But I think that's bait to just get us to go for Why do you A think that's because you just went through all right. the effort to put translated in Japanese. I'm trying to go quick here. Who do you think? Who do you think? Go. You pick. You I pick. think A is A real. is real. I can safely say that A is the real fan quote. A real fan wrote, "Why are all my teams losing?" I don't know if they particularly sound like that, but I you mean, got it I think correct. so. Congratulations. Round of they probably- applause. Oh, yay. We did it. How I much knew- was that? Did we win? What did we We win? didn't win anything, and neither did the people at home who played along. So unfortunately, they don't get anything. I mean, it's entertainment. All It's right. fun. Can we have some real entertainment, Alex? Good news. I actually have something lined up just for you. Before we get into our first match today, here's a little something that we want you guys to check out. Hey, you. Need a hand? Fine. Oh, there's your problem. You did that on purpose. We'll have this contraption up and exploding in no time. If not, we could always use another piece slot.
That can't be our solution for every malfunctioning stage. Besides, Max seems perfectly suited to his role. Okay, well, I don't know what the heck that was, but I'm in for the ride. That was my first time seeing that, and I'm trying to like analyze it. There's so much going through my brain right now. Frame by frame, play it back, let the lore experts go. Dude, I tried to like pull my best like freaking screen crush Ryan Airy impression breakthrough. Here's 100 reasons why you need to watch this video and break everything down frame by frame. Can't. My face was inside the desk, actually like looking at the monitor, trying to figure out what the heck was going on there. Can confirm his face was just right in there. Yeah, the lore heads are gonna go crazy for that one. I mean, that looks like we're gonna get something later on. I guess we'll find out later on. But in any case, though, folks, it's not like we know anything. We're running out of time. So, of course, let's do some predictions, shall we? Because I genuinely don't know what you guys... Just verbally? Yeah, go for it. Verbally say my prediction. I am going to go with Foot still. I'm sticking with it. Committing. He vetoed me. I don't think TRX is going to win this, unfortunately. I think Foot are going to be free as birds. Oh, free as a bird. Okay. It hurts me so much. If they were playing with Foxy, I don't think they take the game. My question now is, are Foot good enough to be able to stop these all-in executes that TRX are going to go for? I didn't get to use this. I'm playing my veto card. For whom? DRX is going to win 2-0 today. 2-0? That's right. I'm committed. You want to know why? Because I have a 100% prediction rate. Well, I won. Well, so do we. No, for Americas. I'm really good at my job. In any case, so... Okay. Make sure. I'm just saying, I really do think that the You have a 100% prediction rate. Not 100% prediction rating, but I did win the America's prediction poll. I think DRX should be considered the favorites, but I do think that there's a serious chance that Foot win here, especially with the fact that they are literally playing with house money right now, like you said. Yeah. The difference in pressure could not be more different between these two teams. Something tells me Zess is going to walk up on that stage, and it's going to feel like riding a bike for the team. They're going to hit a groove. Yeah, Zess is a consistent player for them. Some might even say a consistent demon. They might hit a pothole, not a groove. I mean, he's biking along, riding a bike, falling into an abyss. I mean, potentially. So you guys genuinely just have no faith in DRX. It's not that we don't have any faith, it's that we don't know what to expect. Yeah, don't know what to expect. They're chopping and changing the roster all the time. They haven't had good practice with a consistent roster. But you don't think that the raw aim skill, at the very least, is enough to get them raw aim skill? You ever seen Turkish players? Yeah, you're going up against a Turkish team, and you're relying on raw aim and skill. Seth isn't here. Someone has to have the hopium for DRX, okay? It's I don't know, man. I'm going with Foot. I respect it. All right, guys. Well, listen, the coaches are ready to go for the map pick, so let's go ahead and get this show on the road because it's the final day of group stages, and we only have 2 teams that are going to be moving forward to knockouts. Of course, we have DRX versus Foot, EDG versus T1. Day 4 of VALORANT Masters Tokyo starts right now. 그냥 샷으로 진 것 같아요. This was destructive, absolutely. They're targeting the weaknesses of DRX's playstyle. Bireysel inisiyatifleri bana göre, ya benim düşüncem biraz az. Tamamıyla taktiğe uyuyorlar. Taktik dışına çıkmıyorlar. Rakipten bir çekincem yok. 제발 EDG처럼 좀 해외물 먹어가지고 이제 머리가 좀 심어졌으면 좋겠습니다. 참만 말고 막 만하게 볼 상대는 아닌 것 같고 최선을 다하겠습니다. 지는 건 없어. 배우는 것뿐이야. 우리는 이제 배우고 이기는 일만 남았다. 오케이? Let's get it. Çok çalıştık, aşırı fazla çalıştık. Job not finish. 我跟我哥的关系当然是特别好了。
他能帮助我是，他从小给我灌输的东西就是自信。但是呢，在每一次比赛输的时候，他是第一个站出来指责我的，是因为他很想看到我站在舞台上胜利的那一天吧。After we got beaten in lock-in, we just like grow so much individually and then as a team. That's how we came here so far. They collapse, they strike them down, and China get their win. 我想我哥看到这场比赛的时候，拿到胜利的时候，他一定是在哭。We can qualify for the playoffs. That means a lot to me. 就是我觉得我的付出有成效。Facing T1, all I want to say for you guys is good luck. 曾明佳，我要带到你的名字。All right, last day of groups. So for this match, DRX, you will be the higher seed since you come from the upper bracket of the groups. So would you like Team A or Team B? Team B. So FUT, you will be Team A, and we will start with your first band. Split. Split, your band. Lotus, and map number 1? Bind. Sight on Bind. Attack. Map number 2. Fracture. Sight on Fracture. Attack. Attack. So we're going to go into the next set of bands, starting with FUT. You have Ascent, Haven, and Pearl. Pearl. Pearl, okay. Your band? Band Ascent. So map number 3 will be Haven. Sight on Haven. Attack. Okay. I'll run through this really quick, make sure we're good to go. First set of bands, we have FUT with Split, DRX with Lotus. Map number 1 is Bind with DRX on Attack. Map number 2 is Fracture with FUT on Attack. Next set of bands are Pearl and Ascent. Map number 3 is Haven with FUT on Attack. Yep. Sounds good? Yes. All right, good luck to you both today. Sports. Comfortable situation for DRX to be in, and for Foot, well, at this point, I think the grass is just going to continue to get greener on their side of the field as they have already punched their ticket to Champions, and they know, without a doubt, Bren, that at this point, they're just playing with what they got, as we like to say and what we said before, playing with that house money. It's DRX, it's Foot, this is going to be good. There's nothing more dangerous than a Turkish team with confidence, I'll tell you that. I mean, these guys, they can aim with the best of them, and if it's DRX as well, if they're not going to reach that next evolution in their play that we know that they're capable of, they're not going to be showing some patience, some nuance with the mid-rounding as well, and they just try and take it to how they've been playing with those big heroic moments. I think that they're going to be rudely awoken and potentially out of this tournament as well. This is an elimination match between these teams. A very uncomfortable situation for DRX to be in, and the only other time that they've lost in groups, they didn't make it through the groups, right? So those 2 losses prior for DRX, when they failed to make it through in Champs, I believe that was in 2021. Yeah. I think it's very telling as well in that interview piece that you saw that Kiwi said he's not really afraid of DRX. They're very rigid, they stick to their tactics, they never deviate from them. He's not afraid of what they do individually because he always knows that they're going to stick to their regimen. But can't the same thing literally be said for Foot? That was what we were harping on him about yesterday on the desk, where it just felt like there was no nuance to some of the plays that they were executing. I think they have shown that though in the past. In a lot of their prior games, a lot of their prior performances, they've shown that
they can take these awkward timings so they refight, particularly around Krax's KO, whenever they play around that as well. His flash timings are usually quite immaculate, and they do play off of it really nicely to try and take those awkward timings when teams are trying to set up. They're really good at fighting between those windows. Let's talk a little bit about the map pool as well, because we saw that map veto come through. Foot recently beat Fnatic on Bind in EMEA. That should give you a lot of confidence that they're going to be able to beat a bit of a wounded DRX on that first map. Still committing to the 2-0. Yeah, well, and Fracture is the map where you see so much of DRX just being all in with their sync. Yo, hello everyone, welcome to VALORANT Champions Tour 2023 Master Tokyo. और आज हमारी दो टीम जो आपस में भिड़ती हुई देखेंगे, that is FUT Esports, बट भी बोल सकते हैं versus DRX. अभी के लिए फॉर्म चला और मेरा नाम है क्राट और मेरे साथ है स्पार्टस, my boy. How you doing? I'm doing great, Krad, and again, FUT Esports versus DRX on the first map of Bind. Like FUT ने Bind पिक किया अपना as a map pick DRX against. एक बहुत major gamble करते हुए नजर आ रहा है. Although Bind काफी अच्छा खेलते हैं, they have a high win percentage. लेकिन DRX टीम जो इतनी ज़्यादा prep heavy है, जो actually आपको एक on meta बांध के यहाँ पे हरा सकती है, उसके खिलाफ Bind को पिक करना एक decider match के अंदर काफी tricky हो सकता है. अभी हाल ही में बहुत बड़े नाम इस स्टेज से बाहर गए हैं ना. I was checking on Twitter कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एम गेम ही खेल रहे हैं लोग, प्रेशर ज़्यादा है, क्या हो रहा है. सो आई होप कि आज हमें एम गेम से हट के कुछ चार चीज़ें फालतू पता चले, तो देखने को मिले, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न समथिंग. और हमारे अंदर भी एक बडिंग वैलोरेंट प्रो पल रहा है. बट किसी भी क्षण दिस एक्शन विल बी लाइव. बट कुछ एक्सपेक्टेशन है, कोई प्रेडिक्शन है स्कोर लाइन की कि कैसा होने वाला है आज का ये बेस्ट ऑफ 3? I guess 2-0 for DRX. And that to not dominate if like 13-8, 13-9 का स्कोर लाइन पहले मैप पे एटलीस्ट हमें देखने को मिलने वाला है. अब पहला मैप बाइंड है, अब मेरी लेट्स से कि, और आपने बोला कि DRX बहुत टैक्स बेस्ड खेलती है, तो ऐसा वो क्या करते हैं जिसे आपने स्टेटमेंट दिया? लाइक DRX का जो अटैकिंग सेटअप जिस तरीके से स्टार्ट होता है, उनके पास हर एक जगह के लिए हर एक लाइन अप, लाइक द वाइपर मॉलीज, द स्नेक बाइट्स, और हर चीज़ की प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 80% राउंड्स में आपको सिमिलर देखने को मिलेगी. सिर्फ चीज़ें ये बदलती हैं कि वो एक्चुअली रेस को किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं. सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि DRX किस तरीके से हिट कर रही है साइड्स को. एंड अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स में, द राउंड इज योर्स, वरना वो राउंड आप हारते हुए नजर आएंगे. इट्स दैट सिंपल फ्रॉम DRX साइड. उनके पास हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, एंड वही चीज फिर से करेंगे. फ्लैश पॉइंट जाएगा, शावर से कंट्रोल, वाइपर को डिनाई किया, अब उनकी वाइपर वॉल डाउन है, बिलोंग के प्लेयर्स के पास कोई एक्सेस नहीं मिलने वाला किसी भी चीज का, एंड उसी के चलते एक फास्ट ए हिट. स्टैटिस्टिकली यही चीजें होने वाली है मैच के अंदर, एंड लेट्स सी DRX किस तरीके डिलीवर करता है. ओके, बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन सी कि ए शॉट पे हेवी फाइटिंग चल रही है. यू नो कंटेस्ट का एबिलिटी ट्रेड हो रहा है यहाँ पे. क्रैक्स गॉट मार्को डाउन बट बस विद द फ्रेंजी. एंड आई ऑलवेज से भाई पिस्टल में आज के टाइम पे दिस वेपन इज सो अनोइंग क्लोज रेंज के अंदर. बट काफ़ी अच्छा डिफेंस, और बैक साइड पे DRX लिटरली स्क्वीज अप कर रही है उनको. बैक साइड जाने का कोई मतलब नहीं था, बट सिर्फ ये फाइट डूल काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाला है. बज क्रिएटिंग लॉट ऑफ न्यूसेंस. Oh, they are tapping the spike and like एक काफी close round जा जरूर सकता है. 10 HP बस के पास Rachel है भी, लेकिन Fallon will come down, close the round, and एक काफी close pistol फट अपना नाम करता हुआ नजर आएगा. Although जिस तरीके से स्टार्ट किया था DRX ने, looked like के कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलना चाहिए, बट ए शॉट पे प्लेयर्स I would say just shut down होते चले गए राउंड पिक बाय पिक. एक काफी अच्छा पिस्टल फट अपना नाम कर चुका है अभी. यू नो मेरे हिसाब से राउंड के अंदर सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा एग्जीक्यूट था. द फोर्स डिफेंडर्स टू गेट बैक टू द साइड. बट असली प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यहाँ पे हुई थी जब स्टैक्स पिक ऑफ हुए थे. अब सोच के देखिए, आपका हीलर लिटरली जो इनिशिएटर है आपको वो पिक निकाल के दे सकता है, वो सोलो फाइट पे गया एंड स्टैक्स लॉस द डूल. उसके वजह से आखिरी में इतना कॉम्प्लेक्सिटी हुई, वरना तो ये राउंड आराम से DRX के फेवर में जाता. दोनों अपने रीजन के अंदर अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं. HyperX के बाद DRX ये जिसका नाम चलता है यहाँ पे, और वहीं पे #3 में फॉलन
वो साइलेंस काफी इजी शॉट्स एंड अगेन यही चीजें यहाँ पे रहने वाली है अभी सेव राउंड एंड इस एंटी इको के अंदर डीआरएक्स का जनरली कोई गेम प्लान नहीं रहता दे ऑलवेज जस्ट ट्राई टू फाइंड पिक्स अभी भी सिर्फ एक बी लॉन्ग के अंदर 3 प्लेयर्स अपना एक क्रॉस फायर सेटअप बना के बैठे हैं दे आर वेटिंग कि कोई अगर फटका प्लेयर पुश इन करने का ट्राई करता टू गेट ओवर एग्रेसिव बट अभी के लिए काफी डिसिप्लिन प्लान है जरूर एक पेशेंस एक डैमेज जरूर देंगे ज़ेश गेट्स वन आरबी गेट्स अनदर फ्रैग साइड का कंट्रोल यहाँ जरूर मिल चुका है एंड दे विल हैव टू अपग्रेड द वेपन्स एंड अब ये काफी अच्छा रीटेक सिनेरियो हो सकता है 3v3 का सिनेरियो है जरूर माको के पास हुक्का का कंट्रोल कंप्लीटली अवेलेबल है ही हैज अ स्नेक बाइट्स विद हिम एज वेल विद द स्पेक्टर ये रीटेक करना फट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है Because अब उन्होंने स्नेक बाइट डाल दिया पॉइजन क्लाउड डाल दिया एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द अटैक फॉर द डिफेंडर्स अगर वो हुक्का से प्लान करे रिटेक का रैंडम स्पैम करे माको को लो कराए जैसे ही पॉइजन क्लाउड हटेगा I think he wanna take the fight, but he already wasted a lot of time. यहाँ पे टाइम वेस्ट कर चुके हैं एम फाइट हुई बट आरबी ओ माय गॉड एक टाइम पे जेट पे आतंक मचाने वाला प्लेयर अभी के लिए सूडो डुलिस केओ नाइस शेरिफ पर एक और शॉट हो सकता है लाजवाब होएगा मॉली करके टाइम वेस्ट करा उन्होंने आई थिंक इट्स आउट टाइम नहीं है और पिस्टल जीतने के बाद फॉलो अप राउंड हारना ये दिल पे चोट लगती है एंड इट्स नॉट इजी इस चीज को संभालना ये बहुत अलग ही यहाँ पे राउंड निकाला खासकर जिस तरीके से फर्स्ट फ्रैग भी यहाँ पे मिस्टर फैलन ने निकाल के दिया था बहुत अच्छा पिक मिला था उन्हें बट देन द फ्रेंजी येट अगेन शाइनिंग ज़ेश फ्रेंजी के साथ स्पेक्टर को शट डाउन करते हुए नजर आए लाइक फ्रेंजी के लिए अब चाहे पिस्टल राउंड में देखिए चाहे एंटी ईगोस में देखिए जो फ्रैग्स निकल रहे हैं जिस तरीके से यूज किया जा रहा है रिसेंट डेज में बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड करने लग रही है ओ यस कोई कुछ ज्यादा ही चल रहा है अभी I don't know कि maybe इसके अंदर I think we are using the oldest patch अभी तो मुझे पर्ल देखना नए पैच वाला मुझे शॉर्टी देखनी है कि शॉर्टी क्या अभी भी वो रैंडम बाइस के अंदर आएंगी बिकॉज 150 तो प्रॉब्लम नहीं देते थे क्रेडिट बट 300 जरूर देंगे अभी तो हमारे राइफल्स की एमो भी कम होने वाली है तो भाई बहुत सारी चीज़ों में ज़रूर फ़र्क आएगा बट यहाँ पर डिफेंडर्स को पता है कि अगर सप्रेस हुए हैं तो घर पे बैठ के नहीं लड़ सकते दे हैव टू रिटेलिएट दिस टाइम 3 लोगों ने टावर्स पुश किया टू गेन द कंट्रोल बट दे बीइंग वॉच्ड उन पे पीक लगा रखी थी अब यहाँ पे आरपी एक अच्छा फ्लैश देंगे स्पॉट करा दे गॉट वन एंड इट्स सो हार्ड टू जजेस अब सोच के देखिए फैंटम वर्सेस क्लासिक की वॉर में क्लासिक वॉन कुछ भी लिटरली कुछ भी यहाँ पे समय होता हुआ नजर आ रहा है एंड अगेन एक और राउंड जो काफी क्लीनली जीतना चाहिए डीआरएक्स को वो इस समय स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं ऑलरेडी 2 प्लेयर्स डाउन एंड अगेन द थर्ड फ्रैग गोज एज वेल स्टैक्स एंड मार्को आर द ओनली 2 प्लेयर्स सर्वाइविंग एक 5v2 का हिट यहाँ पे करना है एंड द स्पाइक इज डाउन इन नो मैंस लैंड एंड लेट्स सी क्या यहाँ पे स्पाइक को रिकवर करने भी दिया जाता है स्टैक्स के पास ऑल्दो गाइडिंग लाइट अवेलेबल है जरूर दे हैव टू जस्ट पॉप फ्लैश आउट 30 सेकंड्स ऑन द क्लॉक जो भी करना है बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा अभी मैन एडवांटेज का फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता बिकॉज 2 प्लेयर्स के पास अभी भी शेरिफ और क्लासिक है बट असली प्रॉब्लम क्या है कि स्पाइक का कंट्रोल डिफेंडर्स के पास एंड उन्होंने अपने ग्राउंड्स को काफ़ी तरीके से संभाला मैंने भी क्या बोला था पिस्टल राउंड जीतने के बाद फॉलो अप राउंड हारने में दर्द होता है अरे नहीं ऐसा नहीं होता अगर आपने 3 निकाल भी दिया फॉलो अप राउंड आपने एक टर्न अप करा अगर आप वो एक हैवी बाय राउंड कंप्लीट ना कर पाए अब उससे ज़्यादा दर्दनाक भी कोई चीज़ नहीं होती और वो दर्द अभी DRX फेस कर रही है FUT that reset was impressive. This is painful for both the sides. Back to back thrifties यहाँ देखने को मिल रहा है and again ये चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं स्पेशली इन अ डिसाइडर मैच ये थोड़ा सा कुछ अलग ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद दोनों टीम थोड़ा प्रेशराइज खेल रही है खासकर बज जिस तरीके से अपने शॉट्स मिस करते रहता है एंड नाउ DRX बैक ऑन द शेरिफ बाय इस बार देखना पड़ेगा क्या हमें वापस से शेरिफ के साथ वो इनिशियल फ्रैग्स देखने को मिलते हैं नहीं बट फॉर नाउ काफी ज्यादा डिफॉल्टी प्ले देखने को मिल रहा है एंड सरप्राइजिंगली स्टैक्स सोलो शॉट्स कंप्लीट किए जा रहे हैं जो ये क्या है he gets 2 taps on the head and जैसे कराटा मैच से पहले भी कह रहे थे कि एम गेम कुछ ज्यादा चल रहा है इस डेज में वो बिल्कुल डिस्प्ले में भी दिख रहा है अब यू नो बिकॉज इट वाज अ बिग कंसर्न जब मैंने पढ़ा कि लोग यू नो जितने भी कम्युनिटी के प्रो लोग हैं एंड जितने भी एक्सपीरियंस एनालिस्ट बैठे हैं बिकॉज दे कैन फील इट बिकॉज वैलो के अंदर स्प्रे एंड प्रे तो नहीं है आपको पता है कि इफ यू हैव दैट सुपीरियरिटी एंड एम वो चीज़ें दिखती है अभी BCS से में भी वी सी अ लॉट ऑफ दिस OG ने पूरे टाइम दे डोमिनेटेड थ्रू द एम स्टैट्स की ज़्यादा यूज ही नहीं हुई बट अब नावी जैसी टीम जो स्टैट्स को छोड़कर यू नो एम पे गई एंड दे कुडंट परफॉर्म एंड दे गॉट एलिमिनेटेड सो लाइक इतने बड़े स्टेज से बड़ी टीम जाएंगी दर्द तो होगा ही
डेफिनेटली एंड नाउ अगर लाइक बैक टू बैक थर्ड राउंड है जो हमें थ्रिफ्टी काइंड ऑफ थ्रिफ्टी देखने को मिलने वाला है 2v5 का रीटेक आई गेस बेटर सेव द वेपन्स राइट नाउ बट कप्तान पहला फ्रैग निकालेंगे ही गेट्स अनदर वन दो पिक जोन का जगह बट बस स्टिल विद द शेरिफ वेपन अपग्रेड करने का मौका नहीं मिला था लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ने वाली उन्हें तीसरा फ्रैग भी कंफर्म करेंगे स्टैक्स एंड एक और थ्रिफ्टी स्टार्टिंग के 4 राउंड्स में 3 थ्रिफ्टीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंप्लीट रीसेट हो रहा है यहाँ पर अभी लगता है कि कोई टीम अभी अपर एडवांटेज देने वाली नो हेल नो पिस्टल राउंड जीता है यहाँ पे FUT ने फट ने उसके बाद DRX ने कम बैक करा DRX का बाय राउंड था फट ने कम बैक करा और इस राउंड के अंदर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग किसी भी सिचुएशन में कि DRX कम बैक करती बट स्टैक्स के 2 हेडशॉट थे जो वो मतलब इतने प्रिसाइज थे मतलब 2 प्ले लाइनअप में आए मतलब क्या ही चल रहा है ये क्रॉस फायर के बीच में जाके दोनों को वन टैप करके आए हैं एंड द कॉन्फिडेंस ऑन दैट गाय इज लाइक इमेंस बिना कोई यूटिल के सीधा यहाँ पे एम बैटल के लिए गए एंड जस्ट वन द फाइट एंड इस बार भी वापस सिमिलर डिफॉल्ट रन कर रहे हैं DRX के प्लेयर्स एंड वो डिफॉल्ट हर बार वर्क भी कर रहा है इनके लिए ऑल्दो गन फाइट्स के ऊपर गेम करने का आ जाता है कि अब वो अपने एम डुएल्स को जीत रहे हैं या नहीं बट अभी के लिए जिस तरीके से इनके स्टैट्स रन डाउन करें जो टैक्टिक्स है वो बहुत सिमिलर है सिर्फ वेट आउट कर रहे हैं विद 0 पॉइंट के क्या यहाँ पे ऑक्टागन का कंट्रोल इनको इजीली मिलेगा या कोई पुश आउट करने वाला है क्योंकि सामने अगर देखें सिर्फ एक पॉप फ्लैश प्लेयर है दैट इज रेक्स ऑन द केओ जो एक्चुअली शार्स की तरफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं सो बीलोंग का कंट्रोल काफी इजीली अवेलेबल है DRX के पास क्योंकि प्राउलर के साथ ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है इट कैन इजीली बी ब्रोकन आउट एंड आप स्पेस गेन कर सकते हैं बट पॉप फ्लैश रहता है जनरली स्काई के रूप में आपको देखने को मिलता है ऑन द बोथ द साइड्स वो ज्यादा दिक्कत देता है अभी के लिए सिर्फ वेट आउट कर रहे हैं 50 सेकंड्स ऑन द क्लॉक बट QE की बात की जाए समय ऑपरेटर के साथ शार्स का कंप्लीट एक्सेस अभी भी अपने पास रखा हुआ है एंड DRX इज स्टिल वेटिंग डाउन रनिंग डाउन द क्लॉक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं एंड अभी भी आप होल्ड करते नजर आएंगे बट नाउ फाइनली द सीकर्स पॉप्ड इन एंड बल्स को देखा जाए ब्लाइंडली एंटर करेंगे साइड में गेस टू ऑल्दो थर्ड मिल सकता है बट QW में शार्स कंट्रोल रखेंगे तो बस टैक्स गेस द रिफ्रैग एंड कंप्लीट साइड कंट्रोल फिर से DRX के हाथ में आता हुआ टिपिकल रेज इनिशिएशन 2 सैचल लगाए शो स्टॉपर एक प्लेयर को आउट ऑफ पोजीशन पकड़ा ट्रेड हुए बट टाइमली ट्रेड आया यहाँ पे शावर की तरफ से भी सो काफ़ी तरीके से अप्रोच ली और FUT इनका एक अच्छा बाय था यहाँ पर जब आपको पता है इट्स वेरी ऑब्वियस यू कैन प्रेस टैब यू कैन चेक कौन सी अल्टीमेट है अगर रेस की अल्टीमेट है हाई चांसेस है इट विल बी यूटिलाइज तो थोड़ा सा उसी हिसाब से अगर पोजीशन करती अगर FUT यहाँ पर तो मे बी एक अलग ही पोजीशन में होती तो इस फाइट के अंदर मौज को तो मतलब कुछ करने का मौका ही नहीं मिला एंड आई फील बैड फॉर द KO बट जो आपने इतना बताया हमें यहाँ पर जो फ्लैशेस के पोटेंशियल है यहाँ पर आई एम वेरी स्कैर्ड जब DRX आएगी डिफेंडर साइड पर बिकॉज एक टाइम पे आपके पास KO है आपके पास स्काई है एंड यू कांट डॉज दोस फ्लैशेस गाइडिंग लाइट पहले टूट जाती थी अब तो वो भी नहीं होता जिम स्पैम इट सिग्नेचर एबिलिटी है टाइमली वापस भी आ जाती है अगर एक्सपर्ट करने पे आए देन DRX कैन बी द टीम जो FUT को हार्ड टाइम दे सकती है हर पॉइंट पे डेफिनेटली एंड लाइक इट इज वन ऑफ द रीजंस कि स्काई जितने भी प्लेयर्स होते हैं बाइंड पे वो जनरली बी ऑक्टागन खेलना प्रेफर करते हैं क्योंकि साहब बीलोंग का कंट्रोल ही नहीं टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके शार्स तक वो गाइडिंग लाइट को आप सेंड कर सकते हैं एंड आपके शार्स प्लेयर उस गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल करके एक्चुअली डीप शार्स को पुश इन करते हुए नजर आ सकते हैं एंड ये स्ट्रैट्स बहुत बार हम फैनेटिक को इस्तेमाल करते हुए देख चुके हैं DRX भी वो सिमिलर टैक्टिक्स यूज करते हैं व्हेन दे आर द डिफेंस बट करंटली वो अभी गाइडलाइन इस्तेमाल करेंगे फिर से शार्स का एक्सेस यहाँ लेना जरूर चाहते हैं इन्फॉर्मेशन मिला जरूर है बट जस्ट लुक एट टैक्स अवेयरनेस ऑन दिस गाय इज ह्यूज उन्हें पता है कि शायद इस बार शार्स इजीली नहीं मिलने वाला ही जस्ट होल्डिंग बैक बट दे आर पुशिंग हिम डाउन एंड अभी भी वो सोलो फाइट लेने के लिए जा रहे हैं जो थोड़ा सा रिस्की जरूर होता है अगेंस्ट दैट ऑपरेटर एंड ओके इट्स द मार्शल गेट्स स्पॉटेड आउट बट QW1 उस एक शॉट के बाद वापस फॉल बैक करेंगे एंड DRX अभी भी अपनी पोजीशन से हिला नहीं है वो अभी भी उस सिमिलर 2-1-2 डिफॉल्ट के अंदर बैठे हुए हैं अभी राइट नाउ हमें लगातार दूसरा राउंड है जिसके अंदर DRX ने कुछ भी ओवर कमिटमेंट नहीं दिखाई है स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड के अंदर फर्स्ट दे बिलीव टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन उसके बाद उस पूरी इन्फॉर्मेशन का एक इम्प्लीमेंटेशन निकलेगा उसके बाद दे विल एग्जीक्यूट व्हाट आई कैन सी राइट नाउ जो हमारा अटैकर्स है ए शॉट पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो हमारा स्पाइक है वो भी उसी रीजन उस प्रीमिसेस के आसपास है बी लॉन्ग और हुक्का का इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद व्हेन दे गॉट नथिंग दे आर एट ए शॉट दे विल बी गोइंग फॉर अ इंपल्स रश एनी हाउ लैम्प्स के अंदर ब्रिमस्टोन है साइड के अंदर 3 प्लेयर है दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी बट एम रूल जीतने की सख्त दरकार रहने वाली है ये देखिए सैचल कर ऑलमोस्ट पहुंचे बट QW1 व्हाट वाज दैट ब्यूटीफुल
Oh, he overrated. Like एक काफी अच्छा वेपन रिकवर भी कर लिया था, लेकिन साइड कंट्रोल लेने की बस जरूरत नहीं थी. बट कप्तान यहाँ पे ऑब्वियस स्ट्राइक पे चलते हैं, ज़ैश को टेक डाउन करेंगे. द ब्रिम डेफ राइट देयर. बट नाउ अगेन एक 4v3 का डिटेक्ट सिनेरियो. एडवांटेज मैं कह सकता हूँ जरूर इस समय फट के पास है, बट द पोजीशनिंग ऑन द प्लेयर्स ऑफ DRX काफी अच्छा नजर आ रही है. बट कप्तान अगेन अपना एम ड्यूल जीतेंगे. सोलो फाइट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे होते नजर आ रही है, एंड इस बार वो इंडिविजुअल ड्यूल्स फट के फेवर में गिरते हुए नजर आने वाले हैं. 1v3 एंड ही विल गेट शट डाउन. कप्तान यहाँ पे 3 के सिक्योर करेंगे अपनी टीम को. थर्ड राउंड भी दिलाते हुए नजर आएंगे. अगर बज आफ्टर द मोमेंट बज इनिशिएटेड इन द साइट, अगर वो QW1 को पिक ऑफ कर लेते देन चीज़ ज़रूर बदल जाती. बिकॉज आप सोच के देखिए 950 की मार्शल से ही गॉट अ फुल बाय डाउन. इट वाज इंपॉर्टेंट. साइट को काफ़ी देर तक उन्होंने होल्ड करा एंड दे हैड नथिंग. अगर आपके पास शावर का कंट्रोल नहीं है, ए साइड होल्ड करना मुश्किल है. बिकॉज बैक साइड से जब डिफेंडर्स आगे बढ़ेंगे, मैन एडवांटेज लेकर आएंगे, देन अटैकर्स कुछ भी कर लें. बिकॉज आप एक पोस्ट प्लांट पे खेल सकते हैं. आपके पास क्या है? आपके पास ब्रिमस्टोन है, आप मोलो पे खेल सकते हो अगर ऑर्बिटल स्ट्राइक है. बट आपका जो प्लांटर है, स्पाइक प्लांटर, वो इंस्टेंटली डेसिमेट होता है ऑर्बिटल स्ट्राइक से काउंटर पार्ट के. आपके पास कुछ बनता नहीं, आपको एम फाइट लेनी पड़ती. और जो एम फाइट मार्को ने ली थी, ही लॉस्ट इट एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट अ स्टोरी. आई थिंक इस समय एक फट का अगर कॉम्ब भी देखें तो वो फेड को रन कर रहे हैं, एंड फेड अभी तक बी एरिया से मूव इन नहीं करे, एंड उसका फायदा DRX प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाया है. जो लर्क वॉल ए शॉट में प्लेस की जाती है उसको बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि उन वॉल्स के थ्रू यहाँ पे सिर्फ एक एबिलिटी है जो वर्कआउट करती है, दैट्स अ ट्रेल ब्लेजर. वो इस समय फट के पास अवेलेबल नहीं है. वो एक छोटा सा लूप होल अगर DRX एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दे, फ्री लैम्प्स कंट्रोल हर राउंड मिलने वाला है उन्हें बिना कोई मेजर यूटिलिटी का इस्तेमाल करें. एंड देन लैम्प्स कंट्रोल अगर इतना इजीली मिल जाएगा, देन द साइड पिंच बहुत आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. बट करेंटली DRX जो डिफॉल्ट रन डाउन कर रही है, वो अगेन उनके जो स्ट्रैट्स हैं उन्हीं के साथ स्टिक कर रहे हैं, जो एक्चुअली हमने प्री मैच शो में भी देखा था. जो प्लेयर्स भी आपस में कह रहे थे कि DRX अपने स्टैट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्टिक करती है, एंड दे जनरली डोंट अडैप्ट और चेंज थिंग्स इन द मैच. बट आई थिंक अभी जो कॉम्प है, क्योंकि फेड है सामने, तो वो चेंजेस करने की जरूरत है. बट ये ज़रूरी पड़ेगी, बिकॉज ये रीसेट का जो कहानी है चलती जा रही है. एक बार भी कुछ एक अच्छे डिसेंट स्ट्रीक की तरफ दोनों टीम नहीं जा पा रही, बिकॉज हर बार रीसेट हो जाते हैं. स्कोर लाइन 3-3 है और हाफ शील्ड के साथ मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द DRX आर इन दिस राउंड. ऑलरेडी बिलोंग का कंट्रोल लिया 2 प्लेयर है, KO एंड द रेस, बस एंड RB. बट वहीं पे QW1 ही इज एंजॉयिंग द मोमेंटम. ही गॉट फर्स्ट फ्रैग. ये थोड़ा ज़रूर चुभने वाला है. पिक ऑफ करा, हुक्का से गए थे and he instantly went back. This is the true first blood. आपने first blood निकाला भी and got back to the safety. Man advantage है. अब असली सवाल है, क्या यहाँ पर फट इस चीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं? फिलहाल के लिए अगेन दे आर प्लेइंग रियल डिफेंसिव. पहला फ्लैग निकाला, परफेक्ट तरीके से खेल रहे हैं. नंबर्स का गेम अब उनके पूरा फेवर में है, सिर्फ ट्रेड्स के ऊपर भी राउंड सिक्योर कर सकते हैं. एंड वहीं अगर इस समय देखा जाए DRX के प्लेयर्स को, वो एक फ्लैश पेंच बनाना जरूर चाहते हैं, बट विदाउट द कंट्रोल. बी के अंदर जैसे आएंगे काफी ज्यादा यूटिल डंप किया जाएगा. कप्तान उसी के फायदा उठाते हुए RB को शट डाउन किया, फाइल का क्रॉस फायर बस को टेक डाउन करता नजर आएगा. एंड ये फास्ट एग्जीक्यूट बाइंड के मैप पे तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है. स्टैक्स एंड मार्को काफी लो HP पे है जरूर, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट इंटू साइड, एंड QW1 विल शट बोथ ऑफ देम डाउन. एक काफी इजी राउंड फट के पास आ जाता हुआ, एंड DRX क्रम्बल करती हुई नजर आ रही है. नो, ये 24 इंच के मॉनिटर पे जो मसल मेमोरी बना रखी है फट के QW1 ने. नाइस शॉट्स. पहला पिक भी निकाला, ही वाज द वन हु इनिशिएटेड द फ्लैग फिश. उसके बाद आखिरी में भी क्लोज भी किया. लाजवाब गेम का प्रदर्शन करा है. बट जो यूटिलिटी डंप करी है बैक ऑफ द साइड, कप्तान को मौका तक नहीं मिला. ही गॉट KO फ्लैश, उसके बाद पेन शेल आया. उनके लिए इट वाज अ नाइटमेयर. बट लकीली उनके टीममेट्स थे वहाँ पे टाइम पर और उन्होंने अच्छे एंगल्स होल्ड कर रखे थे. एंड DRX को दे गॉट ऑफ गार्ड. अब अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था DRX बाइंड पे लाजवाब खेलती है, बट अभी के लिए आई कैन फील इट, आई कैन सी इट कि जो DRX इस मैप पे करना चाहती है, फट उनको डिनाई करती है. एंड आई गेस मोर देन फट, DRX खुद को इस समय सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं. अगेन ट्रेल बेस से आपको इस समय जस्ट शावर कंट्रोल मिला है. यू हैव स्पॉटेड कि कोई भी प्लेयर शायद अवेलेबल नहीं है. इतना इन्फो होने के बाद भी सिर्फ स्टैक्स एक्चुअली पुश कर रहे हैं, एंड एक सोलो प्लेयर हुक्का पिक करने के ट्राई करने के चक्कर में यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो चुके हैं. दैट टू जस्ट ब्रिमस्टोन आउट ऑफ द इक्वेशन, एंड मार्को लर्क वॉल की डाउन होने के बाद साइड एंटर कर रहे थे. एक बहुत ज्यादा अनसिंक्रनाइज्ड टीम यहाँ पे DRX दिख रही है, जो कि
बहुत अजीब है क्योंकि DRX एक ऐसी टीम है जो हर बार हर एक एंगल को डबल स्विंग करते हुए नजर आते हैं। देयर स्ट्रैटेजीज आर जस्ट कि हर एक चीज को डबल स्विंग किया जाए। हर बार यहाँ पे आप कोऑर्डिनेटेड प्लेस देखते हैं, यूटिल यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आती है। करंटली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है उनके लिए। अभी जो मैंने बोला था, आपको खुद नहीं लगा कि यहाँ पर अब इंडिविजुअल ब्रिलियंस की तरफ बढ़ रहे थे? माकू का पुश करना, इट वाज समथिंग वेरी जूसी। अगर वो पुल आउट कर देते, देन वो पहले मॉच को भी पिक ऑफ करते, उसके बाद साइड का डिफेंस भी पेनिट्रेट होता, बहुत सारी चीज होती। हेवन के डिफॉल्ट प्लेयर ने 2 बड़े फ्लैग्स निकाले। ए साइड पे एक ही प्लेयर क्लोज था, दैट वाज वाइपर फ्रॉम द डिफेंडर्स। लकीली ही स्पॉटेड दैट प्लेयर जो उनको बिल्कुल क्रॉस पास करके गया था। सो यहाँ पे DRX दे रिलाइंग हेवीली कि भाई कुछ भी कर ऐसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर दे कैन गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट फॉर नाउ नथिंग इज हैपनिंग। फैलन एक फ्लॉलेस राउंड यहाँ पे सिक्योर करते हुए, एंड फर्ट का जो मैप पिक है एक्चुअली काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। ऑल्दो उनको कुछ ज्यादा अभी तक मेहनत करनी नहीं पड़ी है, वो सिर्फ यहाँ पे अपने लिए काफी पैसिव होल्ड्स बना रहे हैं। एंड जो एक्चुअली पुशेस हैं दैट इज फ्रॉम द QW1 हुका के अंदर पुश करते हैं विद द फेड प्राउलर, जो एक्चुअली DRX नहीं यूज कर रही है। कोई भी यूटिल कॉम्बिनेशन नहीं है किसी प्लेयर के साथ। एंड फर्ट बहुत ज्यादा अपोजिट खेलती नजर आ रही है। दे हैव एवरीथिंग सेटअप, हर एक चीज को बहुत तरीके से स्विंग कर रहे हैं एंड वो बिल्कुल उनके फेवर में भी जा रहा है। नो डाउट यहाँ पे अभी No, I want to ask Spartus, what's your thought on 16:9 versus 4:3? Because अभी कुछ players, अभी जैसे ये जो हमारे players हैं, they're playing on 16:9, but there are certain players we can see जो इस वक्त खेल रहे हैं, okay? यहाँ पे QW1 काफी एग्रेसिव जा चुके हैं, but उनकी अल्टीमेट डिनाई करने की कोशिश अच्छी की थी, but उससे पहले शो स्टॉपर का यूज करा, ऑल्दो कुछ फायदा नहीं निकला, but कितना एग्रेसिव खेल रहा है ये प्लेयर, कोई मौका नहीं देना चाहते। स्टैक्स ही वाज चेकिंग दैट एंगल बट इंस्टेंटली गॉट डिनाइड। अब 2 प्लेयर वॉकिंग करने की कोशिश करेंगे, अच्छे शॉट्स पहला निकाला और दूसरा प्लेयर भी स्पॉट करा। यहाँ पे 2 बड़े प्लेयर्स पिक करने के बाद इंस्टेंटली गोइंग बैक, बिकॉज एडवांटेज देने का कोई मूड नहीं है यहाँ पे फट का। It is just way clean from QW1 right now, and जिस तरीके से यहाँ पे वो like अकेले प्लेयर जाके 2 प्लेयर्स को पिक ऑफ कर रहे हैं एंड कोई जवाब नहीं है DRX के पास। स्टार्टिंग के 3 से 4 राउंड के अंदर हमने जो कोऑर्डिनेटेड प्लेयर्स देखे थे वो तो बिल्कुल गायब से हो चुके हैं एंड दे आर जस्ट लर्किंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड पिक्स जो मिल नहीं रहे हैं। QW1 विल गेट द थर्ड, फैलन विल क्लीन द राउंड। एक और फ्लॉलेस बैक टू बैक दूसरा फ्लॉलेस हमें यहाँ देखने को मिलता था फॉर स्पॉट की तरफ से। एंड DRX को आई गेस इस समय सख्त एक टाइम आउट की जरूरत है। दे नीड टू टॉक अबाउट देमसेल्फ कि क्या यहाँ पे गलत चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से DRX खेल रही है ऐसा हम इनको जनरली खेलते हुए देखते नहीं है। You know, ये मेरी #3 इस वक्त पैसिफिक की #2 को काफी तरीके से हंट करते हुए, कोई जवाब नहीं है। You know, they losing those aim duels और जो भी वो कर रहे हैं सब के अंदर एक ही चीज उनको मिल रही है, हताशा। और ये देखिए जीतने के बावजूद यहाँ टाइम आउट लिया है, बिकॉज मे बी कोच साहब जरूर बताना चाहेंगे अपने प्लेयर्स को कि अभी तक जो चल रहा था मे बी एक अलग लहर से चल रहा था, मे बी एक नई अप्रोच के साथ वो अपनी टीम प्लेयर्स को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कुछ एक नया स्टाइल, नया स्ट्रैट, कुछ एक नया डिफॉल्ट जरूर लेना चाहिए यहाँ पे। पर कुछ तो बातें कर रहे हैं। बहुत कम टीम्स होती हैं जो जीतने के बावजूद राउंड जीतते हुए टाइम आउट्स लेती हैं और प्रोग्रेस करते हैं। डेफिनेटली एंड आई गेस वो उनको कुछ जरूर कोच को कुछ मिला होगा यहाँ पे, जिसके चलते आई गेस वो भी मेजरली QW1 के लिए रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअली हर बार फ्रैग निकालने के जा रहे हैं तो शायद किस राउंड में भारी भी पड़ सकता है। बट वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्ट रेशियो 6:9 और 4:3। आई गेस इन वैलोरेंट इट डजंट मैटर मच, क्योंकि जो प्लेयर मॉडल है वो एक्चुअली 4:3 पे स्ट्रेच आउट नहीं होते हैं। सिर्फ आपका जो क्रॉसहेयर है वो थोड़ा बेटर स्पॉट करने एरियाज के अंदर आ जाता है। लाइक 4:3 में आपको क्रॉसर थोड़ा वाइडन हो जाता है, इसके चलते आप उसको प्लेसमेंट एंड फ्लिक एक्यूरेसी आपको काइंड ऑफ फील होती है कि बढ़ती हुई लग रही है। मुझे भी ऐसा लगता है, बिकॉज FPS के अंदर वी ऑल नो दैट हम सब ने बचपन से कौन सा गेम खेला है, बट आई स्टिल डोंट हैव दैट करेक्ट ग्राउंड्स कि मैं क्या बोल सकूं इस पे। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करा और सबके एक ही रिव्यूज होते हैं कि इट्स पर्सनल प्रेफरेंस, बट देयर वाज अ टाइम जब 4:3 वाज meant to be the superior one, but never mind, वो ये डिस्कशन कभी बाद में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अभी के लिए ये मैच, ये राउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड QW1 14-4 दिस गाय गिविंग सो। और ये दूसरी बार है माकू ने ऐसा कुछ किया है, उन्होंने स्पॉट करा और ये क्रैक्स के लिए बहुत बड़ा सेटअप आएगा कि भाई कैसे कोई साइड के अंदर इतनी आसानी से एंटर कर रहा है, नोबडी इज चेकिंग इट आउट।
फाइनली अपनी वाइपर लॉक का यहाँ पे इस्तेमाल करते नजर आए माकवान। ये फर्स्ट राउंड से करना चाहिए था DRX को, क्योंकि फट के पास जो इनिशिएटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको रेकॉन एबिलिटी या फिर सप्रेस करने वाले हैं, उनके पास कोई ड्रोन एबिलिटी अवेलेबल नहीं है। बट बस ट्रेड ऑफ जरूर करा खुद की एबिलिटी से, एंट्री यहाँ पे जरूर मिल चुका बी साइड का, प्लांट विल गो डाउन बट स्टिल इट इज अ 3v3 सिनेरियो। मौज की जहाँ तक बात की जाए उनके पास अभी भी वाइपर स्पीड अवेलेबल है जो एक्चुअली बहुत मेजर एडवांटेज दे सकता है इस रीटेक के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑर्बिटल स्ट्राइक है पोस्ट प्लान के लिए, बट यहाँ जैसे चाहेंगे जरूर कि उस ऑर्बिटल स्ट्राइक का इस्तेमाल ना करना पड़े एंड वो इस साइड को होल्ड करते रहे बिना मेजर अल्टीमेट का इस्तेमाल किए। आरबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज उनको यहाँ पे कवर कोई नहीं दे रहा है और स्ट्रेट गेम के अंदर DRX के पास एडवांटेज नहीं है, बट ये सब एडवांटेज बनाने की कोशिश है, लड़ने की कोशिश, अच्छा शॉट कनेक्ट करना चाहते थे बट अफसोस टनल से ऊपर चढ़े एंड वन मोर राउंड गोइंग टुवर्ड्स फटवे एंड DRX डिस्पाइट हैविंग दैट इनिशियल एडवांटेज। पहला पिक जब माको ने निकाला था इनिशिएटर KO को मारकर, वो रिटेक जिस तरीके से फटे लिया काफी खूबसूरत, काफी लाजवाब। लाइक अगेन द क्रॉसफायर सेटअप, ये माको को भी अवेयरनेस है कि शार्प पुश आ सकता है, बट उसके बाद जो यहाँ स्विंग करते गए एंड कोई भी प्लेयर DRX का बिलोंग रीजन पे नहीं खेल रहा था। इट वाज जस्ट ऑक्टागन प्लेयर्स एंड 2 प्लेयर बैक साइड खेलते नजर आ रहे थे। DRX छोटी छोटी गलतियां डेफिनेटली बाइनरी डिफेंडर साइडेड मैप है जरूर एंड उसके अंदर अटैकर्स को इतने ज़्यादा राउंड नहीं मिलते हैं, बट द वेट फॉर प्लेइंग द डिफेंडर साइड वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। हर बार यहाँ पे कोई ना कोई काउंटर एग्रेसिव प्लेस बन रहे, चाहे वो हुक्का कंट्रोल को एग्रेसिव तरीके से लेना हो, चाहे शार्स को अंदर 3 प्लेस पुश करते नजर आ रहे हो, DRX को हर बार पिंच करने में कामयाब हो रहे हैं। अब स्पार्टस आपकी तरफ आता हुआ दूसरा सवाल, वी नो कि बहुत सारे लोग अलग अलग क्रॉस एयर यूज करते हैं, बट वैलो के अंदर व्हाई पीपल टेंड टू यूज दैट डॉट और अ बेसिक स्मॉल क्रॉस एयर? बिकॉज वैलोरेंट इज द ओनली FPS जिसमें फर्स्ट बुलेट इनएक्यूरेसी है। जनरली आप स्टैंडिंग स्टिल के अंदर कोई भी FPS के अंदर देखते हैं तो वो फर्स्ट शॉट हमेशा क्रॉस एयर पे ही लैंड करेगा। वैलो बीइंग वन सच गेम जिसमें एक्चुअली आपके पास फर्स्ट बुलेट इन एक्यूरेसी रहती है एंड वो भी राइफल टू राइफल डिपेंड करती है। लाइक द वैंडल हैज 0.25, द फैंटम हैज 0.2 एंड ये फर्स्ट बुलेट इन एक्यूरेसीज जितना छोटा क्रॉसर हो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है ताकि आप एग्जैक्ट उस पिक्सल को फायर कर सकें जिस पर आप करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये पॉइंट तो काफ़ी वैलिड होगा बिकॉज स्प्रे एंड प्रे है नहीं, ट्रेसिंग है नहीं, तो वही है कि स्टार्टिंग के पहले 2 से 3 बुलेट डू द जजमेंट, बट इस राउंड के अंदर DRX अगेन I don't know what's happening with them, एक एक करके सारे प्लेयर गोइंग डाउन, बट यहाँ पे यूटिलिटीज का एक मझधार के अंदर फंसी DRX। प्राउलर से विजन कॉम्प्रोमाइज है, माको अभी भी वाइपर पिट के आसपास खेल रहे हैं मौज की, बट नो, मौज विद अ क्लासिक बर्स्ट सिक्योरिंग 1 मोर राउंड। और बट देखते देखते उन्होंने बाइंड के अंदर एक अच्छा एग्रेसिव हाफ का बंदोबस्त कर लिया। 8 राउंड ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं एंड आई थिंक अब अगला राउंड एक सेव राउंड रहने वाला है। लाइक डेफिनेटली लास्ट राउंड है तो स्क्रैपी बाइज तक पहुंच सकते हैं, स्पेक्टर्स एंड स्टिंगर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इतनी इकोनॉमी नहीं है ऐसे में DRX के पास आफ्टर लूजिंग मल्टीपल राउंड्स। बट द वे फॉर द प्लेइंग, ये रीटेक इतने क्लीन नजर आ रहा है उनकी तरफ से, हर एक जगह को हर बार कोई ना कोई प्लेयर पिंच आउट कर पा रहा है एंड द वाइपर स्पेड, देन उसके बाद यहाँ पे मौज की यूटिलिटीज, कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला कि स्ट्राइक्स RB या फिर जेस्ट कुछ लाइक अपनी ऑर्बिटल स्ट्राइक नल कमांड किसी का इस्तेमाल कर सके, उससे पहले उनको पिक ऑफ कर लिया गया है। नो, कोशिश बड़ी कर रहे हैं यहाँ पे DRX के प्लेयर्स, बट अफसोस कुछ खास नहीं यहाँ पे अपने पास अचीव कर पा रहे, बिकॉज हर डिपार्टमेंट के अंदर फट उनको यहाँ पर अच्छा खासा पनिश करके फॉल बैक करने पे मजबूर कर रही है। फिर से लॉन्ग का कंट्रोल है, 2 प्लेयर RB एंड बज, बट इसके आगे की कहानी उनके फेवर भी थी। यहाँ तक तो वो काफी आराम से पहुंच जाते हैं, बट आगे निकलते वक्त कुछ ना कुछ जरूर होती है। अब डबल पीक कर कि लॉन्ग पे फाइट लेना चाहते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग सेटअप। बस को थोड़ा तरीके से रहना पड़ेगा, मे बी अ पॉप फ्लैश कैन हेल्प देम, बट कप्तान ने भी एक अच्छी पोजीशन ले ली है। अगर उन्होंने रशन करने की कोशिश करी देन दिस गाय कैन गो द मल्टी फ्लैग्स। स्पॉट करा, बस को कोई आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, पेंट शेल आया, पोजीशन से बाहर निकाला, बट नो, एडवांटेज अभी भी फट के फेवर में है। अगेन द टाइमिंग ऑफ द फ्लैश, अगर थोड़ा जल्दी वो फ्लैश मिलता डेफिनेटली यहाँ पे बस वो पिंक शेक भी चलते वैल्यू निकाल के देते, बट
पीक पहले किया, फ्लैश बाद में आया, खामियाजा भी सब बस को एंड पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा क्योंकि एक एक करके जैसे यूका जंप डाउन करेंगे दे विल गेट पिक्ड ऑफ। बाइंड के अंदर बिना डाइसेक्ट किए आप अटैक को बिल्डअप नहीं कर सकते एंड आई थिंक वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द 9-3 स्वैप एंड ये 9-3 स्वैप बहुत क्लीनली फट अपने नाम करता नजर आएगा। जिस तरीके से फट ने ये मैच खेला है इट इज प्योर डिसिप्लिन। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था कि फट की तरफ से हम कह सके कमियां नजर आए। जिस भी जगह को एग्रेस भी कर रहे थे द एग्रेसिव हुक्का और शावर टेक उसमें भी मिनिमम 2 से 3 प्लेयर विद द यूटिलिटी बीइंग अ प्राउलर बीइंग अ फ्लैश हर एक चीज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया है। नो रीड वाज सो परफेक्ट यहाँ पर, मतलब वो जो वाइपर वॉल थी वो हुक्का से लेके ऑक्टागन के लिए थी बस। मतलब वी नो दैट वाइपर वॉल कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसे ही पहले बस को पिक ऑफ करा वाइपर वॉल वाज एक्टिवेटेड, दे इंस्टेंटली डिनाइड द करंट इन्फॉर्मेशन कि भाई अभी तो साइड पे घुसने नहीं देंगे। उन्होंने रीसेट करने का टाइम दिया, रीलोड करा, दे रीपोजिशन देमसेल्फ एंड दे वेंट इन। सब कुछ एक पूरे अच्छे प्लान के साथ। अब मुझे यहाँ पे टैग दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे स्टैट दिख रहे हैं, दोनों कोच अपने प्लेयर्स के साथ बात करते हुए और मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। 9-5 कुछ लिखा है यहाँ पर और मे बी कुछ होगा, इनका प्लान बना रखा होगा। नो डाउट यहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत हुई थी लग नहीं रहा था कि एक ऐसा हाफ देखने को मिलेगा बिकॉज बैक टू बैक राउंड जा रहे थे। आई वाज होपिंग कि काफी क्लोज हाफ होगा, मे बी 7-5 और 6-6, बट 9-3 इट्स अ कर्स इन आवर नेशन। बट वी डोंट नो कि यहाँ पर इस कर्स इस 9-3 स्कोर लाइन से क्या निकलेगा। अभी तक तो कोई टीम इस कर्स को साबित नहीं कर पाई है। जनरली 9-3 स्वैप्स आर लाइक डन एंड डस्टेड गेम्स, ऑल्दो 13-5 13-3 क्लोज चले जाते हैं लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं कर पा रही टीम्स। एंड जो प्रेडिक्शन थी मेरी कि यहाँ पे DRX डोमिनेट करता नजर आएगा बाइंड को, वो बिल्कुल उल्टी लग रही है क्योंकि इस सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो पिस्टल राउंड के अंदर जिस तरीके से अभी भी फट ने ऑन द डिफेंस साइड खेला था काफी स्ट्रॉन्ग नजर आए थे। देयर ट्रेड्स वर जस्ट फैंटास्टिक, द फ्रेंजी यूसेज वाज इम्पेकेबल एंड अगेन वही सेम चीज रही तो DRX के लिए पहला मैच बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। पिस्टल राउंड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं एक चीज पूछूं आपसे, ये मैंने अभी इन गेम जो ब्रांडिंग हो रही थी मास्टर्स टोक्यो की, जून की स्पेलिंग GJUIN कब से हो गई है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये देखना पड़ेगा बिल्कुल देखना पड़ेगा बिकॉज या तो फिर जो हमें सिखाया वो हमेशा से गलत चीज सिखाई है तो राइट गलती नहीं करती है। मे बी अ डिफरेंट लैंग्वेज। हाँ अच्छा ओके, जून इंग्लिश में बोलते हैं JUNE और JUIN एक फ्रेंच वर्ड है, बट ये टोक्यो में हो रहा है। ये अब और कंफ्यूजन है, ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, बट इट्स ओके। बट फाइनल हमारे पीस टाइम के 8 सेकंड्स और हमारे डिफेंडर्स का सेटअप, दे वांट टू प्ले एग्रेसिव बी लॉन्ग और वहीं पे जो अटैकर्स है ए शॉट को अगेन फोकस करके एक बेसिक डिफॉल्ट है। ब्रिमस्टोन अकेले मार्क कर रहे हैं अगर कोई आगे आना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्काई के फ्लैश से वो सीधा इंस्टेंटली ए टेलीपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। हाई चांसेस वही हैं बिकॉज अब 2 प्लेयर्स अगर टेलीपोर्ट करेंगे देन अटैकर्स को लग सकता है कि साइड पे तो बस कोई भी नहीं होगा, बट वहां पे और भी प्लेयर्स इंतजार करते हैं। बट धीरे धीरे दबे पाऊं हमारे अटैकर्स ए शॉट की तरफ। वाइपर वॉल इज ऑन, हटाई विजन, अभी तो कोई स्पॉट नहीं होगा बिकॉज देयर इज ओनली मार्को जो डिफेंडर स्पॉन के राउंड से खेल रहे हैं इस साइड। ही गॉट डिटेक्टेड, प्रेजेंस डिटेक्ट हो चुकी है, ही इज बीन सप्रेस्ड। Oh, they are just down shots now and again अब DRX को ये रीटेक थोड़ा ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला है क्योंकि वो जैसे रोटेट कर रहे थे हुक्का से वापस टेलीपोर्ट यहाँ पे लिया जाएगा। They are trying to float into a side but Zesh already वहाँ पे अवेलेबल है and again एक और पिवट आता फट का, कुछ यहाँ पे ऐसा एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वापस टेलीपोर्ट लिया and they are heading towards a shot for one more time। Although इस बार अगर यहाँ पे देखा जाए मिस्टर फैलिन शार्स का कंट्रोल अपने पास रखा हुआ उन्होंने, वो सिर्फ पैसिव होल्ड कर रहे हैं, शार्स को गिव अप नहीं करना चाहते एंड वेटिंग फॉर द टीम टू जस्ट पिंच आउट फ्रॉम द ए शॉट रीजन। द केओस प्रेस will get broken down। RB को यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल के खेलना पड़ेगा। He has to take down Fallon and he will shut down Fallon। पहला फ्रैग यहाँ पे DRX के फेवर में गया जरूर है ना, 14 सेकंड on the clock and I think स्पाइक डाउन होने से पहले ही प्लेयर्स का ट्रेड ऑफ ये राउंड डिसाइड करता हुआ नजर आने वाला। 8 सेकंड पे स्पाइकर इज टेकिंग एंड स्पाइक को टेक डाउन भी करते नजर आएंगे। Stax is now in a 1v2, the spike will go down and ये 1v2 सिनेरियो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अभी तक QB एंड मॉज जिस तरीके से डबल पीक करते नजर आ रहे हैं, उस डबल पीक को शट डाउन करना काफी चैलेंजिंग रहेगा स्टैक्स के लिए। यहाँ पे प्ले को स्पॉट करा बट स्टैक्स की घोष
प्रिसीजन लैंड करा पाती, उससे पहले मौज का स्प्रे विद द क्लासिक वाज इनफ। उन्होंने मल्टीपल टैप्स करे फास्ट पास और ऐसे में कोई ना कोई गोली जरूर सर पे लग जाती और वही हुआ। पिस्टल राउंड बहुत ज्यादा जरूरी था। डीआरएक्स अगर इस गेम के अंदर कमबैक का सोच भी रही थी देन इस पिस्टल पे काफी कुछ डिपेंड कर रहा था। एक अच्छी रीड थी, स्पाइक का प्लान डिनाई करना चाहते थे बिकॉज वो टाइम से यहाँ पर फट को हराना चाहते थे, बट अफसोस जो जितना भी प्लान था, जितने भी उनके मंसूबे थे, सब कुछ यहाँ पर फेल होते हुए दिखे और पिस्टल राउंड जीतकर फट फिर से उस लीड पे आ चुके हैं जिनकी मतलब नो डन एंड डस्ट, जैसा आपने बोला यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते। बट एक कियो का नाइफ हुक्का पे गया है लॉन्ग साइड, विजन डिनेक्ट किया, बज विद द शेरिफ, गॉट कप्तान डाउन। ये कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा सा डीआरएक्स को स्पेशल बनाती है, बट लेट्स सी फट के पास और क्या चीजें हैं इस राउंड में। Like this is the Pacific special. B-Long को 3 players push करते हुए नजर आता है, gets one down and then instant fallback करा जाता है and they play the retake on it. Although इस सिनेरियो के अंदर एक प्लेयर शार्स के अंदर टेलीपोर्ट भी करता है वो पिंच क्रिएट करने के लिए, बट अभी यहाँ पे DRX all 5 players सिर्फ हेवन के थ्रू अंदर आना चाहते हैं एंड ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये वाइपर वॉल में देखना चाहूँगा माको की कि किस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं टीम को, क्योंकि जितने ही प्लेयर्स हैं फट के वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीप डाउन साइड्स खेला जा रहा है एंड द वेपनरी एडवांटेज इज स्टिल ऑन द साइड ऑफ फट। स्पेक्टर्स इन द लैम्प यू हॉल कंट्रोल बहुत ज़्यादा मदद देने वाला वैल्यू एंड रेक्स स्टैक्स को शट डाउन करेंगे, डैमेज ट्रेड ऑफ किया जाएगा, लेकिन आरबी ट्रेड एक निकालेंगे जरूर, देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे हाफ स्टेक करते हुए नजर आए हैं एंड उसके बाद भी यहाँ पे PW1 विल गेट थर्ड फ्रैग फॉर हिमसेल्फ आउट ऑफ नोवेयर एंड द फोर्थ एज वेल। देखते ही देखते एक राउंड जो काइंड ऑफ लगातार कन्वर्ट कर सकते हैं डीआरएक्स पत्तों की तरह बिखर गई। यू नो प्लान डिसेंट था, डिफ्यूज हो सकता था, बट नो जो यूटिलिटी यूजेज आया, पेन शेल आया, स्पैम आया, पूरी चीजें ये इम्पॉसिबल कर गया था चीजें। और ये पहला पेन शेल था, उसके बाद QW1 गॉट 2 फ्रैग्स, पेन शेल एक्टिवेट हुआ, फिर से पेन शेल यूज करे एंड उसके बाद तो चीजें बिल्कुल मुश्किल हो गई थी यहाँ पे डीआरएक्स के लिए। काफी देर तक वेट करे थे, मार्को ने जो वॉल लगाई थी इट वाज नो प्लान्ड कि भाई हमें क्या अप्रोच लेके जाना है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर जब डिफेंडर स्पॉन से 4 प्लेयर पुश कर रहे थे, अगर उस टाइम पे सीज होता पेट के पास, अब सोचिए कितना डेवास्टेटिंग हो सकता था डिफेंडर्स के लिए। एक तो विजन आपका पूरा साउंड सेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपकी एचपी डिप्लीट हो जाती है, आप स्टिक हो जाते हो एक एओई के अंदर, और उस टाइम पे अगर पेन चलाता मतलब ओ माय गॉड, मतलब मैं अभी सोच के आई कैन फील दैट could have been one of the plays of the tournament, but ऐसा अभी के लिए तो नहीं होता। बट अभी भी यहाँ देखकर देखें एक फुल बाय राउंड है डीआरएक्स के पास, दे आर प्लेइंग पैसिव ऑन द साइड्स, वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फट एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा। फट की अगर बात की जाए एक फाइट एग्जीक्यूट करना जरूर चाहते हैं, लेकिन बस अपने पूरी शॉट पूरा स्प्रे मिस आउट करते नजर आएंगे। डीआरएक्स जेस्ट एंड स्टार्स मिलकर ऑन द साइड को होल्ड करने में कामयाब होते हैं, हुक्का पे गेट शट डाउन एंड स्टार्स फाइनली स्टेप अप करेंगे विद दैट 3K। एक मोमेंट ऑफ रिलीफ जरूर आएगा डीआरएक्स के लिए यहाँ पे, यू नो चेहरों पे मतलब एक मिक्स पोकर फेस वाला एक इमोशन है यहाँ पर, बट अच्छी एम बैटल दी और ये गट्सी प्लेस, हर बार इन गट्सी प्लेस का आउटपुट आना थोड़ा चीजें मुश्किल हो जाती, बट जेस्ट ओ माय गॉड काफी प्यारा। अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी, इनको पता है कि जब तक राउंड 13 नहीं होते तब तक वी आर स्टिल इन द गेम, बट द प्रॉब्लम इज कि अब जो गलती करने की मार्जिन है ना वो नल है। एक गलती फट गेम पॉइंट पे आएगी, एक और गलती एंड वी विल गेट टू द गेम 2। और आपने प्रेडिक्शन दी है कि इट विल बी अ 2-0 इन अ डोमिनेटिंग फैशन इन अ डीआरएक्स फेवर, बट आज फट आपको बिल्कुल काउंटर करने के प्लान से आई है स्पार्टस। Definitely, like DRX का 70% विन रेट है ऑन द मैप ऑफ बाइंड, बहुत डोमिनेट टीम है। पैसिफिक सर्किट में बाइंड खेलना DRX के खिलाफ एक चैलेंज रहा था एंड हर टीम स्ट्रगल भी करते नजर आते हैं, बट आज के दिन जिस तरीके से फट उनको काउंटर कर रही है, इधर वी आर सीइंग अ डिफरेंट DRX जो कुछ बहुत चीजें करना चाहते हैं एंड कुछ भी उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, और इधर वी आर सीइंग अ गीगा ब्रेन फ्रॉम द फर्स्ट साइड। आई गेस इट्स गीगा ब्रेन फ्रॉम फर्स्ट साइड, क्योंकि माको को सिर्फ पेंशल के चलते पिंच आउट करने में कामयाब हुए QB1। अभी के लिए साइड का कंट्रोल प्लांट हो चुका है और अभी तक कोई मोमेंट ऐसा नहीं आया। ट्रेड करा 4v4 का सिचुएशन है, बट पोस्ट प्लांट के अंदर 2 लैम्प खेल रहे हैं, शॉट का भी एक अच्छा कवर है 2 प्लेयर, बट यहाँ पे फॉलन एक डूल जीते हुए स्टैक्स के साथ जेस्टली प्रॉब्लम होगी और एक एक करके यहाँ पे डीआरएक्स के प्लेयर दे गेटिंग हंटेड डाउन। आरपी विद द डबल
बट बैक स्टेप बस को कोई भी मार्कडाउन नहीं कर रहा था। यहाँ पे आधा डिफ्यूज स्टिक करना चाहेंगे, ये स्टिक करा उन्होंने। नाउ ही विल टेक द फाइट, बट यस ही वॉन इट। मतलब भाई यहाँ पर प्योर वाइपर डिप देखने को मिल रहा है। मार्को वाज द फर्स्ट वन टू फॉल। अब डिफेंडर साइड से अगर आपका कंट्रोलर पिक ऑफ हो रहा है, देन साइड कंट्रोल कौन करेगा? DRX, they have no answer to this coolness. और फट आ चुकी है गेम पॉइंट पे, and they're off to a very good start this best of the series के अंदर। वाओ, लाइक 12-4 का हाफ। आई गेस अगर कोई बताता कि मैच से पहले फट इतने डोमिनेटिंग फैशन के अंदर बाइंग के ऊपर खेलने वाला है, आई गेस कोई प्रेडिक्ट नहीं करता या कोई मानता भी नहीं इस चीज़ को। बट एक चीज़ ज़रूर है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ किल लीडर बोर्ड भी देखें जिस तरीके से मैच चल रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रैग्स जो है यहाँ पे सामने QW उनके पास है। लेकिन भाई अगर ऑन दी अपोजिट साइड हम देखें, यहाँ पे DRX के पास मार्को से 3 या 4 किल्स के ऊपर है इस समय। एंड व्हेन ही वाज इन द पैसिफिक सर्किट, मार्को का KD वाज समवेयर अराउंड 2.5 और 2.6। आज सिर्फ 3 से 4 किल्स निकालने में कामयाब हुए हैं ये। अभी तक तो हम इस मार्को, इस वाइपर को अपने टॉप नॉच परफॉर्मेंस पे नहीं देख पाए। बट आई वाज जस्ट चेकिंग द VLR एंड मैंने नोटिस करा, देखा, बिकॉज मैंने कल ही आप लोगों को ज्वाइन करा इस पैनल पे। ये दोनों टीम पीड़ित हैं इविल जीनियसेस की। इविल जीनियसेस ने दोनों बार इन दोनों टीम को 2-0 हराकर लोअर ब्रैकेट्स पे सीड 2 पे पुश करा है। सो दिस इज अ डिसाइडर मैच। इन दोनों में से एक ही टीम होगी जो क्वालिफाई होगी फॉर द फर्दर स्टेजेस। तो दोनों टीम अपना बेस्ट दिखाना चाहती है। बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन सी कि DRX बेस्ट का तो पता नहीं, थोड़ा सा दूर जरूर दिख रही है उस बेस्ट। Definitely, and like just look at the kill boards as well. 3 kills for Marco, 6 for Zest, 9 for Stacks. ये kills आप नहीं जिक्र कर सकते इस मैच में। QW1 को अगर देखें, 23 frags with just 8 deaths. Single handed performance आपसे देखने को मिल रहा है। एंड इतनी फ्रैगिंग बात अगर सामने से आ रही है तो आपको भी उसको काउंटर करना पड़ेगा। बट नाउ वी आर ऑन टू the last round, possibly the last round for this match, but QW yet again brightly किया through that smoke, starts to shut down करने में कामयाब हो चुके हैं, and the only phantom that they had is gone. अब यहाँ पे Zest side anchor करने के लिए आएंगे जरूर, बट मार्को को देखा जाए phantom का snake bite का इस्तेमाल, बट अभी सिर्फ होल्ड करना चाहते हैं साइड को, जो एक्चुअली काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक प्लेयर्स खेल रहे हैं, and the flurk from Mods shut down कर सकते हैं, and Buzz will win that fight. एक फाइट जिसमें मौत के पास कंप्लीट एडवांटेज था, वो फाइट बस जीत के गए हैं यहाँ से। Weird scenes. You know, उम्मीद नहीं थी, because the moment be longer, डूल जो स्टैक्स आ रहे थे, मुझे लगा था कि this is the end, खत्म होने वाला है बाइंड का मैप। बट इस पिक के बाद एक सांस जरूर मिलेगी जीने के लिए। अल्टीमेट काउंटर्स है यहाँ पे डिफेंडर्स के पास। आप देखिए दुनिया भर की हर एक अल्टीमेट है, नलन कमांड है, शो स्टॉपर है, ऑर्बिटल स्ट्राइक है। अगर वो अल्टीमेट यूटिलाइज करी गई देन चीजें जरूर बदल सकती हैं। एक और राउंड के लिए DRX अपने जीवन को की खुशी मना सकते हैं। बट शावर काफी एग्रेसिव खेलते हैं इस बार। ही इज कमिंग बैक, ही स्पॉटेड वन, ही गॉट वन, काउंटर पार्ट को पिक ऑफ करा। ऑर्बिटल स्ट्राइक विल डिलीट द प्लान समहाउ, थोड़ी देर के लिए डिनाई करेंगे, बट वाइपर पिट यहाँ पे स्नेक बाइट आया, डबल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे चल रहे हैं। पॉप फ्लैश करके आगे गए, RG गॉट वन। अब हर चीज एक करके, बट जब तक प्लेयर जिंदा है फट के, मुझे लगता नहीं कि उनको काउंटिंग से बाहर रखना चाहिए। डूल काफी अच्छा हुआ, बट डबल पीक का शिकार बने, और इवन लॉन्ग से भी ही वाज गेटिंग फोकस्ड। 12-5 DRX 7 राउंड पीछे है, 7 राउंड निकालने पड़ेंगे फ्लॉलेस मैनर में, तब जाकर we can get to see the overtime. But I think I'm just like एक आधे राउंड के अंदर वो टाइम आ जाएगा जब फट किसी न किसी पॉइंट को एक्सप्लॉइट कर मैप बैक टू बैक 7 राउंड निकालना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, खासकर जिस तरीके से अभी टीम्स खेल भी रही हैं। एक ऐसा लग नहीं रहा है कि टीम कंसिस्टेंट तरीके से सिमिलर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकती है। ऑल्दो इस राउंड के अंदर भी एक विन कंडीशन यही आई कि सामने मौज अपना गन डुअल हारते हुए नजर आए अगेंस्ट बज, एंड देन वो राउंड फट के हाथ से स्लिप होता हुआ नजर आया। सो अगेन इट इज ऑल कमिंग डाउन टू द गन डुअल्स येट अगेन, वो भी इंडिविजुअल बैटल के ऊपर। कोई भी डबल स्विंग देखने को नहीं मिल रहा था, बट फाइनली DRX के प्लेयर्स डबल शॉट करने के लिए गए जरूर, बट स्टिल बस को अकेला छोड़ के प्लेयर्स फॉल बैक करते नजर आ रहे हैं, जो एक्चुअली बहुत वियर्ड साइड है। बट अगेन एक व्लर्क कॉल का इस्तेमाल, फट इज जस्ट वॉकिंग इनटू द साइड बिना कोई साउंड क्यू दिए, एंड DRX को कोई अवेयरनेस नहीं है चीज के, दे माइट इवन गेट टू द स्पॉन एट दिस मोमेंट। अगर वो कुछ भी करके ये हेवन की प्लेयर को चकमा देंगे ना, मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पे सप्रेस हुए, प्रेजेंस डिटेक्टेड है कि भाई जो दुश्मन है वो लैम्प्स तक पहुंच चुके हैं।
अब उनको और स्पेस नहीं देना। अगर वो गलती से डिफरेंट रिस्पॉन्स चले गए बैक स्टेप करने पे नो सक्सेसफुल हो गए, चीजें मुश्किल होगी। बट आरबी होल्डिंग दैट एंगल, ही गॉट डबल। थोड़ी देर स्लो करना चाहेंगे बट बस सैचल करा, क्रैक्स, ही इज नॉट मिसिंग वन, ही गॉट वन बट गॉट ट्रेडेड। आखिरी प्लेयर फॉलन फ्रॉम द शावर्स, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इनको भी यहाँ पे पिक कर दिया जाएगा। अगर इस प्लेयर ने यहाँ से राउंड निकाला, साउंड मिल गई है उनकी कि प्लेयर की मौजूदगी है यहाँ पर। मात्र 18% HP के साथ ये प्लेयर इस राउंड के अंदर पनपता हुआ ऑन कर सिग्नेचर एबिलिटी है, आप अब्यूज कर सकते हैं, स्पैम कर सकते हैं। बट 24 सेकेंड स्पाइक प्लांट करने के लिए स्पाइक का कंट्रोल चाहिए, प्लांट करना है। ओके आई थिंक यहाँ पे इस राउंड के अंदर पिक तो होने वाले हैं, पिक तो होने वाले हैं वैसे भी, बिकॉज मरेंगे अल्टीमेट तो आ ही जाएगी। बट कहते हैं ना थोड़ा सा परेशान करने की उम्मीद थी। Like वो ऑफ करना क्या चाहते थे ऑफ लेके भाई, जस्ट लाइक काइंड ऑफ वेस्टिंग द टाइम देयर। मे बी शायद आया होगा कोई प्लेयर स्विंग करे व्हेन ही इज ट्राइंग टू पिक अप द ऑफ, एक फ्री फ्रैग मिले, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ऑल जस्ट उम्मीदें लगाए बैठे हैं उस चीज़ से। बट अभी के लिए देखें 12 का स्कोर लाइन जरूर हो चुका है, 2 बैक टू बैक राउंड्स काफ़ी देर बाद सही, बट DRX अपने नाम करता नजर आएगा। बट इस बार अगर फट की तरफ नजर डाले, दे हैव ऑल द अल्टीमेट्स दे नीड एंड QW1 भी सिर्फ एक अल्ट पॉइंट दूर है अपने शो स्टॉपर से, जो एक्चुअली उनको बहुत इजीली किसी भी साइड से मिल सकता है। बट अभी के लिए अगर देखा जाए एक एग्रेसिव हिट ए शॉट का देखने को मिल रहा फ्रॉम द साइड ऑफ बस, ही विल पॉप द शो स्टॉपर आउट, लेकिन इंस्टेंट नल कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा एंड उनके शो स्टॉपर को वहां ही खत्म करते हुए नजर आएंगे। ट्रेड्स ले जाते हुए अल्टीमेट्स के, एंड नाउ दे आर ऑल बैक विद रिस्पॉन्स एंड वापस से एक रीसेट किया जाएगा इस पूरे डिफॉल्ट को। I feel very bad. I feel very biased कि यहाँ पर एक अल्टीमेट को एक सिग्नेचर एबिलिटी कैंसिल कर देती है। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज अल्टीमेट फार्म करना बड़ा मुश्किल है। अल्टीमेट को यूज़ करो और एक अच्छा वो 0 पॉइंट आता है, चीज़ तो बदल जाती है। बस की जो भी एडवांटेज था वेस्ट हो गई। अभी देखिए जस्ट ही इज टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज, पेन शेल से यहाँ पे खत्म होते हुए गए एंड इट वाज सो प्रिसाइज। आई थिंक दिस इज अ 4th और 5th फ्रैग फ्रॉम द QW1 कि वो स्पेन शेल से साइड का अच्छा खासा डिफेंस फेल कर देते हैं। अभी तक ए शॉट का अच्छा खासा कंट्रोल है, देन अब्यूज इट। ये देखिए एक राउंड के अंदर 2 शो स्टॉपर डिनाई हुई है भाई। द केयर डोमिनेशन, बट मार्को फाइनली स्टेपिंग अप। 3 किल्स पे थे, लाइक 15 राउंड तक सिर्फ 3 फ्रैग्स ऊपर ये प्लेयर बैठा था। अब बैक टू बैक 2 राउंड्स के अंदर उसे डबल फ्रैग्स यहाँ पे निकाल चुके हैं। नाउ प्लेयर को रिवाइव भी करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं क्रैक्स को देखे पॉप फ्लैश किया, स्विंग आउट करना चाहते हैं, आज भी शटडाउन करते हुए नजर आने वाले हैं। एक स्ट्राइक से काफी अच्छा पीक विल टेक द प्लेस डाउन। रेक्स को शटडाउन करने के बाद अपनी टीम के लिए फिर से यह उम्मीद जताते हुए 7वां राउंड DRX ऑन बोर्ड। अब अगर DRS ने 12 कर लिए राउंड, देन यस अगला राउंड जो अगला मैप होगा उसके अंदर वो मेंटल रीसेट करके वापस आना, इट विल बी अ वेरी टफ जॉब फॉर फट। बिकॉज ऐसे टाइम पे इन गेम आउट गेम को बिल्कुल कहते हैं ना एक मोटिवेटेड फीलिंग होनी चाहिए। बट यहाँ पे अभी के लिए जिस तरीके से DRX हर राउंड के अंदर टेक डाउन करिए, इट इज़ वेरी क्लोज। किसी भी साइड को ऑलरेडी विनर डिक्लेयर करना इट इज़ नॉट सो ईजी। आई गेस अब यहाँ पे एक और चीज़ें DRX को समझने की ज़रूरत है कि डाइसेस का एरिया खेलना पाप है इस समय। जब भी आप QW1 ए साइड हिट कर रहे हो, हर बार एक लाइनअप आता है। पिछली बार मार्को को पिक ऑफ किया था, एंड उसके अगले राउंड के अंदर यहाँ पे जैश को पिक करते नजर आए। इस बार ऑल दो यहाँ पे वीकर बाइज हैं तो एक एडवांटेज जरूर रहेगा फट के बाद, बट वो जो डाइस एरिया है शार्ड्स के जस्ट बाहर, वहाँ पे प्लेयर्स का जो क्रॉस फायर है उसको सिर्फ एक पिंशल के चलते यहाँ तोड़ पा रहे हैं। सो आई गेस वो थोड़े से ऑल्ट्रेशन की जरूरत है ऑन दैट ए साइड होल्ड, एंड वो ऑल्ट्रेशन इस राउंड में तो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार भी अगर देखें तो आरबी सिमिलर पोजीशन में खेल रहे हैं। जो अगर फुल बाय राउंड होता फट का तो शायद वो पेन शेल से उनको भी टेक डाउन कर सकते थे। ये बात आपने अच्छी बोली कि जब से बाइंड के अंदर चेंज आया दैट ग्रेनाइट एरिया बॉक्स, वहाँ पर लोगों ने खेलना चालू कर दिया हुआ। बैक इवन एक बैक एंगल पे भी एक छोटा सा लिफ्ट पोडियम बना रखा है जिसपे आप खड़े होके ए शॉट का एक अच्छा हेड शॉट एंगल देख सकते हैं। उसको आप लिटरली एक पेन शेल से बिल्कुल जोन आउट कर सकते हैं, फोर्स सकते हैं टू गो आउट। यहाँ पे फॉलन वर्सेस स्टैक्स के बाद फैंटम थी, बट फर्क की बात नहीं है। क्लोज रेंज के अंदर स्टिंगर डू अ बेटर जॉब, रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा, एक पंच हो जाए देन रेस्ट एवरीथिंग इज जोक। ये पेंचल किया, कप्तान को पिक करना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। बस ही इज नॉट मिसिंग एनी स्प्रे एंड द लास्ट प्लेयर फ्रॉम द फर्ट इज एन ऑक्टेगन। एंड कुछ सेकंड की बात है, इनको भी अपनी फेट से मिलवाने का जो जॉब है मार्को ने ले रहा। एंड ही विल शट हिम डाउन अगेन। 8वां राउंड क्या एक्चुअली हम एक ओवर टाइम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि
अब एक अलग डिसिप्लिन यहाँ दिख रहा है डीआरएक्स की तरफ से, ऑल्दो एक वीकर बाय था ये राउंड में, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ जो खेल रहे हैं, जो यहाँ पे एम डुअल्स जीत रहे हैं, जिस तरीके से अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, अपने एंगल्स को सेटअप कर रखा है, काफी अच्छी नजर आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग कुछ राउंड में मिसिंग था डीआरएस साइड से, वो चीजें धीरे धीरे करके फिक्स हो रही हैं। नो डाउट, ये बात तो मैं बिल्कुल मानना चाहूँगा, बिकॉज मे बी अटैक साइड के अंदर DRX was not feeling that confident and everything they were trying, they were getting just decimated, but defenders में जब से आए हैं, even फट भी अब हमें थोड़ा सा चोक करते हुए दिख रही है, बिकॉज काफ़ी पहले उनके पास वो मैच पॉइंट एडवांटेज थी, बट फाइनली नो फॉलन काफ़ी अच्छा डिफॉल्ट दे रखा था, बट अच्छा पॉप फ्लैश कर लॉन्ग का एरिया पूरा उनके हाथों से छीना। स्पाइक भी इस वक्त ऑलमोस्ट अटैकर स्पॉन के आसपास है। 3 प्लेयर ए खेल रहे हैं, 2 प्लेयर बी खेल रहे हैं, और हमने काफ़ी बड़े टूर्नामेंट्स में देखा है कि यूजली बी आजकल ज़्यादा डिफेंडर्स है रिलायंट खेलते हैं। सीकर्स ने स्पॉट करा कि इस वक्त कहाँ पर प्लेयर्स जिंदा हैं और कैसे उनको रिपोजिशन करना चाहिए, बट 4 के 4 प्लेयर वेटिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ए शॉट पे रश करना चाहेंगे, बट थोड़ी देर के लिए QW1 वेंट फॉर द लॉन्ग एरिया जस्ट टू चेक कि अगर कोई पीछे से आ रहा है, सो दैट वंस दे गो ए शॉट कोई फॉल बैक करने का मौका ना हो। एंड अभी भी अगर यहाँ देखा जाए वाइपर्स पे एक मेन विन कंडीशन रहने वाली है मौज की तरफ से, अगर साइड कंट्रोल मिलता है, बट वो साइड कंट्रोल मिलने से पहले बज फैंडम के साथ डेसिमेट करते नजर आएंगे, एंड DRX 9वां राउंड जीतता हुआ नजर आएगा। एंड अगेन एक और फुल बाय राउंड यहाँ पे फटका था, वो उसको हार चुका था, फिर से अब उनको एक सेव राउंड यहाँ पे खेलना पड़ेगा, जो एटलीस्ट ऑन पेपर DRX को फेवर करेगा, तो हम एक 12-10 के स्कोर लाइन की तरफ बढ़ सकते हैं। Why not? यहाँ पर बहुत सारे चांसेस, बिकॉज इस राउंड में हारने के बाद भी यू नो दे हैव ऑलरेडी हिट द आपका लूजर बोनस सैचुरेशन। हर राउंड हारने पे उनको 2900 क्रेडिट्स ही मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल गो फॉर द डिसेंट वन, आधी शील्ड लेकर वैंडल वगैरह ले सकते हैं बनो, बट दे गोइंग फॉर द वाइजर डिसीजन। इस राउंड के अंदर शेरिफ और फ्रेंजी के साथ उतरेंगे, एंड ये वेपन्स भी एक कहते हैं ना क्लच सिचुएशन के अंदर काफ़ी आइकॉनिक प्रूव हो सकते हैं इफ द प्रिसीजन इज हाई एंड योर टाइमिंग इज गुड। बट वहीं पर जो हमारे डिफेंडर्स हैं, दे आर नॉट विलिंग टू मेक एनी मिस्टेक। बस चेंजिंग हिज पोजीशन, स्प्रे करा, डैमेज देने की कोशिश की, बट यहाँ पे बस को ध्यान देना पड़ेगा, स्टेइंग इन ओपन। ये शुरुआत हो चुकी है उस गलती की। अगेन लाइक आरबी फर्स्ट ट्रैक यहाँ पे जरूर निकाल चुका है, अभी भी पॉप फ्लैश किया, लेकिन पोजीशनिंग QB1 की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आरबी को शट डाउन करेंगे, एंड वाइपर्स पे यहाँ पे अवेलेबल है नहीं इनके पास, तो उस चीज का कहीं ना कहीं खामियाजा रहेगा, क्योंकि मौज अगर यहाँ पे अलाइव रहते तो ये बहुत इजीली कन्वर्टेबल राउंड हो जाता था फट के लिए, बट QB1 बिल्कुल अवेयर नहीं है। जेस्ट पुश डाउन जरूर कर रहे हैं उन्हें, एंड जेस्ट अगर यहाँ का प्री फायर भी करते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं, बट नाउ द पिंच इज स्टिल अवेलेबल फॉर टीम फट, एंड ये 3-4 का रीटेक करना DRX के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पर शावर से अभी भी इस वेटिंग, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे HP नहीं है QW1 की, पूरी अटेंशन जब साइड के अंदर होगी, जब दिस प्लेयर स्टार्ट रोटेटिंग। ऑलरेडी लॉन्ग पे आ चुकी है यहाँ पे माको कॉट 1, अभी भी क्रॉस फायर है, लैम्प और शॉट किया जाता है, यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है, बट कप्तान ये बंद बेसिक आपकी शरीर तेज से वो राउंड निकालते हुए, और इसी के साथ मुझे लगा नहीं था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि गेम जाएगा ओवर टाइम, बट अब मेरिट पिस्टल के साथ फट ने बाइंड मैप पर DRX को हरा दिया। ऑल्दो एक डोमिनेटिंग फैशन हो सकता था, बट DRX ने भी रिटेलिएशन दिखाई, रेजिस्टेंस दिखाई, इन द एंड इट वाज FUT अपने मैप पिक पर मोहर लगाते हुए। मतलब मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये बेस्ट ऑफ 3 सीरीज काफी ज्यादा मजेदार रहेगी, बिकॉज अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, सेकेंड मैप के अंदर हमें DRX भी अलग ही लय पे दिखेगी। डेफिनेटली, एंड दैट टू फ्रैक्चर का मैप होने वाला, तो और ज्यादा एग्रेसिव प्लेज एंड एग्रेसिव स्टांस के अंदर प्लेयर नजर आएंगे, एंड DRX कहीं ना कहीं हमें नियॉन भी देखने को नजर आ सकती है उनकी साइड से, बट एटलीस्ट ऑन द मैप ऑफ वाइन एक अनएक्सपेक्टेड से एंडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली, क्योंकि 50 राउंड के साथ मैप पॉइंट सिक्योर करना जनरली हम ऐसा देखते नहीं है, जो अभी देखने को मिला है। सिर्फ फ्रेंड्स एंड शेरिफ्स थी उनके पास, एंड उसके चलते भी अपनी टीम के लिए बहुत क्रूशियल राउंड निकाल के दिया, एंड इट वाज जस्ट QB1 फैशन
जिस तरीके से खुद को रिपोजिशन किया अपनी फैंटम अपग्रेड करने के बाद, देन शार्प पिंच को आखिरी सेकंड तक मेंटेन करने में कामयाब रहे, एंड वो शार्प पिंच एक्चुअली वैल्यू दिलाता हुआ भी नजर आया क्योंकि स्टैक्स वहां से स्टिक नहीं करते थे स्पाइक को. दैट प्लेयर्स केम इन एंड अगेन एक बहुत अच्छा राउंड यहाँ पे फट की तरफ से हमें देखने को मिला. बट ऑल इन ऑल जिस तरीके से DRX ने आखिरी कुछ राउंड खेले थे वो ग्लिम्पसेस ऑफ ग्रेटनेस नजर जरूर आए. वो पुरानी DRX हमें नजर जरूर आई थी. बट यही चीजें अगर अगले मैप में कंसिस्टेंसी से खेलेंगे तो शायद हम इस सीरीज बेस्ट ऑफ सीरीज को आखिरी मैप तो देख सकते हैं. No, why not? And we want to see that. जब आपने एक बार याद है बीच मैप के अंदर you talked about the score guard. आपने बोला जैसे कि 6 फ्रैग है, उससे जस्ट एक राउंड पहले जैसे 3 फ्रैग निकाले थे. इसका मतलब नो उससे पहले मात्र 3 फ्रैग्स में वो भी बैठे हुए थे. So things are not good for DRX on the attacker side. मतलब हमने देखा है कि वो स्ट्रगल कर रहे थे और आई होप कि सेकंड मैप के अंदर जब वो आएंगे देन अपना बेस्ट जरूर दिखा पाएंगे. डेफिनेटली. एंड सेकंड मैप से जाने से पहले चलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ. Have you ever asked yourself after a bad game, what am I missing? Or sought help from impatient friends? Or browsed desperately for answers that only bring up more questions? Your self-doubting days are over with Discovery, the first game-focused AI. Discovery is trained on the world's leading esports athletes to be your everyday personal coach. That's right, Discovery can help you improve your gameplay by giving you tips and strategies to take your game to the next level. Get started at aimlabs.com/discovery. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
Foot, they just keep winning. I am standing by here with Gaius, their coach, and Scala, who's going to be doing the translation. Guys, yesterday you qualified for Champions, you won your game. Today you are winning against DRX. What's happening? Why are you guys winning so much? Momentum aldığımızda peş peşe galibiyetler gelebiliyor ama galibiyetlerin başı gelmediği zaman takım geriye doğru düşebiliyor. Bence önemlisi Attacking Soul'a karşı sonradan gelinen alınan ve galibiyetti. Bence ilk map'in kilidi buydu ama önemli olan maçı kazanmak. Champions için de mutluyuz. When you gain the momentum, it is easy to gain consecutive victories. But when you cannot enter the game, when you cannot gain the first victory, it becomes like it goes downwards. And the key to the victory today was getting that win streak yesterday against ASC. If we can keep this up, we can have more victories. Well, I hope you do keep it up. Thank you very much, guys, and let's see if Fuck can do it. Right now, they're looking pretty solid, despite the fact that that was a 13-9 result and DRX managed to bring it back a little bit. We still have to address the elephant in the room, that it was kind of a stomping for a good chunk of that game. So, if anything, Foot let their feet off of their foot off the pedal just a little bit. I'm going to launch a notebook at you to keep this up. I know that everyone at home hates me for all these puns, but I just genuinely want you all to know. Get them all out your system at once. Foot stepped on them. Yes. It's a level of like, it is endearing a little. I've been on this earth for 35 years. I have plenty more puns to come. It is endearing a little bit. It's like, if you ever watch like LeBron when he's like doing Taco Tuesday and he's like going around the house filming his kids and they're all embarrassed. Yeah, it's like, it's kind of like that. And I do live to just constantly embarrass you guys. Yeah. So it all works out. But let's go ahead and jump into the breakdown of what we saw there. And what we saw was essentially just a Foot team that felt real confident, was able to take any battles that they want. Kiwi, an incredible performance out of him as well. 28 kills dropped. You love to see it. Yeah, also 8-0 in first kill to first death. Dropping, I mean, huge amounts of ACS. With 1.3 KPR, my man is dominating. Yeah. You just, when the Foot players as well, when they get going, especially these Turkish players, they've said in the past in interviews, very momentum-based. They said it just then in the coaching interview. Absolutely. When they get the ball rolling, they feel like they can just win these series out as well. And that's going to be an important factor as well when they continue that. But I can't stress enough how disappointed I am with DRX as well. I think just overall with their performance. Yes, they brought it back and made it respectable on paper, but the first half was an absolute flattening, and it was only through sheer heroics that they were able to win it out. Zest as well as the individual that we're watching right now. But, man, I just wonder, where would this team be at if they actually just stuck to a consistent roster and were getting consistent practice? At least he was getting some practice in the aim lab shoot around. I mean, he's practicing on bind, isn't he? He's popping heads all over. This is the best practice that Zest has got. Yeah, just running and gutted. Right, yeah, because that's what we... looks like he's this is what he's doing while Foxy9 is in scrims. This is what he's up to while Foxy9's in. Oh, man, well, there's your aim lab shoot around. By the way, make sure you scan that QR code, get a cheeky little discount for you for aim labs as well. But, yeah, you know, yes, I am disappointed. Disappointed because I said it with my whole chest that it was going to be a 2-0 for DRX, and I stand by it. Still stand by it. Still think there's a chance. Regardless, though, I know that's not how time works. It is going to be Foot that takes the win, 13-9. We now set our sights to Fracture here. And Josh, as we get ready for this, I can't help but wonder how the compositions are going to play out, and also Neon. Yeah, so both teams have liked to run Neon recently, and DRX are going to go for all-out aggression again. They're going to start on the defense, so, you know, Foot have got an opportunity to turn up the tempo early. But when the sides swap, I think you're going to see the same thing. DRX, all-out execs, and Foot demonstrated with those showers pushes an ability to understand ways of playing against it. Taking map control, flanking on the retakes, denying positioning from Mako. They have the ideas that they need to win on Fracture. I like DRX can get back into this, but man, they look so out of it. Yeah, they really do. I think that they have enough structure when they play on Fracture with Zestin and the comp that they play. It's solid enough that it does take a bit of, you know, homework being done by the opposition to break it. I'm talking about their post-plant setups. When they're on halls, B main, that kind of area of the map. If you do your homework and know how to disrupt it by taking that B main tree control, it can be brutal for them. Well, let's go ahead and get a little bit of insight there from Termi as we had Yinsu standing by. Not an easy start for DRX here, and I'm joined by their coach, Termi. Termi, you played against Foot on map 1. Going into map 2, what do you think is one thing that you need to look out for in order for your team to win? 일단 저희는
투 e스포츠에 대해서 분석을 이미 다 완료한 상태고 바인드 같은 경우는 저희의 포스트 플랜트에서 사소한 실수 때문에 좀 스코어가 많이 벌어졌던 것 같고 프랙처에서는 이미 뭐 저희가 다 준비가 돼 있기 때문에 하던 대로 해서 잘 이겨보도록 하겠습니다. We're done analyzing football esports. We came in here ready and well prepared to go. I just think that on Bind, a lot of mistakes were made during the post plan. So we'll make sure to perfect our game going into Fracture, and we should be good. Thank you very much, Jen, for translating, and thank you, Temi, for joining me. Let's see if DRX can turn this around. Bren. We need to audit this man's finances because that answer I'm not pleased with at all. I think the fact that he thinks the problem is in the post plant, they weren't even able to get into the post plant on their attack side as well. When they were in the post plant, they have good protocols when they want to set it up and delay, like Mako and Zest with their mollies and whatnot, but they're struggling to even get into that in the first place. Yeah, and the way that he's answering that, it just sounds so one-dimensional, man. Okay, so take a look at the agent selected, Neon on both sides. That's going to be interesting. Yeah, it is. It is going to be quite fascinating to see how this plays out here. And but I'm curious if RB has what it takes to go toe-to-toe in those one-on-ones against Kiwi. Because Kiwi was on fire. Yo, we are back. This is VALORANT Champions Tour 2023 Master Tokyo. और स्पार्टस क्या ही गेम नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं. डेफिनेटली एंड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाइंड पे इतना वन साइडेड डोमिनेशन दिखाएगा बट अगर वो वन साइड डोमिनेशन कुछ हद तक रिटेलिएट एंड रेजिस्ट करते हुए नजर आए. 13-10 का स्कोर लाइन गया जरूर था बाइंड में इन द फेवर ऑफ फट, बट नाउ वी आर ऑन टू मैप नंबर 2. इट इज द मैप ऑफ फ्रैक्चर जो एक्चुअली डीआरएक्स का पिक है एंड उस पिक के ऊपर हमें यहाँ नियॉन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है. एंड लेट्स सी नियॉन के साथ क्या कमाल दिखा पाते हैं डीआरएक्स, क्योंकि जनरली नियॉन इतना ज्यादा यूज होता नहीं है फ्रैक्चर के मैप में. नियॉन बहुत लिमिटेड मैप्स के अंदर अभी एक्टिवेटेड है. सो फ्रैक्चर वन ऑफ दोस मैप जहां पर अगर आपके पास मोमेंटम है, साइड कंट्रोल काफी जल्दी अगर आपको चाहिए, देन नियॉन इज समथिंग जिसकी तरफ आप जा सकते हैं. बिकॉज विद द फास्ट लेन, विद द अल्टीमेट, विद द कंकशन बोल्ट्स चीजें जरूर बदल जाती हैं. लेट्स सी, अभी हमारे इंटरव्यू में भी यही हुआ कि क्या डीआरएक्स अब इन चीज़ों को टर्न अप कर सकती है. बिकॉज दिस मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत कुछ अभी भी रिलाई करता है. स्पॉट अगर चाहिए प्लेऑफ्स में, उनको यहाँ से कम बैक करना पड़ेगा. बट अगर फट उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया है, एक और अपसेट राउंड में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पे अब डीआरएक्स चीज़ों को चेंज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइंड के अंदर जो आखिरी कुछ राउंड थे तो डीआरएक्स ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे फॉर्म रीगेन करना शुरू कर रही है, बट राउंड इतने ज़्यादा थे नहीं उनके पास कि प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर पाए हैं. लेट्स सी कि फ्रैक्चर के अंदर आगाज किस तरीके से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अगेन इट इज ऑल डाउन द पिस्टल राउंड्स. पिस्टल राउंड कहीं ना कहीं पूरा मोमेंटम सेट करता है गेम का एंड फट इज एक्चुअली ऑन द अटैक. एंड इस बार अगर देखा जाए तो 0 पॉइंट बिल्कुल आई गेस बी मेन के ऊपर यहाँ पे. ओके, इट इज फॉर द ए मेन रीजन. ए मेन पे लैंड किया जाएगा लेट, इंफॉर्मेशन मिल चुका है, बट इट इज ऑल जस्ट टू सेल द फेक. किल जाएगी यूटिलिटीज कंप्लीटली ऑन द बी साइड एंड QB1 साइड एंटर करते हुए नजर आने वाला है. एंड काफी क्लीन हिट यहाँ देखने को मिलता है. कोई भी प्लेयर साइड को होल्ड नहीं कर रहा था एंड एक फ्री साइड एग्जीक्यूट 14-40 यहाँ पे देखने को मिलेगा. अब जहाँ से डीआरएक्स पुश कर रही है वहाँ पे साइफर की ट्रिप वेट करी थी, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल चुकी होगी. और एक साइड पे आप इतना कहते हैं ना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रख सकते हैं, हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते. रैक्स ही वाज होल्डिंग एन एंगल बट गॉट स्टन, गॉट बैक टू द साइड. अपनी टीम के साथ यूनाइट करेंगे और डबल पीक का शिकार हो सकते हैं. आरबी विद अ फ्रेंजी गॉट वन, गॉट हेडेड. मार्को भी आएंगे और कैंटीन एरिया से अपनी टीम को एडवांटेज जरूर दिला के ले जाएंगे. डेफिनेटली. एंड मॉज यहाँ पे एक और फ्रैग निकालते हुए स्टैट्स और ट्रेड निकालते नजर जरूर आने वाले हैं यहाँ पे. बट फैलिक एंड कैप्टन स्टिल एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे स्पाइक को डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो चुका था. रीटेक बिल्कुल सक्सेसफुल डिस्पाइट द प्ले. तो 2 प्लेयर स्टैंड कर रहे थे, उनको भी वाइप आउट किया जाएगा. एंड पहला राउंड बहुत ईजिली यहाँ पे रीटेक करना जाएगा डीआरएक्स. एंड काफी देर बाद से, लेकिन वो एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड प्लेस देखने को मिल रहे हैं हमें इनके साथ. मैंने बाइंड के मैप में भी डीआरएक्स के चेहरे पे शिकस्त नहीं देखी. ऐसा कि वो टेंशन में थे. दे वर स्माइलिंग, हैविंग अ गिगल कि भाई हो रहा है, होने दो, देख लेंगे. और इस राउंड में भी चेहरे पे देखिए, और मे बी दे आर वेरी ऑफ टू शो द एक्सप्रेशंस. बिकॉज आई थिंक इट्स मार्को जो 24 घंटे मुस्कुराने का काम कर सकता है. एग्जैक्टली. एंड लाइक वो बहुत ज़्यादा काम प्लेयर है, ऑल्दो वो परफॉर्मेंस जो है वो आज के दिन नहीं दिख रहा, बट जर्नली इज वेरी चिल्ड आउट. एंड अभी भी अगर यहाँ देखा जाए तो जिस तरीके से राउंड स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, वो अगेन बिल्कुल पासिव होल्ड है यहाँ पे डीआरएस की तरफ से. कोई भी अर्ली इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना चाहते. साइड्स के ऊपर क्रॉस फायर्स है.
आरबी की अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ए में इनको पुश ज़रूर किया है, बट ही इज़ जस्ट प्लेइंग ऑन द कॉन्टैक्ट, सिर्फ जिगल पिक कर रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट मिलेगा फॉल्ट लाइन विल हेल्प हिम आउट, बट द फर्ड अटैक इज जस्ट राइट नाउ कलेक्टिंग द अल्टॉप्स। अल्टीमेट को थोड़ा फार्म करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क्लासिक राउंड के अंदर तो विक्ट्री उन्हें ही पता है कि निकालना इतना आसान नहीं होगा। सो व्हाई नॉट जस्ट कलेक्ट द अल्ट ऑफ पॉइंट्स, राउंड को फार्म किया जाए, एंड अगर हो सके तो एक दो पिक्स भी यहाँ पे निकालते हुए नजर आए। द साइड हिट विल गो इन, स्टन, कंकर्स, मोलोटॉव, एवरीथिंग जस्ट कम आउट इनटू प्ले, क्रैक्स भी शट डाउन होते नजर आएंगे। बस सोलो साइड होल्ड करेंगे काफी कंफर्टेबल तरीके से। You know, लास्ट मैप के अंदर बस ही वाज प्लेइंग रेज और सीधा रोल में एक्सट्रीम स्विच, गोइंग फ्रॉम डुएलिस्ट टू सेंटिनल एंड स्टिल ओनिंग इज अ बिग कॉल। और मैं दाद दूंगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में भी एक सेकंड पे भी ऑल बैक करने पे ना, बट बस विद अ स्क्वाड किल लाजवाब। और अब किल जॉय के पास 4 किल्स आएंगे, और अगर अल्टीमेट पॉइंट भी कंट्रोल में आ जाए तो काफी जल्दी हमें लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली ये क्वाड्रा किल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज अगेन एज यू सेड लॉकडाउन अब यहाँ साइड्स में आ चुका है। 1-2 फ्रैग्स और मिलेंगे, एंड इफ यू जस्ट लुक एट इट, सिर्फ 2 फ्रैग्स दूर है अपने लॉकडाउन से, जो एक्चुअली काफ़ी इजीली अटेनेबल है अगर यहाँ पे आर्केड के लिए जाते हैं। बट इट इज DRX जो फ्रैक्चर के मैप को बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से खेलते हैं। जनरली हम देखते हैं टीम्स को बहुत प्रोएक्टिवनेस दिखाई जाती है फ्रैक्चर के ऊपर, बहुत ज़्यादा साइड्स कंट्रोल किए जाते हैं, बट DRX इज वन सच टीम जो एक्चुअली सिर्फ क्रॉस फाइट्स पर रिलाई करते हैं। इस बार भी वही चीज़ें करते नजर आ रहे हैं। एक डीप एम इन पुश जहाँ पे सिर्फ नियॉन जिगल पिक करने वाले हैं प्लेयर ऑफ आरबी, जैसे ही कॉन्टैक्ट मिलेगा फॉल्ट लाइन इज वेटिंग ऑन द हैंड्स ऑफ स्टैक्स, बट अभी के लिए फट से फेक सेल करके वापस से बेट की तरफ बढ़ रही है। यू नो, उन्होंने ट्राई ज़रूर करा था, बट वहाँ पे शायद स्मोक की वजह से और जो एबिलिटी ट्रेड हो रही थी उनको ये पता चल गया था कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर हैं। अब टरेट है, वो बी मेन का प्रेजेंस ज़रूर दिखा देंगे। बस को इस वक्त ओवर पीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस को कॉन्टैक्ट पे खेलना है टरेट के। आफ्टर शॉक आया बिल्कुल, सबसे कोने में जो कमी सिचुएशन है वहाँ से बस को फॉल बैक करने पे मजबूर करा, बट अभी भी एक क्रॉस फायर मजबूर टिका हुआ है। आर्केड से कोई भी नहीं आ रहा है, वहाँ पे एक अलार्म बॉट और एक नैनो स्टॉर्म ग्रेनेड तैनात रखा है बज ने, काफ़ी अच्छा डिफेंस। और अब फ्लैंक पे जा रहे हैं मॉश, ही गॉट 1 स्टैक्स, ये मैं नहीं उम्मीद कर रहा था। स्पॉटेड 1, बज कैन गेट 1 बट नो ही गॉट फ्लैश। अब उनके पास मैन एडवांटेज, कुछ भी करके उनको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने फेवर में, बट बुलडॉग डिसेंट नहीं परफॉर्मेंस निकाल पाए उससे। मॉश अकेले इस प्लेयर ने पूरी टीम की रोटेशन करवा दी है, वैंडल उठाकर टीम तैनात रहेगी और ये ऑर्बिटल स्ट्राइक, एक ऑर्बिटल स्ट्राइक इस राउंड के लिए इन्वेस्ट करना, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन था, नंबर्स एडवांटेज है आपके पास, हर एक चीज़ अवेलेबल है, बट इन्वेस्टिंग सच अ बिग अल्टीमेट इन सच अ राउंड आई गेस थोड़ा जल्दबाजी यहाँ पे कर बैठे कप्तान, क्योंकि अगर नहीं भी करते तो ट्वेंटी वो राउंड सिक्योरिटी होना चाहिए था इनकी टीम की तरफ से। बट स्टिल जस्ट कंफर्मिंग थिंग्स अप, एंड पहला राउंड यहाँ पे ऑनबोर्ड लगा चुके हैं, हमने फुल बाय राउंड को काफ़ी अच्छे से कन्वर्ट किया है। ऑल्दो इट ऑल केम डाउन टू जस्ट बुलडॉग फाइट्स, एंड वो बुलडॉग की फाइट्स आई वुड से हमेशा से दिक्कत भरी रहती है, क्योंकि अगर आपका पहला बर्स्ट कनेक्ट नहीं होता सामने प्लेयर्स पे, देन वो स्प्रे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यू नो, रेट ऑफ फायर की बात करें, बुलडॉग इज लाइक अचीव वैंडल बट लेस डैमेज, तो अंटिल लेस अगर प्रिसीजन हिट है तभी जाकर यू कैन गेट दोज रिजल्ट्स, एल्स चीज़ें ज़रूर ख़राब हो ही जाती हैं। फिर से ए पे प्रेजेंस दिखा के दे मूविंग बैक टू द बी, बट दिस टाइम जो मॉश है, मॉश वो डिश की जगह, ड्रॉप की जगह मूविंग टुवर्ड्स आर्केड। इस बार जो अलार्म बॉट है वो बी मेन पे काफ़ी एग्रेसिव दिखा रखा है। इसका मतलब अगर बी मेन पे अलार्म बॉट है तो बस की जो पोजिशनिंग होगी, मेजॉरिटी जो उनका ध्यान होगा वो आर्केड की तरफ होगा। ओके, क्या है यहाँ पे वापस एक क्लीन हिट आएगा जरूर, एंड इस बार अगर देखा जाए तो बस ने अभी तक वो टावर कंट्रोल छोड़ा नहीं है, वो अभी भी वहाँ जगह आउट करने जा रहे हैं, बट इस बार मॉश शट डाउन करेंगे बस को, एंड अब बी साइड कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो गई। बट द न्यूरल थ्रेट ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है भाई, काफ़ी अच्छा डबल फ्लैंक आ जरूर रहा था DRX की तरफ से, लेकिन वो न्यूरल थ्रेट के चलते बिल्कुल फंसते हुए नजर आए, एंड एक्चुअली इस वन वे सिनेरियो में सिर्फ सेव करते हुए नजर आएंगे। एम बैटल्स भी हार रहे हैं, काफ़ी अच्छा था। बस को पहले पिंस डाउन करा साइड से, ही वाज फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स आर्केड, और वहाँ पे मॉश ने पिक लगा रखा था, एक एंगल अपना होल्ड कर रखा था। जैसे ही वो वल्नरेबल हुए ही वाज पनिश्ड, और जितनी भी एंड रूल्स देखे मैंने एक सेकंड भी DRX को एक अपर हैंड या मे बी एक कंफर्ट जोन के अंदर मैं उनको नहीं देख पाया। काफ़ी फ्लॉलेस राउंड अभी तक जा रहा है। अगर यहाँ पे माको को और पिक ऑफ करा
then yes, सोने पे सुहागा हो जाएगा. Definitely, but looks of it, Marco will take one more down. So एक flawless को deny करते हुए नजर आएंगे. एक extra weapon यहाँ drop करा देगा, but इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे फट को, क्योंकि back to back 2 राउंड जीतने के बाद उनकी economy काफी ज़्यादा stable यहाँ पे नजर आ रही है. And I guess इस राउंड का जो game changing moment था, it was that dual theft, जिसके लगते ही जो double flank था पे RBN stacks का, वो detect हुआ and players ने काफी easily उनको shut down भी किया. But now ऑन टू दिस राउंड, यहाँ पे अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ बस के पास एक अल्टीमेट अवेलेबल है जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है रीटेक्स के लिए, बट उसके अलावा पूरी टीम सिर्फ शेरिफ्स एंड स्टिंगर्स पे रहने वाली है. एंड मार्को विद दैट सेव्ड हीरो वैंडल इन हिज हैंड्स. लेट्स सी क्या इस बार कुछ यहाँ पे अर्ली एग्रेशन का फायदा उठा पाते हैं, यानी क्योंकि आफ्टर 4 राउंड्स फाइनली हमें यहाँ पे नियॉन का प्रॉपर यूज देखने को मिल रहा है जस्ट टू टेक एग्रेसिव कंट्रोल अलोंगसाइड ब्रीच, एंड उसके चलते फोर्स आउट किया जाएगा अटैकर्स को टू शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्दर्न रीजन. इस नॉर्थ साइड के पुश को होल्ड करने के लिए अभी भी यहाँ पे बज ने क्रॉस का सेटअप जरूर बना रखा है. यहाँ पे पहली बार होगा कि आरबी ने leaving that A side, हर बार वो A lobby push करके थोड़ा aggressive खेले थे, but this time he was in B with a Marshall. He got one, but got traded. but अच्छी बात ये है कि एक weak weapon से आपने एक vandal कराई है. It's a go-go situation, win-win situation for him. But अभी भी इस round के अंदर किसका dominance होगा थोड़ा आसान नहीं रहेगा, cause utilities आ चुकी हैं, crossfire बन चुके हैं, और बी साइड पे 3 डिफेंडर्स इंतजार करिए. फॉल्ट लाइन 2 प्लेयर को अटैक करेगी, बट वहीं पे ये आर्मर में चेंग ढूंढ लिया रैक्स ने. ही गॉट स्टैक्स डाउन, बस मूविंग टुवर्ड्स अ मोर डेफिनेट एरिया. उस शेरिफ से कुछ कर पाते उससे पहले डबल पी का शिकार हुए, एंड ही इज आल्सो डाउन. अब आखिरी प्लेयर जो जेस्ट है विद द स्टिंगर इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंडर स्पॉन. स्काई स्मोक है, क्रॉस करने के बाद 4 प्लेयर अलग अलग दिशाओं में वैंडल उठाना चाहेंगे. एक सपना है ये इस वैंडल के साथ फ्लैग निकाल गया मे बी जस्ट टू से, बट नो, कप्तान की फैंटम को ज्यादा प्रिसाइस थी, एंगल अच्छा होल्ड था. एक और राउंड यहाँ पे फर्स्ट के फेवर में चाहता हूँ. लाइक पिस्टल्स के बाद से कॉन्स्टेंट यहाँ पे राउंड फर्स्ट सिक्योर करता नजर आ रहा है, एंड कुछ वैसा ही थी जो हमें बाइन में देखने को मिला था वो फिर से हमें फ्रैक्चर के अंदर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है. एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से अटैकिंग पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं फर्ट, चाहे वो नॉर्दर्न एंड सदर्न पिंच का कंट्रोल हो, चाहे वो यहाँ पे बी मेंस के फास्ट एग्जीक्यूट हो, हर एक चीज़ की टाइमिंग एंड द यूटिल यूसेज जो यहाँ पे फट की वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है. एंड उसके चलते एक टाइम आउट भी यहाँ पे डीआरएक्स की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि ये एक डिसाइडर मैच आता है. इफ यू लूज दिस मैप यू आर गोइंग होम. टोक्यो के अंदर आपका सफर यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा. एंड डीआरएस जैसी टीम जो पैसिफिक में सेकंड प्लेस पे थी वो इतना जल्दी तो घर जाना नहीं चाहेगी. ये काफ़ी बड़ा अपसेट रहेगा, बिकॉज जो हमारी रिसर्चर है एडन, हमारी जो पैनलिस्ट हैं, अगले मैच में वो ज़रूर आएंगे आपके सामने. उन्होंने भी हमें बताया कि जो पूरी हिस्ट्री बताती है सी रीजन के अंदर इट वाज ऑलवेज डीआरएक्स, बट रिसेंटली HyperX ने उनको आउटशाइन करना चालू किया है. सो इट्स हाई टाइम फॉर देम. दे कांट लूज देयर लेगेसी सो इजी, दे हैव टू फाइट फॉर इट. और ये मैचअप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, बिकॉज इफ दे लूज इट थिंग्स आर गोइंग टू बी अगली फॉर श्योर. एंड आई गेस लाइक फर्ड एक ऐसी टीम है जिसको हम डेफिनेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना ज़्यादा, ऑल्दो इनकी परफॉर्मेंसेज अप्स एंड डाउन्स रहे ज़रूर है, बट जिस तरीके से आज यहाँ पे खेल रहे हैं लग रहा है कि यहाँ एक अपसेट कॉज करने वाले हैं. डीआरएक्स वर द फेवरेट्स, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर इंटरनेशनल सर्किट में परफॉर्म किया, बट करंटली वो डीआरएक्स वो फॉर्म लैक करते नजर आ रहे. बट इस राउंड की जहाँ तक बात की जाए एक एग्रेसिव एम इन कंट्रोल की तरफ और कह सकते हैं एक एग्रेसिव डिश कंट्रोल की तरफ यहाँ पे हमें डीआरएक्स जाते हुए नजर आएगी. एंड ये फाइनली ये जो चीज़ें ये प्रोएक्टिवनेस जो है ये फ्रैक्चर में आपको बहुत ज़्यादा एक नेसेसिटी बन जाती है, क्योंकि 4 अटैकिंग पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट एक अटैकिंग पॉइंट पे आपका कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आप जब रीटेक्स के लिए जाए, जब डिफेंडिंग करने के लिए जाए, तो वहाँ पे थोड़ा पोजीशन एडवांटेज आप क्रिएट कर सकें. इस बार अगर यहाँ देखा जाए तो बी हिट फेक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्लेयर ने यूटिल जरूर डंप किया है बट कोई एंटर नहीं कर रहा था साइड को, एंड वो इंस्टेंटली फॉल बैक करेंगे यहाँ पे ए साइड की तरफ. बट डीआरएक्स इन बाइंग दैट फेक अभी भी यहाँ पे अगर देखा जाए आरबी डीप साइड खेलते हुए नजर आ रहे हैं. अब यहाँ पे डिस से जो प्लेयर आ रहा है इस प्लेयर पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर इस प्लेयर ने सैंड्स के या डिफेंडर स्पॉन के प्लेयर को थोड़ा टफ टाइम दिया चीज़ ज़रूर मुश्किल होंगी. और जिस स्पीड से अटैकर्स वांटेड टू गेट इनटू द साइड वो चीज़ से नहीं हो पाया. आरबी मिसिंग बिग शॉट्स. यहाँ पे रोलिंग थंडर भी कमिट करा कुछ सेकंड्स के लिए. हाँ अटैकर्स थम जाएंगे, बट ये कब तक चलने वाला है. स्टैक्स होल्डिंग दैट मार्क, बट ये फ्लैश हो चुकी है, विजन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और मल्टीपल पीक का शिकार बनेंगे. फोकस फायर कर दिया गया और डबल गॉज की वजह से सारा जो विजन था वो छीन लिया डिफेंडर से. और एक और राउंड काफी लाजवाब तरीके से फुट ने अपने फेवर में कन्वर्ट करा. एंड व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन रियलाइज,
कि भाई अब DRX को स्टेप अप करना पड़ेगा। जो गलतियां हो रही है, आरबी ने जो अभी एम पे विफ किया और मे बी जो अप्रोच खराब हो रही है, दे कैन अफोर्ड इट। आई थिंक सबसे बड़ा इशू यहाँ पे अप्रोच ही रहने वाला है। लाइक आरबी को मेन स्विंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, देन उसके बाद एक प्री मैच और रोलिंग थंडर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। ऑल कीपिंग इन माइंड के बस के पास लॉकडाउन अवेलेबल है। अलाउ कीजिए अटैकर्स को टू टेक द ए साइड, देन उस ए साइड के बाद आप लॉकडाउन के चलते पूरी टीम को पिंच इन कर सकते हैं। जस्ट दैट लॉकडाउन एंड रोलिंग थंडर इन द ए मेन रीजन वो रीटेक सक्सेसफुल बना के दे देगा आपको। सिर्फ ये दोनों अल्टीमेट्स का कॉम्बिनेशन इनफ रहता है रीटेक के लिए। बट इंडिविजुअल बैटल्स यहाँ पे फिर से DRX फोर्स करता हुआ नजर आ रहा है, एंड वो इंडिविजुअल बैटल्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। मैंने अब आज के दिन की शुरुआत में बोला था कि बहुत सारी टीम इतने बड़े स्टेज पे जाकर अभी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के दम पे चल रही हैं। ये टेम्परेरी खुशी है, काफ़ी छोटे टाइम की खुशी है। लॉन्गर रन के अंदर ये चीज़ उनको ज़्यादा दिन पनपने पे नहीं मौका देगी। तो इट्स बेटर कि अभी जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ पे काम करना चालू करेंगे तो बेटर रहेगा। बट DRX दे शुड रियलाइज इट विल बी टू लेट अगर उन्होंने अभी फायदा नहीं उठाया। यहाँ पर आरबी ही फ्लैश टू पीपल, ही गॉट कंकस किया था 2 प्लेयरों को, बट फोकस फायर हो गए एंड 2 प्लेयर खो चुके हैं। और बी साइड के अंदर अब अकेले बचे हैं बज। ही इज होल्डिंग अ गुड एंगल नो डाउट, बट साइड के अंदर नोबडी इज पेइंग सम अटेंशन। घुसने की कोशिश तो नहीं करी है। अब अगर बज ने लॉकडाउन भी डाला था, ऑब्वियसली स्ट्राइक है यहाँ पे, यूटिलिटी के ऊपर खेल रहे थे। और how we are supposed to pronounce this? Fallen. अभी एडिट क्या समझा के गए थे? I think fallen. Fallen. God knows. Let's see. इस मैच के बाद बात कर लेंगे। जो भी है, हमने क्रैक्स बोल रहे हैं हम सही। काइवे, कीवे जो भी है। Kiwe. Trying our best. Yeah. Like it's cracks, then it's Kiwe, fallen, mosh, if I'm right. Mosh. I guess mosh. This is. But again. ये राउंड किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है? यहाँ पे हम नामों में फंसे हुए थे, लेकिन यहाँ पे जेस्ट ने अपनी टीम के लिए क्लच अप करके निकाल दिया इस राउंड को। सिचुएशन ये थी कि आरबी गॉट फर्स्ट फ्रैग बट गॉट एस्टिमेटेड। उसके बाद अलग अलग रूल्स हुए और अच्छी एक एडवांटेज थी कि वो नैनो स्टॉर्म ग्रेनेड लगाकर साइड का पहले एंट्री को बंद करा। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज थी अच्छी खासी। ये प्रॉब्लम हुई यहाँ पर जो एडवांटेज थी नल एंड वॉर्ड हुई, और उसके बाद ही वाज ऑलरेडी डिटेक्टेड विद अ हॉन्ट, स्पैम मारा और कीवे को गेम से बाहर निकाला। DRX एक अच्छा रिटालिएशन दिखाते हुए, बट फुट स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे लिए तो अभी के टाइम पर ज्यादा फेवरेट्स, बट अल्टीमेट काउंटर देखे डिफेंडर्स के पास 4 बड़े अल्टीमेट्स, ओवरडाइव, ऑर्बिटल स्ट्राइक, लॉकडाउन, नाइटफॉल, और वहीं पे जवाब देने के लिए ऑर्बिटल स्ट्राइक एंड रोलिंग थंडर। कप्तान की ऑर्बिटल स्ट्राइक तो यूज होने वाली है स्किल जो है कि लॉकडाउन। पहले यहाँ पे कमिट भी करते हुए नजर आने वाला है। एंड कीवे की अगर बात की जाए, माको को शट डाउन कर दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट उनके पास यहाँ पे कोई भी साउंड सेंस अवेलेबल नहीं है। नाइटफॉल का शिकार हो चुके थे, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पे एग्जीक्यूट प्रॉपर आता हुआ एंड रैक्स विद दैट परफेक्ट टाइमिंग स्टैक्स को टेक डाउन करेंगे। जेस्ट ऑल्दो यहाँ पे राउंड बचाने के लिए आए जरूर, एंड द प्लांट इज नॉट इन द बेस्ट स्पॉट, सो द अटैकर्स हैव टू जस्ट कम आउट इन द ओपन। एंड ये कुछ अलग ही चीजें नजर आ रही है, क्योंकि एक बहुत वियर्ड प्लांट स्पॉट एंड DRX में फ्री राउंड यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। ये मैं बिल्कुल मानना चाहूंगा, आपकी एग्री करूंगा कि फ्री राउंड, बिकॉज प्लांट के हिसाब से पोस्ट प्लांट्स नहीं थे हमारे प्लेयर्स के यहाँ पर FUT के। दे वर लिटरली बिजी विद द इंडिविजुअल, अपनी फाइट की तरफ भाग रहे थे, डिफेंडर स्पॉन की तरफ रश कर रहे हैं। जब प्लांट आपका जो हो रखा है स्पाइक वो एक स्पॉट पे, देन आपको साइड का कंट्रोल चाहिए, आपको हेवन का कंट्रोल चाहिए एटलीस्ट, या तो मे बी आप जनरेटर के आसपास खेल सकते हैं कि जिससे एंट्री डिनाई करे। जब बज ने फ्रैग निकालने के बाद ही वेंट फॉर द डिफ्यूज, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी कंपटीशन जो उनको उस स्पाइक से रोक सकता था। ये ब्लंडर्स हैं और दे आर वेरी क्लोज टू गेट दैट प्लेऑफ स्पॉट। अगर वो ऐसी गलतियां करेंगे देन वो प्लेऑफ का स्पॉट उनके हाथों से चला जाएगा। बिकॉज कल भी हुआ था, अच्छी खासी शुरुआत करी थी एनआरजी के गेम C1 ने, बट गेम 2 और गेम 3 के अंदर थिंग्स गॉट चेंज्ड। डेफिनेटली, एंड वो चीजें वापस रिपीट हो सकती है, क्योंकि अगेन ऐसे राउंड्स आपको थ्रो अप नहीं करना, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। एंड
इतने इजी राउंड्स गिव अप करेंगे तो डेफिनेटली इट इज DRX एट द एंड ऑफ द डे, वो कभी भी आपको सप्रेस करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन इस बार भी अगर यहाँ देखा जाए फैलन आगे जरूर यहाँ पे बढ़ रहे हैं एंड अगेन वो आर्ट्स और सैंड्स के थ्रू साइड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बट ये काफी स्लो अप्रोच, बट विद दैट ऑर्बिटल स्ट्राइक फाइनली वो एग्जीक्यूट कमिट होता हुआ नजर आएगा। ऑल द स्टैक्स स्मोक आउट पुश करेंगे, एक फ्रैग मिलेगा जरूर है एंड साइड का कंट्रोल वापस से यहाँ पे फट को नजर आने वाला है एंड DRX yet again forced for another retake। स्नो फुट को देखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा तो होल्ड, बट ये देखिए पूरा यहाँ पर ही इज कॉम्प्रोमाइज फॉल्ट लाइन एंड इट वाज इनफ कि फुट देखिए डिसेबल कर सके। डबल पीक ट्रिपल पीक कर रहा था बर्मुडा ट्रायंगल, बट कीवे ओ माय गॉड दिस गाय फीलिंग इट, यू नो ही इज एंजॉयिंग दिस लाइफ। मैप नंबर 1 बाइंड, ही वाज अ स्टार प्लेयर, इवन फ्रैक्चर के अंदर भी अपनी टीम के लिए ही इज गेटिंग लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स। एंड एक बहुत अच्छा स्विंग भी यहाँ पे देखने को मिला, लाइक ऑल जो डिसीजन था यहाँ पे फट का वो एक्चुअली काफी ज्यादा रिक्वायर्ड था यहाँ पे, क्योंकि किलजॉय के पास जो एक्चुअली बस खेल रहे हैं लॉकडाउन वहाँ पे अवेलेबल था एंड अगर सिर्फ साइड्स को होल्ड करके नजर आती है प्रोएक्टिवनेस नहीं मिलती फ्रॉम ऑल दीज प्लेयर्स, तो वो लॉकडाउन का फायदा उठा के ये रीटेक पॉसिबल किया जा सकता था। बट नाउ वो प्रोएक्टिवनेस, वो यहाँ पे अपने ओपोनेंट की अल्टीमेट्स को समझना, वो पूरा गेम सेंस जब वो वर्कआउट करता है। नाउ DRX की अगर बाय को देखें तो फिर से एक लाइट बाय पे जा चुके हैं एंड दिस बकी शेरिफ के साथ राउंड खेलना पड़ेगा एंड इस राउंड में तो आप कोई मेजर अल्टीमेट भी कमिट नहीं करना चाहेंगे एंड उसी के चलते अगर बस को देखें कम से कम 5 राउंड हो चुके हैं जब यहाँ पे उनका अल्टीमेट अवेलेबल है और वो यूज करने की सिचुएशन में नहीं आए हैं। Oh yes, but this time हमारे attackers are moving towards arcade और ये एक full commitment वाला दिख रहा है because पांचों player उसी साइड से साइड पे घुसना चाहते हैं and this is a desperate round from the DRX. They don't have a good buy. They have to get a good read over the defenders कि यहाँ पर 5 लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी कोई भी player रोप से ऊपर चढ़ता है देन वो बकी माफ नहीं करेगी, बस इज नॉट गोइंग टू मिस। और वहीं पे रीड सही रही, अगर ये फॉल बैक करके ए पे जाते हैं देन इट इज गोइंग टू बी ए साइड रशिंग करा, बट ही हैज सम अदर प्लान, ही वांट्स टू टेक दैट फाइट। मैन एडवांटेज उनके पास, एक एक करके प्लेस गिर तो रहे हैं बट एडवांटेज अभी भी अटैकर्स के पास है। ये क्या ही चल रहा है यहाँ पर लॉन्ग रेंज के अंदर फंसे, आई विश इनके पास बेटर वेपन होते। व्हाट बगीजन क्लासिक का एक राउंड कन्वर्जन देखने को मिलता हुआ एंड बज जो सिर्फ टावर होल्ड कर रहे थे विद दैट बकी गॉट 2K फॉर हिमसेल्फ एंड देन क्लासिक के साथ राउंड फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे। आई डोंट थिंक कि ये किसी ने सोचा भी होगा, ये जो स्टैक यहाँ पे था बी साइड का इतना प्रोमिनेंट साबित हुआ इस टीम के लिए। लाइक फट के पास हर एक चीज सीधे होनी चाहिए थी राउंड जीतने के लिए, बट DRX said no एंड एक थ्रिफ्टी राउंड ऐसी क्या लेके गए हैं। No, ये राउंड मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी because Kiwi was the first one to enter the side. He got one, he got the main anchor. ब्रिम को यहाँ पे पिक ऑफ करा, उसके बाद भी 3v4 का सिचुएशन था बट जब तक बस टिके हुए थे उनकी बक्की टिकी हुई थी, राउंड नहीं खत्म हुआ। एंड इन इवन FUT they realizes कि भाई हाँ भले ही हम मैप नंबर 1 जीते हैं, मैप 2 के अंदर थिंग्स कैन चेंज और थर्ड गेम के अंदर थिंग्स कैन गो एनी साइड। They're very serious. चेहरे पे दिख रहा है डिस्कसिंग विद द कोच एंड ये टाइम आउट में जरूर रियलाइज करेंगे क्या गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों पे कैसे काम करना है। बिकॉज इससे पहले तक जितने भी राउंड से दे वर प्लेइंग 4-1, उनका सेंटिनल जो साइफर है, वो जो मॉश है हमारे, वो थोड़ा सा अलग खेल रहे थे, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे और एम पे भी काफी अच्छे पिक्स निकाले थे, बट ये फुल कमिटमेंट पहली बार करी और फायदेमंद नहीं रही। एंड लाइक वही चीज है कि लाइक फास्ट एग्जीक्यूट सीधा स्मोक से पुश इन करके विद दैट पॉप फ्लैशेस, ये ऐसे साइड हिट तो जनरल टीम्स के लिए फेल ही होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने कितने प्लेयर साइड होल्ड कर रहे हैं, किस क्रॉस फायर सेटअप के अंदर है, वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा इंपॉसिबल हो जाता है टीम्स के लिए। बट अगेन एक और चीज रहेगी कि अभी तक बस का जो लॉकडाउन है वो प्ले में नहीं आया एंड पहला हाफ खत्म होने पे आ चुका है। ये काफी जल्दी आ गया था बिकॉज आई रिमेम्बर इट वाज द सेकंड राउंड जब उन्होंने अपने बुलडॉग से क्वाड किल निकाली थी और हम दोनों यही सोचे थे कि अब लॉकडाउन आएगा, बट अभी तक वो कहते हैं ना सिंक्रोनाइज्ड प्ले, जहां पर लॉकडाउन के अराउंड खेलना अभी तक देखने को नहीं मिला है। जिगल पीक कर एनिमी स्पॉट करना चाहते हैं ना, ही गॉट स्पॉटेड बट उन्होंने स्पॉट भी करा मल्टीपल लोग यहाँ पर, टीम इनमें 4 लोग हैं और फिर से 4-1 का सेटअप वापस है। डिश पे अकेले मौज है और डिफेंडर्स एंगल्स होल्ड कर रखे हैं।
And again, ये एक काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है QE के पास वो काफी ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है एंड माको ट्रेड आउट जरूर करेंगे यहाँ पे जेश को, लेकिन अभी भी यहाँ पे QE की पोजीशन काफी ज़्यादा सुपीरियर होने वाली है। बस को शट डाउन किया, माको को भी इंस्टेंटली पिक ऑफ करते हुए नजर आने वाले हैं एंड एक काफी अच्छा साइड हिट यहाँ देखने को मिलता है। आरबी इज नाउ स्टक इन अ 1v1 सिनेरियो। ऑल्दो यहाँ पे दो प्लेयर्स काफी ज़्यादा लो HP पे है, लेकिन पोजीशन निकालना उन दो प्लेयर्स की सबसे बड़ा यहाँ चैलेंज बनने वाला है एंड विल ही गो फॉर द नाइफ QA इज जस्ट फॉलिंग आरबी राइट नाउ एंड ये एक शायद नाइफ फ्रैग इस मैच का पहला नाइफ फ्रैग देखने को मिलेगा एंड अपना डोमिनेशन यहाँ पे दिखाते हुए नजर आएंगे। द नियॉन डेव आरबी को नाइस करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब वी ऑल नो दैट कि फ्रैक्चर इज अ मैप जहां पर यू नो थिंग्स आर नॉट इजी फॉर द डिफेंडर्स बिकॉज आपके साइड पे एंटर करने के दुनिया भर के तरीके होते हैं। यू नो इफ यू टेक ए साइड आपके पास स्टैंड्स है, आपके पास विंडो स्पॉन है, आपके पास ड्रॉप है, आपके पास रेंज है। बी साइड इज आल्सो वेरी टफ, ठीक है। तो डिफेंडर्स के अंदर देखो डिसेंट राउंड्स, बट ये जो नाइफ है ना ये इंसान के यू नो आत्मविश्वास पे मारा गया है ये यहाँ पे आरबी के। और अगर ये आरबी अटैकर साइड में चोक करके बिकॉज नियॉन पे बहुत कुछ रिलाई करता है, ये नियॉन वो है जो साइड का कंट्रोल दिलाने वाली है, ये नियॉन वो है जो डिफेंडर्स को खलबली में खेलने पे मजबूर करेगी। DRX they need to find a way to handle this team because अगर फुट FUT इस राउंड को इस मैप को जीतती है then off to the playoffs और वहीं पे DRX उनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होगी। Definitely and they will be sent home and अभी तक इस सिनेरियो के अंदर यहाँ पे DRX खेल रही है, जीतना थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है and now the overdrive comes and overdrive को वन टैप करते नजर आएंगे माको। मेजर प्लेयर कीवे को शट डाउन करने के बाद कहीं ना कहीं जितना साइड का फायर पावर था वो कहीं ना कहीं फट गवा चुका है। ऑल्दो द स्पाइक विल गो डाउन, दे हैव द टाइम बट दे आर नॉट प्लांटिंग द स्पाइक, दे आर प्लेइंग देयर टाइम। कार का पूरा कंट्रोल यहाँ पे लिया एंड नाउ इट इज टाइम टू टेक द स्पाइक डाउन, लेकिन अब यहाँ से कहीं ना कहीं स्मोक्स हट चुके हैं सो थोड़ा सा यहाँ पे अलग एंगल में प्लांट करना पड़ेगा। सो दे कांट प्ले फ्रॉम द मेन, दे आर ऑल स्टक ऑन द साइड रीजन। ये साइड रीजन के ऊपर खेलना भारी हो पड़ सकता है बट इस बार ऑब्वियस स्ट्राइक आएगा लॉकडाउन को ट्रेड करने के लिए एंड रेक्स यहाँ पे ट्रेड करेंगे बस को, बट जेश इंस्टेंटली उनको भी पिक ऑफ करते हुए नजर आने वाले। भाई अगर बात की जाए स्पाइक की ऑलरेडी इट इज हाफ डन एंड एक और हाफ यहाँ पे करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए बट मॉश काफी अच्छी पोजीशन मां को प्रेडिक्ट करेंगे, गेम सेंस ऑन पॉइंट एंड एक और फ्लैग यहाँ DRX अपने फेवर में लेते हुए। तो यहाँ पे अच्छे खासा पॉइंट था कि देखो ना टेकन दैट फ्लैग, बट मुझे एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि FUT की जो पोस्ट प्लांट पोजीशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं। इससे ये दूसरा राउंड है जिसके अंदर वो कंटेस्ट में भी नहीं थे। अगर आपके पास पहले पॉइंट पे मैन एडवांटेज नहीं है देन यू हैव टू टेक द रूल्स। आप पांचों प्लेयर का इंतजार नहीं कर सकते गुलाब के पत्तों पे बैठ के कि भाई आप साइड के अंदर आएंगे हम लड़ेंगे। यू हैव टू फोर्स दोस फाइट्स। 3v5 का सिचुएशन है, एक प्लेयर लॉन्ग पर है, मेन पे और दो प्लेयर हेवन पे है। हेवन पे एक छोटा सा पैसेज है, आप उस सिचुएशन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं और एक एक करके एवरीवन गॉट पिक्ड। एबिलिटी ट्रेड हुआ, दूसरी साइड से आफ्टर शॉक आया, दे वेटेड, फॉल्ट लाइन आई, उन्होंने फॉल्ट लाइन से जवाब डाला, दोनों प्लेयर फॉल्ट लाइन के इफेक्ट के अंदर थे एंड इजी फ्रैगिंग। हाफ बराबर हुआ है, दोनों टीम ने 6-6 राउंड निकाले बट इट्स हाई टाइम। DRX फ्रैक्चर का मैप अपना पिक फेवरेट साइड अटैकर साइड पे है, they have to control the momentum then only we get to see my favorite map Haven। but अगर FUT ने इस momentum पे लगाई लगाम yes sayonara DRX हो जाएगा। Exactly and like ये साइड हिट भी DRX के कुछ वैसे देखने को मिलेंगे जैसा हमें फट के साइड देखने को नजर आए हैं। फास्ट एंड क्लीन एग्जीक्यूट्स अगर रहे एंड देन द डिफरेंस विल बी क्या पोस्ट प्लांट किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि जैसा आपने भी कहा अभी कि जो फट के पोस्ट प्लांट पोजीशंस है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल रहे हैं। इस बार 3 प्लेयर स्टार के अंदर थे एंड सिर्फ एक प्लेयर यहाँ पे लॉन्ग का एरिया खेल रहा था। प्लांट भी यहाँ पे अंडर स्टेयर्स का था, उनके पास भी कोई एंगल नहीं था चेक करने के लिए। हर एक चीज यहाँ पे बहुत अलग तरीके से खेलते नजर आए, बहुत गलत तरीके से आए से खेलते नजर आए एंड कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ 2 से 3 राउंड ऐसे थे जो फट बिल्कुल अपने पास रख सकता था, एक बहुत मैसिव एडवांटेज क्रिएट कर सकता था बट करने में नाकामयाब रहे। ये बात मैं बिल्कुल मानना चाहूंगा कि हाँ देयर वर सर्टेन मोमेंट जहां पर FUT could have taken that lead, जिस लीड से वो सेकंड हाफ के अंदर अब्यूज कर सकते थे बट नो वो कुछ ना कुछ और जो राउंड उन्होंने अभी खेला जिसके अंदर जो कीवे थे he went to the canteen area, he got annihilated with that bulldog। उसके बाद साइड के अंदर कम से कम 5 से 10 सेकंड बिताए because they were checking out for Buzz। Buzz हमेशा से B साइड के एंकर रहे हैं, काफी देर तक होल्ड करते हैं एंड ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट डिफेंस। उनको पहले ढूंढा
नहीं मिले. जब लॉकडाउन आया फिर कंफर्मेशन आई कि that his approach is towards the defender spawn. तो आई होप कि ये जो रीड है एक दूसरी टीम पे सही रहेगा. बट देयर वर सर्टेन राउंड जहाँ पर बी साइड पे स्टैकअप था, जिस राउंड के अंदर बस की बकी चली, वो राउंड के अंदर अगर वो ए साइड पर एक कहते ना मुआयना करने भी कोई चला जाता, अगर एक बार साउंड लेने कोई चला जाता, चीजें जरूर बदल सकती. ओके नाउ ऑन टू सेकंड हाफ. एंड इस हाफ को अगर आप पोजीशनिंग देखें जिस तरीके से यहाँ सेटअप कर रखा है, 4 डिफेंडर्स फ्रॉम साइड ऑफ फट ए मेन कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं. एंड ये एक बहुत ज्यादा लाइक कैसे रिस्की टेक हो सकता है फ्रॉम देयर साइड, क्योंकि अगर सारे प्लेयर्स रन डाउन करते जाएंगे एक बहुत मेजर डैमेज यहाँ पे होने वाला है स्टार्टिंग के राउंड के अंदर. एंड अगर आखिरी पे को देखें, द मॉज ही स्टिल स्टैंडिंग इन द बेस एंड एक 4 मैन पुश यहाँ पे इवेंट का था, चार में स्विंग करेंगे आरबी, बट ही विल स्टिल बी गुड फॉर वन. ऑल्दो यहाँ पे ट्रेड निकालने के लिए आया जरूर है कीवे, एक और फ्रैग निकालेंगे, बट आरबी स्टिल विद दैट फ्रेंजी, वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड पिस्टल्स. एक और फ्रैग निकाल के नंबर्स गेम अपने पास रखेंगे. आरबी ने जब वो टैंगल को पीक करा ना, इट वाज नॉट इजी फॉर हिम, बट यहाँ पे एफयूटी के प्लेयर रैक्स एंड फॉलन दे कैन फोर्स इट, दे न्यू इट कि मैन एडवांटेज है यहाँ पे सामने वाली टीम के पास. अगर हम ये ड्यूल जीते देन फायदा हो सकता है, बट अफसोस ये जो गैम्बल था उनके अगेंस्ट प्रूव हुआ. अब 4 प्लेयर बचे हैं, साइड के अंदर स्पाइक प्लांट हो रहा है, पोस्ट प्लांट डिसेंट है, और अभी भी एक प्लेयर का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, दैट इज माको. एंड लाइक अभी भी लाइक माको तो साइड पे नहीं आने वाले हैं, वो सिर्फ वेट आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मॉश साइड पे आएंगे. एंड जैसे यहाँ ड्रॉप डाउन भी किया जाएगा, आरबी जस्ट प्लेइंग ऑन द टर्रेट्स कॉन्टैक्ट, बिल्कुल उनको शट डाउन भी करते नजर आएंगे. एक 1v4 सिनेरियो तो ट्रेजेबल सिचुएशन से बिल्कुल बाहर है, सिर्फ एग्जिट्स के लिए यहाँ पे मॉश खेल सकते हैं. एंड वो एग्जिट मिलना इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर होल्ड इन करेंगे, स्टैक्स इज जस्ट आई गेस 2 शॉट्स टू द बॉडी एंड इट विल बी गुड इनफ. बट स्टैक्स जस्ट 1 टैप स्मॉश, एक क्लीन राउंड यहाँ पे देखने को मिलता हुआ, सिर्फ जेश को गवाया स्टार्टिंग के बाद. एंड वो जो 4 मैन पुश था फट का, वो काफी ज्यादा भारी पड़ा है इस बार उन पे. भाई आरबी का एम अच्छा था, बिकॉज़ अगर मेरे सामने 4 प्लेयर आ जाए देन इट बिकम्स रियली इम्पॉसिबल. उन्होंने कैसे पिक निकाल कर ही वेंट बैक, ये कहानी उनके साथ ही चली जाएगी. बट वी कैन फील दैट, वी कैन सी इट ऑन द फेस ऑफ कि भाई ये राउंड कितना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज़ they could start writing that momentum आराम से. वो इस मैप के अंदर भी एडवांटेज ले सकते थे. अब इस राउंड के अंदर 4 बुलडॉग, एक घोस्ट के साथ हमारे DRX के प्लेयर्स इस राउंड में उतरे हैं. वहीं पे क्लासिक शेरिफ्स के साथ उतरी है डिफेंडर्स. डेफिनेटली इस बार भी वही सिमिलर एग्रेशन, वो सिमिलर प्रोएक्टिव देखने को मिल रही है फट की तरफ से. एंड ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. लाइक इट इज़ द मैप ऑफ एक्टिव जो एक्चुअली जाना ही चले जाता है कि आप दोनों ही साइड, चाहे आप अटैकर साइड पे हो चाहे डिफेंडर साइड पे हो, यू हैव टू प्ले एग्रेसिव, यू हैव टू प्ले फॉर दैट मैप कंट्रोल. ऑल्दो इस बार वेपन डिसएडवांटेज है फट के पास, बट द गेम प्लान इज स्टिल गुड इनफ. एमएन पहले कंटेस्ट किया, देन उसके बाद अब यहाँ पे डिश कंट्रोल के लिए जा जरूर है. एंड ये डबल स्विंग बस के ऊपर भारी पड़ सकता है अगर यहाँ पे अवेयर नहीं रहे. एंड ही इज अवेयर, टरेट जैसे इन्फो देगा, he will just use a zip line, fall back, and exact info मिलने के साथ ये सब dish push हुआ है. He knows that, so A side has to be wide open. एक complete rotate out करे जाएगा and A side को free execute यहाँ पे DRS को मिलता हुआ. You know, A side पे कोई भी डिफेंडर नहीं है जो उनको परेशान कर सके, तो so free side, free plant, and अब देखना है कि post plant कैसे होंगे, because just because they have the weapon advantage, it's a clean round, it can be a clean round for them. But ये जब हमने बोला जब उल्टी चीजें हुई हैं, बिकॉज आई रिमेंबर बाइंड के अंदर जो 2 and 4 राउंड जा रहे थे, वो अभी तक मैं हजम नहीं कर पाया हूँ. एग्जैक्टली लाइक पिस्टल्स के साथ यहाँ पे फुल बाय राउंड वाली टीम को हराया जा रहा था. एंड अगर वैसा ही कुछ यहाँ पे होता तो एक मेजर अपसेट जरूर कॉज किया जा सकता है. बट अभी के लिए फैलन यहाँ पे कंकर जरूर करेगा. फ्लैश कम्स इन, आरबी का टेकन डाउन, बट बस is well aware, swing out किया जाएगा through that smoke, is good for 3 right now. Zesh यहाँ पे flanker को shut down करने वाले हैं, सारा damage control यहाँ पे डीलिंग कर जाएगा. कप्तान को भी आखिरी बैग निकाला जाएगा. बस एक और बार एंटाई को राउंड के अंदर 4K के साथ जाते हुए. मैं तो इस प्लेयर का ऑलरेडी दीवाना बन चुका हूँ भाई. बाइंड पे रेज और इंस्टेंटली शिफ्ट करना सेंटिनल पे एंड स्टिल पॉपिंग लाइक एनीथिंग. 14-8 ही इज हैविंग हिज टाइम, बट एक प्लेयर एफयूटी की तरफ से कॉन्स्टेंटली DRX को तब हर बार बैकफुट पे खेलने में मजबूर करा. दैट इज कीवे. तो बाइंड पे हीरो इस मैप के अंदर भी इस प्लेयर ने पूरी कहते रंगत लगा रखी है. तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस ब्लूटूथ हाई-फाई?
ये मतलब ये जो ब्रोफिश करते हैं मुझे समझ नहीं आता इससे क्या वाइब शेयर होती है, क्या होता है ये। बस हमारे VCSA के स्टेज पे भी रॉ फ्यूल की आदत थी, you know कि रॉ फ्यूल अपना राइट हैंड किसी को नहीं देते, बट नेवर माइंड बाद में बात करेंगे। साइड के अंदर घुसे आरबी गॉट क्रैक एंड कीवे इंस्टेंटली पूरी एडवांटेज अपनी तरफ शिफ्ट करते हुए स्टैक आल्सो गॉट वन। बहुत मुश्किल, इट्स अ 2v2 सिचुएशन। ट्रेड्स बहुत क्विक तरीके से यहाँ पे लिए शुरू गए हैं, लेकिन यहाँ पे मॉश की पोजीशन काफी ज्यादा सुपीरियर होती है, बट ज़ेश का कवर फायर उससे भी बेटर यहाँ पे होता था। स्टिल 1v2 एंड विल रिमेन 2 प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम टीम DRX। बोनस राउंड कन्वर्शन यहाँ पे देखने को मिलती हुई, एक बहुत फास्ट यहाँ पे साइड हिट आया उनकी तरफ से। ट्रेड्स बहुत अच्छे लिए गए, वो बिल्कुल उनके फेवर में गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे सिर्फ बुलडॉग्स एंड स्टिंगर के साथ DRX रन कर रही थी, उनके साथ भी फ्रैग्स निकालने में कामयाब एंड बोनस राउंड कन्वर्ट करने के बाद तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि DRX जिस मोमेंटम को मिस आउट कर रही थी अभी तक की सीरीज में, वो कहीं ना कहीं रीगेन करना शुरू कर चुके हैं। बोनस राउंड जीतना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है और वो स्टेटमेंट काफी कंफर्टेबली DRX ने यहाँ पर FUT के सामने रखी है। नो डाउट शुरुआत अच्छी करी थी, बट इवेंचुअली जो आखिरी सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल ब्रिलियंट साइड ट्रेड आया, इट वाज समथिंग टू सेलिब्रेट। बस गॉट वन बट गॉट रेडेड, कप्तान टाइमली आए। इन चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। जब तक आपके कॉम्प में नियॉन है, वो अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी भी एक्सपेक्टेशंस के अंदर आ जाती है। ये देखिए मॉश को कुछ आइडिया नहीं था कि सैंड से यहाँ पे प्लेयर आ चुके हैं। Things were changed, like वो एक open के अंदर he was peeking that angle from the mains but got decimated from sands. No, एक और लाइक बहुत अच्छे फ्रैग्स यहाँ पे आते हैं। नियॉन का जो फास्ट पेस तरीका है खेलने का, वो एक्चुअली काफी अच्छा यहाँ पे साबित हो रहा है DRX के लिए। ऑल्दो एक वन ऑफ द फ्यूएस्ट टीम्स जो इस तरीके से यहाँ सोलो नियॉन खेलते हैं, कि जनरली हम HyperX को देखते हैं नियॉन खेलते हुए, जो सप्लीमेंट करने के लिए नियॉन की एबिलिटी दे यूज अ रेस विद देयर साइड। बट अभी यहाँ देखा जाए रेक्स यहाँ पे शट डाउन करेंगे ज़ेस्ट को एंड वो फ्रैग्स भी आएंगे। वेपन रिकवर किया, स्टैक्स को टेक डाउन करते वापस से एक 2v2 सिनेरियो है जरूर। द प्लेयर्स आर स्टिल प्लेइंग इन द साइड बट they have bought enough time. Fallon यहाँ पे एक और फ्रैग जरूर निकालेंगे, but that lineup was not enough to buy enough time. यानी कि डिफ्यूजल यहाँ पे होता हुआ एक thrifty राउंड यहाँ पे हमें देखने को आएगा मिलने वाला। ये राउंड किसी भी हालत में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था। फट ने जिस तरीके से शेरिफ के साथ वो 2 फ्रैग निकाले, बट उसके बाद रेक्स with that weapon recovery साइड को शट डाउन किया, सिर्फ कुछ सेकंड्स के चलते ये स्पाइक डिफ्यूज करने में कामयाब हो चुके हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिस्टल्स के साथ जो थ्रिफ्टीज राउंड होते हैं इनके क्या ही खेलते हैं यहाँ पे रैक्स विद द ट्रिपल। मतलब DRX ने काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन he was surprised, dude what are you doing, this is not legal, this is against the nature, but a very good round for this Turkish team। 9-7 2 राउंड के एडवांटेज है DRX के पास। पिस्टल राउंड जीतने के बाद फॉलो अप राउंड और बोनस राउंड जीतने की वजह से दे आर स्टिल इन कंडीशन कि वो एक कमांडिंग कॉल रख सके। ट्रिपवायर तोड़ा, इन्फॉर्मेशन जरूर गैदर हुई है कि डिश के आसपास एक प्लेयर मौजूद है जो परेशानियां खड़ी कर सकता है। अटैकर्स और डिफेंडर्स जो मैप के हर एक कोने के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वक्त 3 डिफेंडर्स बी पे इंतजार करें अटैकर्स का, और ए साइड को थोड़ा सा पैसिव खेलने पे रखा हुआ है। और सरप्राइजिंगली साइफर की पोजीशन काफी एग्रेसिव है, ही इज प्लेइंग लॉट ऑन स्पाई कैम के भरोसे पे वो अभी के लिए खेल रहे हैं। बट धीरे धीरे जो हमारे अटैकर्स हैं मूविंग फ्रॉम द आर्केड, हेवन प्लेग पे उनका इंतजार कर रहा है, और जिगल पीक करता हुआ ये जो प्लेयर है मार्को, ही इज ऑल सेट, इट्स कप्तान। The rolling thunder and buzz first frag ईवे के ऊपर निकालते नजर आएंगे। रोलिंग थंडर के बाद कोई चांस नहीं बना, बट रेक्स एक और बार अपनी टीम को सेवियर साबित होते हुए 2 मेजर फ्रैग्स निकालने के बाद नंबर्स को स्टिल इवन आउट यहाँ पे कर दिया। ज़ेश गॉट द ट्रेड बट नाउ द स्पाइक विल गो डाउन once more time, a 3v3 retake scenario, लेकिन इस बार यहाँ पे आरबी मेन फ्लैंकर को शट डाउन करते नजर आने वाले हैं। एंड यहाँ पे मॉश के शट डाउन होने के बाद पूरी टीम सिर्फ साइड पे खेलने वाले, कोई भी यहाँ पे मेजर थ्रेट नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि कप्तान के पास ऑर्बिटल स्ट्राइक अवेलेबल है एंड ज़ेश जो स्टार में फंसे हुए हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतें पा सकते हैं। बट पहले यहाँ पे ज़ेश को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे, एक और मेजर फ्रैग एंड नाउ आरबी सारी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर आती है। इतना आसान नहीं हो रहा है शट डाउन करना इस स्पाइकर को, डिफ्यूजर को। कप्तान एक और बार अपनी टीम के बहुत बहुमूल्य फ्रैग्स निकालते हुए 8वां राउंड यहाँ पे फट जीतता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बज ने एक सेंटिनल एंट्री फ्रैगिंग कर रहा है 3v2 सिचुएशन। काफी जो ऑर्बिटल स्ट्राइक थी वो आरबी को थोड़ा सा जोन आउट करने की थी, जिससे कि वो प्लेयर अपने टीममेट को कवर ना दे पाए। साइड पे जो भी प्लेयर जिंदा थे उनको पिक ऑफ करा एंड कंप्लीट राउंड। इट वाज अ वेरी, अब ये स्टैक्स का जो सोलो पिक था, क्या ये नेसेसरी था क्या ज़ेस्ट का उस एंगल से होल्ड करना? बिकॉज़ एक दूसरे को क्रॉस फायर पे खेल सकते थे वो।
It was good round. It was a very important round for FQT. And this round, DRX, अगर वो हारते हैं इन राउंड्स की बदौलत ही होगा, बिकॉज ये राउंड बनता ही नहीं था. अगर ये राउंड जीते, इकोनॉमी रीसेट हो सकती थी यहाँ पे FQT की, एंड वो फिर से एक एग्रेसिव स्कोर लाइन की तरफ जा सकते थे. बट जस्ट बिकॉज वो राउंड हारे हैं, चीजें और अब गंभीर होंगी. जो बेजीतापन आएगा ना गेम के अंदर, अब वो दोनों टीम को खाने वाला है. Definitely, like दो back-to-back rounds यहाँ पे give up करते हुए नजर आए, and like it was just some rookie mistake from their side. खासकर जो जैसे हमने बात की कि individual picks जो यहाँ पे दिए, stacks हो चाहे zest हो, वो individual battles लेने की requirement ही नहीं थी. आपके पास setup बहुत अच्छे थे, but they went for some kills there, and वो बिल्कुल भारी पड़ता हुआ नजर आया. And जो lead यहाँ पे ली थी bonus round जीतने के बाद 6-9 का यहाँ पे advantage create करा गया था, वो बिल्कुल blow out हो चुका है. Now सिर्फ एक round दूर है यहाँ पे for to get that equalizer, and I guess वो round भी शायद ये वाला होने वाला है, क्योंकि इतने prominent buy शायद नजर नहीं आएंगे मीडिया के साइड से. No, ये बात तो है, ये बात बिल्कुल सही है. But एक बार इकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं. Then DRX, they have buys, they have decent weapons, they can still have it. Buzz is confused whether to buy a Stinger or a Judge or just go all in on the Vandal, but फाइनली स्टिंगर पे सेटल होते हुए यहाँ पे नजर आने वाले हैं. इस बार दो फैंटम्स हैं इनके पास, एंड वो दो राइफल्स के साथ ही मेजर विन कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा. बट फैलन एंड मॉश डैमेज यहाँ पे एक्सचेंज करते नजर आने वाले हैं. अभी के लिए बज को काफी ज्यादा लो जरूर कर देगा, ऑल्दो द साइड हैज बीन कॉम्प्लिमेंटेड. मार्को थ्रू द स्मोक स्पैम करके फैलन को शट डाउन करने में कामयाब हो चुका है. नंबर एडवांटेज बन चुका है. बज अगर अब चाहे तो इस लॉकडाउन का डिप्लॉयमेंट करके अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम जरूर बाय कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें मेन के अंदर जाना पड़ेगा, एंड वो मेन का एक्सेस अभी तक उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि क्यूए उनको बिल्कुल फोर्स बैक करते नजर आ रहे हैं. मौज यहाँ पे जंप करते हुए फ्रैग निकालेंगे स्टैक के ऊपर, बस फंसते हुए नजर आएंगे उस छोटी सी गबे में, एंड एक और रीटेक यहाँ पे शायद से फट अपने नाम करता हुआ नजर आएगा. अब ये जो न्यूरल थेफ्ट है ना, ये प्रॉब्लम कर सकता है. माकू विद 1 कैन गेट सेकंड, बट नाउ ही गॉट ट्रेडेड. अब अकेला प्लेयर ये बचा है साइड के अंदर, ही इज सप्रेस्ड. सामना प्लेयर की कोशिश, बट ज्यादा देर की बात नहीं है. कप्तान ये जो स्पाइक किलर, स्पाइक डिफ्यूजर को पिक ऑफ करके राउंड चेंज हुआ है. DRX स्टिल सर्वाइविंग. कहते हैं वेंटिलेटर के अंदर जो जान फंसी हुई थी आखिरी, उस वक्त DRX की कंडीशन हो चुकी थी. Luckily, that sheriff and that picked up gun changed everything. But ये जो player है ना, Sentinel Mosh, इस player ने क्या है ढा रखा है. न्यूरल थेफ्ट तो हर बार इस player का जो input है टीम की रीटेक के अंदर, aggression के अंदर, side control के अंदर, everything is so nice. Now I can feel it. DRX को इस round की भूख है, इस map की भूख है. अब energy दिख रही है, वो जो gestures है celebration के, लग रहा है things are now feasible. फ्रेंडली आने इस बार ओवरड्राइव का इस्तेमाल एक बहुत एग्रेसिव तरीके से पहला पिक जेस्ट में निकाल चुका, बट आर भी ट्रेड करेंगे यहाँ पे कप्तान का. इस बार फाइनली यहाँ पे लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जाएगा. ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं दिक्कतें बन सकता है, एंड रेक्स उसी को शट डाउन करने के लिए आ रहे थे, बट नाउ ही इज स्ट्रक, एंड यहाँ शायद प्लेयर डिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे ओवरड्राइव का इस्तेमाल किया जाएगा. लॉकडाउन को करा डिस्ट्रॉय, बट अपनी जान भी साथ साथ गंवानी पड़ेगी, क्योंकि ओवरड्राइव को हीट अप कर दिया गया था, एंड बस विद दैट शॉटी जिसको हम एक्चुअली क्वेश्चनेबल है जरूर, क्योंकि अभी तो सिर्फ 150 क्रेडिट्स किया, बिकॉज वी आर स्टिल ऑन द 6.10 पैच. 6.11 पे हम नहीं आए, एंड प्लेयर्स अभी भी शॉटी को बहुत हद तक यूज कर रहे हैं. अब लॉकडाउन को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में दे डिस्ट्रॉयड देयर इकोनॉमी एंड एवरीथिंग. जो भी चीजें उनके पास है सब कुछ उनसे छीन ली गई है. इकोनॉमी इज डेसिमेटेड. दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी. 0 क्रेडिट्स का टिके हुए हैं. कॉलिन मेरे ख्याल से अकेले प्लेयर जिनके पास 1000 से ऊपर क्रेडिट्स बचे हैं, बट कप्तान 500, मौज 0, कीवे 100 एंड रैक्स 0 क्रेडिट्स. रीसेट करने का टाइम नहीं मिलेगा. ये राउंड तो कुछ बचा नहीं है, एंड एनी सेकंड 11-8. अब नेक्स्ट राउंड वो कितने बाय के साथ आएंगे, दे हैव टू फोर्स इट आउट, एल्स दे हैव टू प्ले फॉर द ओवरटाइम. और ओवरटाइम के लिए जीना इज नॉट इजी. यहाँ पर बज ने पूरी कोशिश करी कि वो उस लॉकडाउन को बचा सके. 3 प्लेयर आए उस लॉकडाउन को तोड़ने के लिए, और तीनों को बज ने पिक ऑफ करा. अब देखिए 4 प्लेयर, दे फीलिंग इट. सब ने अच्छी फ्लैगिंग कर रखी है, और वहीं पे जो भी मेहनत कर रहे हैं FUT से, दैट इज कीवे, रैक्स, बाकी सारे प्लेयर वो अभी भी थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए देख रहे हैं. बीइंग इनिशिएटर, ब्रीच की अगर ऐसे स्टार्ट चल रहे हैं, साइड के अंदर ही इज द वन हु इज गेटिंग टू द साइड, गेटिंग दोस अर्ली किल्स, वो नंबर्स नहीं दिख रहे.
डेफिनेटली लाइक फ्रैग्स बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस आउट होते नजर जरूर आ रहे हैं, बट एक और बार अगर यहाँ पे देखें फट को एग्रेसिव डिश कंट्रोल के लिए जा रहे हैं, जो ऑल दो अभी तक इतना सक्सेसफुल टेक उनको नहीं मिला, कोई पिक्स फाइंड करने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि वो सिर्फ इन्फो गैदर करने के लिए जाते हैं। जिस जिगल पीक्स कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट करते हैं या फिर सिर्फ टरेट को टेक डाउन करते नजर आते हैं, एंड देन जस्ट दे फॉल बैक टू सेफ्टी, जो एक्चुअली उनके लिए इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऑल्दो दे कैन ट्राई टू जस्ट पुश द सोलो प्लेयर आउट, क्योंकि हर बार सिर्फ अगर आपको टरेट मिल रहा है ऑन द नॉर्दर्न साइड, सो व्हाई नॉट जस्ट पुट आउट द टरेट गाय एंड टेक हिज फ्रैग। और मे बी इस राउंड में थोड़ा सा अगर प्लेयर्स एग्रेसिव भी होते क्या वैल्यू मिल सकती थी, क्योंकि प्रॉपर बाय राउंड नहीं है, बट दे स्टक टू द साइड एंड इस बार भी आरबी एक शॉट एग्जीक्यूट के जाएंगे जरूर, एंड दैट मूवमेंट फ्रॉम देयर एक और फ्रैग आता हुआ, एंड एक करके पत्तों की तरह पूरी फट की टीम बिखरती हुई नजर आएगी। एक 5v2 का रीटेक सिनेरियो, और आई मीन कह सकते हैं 2v5 का रीटेक सिनेरियो उनके लिए होएगा। प्लांट इज स्टिल इन द वाइड ओपन एरियाज, वेपनरी भी कुछ ज्यादा खास नहीं है समय फट के पास, स्टिंगर एफएल इनके पास, मॉश विद दैट फैंटम। लेट्स सी क्या कर पाते हैं। RB, what a fascinating game play. इस प्लेयर ने मतलब विद सेकंड साइड का पूरा डिफेंस खत्म करके रख दिया, हर पोजीशन पे जाके ही चेक्ड इट, एंड आई एम जस्ट बिग फैन बिकॉज जो उन्होंने मूवमेंट दिखाई है, जो आई कैन सी दैट कर्सर मूवमेंट, जो माउस हिलाया है, काफी लाजवाब। अब सैन से एक प्लेयर मार्कडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड। DRX इज गोइंग टू कंप्लीट द फ्रैक्चर रन, और अब हेवन होगा असली दंगल वाला मैप। Oh, I guess definitely. I think we are moving towards heaven, क्योंकि ये तो 12-8 यहाँ पे हो चुका है। देन इसके बाद 4 लगातार राउंड यहाँ पे फट को निकालने पड़ेंगे अगर ओवर टाइम में यहाँ पे एक्सटेंड करना है इस मैच को, जो एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए तो नहीं लग रहा है। ऐसा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, ऑल द पॉसिबल है जरूर, लेकिन इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फ्रैक्चर को रन डाउन कर रहे हैं DRX के प्लेयर्स, जिस तरीके से साइड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दे आर कंप्लीटली क्लीन। कोई यहाँ पे फ्लॉ देखने को नहीं मिल रहा है उनके एग्जीक्यूट्स के अंदर, चाहे वो पोस्ट प्लांट सिनेरियोज हो, हर एक चीज काफी अच्छे टाइम की जा रही है उनकी साइड से। नो डाउट यहाँ पर DRX का हर एक जो कार्ड चाहिए होता है गेम के अंदर, सब कुछ वर्किंग फॉर देम। मार्को मोलोटॉव, बट ये फास्ट इन आए टुवर्ड्स द आर्केड एरिया, मे बी एक डर पैदा करना चाहेंगे कि अंडर द बी साइड खेले, बट वहीं पे अटैक कर दे, मूविंग टू अ साइड जहाँ पर एक भी डिफेंडर नहीं है। हमें भी सैंड सपर से एक प्लेयर इंतजार करेगा एक ऑफ एंगल पे, एंड यस फॉलन गॉट वन, वो भी बज, अ डेंजर मैन, डेंजर गाय इज आउट ऑफ दिस राउंड। डिफेंडर साइड पे तैयार बैठे हैं, ये देखिए RB गॉड की वे, डिफेंडर जो एक फ्लैंक एंगल में जा रहा है उसको भी फ्लैंक करते हुए देखें RB। Oh, the orbital strike with that rolling thunder, बिल्कुल यहाँ पे एक मौत का फरमान लेके आए जरूर थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे DRX रेडी था, कोई भी प्लेयर यहाँ पे ऑफ गार्ड नहीं पकड़ा गया, बट नाउ द प्लेयर्स ऑफ दे हैव बीन शट डाउन। लेकिन रेक्स डिस्पाइट द फैक्ट कंकस हो चुके थे, स्टैक को शट डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, एंड नाउ द स्पाइक इज काइंड ऑफ स्टिकिंग विद RB, इज गुड फॉर अनदर वन। इस बार कप्तान भी स्विंग करके उनको भी टेक डाउन यहाँ पे किया जाएगा। आई गेस दिस इज गोइंग टू बी इट, क्योंकि ये स्पाइक डिफ्यूजल हो पाना इस 1v2 में एक इम्पॉसिबल सा टास्क बन चुका है, एंड वो इम्पॉसिबल टास्क ही रहेगा DRX मेकिंग द कमबैक। सीरीज को फिर से एक के ऊपर लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। बाइंड के ऊपर जितना यहाँ डोमिनेट हुए थे, उतना ही डोमिनेशन यहाँ फ्रैक्चर के ऊपर अपने मैप पे दिखाते हुए नजर आए हैं। मैप बाइंड पे फिर भी मुझे फील हुआ था कि DRX थोड़ा सा शट ऑफ हो गई थी, बट फ्रैक्चर के अंदर दे वर ऑलवेज इन द कमांड। फर्स्ट हाफ वाज इक्वल 6-6, बट जैसे वो पिस्टल राउंड जीता, बोनस राउंड जीता, ये कुछ स्पेसिफिक मोमेंट थे जिसके बलबूते पे वी कैन से दैट ऑन द मैप ऑफ फ्रैक्चर DRX was any day better than FUT in every aspect. एम पे बात करें, नो मोमेंटम पे बात करें, हर एक चीज उनके हिसाब से। अगेन ये चीज लाइक DRX का मैप पिक है, वी कैन एक्सपेक्टेड DRX टू विन, बट जिस फैशन में जीते हैं वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ ऐसे ब्लंडर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे थे फ्रॉम द साइड ऑफ फट। कई ऐसे पोस्ट प्लान सिनेरियोज जो फेवर में नहीं जाने चाहिए थे, दे गॉट इनटू द फेवर ऑफ DRX। कुछ ऐसे पिक्स जो होने नहीं चाहिए थे, दे गेट इनटू देम। DRX का एक कमबैक, जिस DRX को हम जानते हैं, जिस कोऑर्डिनेटेड पेस को हम जानते हैं, वो यहाँ देखने को नजर आता है। एंड दिस राउंड फ्रॉम बस बहुत ज्यादा यहाँ पे गेम चेंजिंग था, क्योंकि बकी एंड क्लासिक के चलते अपनी पूरी यहाँ पे क्या कहते हैं टीम को सपोर्ट देते नजर आए, वो राउंड भी कन्वर्ट कर चुके थे। यू नो ये जो राउंड अभी हमने हाल ही में देखा था, इसके अंदर थोड़ी गलतियां भी थी, नो डाउट। DRX won
but there was finally moment जहाँ पे DRX could have done better. Because अभी के लिए चलो ठीक है वो फ्रैक्चर जीत गए, but अभी टूर्नामेंट का रन खत्म नहीं हुआ है. मैं चाहूँगा कि दोनों टीम में से जो बेटर हो आगे जाए, but जो भी बेटर है जिसको मौका मिलेगा और खेलने का अपनी गलती पे जरूर काम करे. Because end of the day life is all about getting better. और आगे वाले मैचेस के अंदर और अच्छा खेलेंगे तो उनके लिए और उनके फैंस के लिए काफी अच्छा लगेगा. डेफिनेटली. एंड अभी यहाँ पे देखा जाए जिस तरीके से मैचअप रहा है पूरा, स्कोर लाइन काफी हद तक क्लोज ज्यादा हो सकती थी, बट अगेन वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर फेवरेट मैप. एक हेवन का मैप हमें अगला देखने को मिलने वाला है. पहला मैच 13-9 गया था फेवर में फट के, देन दूसरा मैच अब 13-8 रहा DRX के फेवर में. लेट्स सी हेवन के ऊपर क्या कहानी बनती है. अभी मैंने काफ़ी टाइम बिताया, ऑलमोस्ट 60 दिन से ज़्यादा, कि मैंने अपने साउथ एशिया रीजन के वैलोरेंट को देखा है. आई नो कि वो कैसे हेवन खेलते हैं, बट इट विल बी अमेजिंग कि क्या होगा अब हमारे अगले मैप हेवन के अंदर. बट उससे पहले मैं क्रैट और स्पार्डर्स हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के दूसरी पार आपका इंतजार करेंगे. This is Sadie. She's on Verizon, and she has the new My Plan, where she gets exactly what she wants and only pays for what she needs. She picks only the perks she wants and saves on every one, all with an incredible new iPhone. Get iPhone 14 Pro on us when you switch. It's your Verizon. Breathe for the feeling. 4, I'm feeling it inside. Come on. 1 for the loving. 2 for the vibe. 3, breathe for the feeling. 4, I'm feeling it inside. 1 for the loving. 2 for the vibe. 3, breathe for the feeling. 4, I'm feeling it inside. Come on. 1, 2, 3, 4. Inside, I feel it inside, 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 I feel it inside, 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 I feel it inside, inside, feel it inside, 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 inside.
the loving. Two for the vibe. Three for the feeling. Four, I feel it inside. Come on. One for the loving. Two for the vibe. Three for the feeling. Four, I feel it inside. One for the loving. Two for the vibe. Three for the feeling. Four, I feel it inside. Come on. One, two. Three, four. Welcome back, everyone, to VCT Tokyo. Here as we just saw DRX manage to stay alive. Breathe a sigh of relief, everyone. At the very least, we get one more game between these two teams. But if there's one way that you want to close out a game, Bren, I would have to say DRX looked rather clean at the end of that one. Yeah, I think it comes back to an earlier point I was trying to make, which was, it's you know, listen, we've criticized DRX for being quite rigid, structured. Yeah. The ideas are quite obvious of what they're running. It's one thing to know that, it's another thing to actually do anything about it, because they are really well thought out and they do have layers to it. I was a little bit annoyed that Foot weren't going for more of that like B main control on the second half, because they did it the one time and they only lost the round because Zest ended up clutching. And that's the thing, I feel like they had the right ideas, but it ended up going wrong for them. And that, I mean, look at the post plants. They only won 2 out of 9 of their retake attempts while playing full retake on A lot of the time. And even when they were anchoring, getting caught by the duelists coming from sand, like, they just couldn't figure out the right thing. But here, I'm talking about the crazy stuff that happened. Yeah, I mean, this was, what did you call it? John Wick on them. No, bro, this is Marcus Phoenix. I played so much Korean ranked and they are so Bucky pilled, it's unbelievable. But also, this situation, like Zest wins a 1v3. Yeah, this was it here. I mean, again, if Kiwi gets half there, I think they still win the round. Yeah, they do. But when DRX were forced to adapt and change that really rigid but solid game plan that they have in their post plant, they were really pushed. But yeah, it's too solid, I think, on that map. It's a really good idea that they have in mind when they play it. And here's RB's stats on the Neon. He's not going to be playing Duelist on map 1 or map 3, but here he is playing his classic character, probably the best Neon player in the world, and takes it to Kiwi. 6-0 in first kills to first deaths. Now, Kiwi was 8-0 on map 1, right? And he ended up being 3-3 here. So, like, you know, they had a Duelist that was able to step up, and what a difference it is having him there instead of Foxy9. And I know Foxy9 doesn't play the Neon, so it does work quite differently. Yeah. But Foxy9's always, like, way out in front compared to the rest of the team. RB tight with the utility, even though they're going for those all-in execs still. And again, it just comes down to, oh my god, look at what they're capable of when they've actually practiced and prepped and had the right idea of the timings, right, with this roster, because they practiced this a ton. This is the lock-in comp, man. Yeah, it is. It's nothing new that they're showing here on the stage at Masters. They ran one fake. Yeah, they ran one fake. That was quite cool. But they are not really showcasing anything else, no evolution of it, and it comes down to the fact that they have been splitting this timing and the roster the entire time. You're not getting that consistent practice, and it really has hurt them. But what does they that win mean the map for map out. 3? What does it mean for map 3? I think there's a couple of things to look forward to here, because Haven, I think, is kind of a middle ground for both of these teams. And we know Foot, they talk about it in interviews, they say it all the time, they're such a confidence-based, momentum-based team. And I think Kiwi's just had a bit of a bad game. The coaches were saying as well after that first map as well how important it is to get a couple of ones rolling as well and get snowballing. I think DRX are in a pretty good spot right now, actually, to try and close out this series. I think if you are DRX right now, you at some point you have to believe that this is possible, because you kind of go in that first game really just meandering about, not really finding much success, and then you start to see what the core, Josh, of what this team is capable of doing in map 2. Surely they're going into this Haven with confidence that they can close out the series. Not confidence that they'll win the tournament or like thinking too far ahead. I think they can genuinely believe in themselves to win this game, because they do have what it takes. Yeah, they definitely do. I mean, the problem is,
it just comes down to, I think, on game 1, the individual talent's all there, but their game plan was awful. Yes. So they're not able to do anything. Map 2, their game plan's pretty decent, and their individual play's excellent, so they get it over the line. Haven, I think that their game plan normally is looking quite decent. So I think I do favor DRX towards the end, and that's got to be gutting for Foot. The funny... Yo everyone, welcome back. This is VALORANT Champions Tour 2023 Master Tokyo. और क्या ही बेस्ट ऑफ 3 चल रहा है भाई. पहला गेम अपना मैप पे FUT जीतते हुए बाइंड में, उसके बाद DRX ने दिया कड़ा जवाब द फ्रैक्चर. और अब आखिरी में एक ही सवाल है कि हेवन कौन सी टीम जीत के जाएगी. और स्पार्टस अब है तो बिल्कुल तैयार है. स्पार्टस क्या आप तैयार हैं? डेफिनेटली एंड हेवन का मैप है, सो मजा बिल्कुल यहाँ पे आने वाला है क्योंकि अटैकर ओरिएंटेड गेम प्ले हमें बिल्कुल यहाँ देखने को मिलेगा. डिफेंसिव विन रेट तो वैसे भी इस मैप में बहुत ज्यादा कम है, एंड अटैकर साइडेड मैप को डिसाइडर मैप के अंदर देखने का मजा ही अलग होता है. नो डाउट. और ये हेवन हमारा वन ऑफ द ओजी मैप में से है. और जब ये गेम आया था, लोगों को जब इस गेम से मोहब्बत हुई थी, तो हेवन का एक बहुत बड़ा इनपुट था. हेवन हो गया, आपका बाइंड हो गया, एसेंट हो गया. तो उम्मीद है दोनों साइड को हेवन काफ़ी अच्छे तरीके से आता होगा. देखना ये कि किस अप्रोच से खेलेंगे. और अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमारी रीजन के अंदर कैसे खेलते हैं हेवन. मुझे देखना है कि जब पैसिफिक की #2 और EME की #3 टीम आपस में भिड़ती है, हेवन के अंदर कैसा कॉम्प और क्या अप्रोच रहता है. एक और चीज मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा. आखिरी जो मैप बैन था वो DRX के पास मैप बैन का ऑफर आया था. उसमें से उनके पास 2 ऑप्शन है, इधर बैन हेवन और बैन एसेंट. DRX ने एसेंट को यहाँ पे बैन करते हुए नजर आए थे, जो एक बहुत अलग सी कुछ ना कुछ चीज है क्योंकि एसेंट एक ऐसा मैप है DRX अभी तक पूरे पैसिफिक सर्किट में उसको पिक कर रहा था, लेकिन आज टोक्यो के अंदर एसेंट को बैन किया है इस टीम ने. बहुत कुछ अलग चल रहा होगा इनके माइंडसेट में इस समय. Oh yes, after winning the bind map, Foot no doubt एक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्राइम पोजीशन पे काफ़ी एक पॉजिटिव मेंटल ज़रूर होगा. बट अब PA में तो दोनों को चाहिए, दोनों टीम को चाहिए होगा. बट अभी के लिए व्हाट आई कैन सी कि जो एक बेसिक डिफॉल्ट हमेशा जो खेलते हैं, एक विंडो, एक मिडोस, एक C लॉन्ग, A शॉर्ट, A लॉन्ग, हर जगह. बट डिफेंडर्स DRX being aggressive, काफी आगे जा रहे. Fallen spotted one, he got dinged. Instantly 8 HP पे आ चुके हैं. अब पुश करने की जरूरत भी नहीं है, तो जो चाहिए था उनको मिल चुका है. Omen, but this guy Omen जो खेल रहे हैं अभी के लिए माको, इससे बचना पड़ेगा. अगर इस प्लेयर ने थोड़े से मैन्यूवर्स करे, things can go around. डेफिनेटली यहाँ पे कीवे अगर बात की जाए साइड के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जरूर है. कनकस का फोर्टनाइट ने काफी अच्छा इस्तेमाल, विल हिट द साइड. एंड अगर ये डिफॉल्ट प्लान और दिक्कत आ सकती थी, बट फेल इन सही टाइम पे यहाँ पे स्पाइक को छोड़ते हुए नजर आएंगे. और शॉक डार्ट के साथ वो काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. बट स्टिल जेस्ट के पास उनके रिकॉर्ड बॉट अवेलेबिलिटी है इस समय, एंड वो रीटेक के अंदर काफी ज्यादा अपनी टीम को मदद जरूर कर सकते हैं. एंड भाई माको की अगर बात की जाए, फ्लैंक के ऊपर है जरूर. मॉश इज स्टिल एक्सपेक्टिंग हिम टू कम ए शॉट, बट वो एक ट्रिपल फ्लैंक और हम कह सकते हैं क्वाड्रा फ्लैंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है. 2 प्लेयर ए शॉट से, 2 प्लेयर ए लॉन्ग से आते हुए नजर आ रहे हैं. मॉश का ये पोजीशनिंग उनको भारी पड़ता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का एंगल आपकी गन को पॉप आउट करता हुआ नजर आता है. एंड एक क्वाड्रा फ्लैंक बहुत इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करेगा DRX को. पहले राउंड में फिर से एक बहुत अच्छा रीटेक DRX यहाँ पे एग्जीक्यूट करके पिस्टल राउंड अपने नाम कर चुका है. आफ्टर विनिंग द पिस्टल राउंड इन अ डोमिनेटिंग फैशन, मुझे ऐसा लगता है कि FUT now they will be playing on back foot because it was a very aggressive approach from the DRX. Heaven जैसे मैप के अंदर getting so short, अच्छी मूवमेंट्स, बट नो डाउट it was a good round. मार्को विद द बर्स्ट, he got one साइड के अंदर एंटर करा, ट्रेड हुआ. अकेले RB थे जो प्लेयर पिक ऑफ हुए, बट बाकी सब they were standing strong. अब इस राउंड के अंदर वैंडल निकालना बिग कॉल भाई. ये बज़ की तो मैं दाद दूंगा भाई. पहले राउंड के अंदर रेज, फिर किल जॉय, नाउ जेट, सब प्लेयर की वैरायटी दिखा रहा है. अलग वर्सेटैलिटी यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं. एंड वो हर एक रोल को इतना अच्छे से निभा भी रहे हैं. जब आप किलजॉय पे शिफ्ट होते हैं, आपका वो पूरा एग्रेशन शटडाउन हो जाता है. आपको साइट एंकर करने हैं, फ्रैग्स के डिपार्टमेंट में थोड़ा पीछे रहना पड़ता है, बट बस हर एक चीज को प्रॉपर्ली करते नजर आ रहे हैं. इस बार भी ए साइड को लिटरली कह सकते हैं एंकर कर रहे हैं, बट अभी जो अब किलजॉय खेल रहे हैं वो ऑलरेडी एक पे कुछ टेकन जरूर करेंगे. बट रेक्स काफी अच्छा ट्रेड निकालते, बट माको ही स्टिल हैज द बैक साइड कंट्रोल. एंड ये बैक साइड कंट्रोल होल्ड करना हेवन में सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है जो अपने पास अभी भी माको ने रखा हुआ है. एंड द लॉर्ड स्मोक्स कम्स इनटू प्ले एज वेल. एंड द ट्रेडिशनल माको प्ले स्टाइल फाइनली आज के दिन में देखने को मिलने वाला जरूर है. बट द ट्रेड्स आर फॉलिंग बैक एंड फोर्थ. जेस्ट गेट्स अनदर वन फॉर हिमसेल्फ. नाउ मॉश एक बुलडॉग के साथ अकेले प्लेयर सर्वाइव करते हुए. इन्फॉर्मेशन
will get relayed and he will get shut down. एक काफी अच्छा एंड इको राउंड DRX अपने नाम करता हुआ नजर आएगा. ऑल्दो 2 वेपन जरूर यहाँ पे ड्रॉप हुए. RB के पास इनफ क्रेडिट्स नहीं होने वाले इस बाय राउंड के अंदर, बट इट इज डेफिनेटली इनफ क्योंकि एक बोनस राउंड को ये क्लासिक्स एंड फ्रेंजीज के साथ भी आराम से खेल सकते हैं. यू नो स्टैक्स तो फिर भी गोस्ट लेकर गए थे तो इतना नुकसान नहीं होगा, बट RB इस बोनस राउंड के अंदर ही स्टिक विद द बकी. इसका मतलब गराज या तो किसी पैसिव एंगल खेलना चाहेंगे. यस, थोड़े तुक्के सही हो जाते हैं, गराज के आसपास है और मे बी सी साइड पे कहीं क्लोज एंगल पे देख सकते हैं. बिकॉज बकी का फायदा ही तब है जब आप ऐसे नो क्लोज क्वार्टर्स के अंदर हो जहाँ पर पिक्सल दिखते ही यू कैन हैव दैट अप्रोच. गराज में अभी के RB उन्होंने होल्ड कर रखा है. ओह, डैमेज पड़ सकता था बट एक रीसेट, कंप्लीट डिफॉल्ट, कुछ अलग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि इम्पेशंस या इम्पल्स से दिखे. ऑलरेडी 2 प्लेयर्स जेस्ट एंड बज ए लॉबी पुश कर तो ए लॉबी के ऑलमोस्ट माउथ पर आ चुके हैं. वॉशपिट फेंका है, डिजी फेंका, डिजी कहीं अलर्ट नहीं हुआ. इसका मतलब साइड के बैक साइड पे ही यहाँ पर प्लेयर जिंदा हो सकते हैं. बट ये जो वेपन है, क्या ये वेपन काफ़ी रहने वाला एक लॉन्ग रेंज बैटल के लिए थे. जब रेटिंग की वे उनका टेलविंड एक्सपायर कर चुका है, साइड के अंदर फुल तैयारी है, आसान नहीं रहने वाला है ये. इट इज गोइंग टू बी हेल ऑफ अ राउंड फॉर श्योर. डेफिनेटली. एंड RB के पास यहाँ पे बकियान उनको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया था. विंगमैन हैज लेफ्ट हिम एंड RB 2 फ्रैग निकाल चुके हैं बकी के साथ. एंड एक और बार हमें बोनस राउंड या कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहा है कि RB जस्ट अपग्रेडेड टू अ फैंटम, शोस अनदर प्लेयर नाउ. एंड एक और बार बोनस राउंड में 4K यहाँ पे देखने को मिलता हुआ हमें, बट दिस टाइम फ्रॉम द हैंड्स ऑफ RB. एंड बकी के साथ जो 2 इनिशियल फ्रैग्स निकाले थे, आई गेस वो विंगमैन ने जो मिस आउट किया है इन्हें, वो बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है यहाँ पे फटी स्पोर्ट्स को. यू नो ये एक प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब आपने मतलब बहुत सारी चीजें जो आपने यूज ही नहीं करी. क्लोज रेंज के अंदर यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड दिस वाज अ डाई हार्ड राउंड. मतलब आप देखिए 40 सेकंड बचे, यू कैन हैव यूज्ड द टाइम. आप डार्क कवर के खत्म होने का वेट कर सकते थे. बहुत सारी चीजें आपने लिटरली तैयारी नहीं करी. आप दे वर होपिंग कि बोनस राउंड के अंदर मे बी दे विल नॉट अपग्रेड द गन, बट इस राउंड को हारने की वजह से आपने DRX की इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट दिया है. अब सोचिए सबके पास 4-4 हज़ार क्रेडिट्स हो चुके हैं. इसका मतलब अब 2 से 3 राउंड दे कैन अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स. और दे जस्ट स्टॉम्पिंग. क्या ही हो रहा है? पहला राउंड बाइंड हारने के बाद मुझे लग नहीं रहा था कि DRX वाइब पे है, बट गेम 2 एंड गेम 3 DRX इज ऑन अ रोल. परफेक्ट फ्लॉलेस राउंड यहाँ देखने को मिलता है. अभी भी लाइक अगर देखें तो जो कॉम्पोजिशन है फट का, बाइंड पे भी इन्होंने फेड का इस्तेमाल किया था जो एक्चुअली ऑफ मेटा कॉम्प है एज कम्पेयर टू अदर एजेंट्स. हेवन के ऊपर भी गेको का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बट गेको को उसके पोटेंशियल पे अभी तक नजर नहीं आया है खेलते हुए. पिछले राउंड में भी डिज्नी का हमें इस्तेमाल देखने को नहीं मिला. इस राउंड के अंदर भी अर्ली इन्फो के लिए ऑन द ए लॉन्ग रीजन एक स्मोक जरूर डाला है आपने, बट उस स्मोक को क्या कोई प्लेयर पुश कर रहा है, क्या कोई प्लेयर उसको पैसिवली होल्ड कर रहा है, आप डिजी के साथ वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट वो चीजें भी यहाँ पे फट नहीं कर रहा है. सिर्फ गेको की जो एबिलिटीज है उसके अंदर से मॉशपेट एक ऐसी चीज का अभी तक प्रॉपर यूज मिला है टू क्लियर द प्लेटफॉर्म. उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे एबिलिटी यूज नहीं आई है. नो ये बात तो है, बिकॉज गेको एक ऐसा प्लेयर है जो पनपता है, जो खुश होता है, जो अच्छे रिजल्ट दिखाता है जब टीम के पास मोमेंटम हो. अकेले उस मोमेंट इट्स पॉसिबल, बट RB को एक सपोर्ट मिला है उनके टीम के द्वारा. एक वन साइड स्मोक, बट ए फॉल्ट टाइम उनको जरूर स्टन कर देगी. थोड़ा सा डैमेज दिया विद द टरेट, बट गराज RB को ध्यान देना पड़ेगा. वो साइड के अंदर थोड़े से अकेले, उनको अपने टीममेट्स की जरूरत है. ये आया आपका क्रैशीज और बच गए लास्ट मोमेंट, बट यस कीवे विद अ मल्टीपल 2 फ्रैग निकाले. अब 2 प्लेयर आएंगे. इट्स अ 2v4 सिचुएशन. अगर DRX राउंड के अंदर जीतती है इट बी अ गुड कम बैक, बट नो जैसे ही सपने पिरोए, सपनों पे पानी फेर दिया यहाँ पे फुट के प्लेयर्स. And again, like, इस बार थ्रैशिस के साथ काफी अच्छे तरीके से राउंड के अंदर अपने लिए बढ़त भी बनाई. एंड ऑल्दो कोई प्लेयर डिटेन नहीं कर पाए थे, बट देन इट इज जस्ट कीवेज इंडिविजुअल ब्रिलियंस. रैप अप करा, प्लेयर्स को पिक आउट किया. एंड अब जेश को अगर देखें 7300 क्रेडिट्स है इस प्लेयर के पास. सेव कर दिया कोई मतलब नहीं बनता. ही जस्ट हैव टू गो इनटू द साइड, ट्राई टू एटलीस्ट टेक डाउन 2 प्लेयर्स, क्योंकि मौज ऑलरेडी सिर्फ 1 HP में जो लॉन्ग का रीजन पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं. तो अगर यहाँ से भी स्प्रे डाउन कर पाए 2 प्लेयर्स को तो वो इनफ रहेगा, जो एक्चुअली काफी पैसिव खेल रहे थे. बट ये चीज नहीं करनी चाहिए. आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा रखा है, आप अगले 4 राउंड लगातार फुल बाय कर सकते हैं, बट ही इज गोइंग फॉर दैट सेव. ये थोड़ा क्वेश्चनेबल डिसीजन है क्रैट. यू नो बिकॉज सीन ऐसा था कि हारने की वजह से 1900 क्रेडिट्स तो मिलेंगे, ठीक है. इसका मतलब 73 पर 9300 आपके हो जाते हैं 9000 के अराउंड.
ठीक है, फालतू ही हो जाते हैं बकायदा। मतलब 9200 9000 हमारी लिमिट है। तो ये जो 2900 की फैंटम है ना, ये बचाने की कोशिश करी गई है और वो अब ये मेरे हिसाब से सेव करना वाज डिसेंट, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता, बट सेव करने से थोड़ा तो इकोनॉमिक बूस्ट होगा ही होगा। अब अपने टीममेट को वो ऑपरेटर भी दे सकते हैं अगर देना चाहेंगे, बाकी टीम को। अभी देखिए उन्होंने ज्यादा नहीं करा, अभी भी जेस्ट के पास अभी भी डिसेंट क्रेडिट्स है। उन्होंने एक वैंडल फैंटम दिए किसी, बट बाकी चीजें अभी भी कंट्रोल के अंदर है। फाइट नहीं ली, आर्मर डैमेज नहीं था, चीजें अभी भी बेहतरीन है। फिर से जो लास्ट राउंड के अंदर करी थी, गराज का कंट्रोल लिया, फोर्स आरबी, बट लास्ट टाइम उनके पास जो अल्टीमेट थी गेको के पास, बिकॉज उस अल्टीमेट ने बहुत कियोस क्रिएट करा था और काफी सारे एंगल्स अनचेक रह गए थे और उसका फायदा उठाया था कीवे ने। Exactly, and इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, so they have to just play on the basic utilities and देखना पड़ेगा क्या ये जो फास्ट बी हिट प्रेप कर रहे हैं वो कितना ज्यादा वर्कआउट करता नजर आता है, क्योंकि केवे को हर जगह से यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है, बी इट टर्रेट, बट डिस्पाइट ऑल दिस एक काफी जैसा अपने लिए अपड्राफ्ट किया है। फ्रैग निकालेंगे एंड पहले भी यहाँ पे आर्मी को भी शटडाउन करते नजर आने वाले हैं। एक एग्रेसिव प्ले स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर जेस्ट एंड माको मिलके पूरी की पूरी फट की टीम को एलिमिनेट कर चुके हैं। बस आखिरी प्लेयर को भी यहाँ पे क्लीन अप किया जाएगा। माको बेयरली सर्वाइविंग, 1 HP पे बचे थे, लेकिन अपना काम यहाँ बखूबी निभा गए। जो फाइट एग्जीक्यूट करने के लिए लेने गए थे, लाइक एलिंग को पुश करना फट की तरफ से, एक बहुत खराब डिसीजन रहा था वह। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि अगर तो यूजली क्या होता है, आप सबको पता है, जो पहला बंदा साइड पे घुसता है, इफ यू अप्रोच टुवर्ड्स डी और आपके दिमाग में है स्पाइक का प्लांट, देन एक शॉक डार्ट आता है बेसिक प्लांट पे, जहाँ से जितनी भी किलजॉय की यूटिलिटीज होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। अगर वहाँ पे नैनो सॉन्ग ग्रेनेड नहीं होता, देन कीवे को अपड्राफ्ट नहीं करना पड़ता। ऑल्दो कीवे गॉट 1, बट वो प्लांट करके मिड कोर्टयार्ड के रीजन पे खेल सकते थे और बाकी स्पैम कर वो पोस्ट प्लांट भी खेल सकते थे। एलिंग पे स्मोक नहीं आया, वहां पर मल्टीपल फ्लैगिंग हुई, 2 प्लेयर ने 4 प्लेयरों को ठिकाने लगाया और आखिरी में बस विद ऑपरेटर। ये एक बेसिक फंडामेंटल्स की गलती है और एक कॉमन अप्रोच रहती है। जब ऐसे के अंदर कोई भी बी एग्जीक्यूट करता था, एक सोवा का शॉक डार्ट आता था टू कैंसिल आउट ऑल द अलार्म बॉट और मे बी नैनोस्टॉर्म ग्रेनेड, वो कैंसिल आउट करके वो प्लांट करते थे क्लाउड बस के अंदर। दे ऑल कम बैक टू द सेफ्टी विंडो, मिड कोर्टयार्ड और गराज से लॉन्गर रोटेशन कर दे यूज्ड टू प्ले पोस्ट प्लांट। बट इस सिचुएशन के अंदर दे वेंट फॉर द फाइट। इकोनॉमी खराब है, आप शील्ड्स खराब है, आप यूटिलिटी कॉम्प्रोमाइज कर आगे आए हैं, ऐसी चीजें आप कर ही नहीं सकते। हेवन के अंदर ट्रिपल साइड्स हैं, ऑलरेडी अटैकर्स को एक मेजॉरिटी बूस्ट मिलता है। अटैकर्स के अंदर डिफेंडर्स ने एडवांटेज दे रखे भी, 5-1 का स्कोर लाइन है। अगर अभी नहीं रोका DRX को, देन आई एम सॉरी बट फुट के लिए काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। Exactly, and ये छोटी छोटी गलतियां आप नहीं कर सकते हैं, लाइक खासकर आज के दिन तो, एंड इस मैप में भी, क्योंकि डिसाइडर मैप है, आप ये मैप हारेंगे, आप सीधा इस टूर्नामेंट से टोक्यो से बाहर होते हुए नजर आने वाले हैं। इस बार भी अगर देखें तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वे निकालना चाहते थे, आरबी को बिना कोई प्रॉपर यूटिलिटी के गए अंदर जरूर थे, एंड वो से शटडाउन होते हुए नजर आएंगे। एंड कप्तान को अगर देखें तो अब फॉल्ट लाइन यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। अगर ये फॉल्ट लाइन सिर्फ 5 सेकंड पहले आती तो फर्स्ट ब्लड यहाँ पे कीवे के पास रहता है, एडवांटेज फट क्रिएट कर सकता था अपने लिए। Maybe they wanted to get them off guard. उनको पता है कि RB is playing that position, फायदा उठा सकते हैं, बट गराज का पूरा कंट्रोल डिनाई करने के बाद कमिंग बैक टुवर्ड्स मिड कोर्टयार्ड एरिया, बट वहां पे देखिए अलार्म बॉट है। अब इस अलार्म बॉट को तोड़ने के लिए आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट स्टॉक, बट मुझे लगता नहीं कि इतना आसान रहने वाला है। बस गॉट स्पॉटेड, एलिमेंट एक्टिवेटेड नहीं है और मे भी कर लिया होगा, स्पॉट हुए हैं अब एक एक करके। ये देखिए व्हाट इज दिस इज ब्लंडर। 3 फ्रैग्स निकाले स्टैक से। हाँ, he went to the 38% HP, बट अब और क्या, एक बाय राउंड को परफेक्टली यूटिलाइज करे बिना यहाँ पे 14 इस राउंड के अंदर बैकफुट। DRX they have made the situation कि ये पूरा मैप एक चोक सिचुएशन बन चुका है। क्या माहौल बना रखा है उन्होंने डिफेंस साइड के अंदर। दे आर नॉट अलाउइंग अटैकर्स कि वो डिफेंडर साइड में कहीं पे भी आकर ओवरस्टे कर सके। ऐसा ही कुछ हमें बाइंड के अंदर देखने को मिला था जब DRX ने अटैक को स्टार्ट किया था। बिल्कुल डिसओरिएंटेड पुश देखने को मिल रहे थे एंड फट वाज जस्ट डोमिनेटिंग देम। बिल्कुल उसी ग्लिम्सेस अब हमें यहाँ पे हेवन पे देखने को नजर आ रहे हैं। आई गेस यहाँ पे आरबी को पुशिंग करना चाहिए, डजंट मैटर आरबी आप टेक डाउन किए जाते हैं, आपको फैलिंग को यहाँ पे टेक डाउन करना है। एंड
फाइनली करते हुए भी नजर आएंगे यूपी के साथ से, बट वो वेपन ड्रॉप करवाना यहाँ पे आवश्यकता थी, क्योंकि अब एक प्रॉपर सेव राउंड आएगा, कोई भी हीरो फैंटम या वैंडल नहीं रहने वाली फट के पास। एंड अगर आपका खुद का वेपन ड्रॉप हो जाता है, डजंट मैटर, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 5-6 हज़ार से ऊपर के क्रेड्स पड़े हैं, आप जितनी चाहे उतनी कंस कर सकते हैं इस राउंड के अंदर। एंड मल्टीपल 3-4 राउंड में वो इकोनॉमी मेंटेन भी होने वाली है। एंड इस बार भी अगर यहाँ देखा जाए तो ऑपरेटर के साथ फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, एंड जिस तरीके से यहाँ पे अभी DRX डील भी कर रही है, वो लगता नहीं है कि ऑपरेटर कोई जवाब है यहाँ पे फट के पास। आप ऑपरेटर पे फंसते स्पार्टन भाई, यहाँ पे ये देखिए 5 बड़ी अल्टीमेट, क्या नहीं है DRX के पास। आर्थिक स्थिति बढ़िया है, मानसिक संतुलन बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग। यहाँ पे की अगेन ही वाज कॉम्प्रोमाइज, यूटिलिटी से उनको डिसेबल करा, गॉट पनिश, एंड दिस इज अ थर्ड टाइम, मे बी अ थर्ड टाइम इन द लाइन इन द रो कि वो कुछ कर पाते उससे पहले ही गॉट डेसिमेटेड। ए साइड के अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव जा चुके हैं, बट कुछ करते उससे पहले जेस की जो फैंटम थी उनके मस्तिष्क में गोलियां भर चुकी थी। फिर से मैन एडवांटेज, सब कुछ उनके फेवर में, और एक भी अल्टीमेट काउंट नहीं हुई है। ये सब रीटेक में होंगी। मॉश की जो लॉकडाउन आएगा उसके हंटर फ्यूरी है, ये जो बस का ब्लेड स्टॉर्म है वो यूज होगा डेस्परेट मेजर्स के लिए। स्टैक्स का रोलिंग थंडर रीटेक के अंदर होगा, एक तो माको का अल्टीमेट, हर एक अल्टीमेट से दे कैन क्रिएट ब्यूटीफुल स्टोरीज इन हेवन। डेफिनेटली यानी 5v3 का सिनेरियो है, बट लेट्स सी वो अल्टीमेट को इस समय इस्तेमाल करते भी है, यानी क्योंकि अभी तक जिस तरीके से प्लेयर्स गैदर हो रहे हैं हेवन के ऊपर, आई गेस दे आर गोइंग फॉर द ड्राइव पिक, यानी आफ्टर शॉक की एबिलिटी, दिस इज परफेक्ट, अंडर हेवन के लिए होता हुआ नजर आएगा। ये अभी रिसेंट डेज के हमने अंदर देखा है कि जो फॉल्ट लाइन आता है उसके बाद वो अंडर हेवन का आफ्टर शॉक बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको। एंड अगेन वही चीज है, वही कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हुए बिना कोई मेजर अल्टीमेट को यहाँ पे यूज करे एक और सक्सेसफुली DRX अपना 7वां राउंड जीत चुका है। तो यहाँ पे बज को एज अ बेट यूज करा, काफी अटेंशन ग्रैब करी बज ने, एंड इट वाज अ 3v5 सिचुएशन। दे जस्ट लॉस्ट वन प्लेयर एंड दे टुक डाउन एवरीवन फ्रॉम द फुट। यही साइड का अच्छा क्रॉस फायर था, अनफॉर्चुनेटली वो क्रॉस फायर वर्कआउट नहीं करा। मैन एडवांटेज का फायदा उठाया और एम पे भी उनको शय और मात दी है। DRX थोड़ा सा लेट जागे, बट जब जागे ये प्लेयर, अब ये टीम just playing fantastic। अब इस राउंड, ये राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये राउंड भी नहीं निकाला देन बहुत एग्रेसिव हाफ हमें देखने को मिलने वाला। जैसा यहाँ पे चल रहा है कि 10-2 या 11-2 तक भी शिफ्ट हो सकता है, बट एक चीज जरूर है कि फट ने जो अपना कॉम्बिनेशन बनाया है गेको एंड ब्रीच के साथ, उसको उसके एबिलिटीज पे नहीं खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग वे डिफेंसिव विद द कॉम्बिनेशन दे हैव, लाइक एक बहुत कॉमन जो कॉम्बिनेशन रहते हैं एबिलिटीज के, इन दैट के जेट जैसे ही अपना अपड्राफ्ट और डैश वाला सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, ब्रीच का फ्लैश जाता है बैक साइड पे, एंड एग्जैक्ट सेम टाइम पे गेको अपने डिजी को थ्रो इन करता है। कोई भी प्लेयर जो भी साइड खेल रहा होगा, हर कोई यहाँ पे फ्लैश होता हुआ नजर आता है, एंड यू आर एबल टू गेट अ फ्री साइड, फ्री फ्रैग्स यहाँ पे आपका जेट प्ले सिक्योर कर सकता है इस छोटे से कॉम्बिनेशन के चलते, जो अभी तक यहाँ पे फट की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है। दे आर गोइंग फॉर जस्ट ड्राई पीक्स, इंडिविजुअल बैटल्स, एंड कीवे की अगर बात की जाए इस बार जरूर फ्रैग निकाला है, बट कप्तान को ट्रेड ऑफ ही करना पड़ा है। तो ये छोटी छोटी चीजों से यहाँ पे रन डाउन कर रहे हैं, वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। दे हैव लिटरली ट्रिपल फ्लैशेस, एक पैरानोया आएगा जरूर, लेकिन वैल्यू क्या मिलने वाली है उसकी अभी तक कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलाइज करने के लिए प्लेयर आगे थे नहीं। तो क्रॉस फायर सेटअप रहेगा साइड पे, DRX फिर से डेसिमेट करता हुआ नजर आएगा फट को। स्मार्ट से आपने नोटिस करा कि यहाँ पे एम डिपार्टमेंट के अंदर तो खत्म कर दिया है, पीक से लेके फ्लिक्स एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्टेड, और वो भी सीधा सर पे। और अभी बस का जो टेलमेंट था एंड दैट क्लाउड बस, वो कीवी के फेवर में था। गलतियां हो रही हैं, बट अच्छी बात ये है कि DRX की टीम दे आर कंपनसेटिंग वेरी नाइसली जो भी चीजें हो रही हैं, बट इफ दे नीड टू टेक टाइम आउट, एंड यस इट इज टाइम आउट ले लिया गया है। अपने कोच साहब के साथ सलाह मशवरा करेंगे कि भाई क्या गलतियां चल रही है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज DRX उनको पनपने का मौका भी नहीं दे दिया। they are looking really good after that bind, but no fracture ने पूरी काया पलट करी, और हेवन तो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं जो DRX के नाम पे है। और अभी जो ग्रुप बी के हमारे सेकंड क्वालिफाइड टीम है DRX, ह्यूज चांसेस। आई गेस वो पैसिफिक की जो टीम है ये बिल्कुल अब आगे जाने वाली लग रही है, क्योंकि जो मोमेंटम जिस तरीके से फट ने स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं वो बाइंड का जो एग्रेशन था वो धीरे धीरे फ्रैक्चर में कम हुआ, और हेवन तक आते आते बिल्कुल ही ठंडा पड़ चुका है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके का हाफ चल रहा है 11-1 के ऊपर खत्म हो सकता है, 9-1 का स्कोर लाइन तो अभी यहाँ पे बन चुका है। बाय राउंड अब वापस नहीं रहने वाला है यहाँ पे
फट के पास। सो अगेन 10वां राउंड हम कह सकते हैं कि ऑन बोल्ड आने वाला है, एंड देन जितने अल्टीमेट्स अवेलेबल है डीआरएक्स के पास वो 11वां राउंड भी निकाल ही लेंगे। इट इज लुकिंग लिटरली वन साइडेड मैच। अल्टीमेट्स तो मेरे ख्याल से एफडी कराने वाले हैं ये अल्टीमेट को। और हर एक प्लेयर देखिए ना, एवरीवन 9-1, 8-1, 8-3, 8-4, 8-4, और वहीं पर कप्तान का अभी तक खाता तक नहीं खुला है। दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। और मतलब मैं ये बोलता हूँ कि भाई हाँ टैग्स हैं, स्टैट्स हैं, बट थोड़ा तो आपको लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ेगा। बिना लेफ्ट क्लिक दबाए चीजें कभी भी आसान नहीं रहने वाली। फॉल इन गट्सी प्ले, साइड के अंदर उन्होंने टेलीपोर्ट करा और एक एक करके इस चेंजिंग द मोमेंटम, 2 बड़े फ्लैग निकाल के साइड का पूरा कंट्रोल छीनने की कोशिश थी, बट उतनी देर में जो अटैकर्स हैं कमिंग टू द बी साइड, बट ये होगी असली प्रॉब्लम। आरबी ने पिक ऑफ निकाला, बस को डैमेज देने की कोशिश थी, बस काफी पेशेंटली यूज ग्रेट स्टॉर्म, एक कॉल फ्रैग, ओह माय गॉड ब्यूटी, ओह माय गॉड। आई रिमेंबर इस टीम के अंदर एक प्लेयर है आरबी विजन स्ट्राइकर के टाइम पे, ये प्लेयर जब जेट का जो टेलविंड था जो इंस्टेंटली छूटता था, यूज्ड टू क्रिएट वंडर्स विद ब्लेड स्टॉर्म एंड टेलविंड, बट बस जब पता है टीम एक ऐसा जेट है, उसके होते हुए भी ऐसा गिल पे दिखाना लाजवाब, बेहतरीन, सुंदर, खूबसूरत, मजेदार। क्या ही यहाँ पे परफॉर्मेंस आती हुई, अगेन एक बहुत बढ़िया एडवांटेज क्रिएट कर लिया था फट ने, लगा था कि शायद जिस राउंड की दरकार है वो एक थ्रिफ्टी के रूप में उनको मिलता नजर आएगा, बट अगेन बज की ब्लेड स्टॉर्म के सामने शायद ये ठंडी बढ़ती हुई नजर आई। एंड कप्तान अपने रोलिंग थंडर भी इस्तेमाल कर चुके थे, बट जब से पहले को हिट होता उससे पहले उन्हें पिक ऑफ कर लिया गया। इस बार भी एक फास्ट बीट करना चाहते थे, बट जो रीड है यहाँ पे वो बिल्कुल ऑन पॉइंट होता है। कप्तान को फिर से शटडाउन यहाँ पे किया जाएगा बिना कोई फ्रैग लिए, उनको बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार किवी को बैक फ्रैग, तीसरा फ्रैग मिलता हुआ नजर आने वाला। अगेन ही इज ट्राइंग ऑल ही कैन टू गेट दिस फ्रैग्स। 2v2 का सिनेरियो अल्टीमेट से अवेलेबल है दोनों ही प्लेयर्स के पास। ही हैज द ब्लेड स्टॉर्म, बॉश के पास यहाँ पे उनके लिए लॉकडाउन था, बट जेश ने उससे पहले उनको पिक ऑफ कर लिया। नाउ द पोजीशन इज रिवील्ड एज वेल। इस 1v2 को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल। 10वां राउंड डीआरएक्स ऑन बोर्ड यहाँ लगा चुका है। You know, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बज एंड एवरीवन फ्रॉम द टीम डीआरएक्स दे लुकिंग सुपर कंफर्टेबल, और आई थिंक इट्स ओवर। क्या कहते हो स्पार्टन? इज इट सेफ टू से कि इट्स डन एंड डस्टेड? तो हेवन के अंदर डिफेंडर साइड से इतनी एग्रेसिव स्कोर लाइन, ये क्या हो रहा है? इन्होंने लिटरली मतलब सब खत्म कर दिया है। एफयूटी नॉट फीलिंग गुड फॉर देम। चलो डीआरएक्स के फेवर में 2-0 ना सही, एक 2-1 जरूर आता हुआ नजर आ रहा है, वो भी डोमिनेटिंग फैशन के अंदर, क्योंकि ये जो 10-1 का स्कोर लाइन है ये इतना आसान नहीं है पुल आउट करना। एंड खासकर आप एग्जैक्टली हेवन के ऊपर डिफेंडिंग साइड पे देन दिक्कतें बिल्कुल रहती हैं। ट्रिपल साइड में आप मल्टीपल फेक टीम चल करते नजर आती हैं एंड दिक्कतें बढ़ती ही जाती हैं। बट इस बार भी जितनी एबिलिटी यहाँ पे फटने डाली थी उनको ट्रेड ऑफ किया जाएगा, एंड कीवे के साइड एंटर होने से पहले ही उनको फिर से शटडाउन किया। माको जो पहले मैच में बिल्कुल डोमिनेट हो रहे थे, अब यहाँ डोमिनेशन दिखाते नजर आ रहे हैं। बैक साइड कंट्रोल उनके पास अभी भी मेंटेन्ड है। 1v3 फॉर मॉड, द स्पाइक इज डाउन इन नो मैंस लैंड, एंड इनके लिए ये एग्जीक्यूट कर पाना इम्पॉसिबल हो चुका है। 11-1 का मैसिव स्कोर लाइन डीआरएक्स पुल ऑफ करते हुए नजर कामयाब होते हुए। वन साइडेड डोमिनेंस भी इस परफॉर्मेंस के लिए कम रहेगा। यू नो, मुझे अभी भी याद आ गया आरबी का जो बक्की वाला राउंड था, वहाँ से चीजें खराब हुई थी भाई। जो बोनस राउंड चेंज करा था एंड दे वेंट फॉर द एग्रेसिव हाफ, जस्ट अमेजिंग। एक एक करके मतलब देखिए ना, आरबी के भी क्या स्टैट चल रहे हैं अगर एक बार देखने को मिलेंगे। बिकॉज डिस्पाइट लूजिंग दे आर स्टन्ड, दे डोंट नो व्हाट टू एक्सप्रेस, हाउ टू एक्सप्रेस। दे आर हैप्पी फॉर द जर्नी जो अभी तक उन्होंने कवर करी है। बिकॉज इतना आगे आना भी बहुत बड़ी बात है। आप यू नो प्लेइंग ऑन द मास्टर स्टेज, it's a dream for many sport players। हाँ ठीक है, इस बार वो जर्नी के अंदर आप हासिल नहीं कर पाए, बट आई होप कि आने वाले टाइम पे जो टूर्नामेंट्स आएंगे, ऑफिशियल इवेंट्स आएंगे, वहाँ पर ये टीम कुछ अच्छा करके आए, इन गलतियों से कुछ सीख और इम्प्रूव करे। एग्जैक्टली लाइक प्लेयर्स ने अपने ब्रिलियंस तो दिखाए जरूर है, कहीं ना कहीं टैक्टिकल कॉम्बिनेशन में भी कमी है, बिकॉज उनके पास कोई रेकॉन एबिलिटी इस समय नहीं है, कोई ड्रोन एबिलिटी नहीं है। ऑल दे गॉट आर जस्ट फ्लैश एबिलिटीज। गेको के पास यहाँ पे डिजी देन पैरानोया, ये फ्लैश एबिलिटी से कॉम्बिनेशन अगर बनाते तो कहीं ना कहीं चीजें बेटर होती है उनके लिए। बट फॉर नाउ 11-1 का अटैकिंग हाफ हारने के बाद सेकेंड हाफ में तो लाइक अगर आप कमबैक करना भी चाहें देन वो एक इतना ज्यादा प्रेशर सिचुएशन है कि आप करेंगे कैसे। 11 राउंड का लीड
स्पीड कैसे यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में से चल रही होंगी। लाइक मे बी कुछ ऐसा कमबैक जो हमने लाउड एंड फैनाटिक के मैच में देखा था, कुछ ऐसा अगर यहाँ से पुल आउट कर सकती है ये टीम, एक मिरेकल यहाँ पे अगर पुल इन किया जा सकता है तो क्या ही बात रहेगी। बट जैसी सिचुएशन लग रही है, DRX एक 13-1 के स्कोर लाइन की तरफ बढ़ रहा है। क्या ही होगा, कैसे ही करेगी। पिस्टल राउंड जीतना पड़ेगा, फॉलो अप राउंड कंफर्टेबल विन, बोनस राउंड के अंदर तबाही चाहिए, कांस्टेंट शट चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि DRX ने सोचने से पहले पनिश करा, तभी जाकर इतना बड़ा कमबैक पॉसिबल है। बिकॉज 9-3 स्टिल मैनेजेबल, बिकॉज पिस्टल जीते, तीसरे राउंड तक आपकी अल्टीमेट आएगी, अल्टीमेट आपने छोकी राउंड के अंदर राउंड कंप्लीट हुआ, बट द हाफ इज 11-1। 11-1 पिस्टल राउंड हाथ से ही कहानी देखा है। लाइक आई डोंट थिंक इससे बड़ा स्वैप हमने देखा है अभी तक पूरे लाइक टोक्यो में और मे बी इन द पैसिफिक सर्किट। 11-1 का स्कोर लाइन, आई थिंक मैक्सिमम जो मैंने कास्ट में भी देखा था वो 10-2 का स्कोर लाइन था पेपर एक्स के फेवर में। 11-1 एक अलग ही हिस्ट्री है। वो जो 10-2 का भी था उसके अंदर कमबैक हुआ था, और पेपर एक्स नहीं, वो डोमिनेंट, इट वाज पेपर एक्स डोमिनेंट परफॉर्मेंस। सो अब स्पार्टन साहब ने भी बोल दिया है 10-2 के बाद, इट्स क्वाइट क्लियर। बट जब तक 13 राउंड नहीं होते हम विजेता घोषित नहीं कर सकते। दोनों टीम को भी पता है दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल। DRX को चाहिए 2 राउंड और FUT को चाहिए 12 राउंड, मतलब 10 राउंड का फर्क आ जाएगा। यहाँ पर भी दिल्ली दूर है FUT के लिए, बट नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम एक पॉजिटिव होप के साथ बढ़ेंगे, उम्मीद करेंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे मी एंड स्पार्टस वी रूटिंग फॉर गुड वैलोरेंट, वी द बेस्ट टीम विंस। अब कौन सी बेस्ट टीम होगी वो कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनटों में, कुछ राउंड्स में आपको जरूर पता चल जाएगा। क्या ही प्ले यहाँ पे माको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही राउंड में लोकिंग स्मोक डाला बी साइड पे एंड वो फास्ट हिट करने के लिए जाएंगे जरूर, बट जिस तरीके से फिटनेस सेटअप बनाया था, ट्रिपल प्लेस में बी साइड वैल्यू प्रोवाइड करेगा। रैंक्स यहाँ पे 2K के साथ अपने लिए गैराज करना स्टिल अलाउ करा जाएगा, लेकिन बस with his 3K of himself gets taken down by the outshoot, but now एक 1v2 scenario Zesh के लिए रहने वाला है। Spike is still down by QEK। पिस्टल राउंड यहाँ पे कन्वर्ट करा दिया फट के लिए। कीवी ने बचा ली इज्जत। Because that fault line, अगर RB को fault line नहीं पड़ती ना स्टार्टिंग के अंदर, वो A-Link का प्ले जरूर खत्म करते। Because it was classic versus Frenzy, और आज के टाइम पे Frenzy का क्या ही दबदबा चल रहा है। बट बज ने पूरी कोशिश करी, he got 1, he got 2, टेलविंड करके वापस जाना चाहते थे। आई थिंक लेफ्ट की तरफ टेलविंड करते तो साइड की तरफ जाते, एक आधा सेकंड और मिलता जीवन जीने के लिए, बट उन्होंने करा जो डैश बिल्कुल पीछे की तरफ, और वहीं पर आफ्टर शॉक इंतजार कर रहा था। बट शुरुआत हो चुकी है, जो चीज हम दोनों को चाहिए स्पार्टस, उसकी शुरुआत हो चुकी है, एक अच्छी वैल्यू की शुरुआत हो चुकी है। क्या कमबैक कर सकेंगे, बट ये टैग हो चुके हैं बस की मार्शल से, और मार्शल एक बहुत डेडली वेपन होती है फॉलो अप और बोनस आउट। Exactly, like it just an operator in your hands, one shot to the body, it is good to go। लेकिन अभी भी वो डैमेज जरूर दिया है एंड स्टैक्स barely सर्वाइव करने में यहाँ पे निकल जरूर जाएगा। टर्रेट से भी यहाँ पे शटडाउन हो सकता है, तो you have to keep that in mind। बट अगर यहाँ कप्तान की बात की जाए, काफी अच्छा ADS एंगल रखा जरूर है उन्होंने, एंड अगर फ्लैश नहीं होता है तो बिल्कुल प्लेयर पे भी शटडाउन करने में कामयाब रहेंगे। आरबी का फेक देन, उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए जेश की तरफ से क्लासिक के साथ ट्राई कर रहा है कप्तान ऑल्दो, रेड करने में कामयाब, गेट्स टू गेट्स द थर्ड एंड फोर्थ एज वेल। एक एस यहाँ पे आ सकता है जरूर उनके साइड पे, प्लेयर के पास मौका है अभी एंड ही विल गेट द एस। पहले हाफ के अंदर जो प्लेयर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, वो सेकंड हाफ आते ही एस सिक्योर करने में कामयाब हो चुका है। No, he's happy, he's enjoying the moment। उनको पता है कि अभी अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, खत्म हो चुका है उनके लिए। बट स्टिल ऐसे राउंड्स मोटिवेशनल काफी ज्यादा होते हैं, और आई एम सॉरी मैंने कैसे बोल दिया कि यहाँ पर खत्म हो चुका है, चीजें अभी भी बरकरार टिकी हुई है, चीजें बदल सकती है, बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं। They just need to play flawless, everything should be on point, on toes, alert रहना पड़ेगा, react अच्छा करना पड़ेगा, retake, everything should be flawless। Let's see क्या DRX इस चीज के अंदर कुछ बदल पाती है, बट काफी जल्दी रोलिंग थंडर यूज करा गया एंड दे वांट टू मेक श्योर कि वो यहाँ पर DRX को पिन डाउन कर सके। बट टाइमली DRX एवरीवन वेंट बैक टू द अटैक रिस्पॉन, बिकॉज़ दे नो कि ये हैवी कमिटमेंट है, हैवी कमिटमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए उनको काफी आगे आना पड़ेगा, अपनी कहते हैं ना रेखाओं को क्रॉस करना पड़ेगा, लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। बट टाइमली रहते हुए उसको रिट्रीट करा, और जो भी एडवांटेज उनको चाहिए थी इट गॉट डिसिमेटेड ओवर। लेकिन इतना अच्छा यहाँ पे मिड सेंटर पुश बनाया था, हर एक प्लेयर को स्पॉन पे पुश करने में कामयाब हुए थे, बट उसके बाद
खुद के साइड्स पे जाना, वो भी तीनों ही जगह पे थोड़ा सा मैं कहूँगा एग्रेसिव और खेल सकते थे बिकॉज दे हैव लिटरली नथिंग टू लूज. कुछ एक्स्ट्रा प्लेस को अगर एम के ऊपर मेंटेन रखते तो शायद से कुछ एक्स्ट्रा फ्रैग्स जो चाहिए थे उन्हें, जो एक अर्ली एडवांटेज था वो मिल सकता था. बट कप्तान हैज दैट फॉल्ट स्विंग आउट, लेकिन फ्रैग्स से आगे आ चुके थे एंड दो फ्रैग्स यहाँ निकलते हुए नजर आएंगे. एंड DRX अपने फुल बाय राउंड को कन्वर्ट करने के बहुत ज्यादा करीब जा चुका है. You know, यहाँ पर you don't have rounds to play. आपके लिए कोई बोनस राउंड नहीं है, आपके लिए कोई इको राउंड नहीं है, आपके लिए डू और डाई सिचुएशन है. Still going for the cheaper weapons. I think it was a big gamble. Gamble जीतते, इकोनॉमी बूस्ट होती, राउंड खेलने का मौका मिलता. But what if you lose and they are losing right now? यहाँ पे एक अच्छा क्रॉस फायर है. Got one, but RB उनको एवेंज करेंगे अपने टीममेट की डेथ को. Flash with a bulldog. क्या ये बंडल्स क्रिएट कर सकते? He got one. स्मोक्स उनका विजन डिनाई करा. He doesn't have enough time. लड़ाई प्लेयर्स के साथ साथ समय के साथ भी है. बट आरबी उन्होंने एक अच्छा ऑफ एंगल लगा रहा था, ग्रीन नाइट बॉक्स के अराउंड खेल रहे थे एंड अपने टीममेट को बचाया, अच्छा कवर फायर दिया. अब DRX पहुंच चुके गेम पॉइंट as well as a series point. and ये series point I guess काफी हद तक convertible भी होना चाहिए क्योंकि जो buy है यहाँ पे वो फिर से इतना I think sufficient नहीं रहेगा. and जो major ultimate था उनके पास rolling thunder, उसको भी बहुत प्रीमेच्योरली इस्तेमाल किया. वैल्यू बहुत ज्यादा मिली थी इनिशियल फेज में, लेकिन उसके बाद रिट्रैक्ट करना, खुद के बेस के अंदर आके बैठना, वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहा. क्योंकि अगर वो प्रेशर बना के रखते, वो हर एक कंटेस्ट एरिया को प्रेशर में रखते वहां पे, तो शायद से कुछ जल्दी फ्रैग निकाल देते. बट दिस टाइम आरवी विद दैट स्पैम टेक्स डाउन ड्रैग्स. ऑलरेडी फर्स्ट फ्रैग यहाँ पे ड्रॉ कर लिया गया है. वो एडवांटेज सिचुएशन तो नहीं है. वांटेड टू क्रिएट समथिंग न्यू, बट बाय भी कुछ खास नहीं है. हाफ शील्ड के साथ दो प्लेयर आए हैं, मॉश एंड फॉलन. कीवे विद जज. जज मतलब क्लोजिंग, मतलब ए शॉट या तो गराज, ए शॉट की तरफ राइट नाउ. जेट हैज बीन प्लेस्ड, बट सी साइड पे अकेले प्लेयर बैठे हैं. ओवर द रीड इज परफेक्ट फ्रॉम द DRX. उनको पता है कि एक प्लेयर पिक ऑफ होने के बाद इकोनॉमी के हिसाब से प्लेयर कहाँ पे खेल सकते, कहाँ जाकर उनको फायदा हो सकता है. सी साइड के अंदर कोई भी नहीं. इट इज गोइंग टू बी अ क्रिसमस गिव अवे फ्रॉम द FUT साइड टू द DRX. एक काफी बर्स्ट एग्जीक्यूट आता है एंड आई गेस दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम देयर साइड क्योंकि पोस्ट प्लान के अंदर DRX को हरा पाना वैसे मुश्किल है. बट फॉलन ओके अभी भी यहाँ पे जान बाकी है इस मैच के अंदर क्योंकि बस को थ्रू द स्मोक पिक करने के बाद ऑल्दो यहाँ पे रोलिंग थंडर सबसे मेजर एबिलिटी रहने वाला है. बट इतने डिस्टेंस से क्या वो कनेक्ट हो पाएगा क्योंकि जहाँ स्टैग्स खेल रहे हैं. आई थिंक ये थोड़ा प्लेसमेंट चेंज होने चाहिए थे. मार्को को यहाँ कभी खेलना चाहिए था एंड स्टैग्स को थोड़ा अलग आगे पीछे क्योंकि रोलिंग थंडर तो वहाँ तक नहीं पहुंचने वाला. बट जिस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं स्टैग्स, ही इज ऑन द रैप. वो यहाँ गैराज के अंदर से जाकर रोलिंग थंडर का इस्तेमाल करने वाले हैं. बट यहाँ पे मौज एक से कोई ट्रेड आउट जरूर करेंगे. आरबी का भी यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आता है. बट मौज पुश कर चुके सी एरिया को, गेट्स अनदर वन. पर कप्तान एक और भी को टेक डाउन करेंगे एंड पूरे जब तक एग्रेशन चल रहा था, तो गन फाइट चल रही थी, यहाँ पे कीवे बैठ के स्पाइक डिफ्यूज करने में लगे हुए थे एंड सक्सेसफुली डिफ्यूजल भी मिलता हुआ नजर आएगा. चौथा राउंड यहाँ पे फट के नाम जा चुका है. एक प्लेयर को उन्होंने किया स्पाइक के आधे डिफ्यूज के लिए. उसके बाद दे वर प्लेइंग समथिंग जिसके अंदर दे वर हेवी रिलायंट ऑन द गराज रोलिंग थंडर, जो उन्होंने करा भी. बट प्रॉब्लम क्या आई कि मॉश ही वेंट अहेड एंड गॉट डबल फ्रैग्स. उसके वजह से द लॉन्ग सपोर्ट वाज ओवर. अब आप सोच रहे हैं कि आपने गराज से अगर रोलिंग थंडर किया है, उनको डर होगा रोलिंग थंडर का गराज से हुआ है तो लॉन्ग से भी तो सप्रेस होना चाहिए. बट मॉज ने वो पूरा जो एरिया था क्लियर करके चीजें बदल दी. एक शॉट पुश करा है, he got one. विजन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ. मार्को को लगा होगा उनका पैरानोया से कामयाब हुआ था चीज. ज्यादा देर की बात है. कप्तान getting decimated. Oh my god, Buzz with the blade storm. He's so good. Whenever he gets blade storm, ये प्लेयर आउटशाइन करता है स्पार्टस. क्या ही मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला. लाइक क्राउड जंप अप ड्राफ्ट हर एक चीज यहाँ पे कर दी. एंड अगेन वो इनिशियल दो पिक्स यहाँ पे जो कीवे ने निकाले थे उनकी कोई वैल्यू ही अब नहीं रह गई है. एक 3v2 का रीटेक सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है. सिर्फ गार्डियन है फैलन के पास, so he has to be precise as much as he can. but अभी के लिए अगर देखा जाए पैरानोया करके साइड के नीचे आएगा बट फॉलन को भी बस शट डाउन करेंगे एंड ये ब्लेड स्टॉर्म गेम चेंजिंग एबिलिटी बनेगा. सीरीज पॉइंट यहाँ पे जीतते हुए नजर आएंगे DRX. पहला मैच पॉइंट का एक डोमिनेटिंग फैशन में फट ने जीता जरूर था, बट उसके बाद DRX की कमबैक स्टोरी स्टार्ट होती है एंड 2-1 से अपने लिए इस बेस्ट ऑफ सीरीज को अपने नाम करके they have made it to the playoffs.
not over until it's over. पहला गेम हारने के बाद वो having the double call ये भी शायद से fracture में things can go around. आप भी 6-6 था, चीजें अलग थी, but you know आखिरी मोमेंट तक लड़ना, being the best, change everything. No doubt they lost, they are eliminated from the Master Tokyo, but they play like champions. They played some good Valorant and they should be proud of that. Because this is just the start. एक e-sport player की जिंदगी ना कभी हार से रुके ना जीत से रुके. It's all about struggling after struggling. Exactly, and like they have to come back stronger. Like जिस तरीके से अभी इन्होंने गेम प्ले दिखाया है, खासकर केवे की जो परफॉर्मेंस रही थी वो बहुत ज़्यादा निकल के आई थी. एंड अगेन वो इंडिविजुअल बैटल्स का जो यहाँ पे जिम्मा उन्होंने लिया था काफ़ी हद तक कन्वर्ट करने में कामयाब रहे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें मिस आउट जरूर करी. बट दिस टीम क्या ही कम लाके यहाँ पे देखने को नजर आया. ऑल्दो जिस तरीके का स्टार्ट था वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट टुवर्ड्स द एंड डोमिनेटिंग फैशन एंड माको का जो परफॉर्मेंस था जो हम मिस आउट कर रहे थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रोलर्स इन द एंटायर वैलोरेंट सर्किट, वो आखिरी मैच में जाके हमको देखने को मिला. एंड जब भी माको चलते हैं डीआरएस के लिए, डीआरएस को हरा पाना नामुमकिन सा हो जाता है. ये बात तो मैं बिल्कुल मानना चाहूँगा कि जिस तरीके से टीम खेली इट वाज समथिंग. अब मुझे देखना है कि प्लेऑफ्स के कैसे सर्किट बनेंगे, कैसे ग्रुप बनेंगे, बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग कि अब ये टीम हमें फिर से कब एक्शन में देखेंगे. It is going to be a treat to watch them. Like again, जिस तरीके से स्टार्ट लिया गया था हेवन का, DRX being on the defense, पहले ही पिस्टल राउंड के अंदर 4 प्लेयर्स फ्लैंक पे गए एंड देन दिस बकी फ्रॉम आरबी गेम चेंजिंग से साबित हुई, क्योंकि बोनस राउंड के अंदर इतनी इंसेन वैल्यू निकाल के दी इन्होंने. यहाँ कुछ जवाब नहीं था यहाँ पे प्लेयर्स के पास, बट देन राउंड आफ्टर राउंड कई बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करी गई विद दैट अल्टीमेट जहाँ पे लगा था कि शायद से फट कम बैक कर सकता है, बट देयर वर सम रूकी मिस्टेक फ्रॉम हिज साइड. लाइक ए लॉन्ग पे ए लिंक पे स्मोक नहीं था, प्लेयर ड्राइव पिक कर रहे थे एंड वो छोटी छोटी गलतियां इन द एंड बहुत ज्यादा बड़ी बन गई. पहला हाफ 11-1 से खत्म हुआ था. सेकंड हाफ के अंदर पिस्टल से स्टार्ट काफी अच्छा लिया फट ने, बट कुछ ज्यादा उसके बाद वैल्यू निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो 10 राउंड का डेफिसिट को कन्वर्ट कर पाना वापस अपने फेवर में एक असंभव सी चीज हो जाती है. एंड बस विद दैट ब्लेस्टॉर्म आखिरी राउंड के अंदर भी, इस राउंड के अंदर भी प्रॉपर्ली डोमिनेशन देखने को मिला हमें. अब हमें पता चल चुका है कि हमें कौन सा क्रॉसहेयर चाहिए, हमें कौन से रेजोल्यूशन पे खेलना है, बिकॉज जिस पे डीआरएक्स खेल रही है वो सबसे बढ़िया है. डीआरएक्स ने काफी अच्छा गेम दिखाया आज एंड दे प्ले लाइक चैंपियंस. विनिंग मेंटालिटी बहुत जरूरी है, एक चैंपियंस मेंटालिटी बहुत जरूरी होती है. कभी कभी आपके साथ चीजें नहीं चलती, बट स्टिल नॉट लूजिंग दैट फेथ एंड हसल फॉर द बेस्ट इज द अल्टीमेट गोल. और वही किया भाई. मतलब जिस तरीके से पहला गेम इट वाज अ सिंगल डिजिट लॉस. कितना स्कोर लाइन था? इट वाज 39. मतलब इट वाज डिसेंट. मतलब डीआरएक्स जो मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स है हमारे रीजन की, और स्टिल दे वर कॉट स्ट्रगलिंग, still making a comeback in fracture or dominating in Haven. It's a complete storyline, a proper documentary material of this matchup. They look so harmless, you know, sweet kids, but when they turn on the game face, oh my god, just beautiful. Exactly. And like जैसा आप भी कह रहे थे कि जब वो हार भी रहे थे then they were giggles, they were just chilling around, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था इनके ऊपर. एंड वही चीज़ कहीं ना कहीं जो मोमेंटम रहते हैं प्लेयर्स का वो बरकरार रखते हैं. वो टेंशन जो है, वो प्रेशर जो है, वो अगर आप फील नहीं करते हैं ऑन द लास्ट स्टेज then you are definitely going to come back. एंड खासकर जैसे आपने बात की विनिंग मेंटालिटी होना सबसे जरूरी था एंड वो बिल्कुल डीआरएक्स शोकेस करती हुई नजर आई आज. You know, a lot to talk about कि भाई क्या हुआ हमारे पास. You know, कीवे के बाइंड के प्लेस हो गए, you know, उसके बाद आरपी का हेवन स्टॉप हो गया, फ्रैक्चर के अंदर जो लॉकडाउन कॉल था, you know, everything. It was a complete BO3. आपका कोई फेवरेट मोमेंट था इस गेम के अंदर? आई गेस जो ब्लेस्टॉर्म यहाँ पे जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बीट किवे और बीट बस, दोनों इतने ज्यादा डेडली नजर आते हैं, लाइक उनको रोक पाना असंभव सा है जब वो ब्लेस्टॉर्म पे हो. You know, जो नेक्स्ट मैचअप है उस पे क्या ख्याल है कि कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है? इट इज एडवर्ड गेमिंग. केके जिस तरीके से कल खेल रहे थे, प्लेयर टू वॉच. एंड अगर केके को सप्रेस नहीं कर पाते आज, खास करके ऑपरेटर प्लेयर्स को, एडवर्ड गेमिंग ये BO3 बहुत इजीली जीता हुआ नजर आएगा. But yes, it is going to be fun because this is just the start. अभी भी एक बेस्ट ऑफ 3 आपका इंतजार कर रहा है, बट उससे पहले मैं और स्पार्टस लेंगे अलविदा और आपसे मुलाकात करेंगे हमारे सहपाठी भावना एंड एडन इस ब्रेक के बाद.
DRX proved why they are the group kings as they managed to get out yet again at another international event. But let's not kid ourselves, it wasn't pretty. Didn't start off pretty, but they managed to get there. Of course, I'm Golden Boy alongside with Brendan Sideshow here as we look to break everything down. Yeah, I mean, you know, I think right out of the gate, the most important thing to note here is that when this DRX team goes back to their fundamentals, they go back to the thing that we know and love about them, these are the results that they will end up getting. Absolutely. The difference between the map pool is spectacular between Bind and Lotus and then the rest of the maps that they can play. It's ridiculous. I mean, with better coaching, this team would be informed to win a title. Yeah. I don't disagree with that at all. I mean, people are going to probably be listening to that and double-taking what you just said. Yeah. But genuinely, I feel like the caliber of talent that's on DRX currently, what was on display in all these moments when it just looked unbeatable. Imagine if they had that consistently with a much deeper map pool. And it's been a lack, I think it's just been the tossing and changing of all these players as well, trying to make the roles work by getting Zest and Foxy9 in, alternating all of that. It's made the team as a whole step back as well in terms of the overall level of prep they've been able to come into this event with. I've got a question for you though. Now they've actually bought some time, they're going into playoffs. Are they going to be able, if they just stick with Zest from here on out, can they still make a deep run? Can they still, you know, lock in? I mean, it's way too tight of a turnaround because you've got to think as well. They've got one side of Bind that they need to work on as well. There's other maps which they're not even touching. Like Lotus is their permaban. There are maps that are going to be in the playoffs with incredibly deep map pools. I mean, I don't want to discredit DRX. I think they've earned their spot here, right? You know, they've well-earned spot into the playoffs. But EG, Fnatic, Loud, three teams off the rip that I think have incredibly deep map pools, and it's necessary, I think, to go far in a playoff scenario. Yeah. Now, I'm sure you can see the interview setting up behind us, but for now, though, we are going to say goodbye to Foot Esports, a team that is always exciting to watch, and as well, they did the job that they needed to do, which was secure that top 3 EMEA seed for champs. Bro, they didn't even need to win a game here, and they would have got to champs because they just Na'Vi had to stay alive. Yeah, well, I mean, yeah, they could have turned up, gone 0-2, and still gone to champs. Yeah, but they could have. They didn't. They overperformed, but you know they were kind of gifted it by Na'Vi. Nevertheless, I think they'll be happy with what they accomplished today. They were all smiles even as they exited the stage because pressure's off them for the next few months, and they've never had a situation like that before. They've got a long time just to prep for those Champions games. Really long time, yeah. I mean, they get that entire gap as well between, you know, last chance qualifier and whatnot. If they wanted to stick around in Tokyo for a bit as well, they can get some really good scrim practice because they're out of the tournament. People might want to play against them as well here. Well, let's actually get some words in with the man of the hour, the guy coming in to fill in a spot. It was Zest standing by with Yintu for our Verizon post-match interview. Thank you very much, Golden Boy. I am joined by Zest, and Jen's going to help with some of the translations. Now, Zest, we didn't really expect to see you play today. So when did you find out that you were going to be subbed in, and what was the reason behind this change? 제스 선수 오늘 경기를 뛰게 됐다는 거를 이제 언제쯤 얘기를 들었는지, 그리고 왜 이번 라인업으로 경기를 치르려고 했는지에 대해서 얘기해 주시죠. 팀 내부적인 사항이라 어디까지 얘기해야 될지는 모르겠는데 조금 급하게 되기는 했습니다. I can't really tell you much because I might leak stuff, but I can definitely tell you that it was a little bit of last-minute decision. Is there a major difference between the game plan when Foxy9 is playing and when you are playing? And how difficult is it, do you think, for you to just come in and kind of adjust? 일단 폭시9 선수가 라인업에서 뛸 때랑 제스 선수가 들어와서 뛸 때랑 뭔가 전략적이나 플레이 스타일에 있어서 많이 좀 다른 점이 있는지, 그리고 뭔가 제스 선수가 들어왔을 때는 어떤 점을 중점적으로 운영하게 되는지 궁금합니다. 아무래도 전략이 막 다른 거는 없긴 한데 제가 들어옴으로 이제 플레이 스타일이 달라지기 때문에, 그리고 또 제가 주도적으로 하는 것도 많아서 아마 보시는 분들이 뭐 전략이 다르다고 느낄 수 있을 것 같아요. 적응하는데 힘들지는 않나요? 이렇게 갑자기 들어오게 되면? 힘들긴 한데 빡세게 하면 또 가능합니다. It's tough adjusting, of course, but it's not impossible. So yeah, and I just feel like I can be more proactive and like I can make the calls when Stacks is down. So people might feel like we're using different strategies, and yes, our play style does change when Foxy9 plays and when I play.
Well, you guys, you always get out of group stage, you know, it's not new for you, but it did look a little bit more challenging. Did you feel that way, and if so, why? 항상 그룹 스테이지는 통과한 DRX인데 이번에도 통과했지만 좀 이번에는 살짝 힘든 감이 없지 않나 싶었어요. 실제로도 그렇게 느꼈는지 또 왜 그렇다고 생각하는지 알려주시죠. 이번에는 사실 저희도 좀 힘들 거라 예상하긴 했었어가지고 저희끼리 이제 뭐 긴장하지 말자고 농담식으로 이제 뭐 지면은 한국 일찍 가지 뭐 이런 식으로 얘기하기도 했었고요. 근데 또 저희의 목표는 그룹 스테이지가 아니라 항상 우승이기 때문에 또 열심히 하겠습니다. Well, we kind of saw that coming. We thought that getting past the group stage was not going to be easy. And we even joked around ourselves saying, oh yeah, if you lose, we're going home early. So yeah, we got nothing to lose. But at the end of the day, our ultimate goal is a trophy. And yeah, I'm just so glad that we're keeping our chances alive for that champions title. You're not going home just yet, Zess. Thank you so much for joining me. Thank you, Jen, for translating. There is one more game left of the group stage, the final showdown between T1 and EDG. But before that, here are the Prime Gaming post-match highlights. It's uncomfortable situation for DRX to be in, and for Foot, well, the grass is just going to continue to get greener on their side of the field as they have already punched their ticket to champions. They're just playing with that house money. It's DRX, it's Foot. This is going to be good. They've gotten it to half, now the reset, and now the fight. Kiwi on the snap, Kiwi on the shots. And they asked for it. Where was it coming? It's coming courtesy of Kiwi 1. Killer instinct activated. Twin in the TP. Yeah, that's not what the intent was. RB with 2. Spam expecting to pre-fire. Buzz finds the timing on Mr. Fallen. It's all Maj by himself. Maj is healthy. Foot walk away with the win, 13-9. Only taking one with him. Mako on the swing. Buzz finding value with it. Oh gosh. Zest is still here. He's playing far off. All he has is a classic though, and the classic works! Buzz with 3, and we're tied at 5. He's going for the knife. We got a knife? What kind of skin The is there on the stun knife? two to try to catch him. What's the skin on the knife? Okay, that's a good one. Yeah, we'll take it. We'll take it. Sax is only one far off though. Buzz has already gotten 2. Make that 3. We're going to map 3. Wouldn't have it any other way for DRX. He doesn't spot him at all! RB with 2, robbed of the 3rd, courtesy of Mako. Finally landing it, switching weapons and getting them all. And the defenses of DRX are crumbling. You see him trying to funnel out of the site, trying to flood their way through! But Zest with 2 and Mako does it as well. DRX obliterate Foot and punch their ticket to playoffs.
Welcome back, everybody. There is one spot left in that playoffs, and it's going to come down to EDG or T1. I'm your host, Yingsu, and I'm joined by Mimi and Kakuka. I didn't think that it was going to come down to these teams, Kakuka, but here we are. I think it's very exciting because I think that in every single event, we have one or two teams giving us that big story that everybody has eyes on, and I think it could be either of these two teams. Yeah, both of them have already made a run that has surprised people. Both of them have already broken their expectations, and the thing is that either way, if either of these teams make it into the playoffs, it will be We have a story. We have a headline. There's too many stories, I feel like. But this is a rematch. We have seen this matchup already in this tournament. And the last time we saw a Mimi, it went to the way of T1, but marginally went to the way of T1. Yeah, this is one of the craziest games already in the groups between these two. It was a 2-1 victory for T1, but they just only barely got it over the line. It was a 14-12 win on Pearl versus EDG. And it looked like for EDG, it was going to be the same story as always, where they get knocked down to lower bracket in heartbreaking way, and it all falls apart. But they've really been able to recover despite losing this first time. And we've been talking about T1 and the improvement that they've had as a team and as a squad, but as you're saying, it was not a comfortable win. And of course, coming into this rematch, the story for this two has changed a bit. T1 are coming from a loss. EDG is coming from beating Navi. Of course, you know, Navi has not been what we expected this tournament and what many people thought they were going to be at the beginning of this year, but they just beat, for the first win, a team that has won a Masters event. Yeah, it's crazy that they were able to pull it off. And that first matchup as well that they played, it really, I think, showed the depth that these teams have, that they can play that slower style on their attacking sides, really bring out the strategy that people wouldn't have expected looking at these teams' names and their past success, but also can still dive into that chaos and show the prowess of their individuals. I'm glad you mentioned that because the momentum is so important. We saw what it can do for teams. China's first win for EDG, but in this rematch, I do want to bring out a stat because Kakuka, traditionally at international tournaments, the team that loses the first matchup have a 67% chance of winning the second one. So it's looking good for EDG. You love the hope here. I love it. I love it. Definitely, but it's the story. Just imagine if we had EDG not only making it to playoffs, but actually having a miraculous run throughout the entire tournament. Even if just for making playoffs, I would say most people would say it is enough. Yeah, and look at the emotion on their face. That was first off of their loss against T1, where it was again that heartbreak that they have felt so many times, making it to 2 international events before this one and always pushing it so close. But then they come out, they play incredible versus Navi, and it invigorates them. And for Kung Kung, in the post-match interview, he said that for his team and for Chinese Valorant as a whole, that this is just a start. It's just a beginning for them. Yeah, it was a very cold quote from Kung Kung there. You know, he's not satisfied with just one win. He wants it all. We've spoken to him a few times, and he's just like, I don't even want to be China's #1. I want to be the world's #1. He has such a big personality, and I'm so happy that he's able to translate that into the server. He's an operator demon, and we love to see it. Yeah, and also, we saw a lot of the heroic moments, Mimi, that EDG were pulling out against Navi, the individual brilliance. And if they pull that out again today, yeah, I mean, they could just win it. It was ridiculous, the stuff they were doing. It looked like in so many moments that Navi was going to be able to rally back, and at every chance, EDG had a player who stepped up. And more times than not, it was Kung Kung with the ridiculous plays on the operator or on the blades. But it really was a team effort. Everyone had their moment in this match. I loved Smoggy, for example. He was, I think, had a major role in what happened yesterday. And maybe it's again that situation where teams underestimate their opponents, or maybe think that, you know, they can ego peek into them and it's going to be fine because, you know, you have Seketsu, you have Shao. Those kind of things usually go your way. It didn't happen yesterday. Yeah, and what's insane is that stat as well. 44 of their rounds, they had a multi-kill in. They had 9 clutches across that series, and it was a 2-0. It was all these crazy hero plays keeping them in it. Yeah, speaking of the teamwork, Kung Kung himself said Nobody and Haldong was the ones that also helped them mentally push it over the line. And speaking of Nobody, I had a catch-up with him earlier outside the arena. Hello, ni hao, Nobody, 欢迎回来, welcome back. Now, yesterday was a really important game that you guys won. How much confidence does it give you going into today's game? 因为昨天你们获得了这个赛季的首胜嘛，非常厉害。想问一下，对于小组赛出现这件事，包括今天这场比赛，你们有多大的信心呢？其实我们是上一次是输给了 T1， 但是其实我们一直很有信心，然后赢了哪位之后，会使我们信心倍增，所以我觉得我们今天是必胜的。Definitely yes.
I think for today, for yesterday's matchup, maybe we made a little mistakes, but we figured it out. And after we win Navi, and it definitely gave us confidence for today's matchup. I think we're gonna win today. Well, thank you very much. 谢谢，加油。Well, he is confident. I mean, you are going to be confident after beating Na'Vi, but the fact of the matter is, Mimi, T1, they beat them once already, so they have that for them, behind them. That is true, and T1, after beating EDG, went on to play NRG incredibly close in that upper bracket. People thought that this team might just roll over versus a stronger squad like NRG, but they were able to compete with them not just strategically, but also in the individual performance. Yeah, but also I think that they need to reflect now that they're in this position. Of course, the mental is not the same, and also I feel like the pressure is way more on them, way more on T1, because they're expected to perform and not repeat that same situation where rounds are literally that close. And they have a chance to do something special here. They have a second chance at it. Ever since Masters Reykjavik, the only Korean team to ever make it out of groups and make it to playoffs at an international event has been DRX. And for T1, this is their opportunity to be the first time in forever that Korea has a second team that can compete at the top level internationally. And it would definitely be the highlight, because even though DRX just qualified, it's kind of something that everybody expected, but the fashion in which it happened, it didn't give them that boost. Everybody's going to be speaking and talking about T1 if they manage to make it today. I mean, you mentioned the NRG matchup already. What did you see from that one? Did you feel like maybe they could have qualified down that route already? I think they could have. I think it came down to kind of a lack of depth in the map pool later in. But in the first map on Lotus in particular, I was really impressed with how they were calling on their attacking side. During the halftime interview, Autumn was talking about how much emphasis he put with this team on prepping their attack against NRG's generally weaker defense, and they did it in being able to constantly exploit the fact that NRG was so passive after initially failing with these really aggressive plays, and their mid-round decision-making was great against a team that we're normally talking about being the best in the world at mid-rounding. Do you feel like what we saw from T1 against NRG Bear is enough for them to beat the EDG we saw yesterday? No, but I do think that as well as I was talking about the pressure, it's about the fact that you have to play several days in a row. You have to prove that you have the resilience, the making the mistakes and actually learning from them in a very short period of time. This is all the international events is about. I'm glad you mentioned that, because learning from their mistakes. Kong, he gave T1 a run for their money last time, and this is what Ban had to say about how they plan to deal with him today. Ban, hi, come and join me. Hello. Today is a very, very important game for you guys. It's a rematch. Last time, I think Kong was doing very, very, very well against you guys, caused you a lot of problems. How do you plan to shut him down today? I think we're going to use your utility very well today to shut him down, not let him get any chances in general, and I think that'll do the trick. Yeah? That's it? Yeah, that's it. All right, thank you very much, Ban. Best of luck. They are going to shut Kong down today. I think he even said it was going to be easy. Good luck. Whatever. Mimi, do you believe that? I don't think it's ever going to be easy to shut down Kong. What he was doing yesterday was absolutely absurd. And in the first match between these two, he was diffing Saya in the opening kills. Kong has been so consistently insane for this team. Yeah, exactly. And with the operator and going back to the EU pick and actually giving him the confidence, I feel like he's the kind of player that if you're going to duel him time and time again, he will only feel more comfortable doing so because he's going to be successful most of the times. Do you remember when we had Benkai here and he was saying, hey, we know if we're playing against DRX, we just dodge Mako wherever he is? I feel like with Kong is literally the same situation. The thing about Kong, though, is that he can be so proactive, especially in the later parts of these games. He's the guy who is stepping up, who is making that play to push them over the line. And I mean, yesterday he was going crazy as well. He started off playing the Jet, and then he switches over to playing Gecko, and the guy is still opping, still finding the same value and finding insane clips. It's just absurd, the performance he's having right now. This is the thing, though. Kong is getting better, Kakuka, somehow. Yes. They couldn't shut him down last time. I don't know. I'm a little bit worried. He's getting the momentum. He's getting it forward. I feel like the duty here for Saya is actually finding his place in the round and actually the duties that he has to take. For example, if you feel like that first duel is not going to be easy, just go for a deeper run. Just go for a very much harder execute where you can shine in the mid round, where you don't have to be necessarily the first one going in, so those heroics can actually shine. And I think this game will be defined by these two players. On their attacking sides, both squads really like starting these rounds slower, oftentimes picking up
the attack side operator, and putting a lot of emphasis in getting that opening pick with the off that they can mid-round through. The thing is, that's how they want to start, but it will also oftentimes end in chaos, where these two, again, have to step up and close rounds for their team. Do you guys think we're going to see the same maps today from the rematch? It could be. It's likely because of how close every single map was, it makes sense. Well, let's find out because our coaches are ready for map select, and let's see if we're going to head to the same maps today. Okay, let's get started. T1, you're a higher seed because you come from the upper bracket of your group. Do you want Team A or Team B? Team A. Okay, so we'll start with T1, your first ban. They ban Split, your ban. Ascent, map number 1. Fracture, side on Fracture. Attack, map number 2. Haven, side on Haven. Defense. Okay, we're gonna go to the next set of bans starting with T1. You have Bind, Lotus, and Pearl. They ban Bind, you have Lotus and Pearl. Ban Pearl, map number 3 will be Lotus, side on Lotus. Defense. Okay, we're gonna run through this really quick. First set of bans, we have T1 with Split, EDG with Ascent. Map number 1 is Fracture with EDG on Attack. Map number 2 is Haven with T1 on Defense. Next set of bans are Bind and Pearl. Map number 3 will be Lotus with T1 on Defense. Good? Alright, good luck to you both, guys. This is it, a do-or-die fight for the final spot at playoffs here at Masters Tokyo, and it comes down to T1 and EDG. No matter what happens, it will be a historical moment. This is the thing though, Mimi. We have a peculiar matchup where I don't know if one team is even necessarily the favorites. I don't think there is a favorite in this one, and I think the first match between the two proved it. It came down to a third map, overtime, for T1 to get it across the line. But since then, EDG, they've gone to the lower bracket. They've broken through their story. They beat Na'Vi. They have their first international win, and now someone just has to stop them. And EDG wants to make this right. We have seen the map veto. The two first maps are going to be the same as last time. If they're going to make it out of groups, it has to be the direct improvement from what happened last time and actually being able to get those closing maps for them. And for two teams who have only just gotten their first win at an international event, this is where the pressure is on to prep for a rematch. It's hard in these group stages. You're playing match after match, day after day. You don't have a lot of time to turn around a new idea. And that's what they're going to have to do there, especially since it is the same first two maps, like you were saying. Honestly, they had me. I thought maybe we were going to get Pearl, but EDG were the ones to choose not to go to Pearl despite overcoming their demons on Pearl. Maybe they think that they have become too readable. Maybe they think that they cannot improve much on the map. Maybe they don't enjoy the meta probably, or they think that they have a better chance. If everything is going to come to a third map, let it be a new one. It's going to be interesting if we do get there, but we're starting the series on a perfect rematch here of Fracture, which for T1, this is where they play their double duelist comp. They looked electric versus EDG in that first game. And EDG on the other side are running that solo duelist comp with the Jet, where they're putting a lot of emphasis on Kung Kung. And I think they kind of struggled to deal with, especially the Flood retakes that were really good out of T1. I mean, let's have a look at the Prime Gaming agent select. Welcome back everyone, you guys are watching VCT Masters Tour 2023. मेरा नाम है शैडो, मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी है हाना एडन एंड हाना। हमारा नेक्स्ट मैचअप रहने वाला है T1 एंड एडवर्ड गेमिंग के बीच में, जिसमें बिल्कुल भी प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है आसान नहीं होगा।
Absolutely, दोनों ही टीम्स पहले भी एक दूसरे के साथ खेल चुकी है and this is the revenge matchup. हम लोग ऑलरेडी इन दोनों को एक साथ खेलते हुए देख चुके हैं वॉकिंग इनटू द मास्टर्स टोक्यो ग्रुप स्टेज एंड अब इनके पास फाइनली चांस है एक दूसरे को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का. I feel like EDG this time has a better plan in mind. मेरी bets यहाँ पर EDG की तरफ रहने वाली है, but we still gonna see two similar maps. पिछली बार की तरह we have Fracture and Haven coming into play. तीसरा मैप यहाँ बदल चुका है. पर्ल की जगह पे हमें लोटस देखने को मिलेगा, but still every single time T1 is starting on defense. T1 तो डिफेंस पे स्टार्ट करी है. सेम पिक यहाँ पे जो है लास्ट टाइम के जैसे लिए गए हैं एक्सेप्ट द डिसाइडर मैप जैसे कि आपने मेंशन किया. बट T1 पहली बार इंटरनेशनल स्टेज के लिए क्वालिफाई करके आई है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी प्रेशर आज रहने वाला है. दूसरी साइड अगर बात करें एडवर्ड गेमिंग की, जी हाँ पिछली बार तो वो हार गए थे. आई डोंट नो इफ इट इज रिवेंज मैप. डू और डाई सिचुएशन है दोनों ही टीम्स के लिए, क्योंकि जो भी टीम आज यहाँ पे हारती है उनको एलिमिनेशन फेस करना पड़ेगा. दूसरी टीम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे कि तो प्रेशर दोनों के ऊपर. इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर देम. Exactly, and ग्रुप स्टेज से प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का ये आखिरी मैच रहने वाला है. ग्रुप स्टेज विल एंड आफ्टर दिस मैच. सो लेट्स सी क्या हालत रहती है, बिकॉज कल का जो दिन था भावना पूरा का पूरा दिन वेंट फॉर रिवर्स क्लीन स्वीप्स. आज भी शुरुआत वैसे ही हुई है, लेकिन जो एक टीम कल 2-0 जीती थी दैट वाज एडवर्ड की. क्या आज भी वो कल वाली हिस्ट्री रिपीट कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा. पिछली बार की अगर बात करूँ तो T1 फर्स्ट मैप जीती थी फ्रैक्चर का. Let's find out if they're going to be able to pull this off one more time. करना पड़ेगा. अगर नहीं करेंगे दिक्कत आ सकती है. बट फ्रैक्चर की अगर बात करें इतना ज़्यादा आसान नहीं रहता अटैक भी, क्योंकि डिफेंडर्स आपको दो साइड से पिंच कर सकते हैं, जो कि यूजुअली हम देखते आ रहे हैं कि ए हॉल से भी प्लेयर्स मूव इन करना स्टार्ट करते थे डिफेंडर्स के. एंड ऑलरेडी साइड में जो प्लेयर होते हैं बी मेन के वो भी पुश करते हैं स्पॉन की तरफ. तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो अटैकर्स के फेवर में नहीं जाती. बट फिलहाल के लिए अगर बात करें बी मेन को एग्जीक्यूट करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे 3 प्लेयर्स T1 के ऑलरेडी प्लेस्ड हैं. एग्जैक्टली पर उस पॉइंट को चोक ऑफ करने की कोशिश की जा रही है. ऑलरेडी एक स्मोक डिप्लॉय कर दिया है, तो एक रोटेशन आता हुआ दिखाई देगा फ्रॉम द साइड ऑफ EDG. साइड ए की तरफ मूव इन करना चाहेंगे. नाउ द गुड थिंग इन साइड ए इज कि सिवाय किलजॉय के और कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे. एंड किलजॉय को भी पिक ऑफ करने के लिए पीछे से जो चोचो का बैकस्टैब आ रहा है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है. इफ ही इज एबल टू पिक किलजॉय ऑफ, अगर ये डुअल जीतते हैं चोचो, तो फिर EDG के हाथ से इस मैप को ले पाना मुश्किल हो जाएगा. इस पर्टिकुलर राउंड में आराम से उनका दबदबा यहाँ बनेगा. अर्ली प्लांट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जो रोटेशन है डिफेंस की तरफ से वो थोड़ा डिले होता हुआ नजर आएगा. सारे के सारे चोक पॉइंट्स ऑलरेडी स्मोक ऑफ कर दिए गए हैं. जी हाँ, काफी अच्छे ड्रिम के स्मोक्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे. एंड चोचो यहाँ पे जो है अपना पहला फ्रैग मंच निकल निकालने में सफल हो चुके हैं. एडवर्ड गेमिंग अपनी घोस्ट के द्वारा यहाँ पे जिस तरीके से एम डुअल्स जीत रही है, मात्र एक ही प्लेयर बचे T1 के, दैट इज बैन. एग्जैक्टली, एंड बैन को भी जल्द ही बैन कर दिया जाएगा. ट्रेल ब्लेजर से उनकी लोकेशन ऑलरेडी रिवील हो चुकी है. थोड़ा सा फॉल बैक करा, वापस से आगे आने की कोशिश रहने वाली है. अगेन पिस्टल राउंड है, फाइट जरूर से करना चाहेंगे. इनकी शेरिफ कितने प्लेयर्स को दबा पाएगी देखना पड़ेगा. एंड द आंसर इज 0, नन एट ऑल. स्मॉगी इज गोना पिक दैट वन ऑफ. एंड पहला राउंड ऑलरेडी यहाँ EDG के हाथों में जाता हुआ. जी हाँ, काफ़ी अच्छे तरीके से ये एग्जीक्यूट किया गया था. पहले उन्होंने बी मेन के बाहर अपने प्रेजेंस दिखाया, वहाँ पे इंस्टेंट स्मोक करके ए साइड की तरफ रोटेशन किया. जैसे कि आपने बोला कि तीनों चौक पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्मोक ऑफ कर दिया गया था. ड्रॉप के पास में वहाँ पे ज़रूर यहाँ पे मौजूद थे मंचकिन, बट मंचकिन के पास कोई व्यू नहीं था, विजन नहीं था. एंड पीछे से चोचो जो आ रहे थे ईजी हो गया था उनके लिए अपनी टीम के साथ रीग्रुप करना, साइड एग्जीक्यूट करना बहुत आसान था. बट रीटेक में T1 के पास नंबर्स नहीं थे. इस बार अगर बात करें एडवर्ड गेमिंग का बाय राउंड है, तो वेपनरी भी अच्छी है उनके पास. एग्जैक्टली, यहाँ पर एक्स्ट्रा वेपनरी का एक अच्छा उपयोग किया जा सकता है. ओपन में प्लांट करते हुए नजर आ सकते हैं बिकॉज दे हैव द बेटर वेपनरी. दे डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ एनी डुअल्स दैट कम देयर वे. एंड ओपन प्लांट को होल्ड करना बहुत आसान हो जाता है रीटेक सिचुएशन में. तो ये एक और बहुत ईजी राउंड निकल सकता है एडवर्ड गेमिंग के लिए. बट लेट्स फाइंड आउट इफ देयर गोना बी एबल टू पुल दिस ऑफ, क्योंकि अभी भी जो प्रेजेंस यहाँ पर रहने वाला है फ्रॉम द साइड ऑफ साया प्लेयर थोड़ा सा डरावना जरूर है. बट अगेन इट्स अ लिटिल 5v1 सिचुएशन. एक प्लेयर को जरूर डाउन करेंगे, लेकिन तुरंत हॉडॉन के हाथों बली होते हुए दिखाई देंगे. अनदर राउंड फॉर EDG. यहाँ राउंड तो मिला है, बट शैडो यहाँ पर जो मेन बात है ना वो ये है कि सिर्फ एक वेपन ड्रॉप हुआ है. दैट मीन्स द बोनस इज गोना बी प्रीटी अमेजिंग. बहुत अच्छा एक स्टेबिलिटी यहाँ इनको मिल सकता है फॉर द नेक्स्ट वन. अब देखिए, साया प्लेयर के पास एक पेंशल भी था. एक वेपन ड्रॉप कराने के बाद अगर वो पेंशल का यूज़ करते तो शायद दूसरा वेपन भी ड्रॉप करा सकते थे. बट लूजर बोनस पे फिलहाल रिलाई कर रहा था T1 का पूरा टीम. एंड जितने वेपन ड्रॉप कराना चाहते, एक वेपन तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ड्रॉप कराया. बट अब
बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है कि फाइनली T1 का भी फुल बाय राउंड आते हुए दिखाई देगा। दूसरी साइड अगर बात करें एडवर्ड गेमिंग, उनका तो बोनस राउंड है, सिर्फ एक वेपन खरीदने की जरूरत पड़ी है। ए हॉल्स के थ्रू यहाँ पे फिलहाल एडवर्ड गेमिंग आगे बढ़ना चाह रही है। जब एक नहीं 3 प्लेयर्स मौजूद हैं T1 के, इतना आसान नहीं रहेगा उनको ब्रीच करके आगे बढ़ना। यस द डिफेंडर स्मोक इज देयर, बट वो गेमिंग के नोबडी की पोजीशन देखिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। एग्जैक्टली ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कितने प्लेयर्स हैं एग्जैक्टली उस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए। ऑलरेडी एक प्लेयर की बलि जरूर चढ़ी है, लेकिन नोबडी को देखिए, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम अनलेस दे आर ज़ेटा, क्योंकि ज़ेटा उन्हें यहाँ ट्रेड ऑफ करने में कामयाब होने वाला है। दोनों तरफ नंबर्स इक्वलाइज होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन नो टाइम एट ऑल द इक्वलाइजेशन विल बी शैटर्ड डाउन बाय EDG एंड अब मंचकिन अकेले बचे हैं। वी नो दिस गाय हैज द कैलिबर ऑफ मेकिंग कमबैक्स, दिस गाय हैज द कैलिबर ऑफ क्लचिंग, बट क्या ये पॉसिबल रहने वाला है? बहुत बार मंचकिन अकेले रह जाते हैं अपनी टीम में से फाइट ऑफ करने के लिए। अभी भी अकेले हैं एंड अकेले ही पिक ऑफ हो जाएंगे बाय द जेट ऑफ एडवर्ड गेमिंग। यहाँ पे ZM ने बहुत अच्छे तरीके से उनको पिक ऑफ कर लिया। एक और राउंड यहाँ पे जो है एडवर्ड गेमिंग के खाते में आते हुए शुरुआत तो काफ़ी अच्छी है, अपनी लीड को थोड़ा और यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया। थोड़ा सा प्रेशर आना यहाँ पे क्रिएट होगा T1 के ऊपर कि उनका डिफेंस कहाँ पे लैक कर रहा है। दे नीड टू हैव अ बेटर रीच। जिस तरीके से ए हॉल्स में पूरी की पूरी यूटिल्स डंप की गई, फॉल्ट टैंक का यूज़ यहाँ पे किया गया, ट्रेल ब्लेजर का यूज़ किया गया, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एडवर्ड गेमिंग ने निकाली थी। वहाँ पे T1 थोड़ा सा लैक करते हुए दिखाई दे रही है। इस बार सीकर्स अवेलेबल रहेंगे एडवर्ड गेमिंग के पास, बट दूसरी साइड T1 के पास वीकर बाय है। सीकर्स अवेलेबल जरूर रहेंगे, बट फिलहाल इट फील्स लाइक कि सीकर्स का डिप्लॉयमेंट शायद ही हमें देखने को मिले, क्योंकि जो पोजीशन देखने को मिल रही है हमें फ्रॉम द साइड ऑफ नोबडी, दैट डज नॉट सीम लाइक द वन जहां पर वो सीकर्स कमिट करने के लिए अभी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। ए की तरफ से डिश के साइड कोई भी पुश आता है अगर, तो उसको यहाँ पर जरूर से रिटेलिएट कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए डिफेंडर्स सारे मिड के थ्रू मूव करते नजर आएंगे एंड साइड बी का कंट्रोल बहुत आसानी से एडवर्ड गेमिंग पाने में कामयाब हो जाएगी। देयर आर स्टिल यूटिलिटीज इन देयर वे, लेकिन चोचो की पोजीशन देखिए, मंचकिन को बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है। यहाँ पे अच्छा क्रॉसफायर भी क्रिएट हो जाएगा एंड चोचो डज इट, ही इज गोना बी एबल टू वॉक इन थ्रू द स्मोक। चोक पॉइंट्स दोबारा से नलिफाइड है एंड नाउ द डिफेंडर्स डू नॉट हैव मच टू कंट्रीब्यूट एनी मोर। एक चौथा राउंड यहाँ पे EDG के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी अच्छा एग्जीक्यूशन प्लेयर्स ने बीमेन के बाहर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके रखा T1 के प्लेयर्स के। बाकी प्लेयर्स ने पेंशियल के द्वारा आर्केड एंड टावर का पूरा एरिया क्लियर आउट करके कंट्रोल ले लिया साइड का। उसके बाद प्लांट करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। अब रीटेक पे T1 के पास ना तो वेपन्स हैं अच्छे, उनके पास ना ज़्यादा नंबर्स का एडवांटेज है। स्मोक्स हैं, स्मोक्स का वेट करना पड़ेगा एंड एडवर्ड गेमिंग जिस तरीके से अपने इन डुअल्स जीत रहे, एक नहीं 2 फ्लैग्स यहाँ पे इंस्टेंट निकालते हुए सारे प्लेयर अकेले बचे थे, कुछ करते उससे पहले उनको भी पिक ऑफ कर लिया गया। तो T1 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बन चुके हैं। एडवर्ड गेमिंग माइंड गेम्स भी यहाँ पे जो है T1 के साथ खेलते हुए दिखाई दे रही है। Ken is just amazing the way he's picking frags. Impossible fights में भी इनका स्प्रे ट्रांसफर इतना ज़्यादा ऑन पॉइंट रहता है कि you just cannot deny this guy at all. And to top all of that, you already have a better weaponry. Like इससे ज़्यादा better position क्या हो सकती है? However, इस बार एक बहुत अच्छा पोजीशन साया प्लेयर के पास रहेगा, बिकॉज उनके पास अवेलेबल होने वाला है बहुत जल्द अपना शो स्टॉपर, जिसका वो बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ बहुत जल्द कार्पे के पास में ऑर्बिटल स्ट्राइक भी आ जाएगी, तो एक पोस्ट प्लांट के लिए काफ़ी बेटर सिचुएशन बन जाएगी इनके पास। बोनस को कन्वर्ट करना हमेशा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है टीम को, एंड वो चीज़ यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग करके नजर आते हुए दिखाई दे। इस बार थोड़ा सा स्लो अप्रोच हमें एडवर्ड गेमिंग की साइड से देखने को मिल रहा है। 2 प्लेयर्स यहाँ पे ए हॉल्स के बाहर मौजूद हैं। जिस तरीके से पिन्स आ रहे हैं, मे बी इट कैन बी ए सेट एग्जीक्यूट। थोड़ा सा यहाँ पे जो है पेशेंटली अपने एंगल्स होल्ड किए जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे एंड काफ़ी हद तक वो काम भी करेगा। ए साइड पे यहाँ पे ए हॉल्स पे मात्र एक ही प्लेयर बैन मौजूद है, इंस्टेंट उनको शट ऑफ कर दिया गया। अब देखिए T1 का ये जो रीड आता है ना, बहुत ज़्यादा गलत है। उनको हमेशा लगता है कि शायद रोटेशन नहीं हो रहा है, उसी साइड पे कमिट किया जाए। ए साइड पे पूरी की पूरी टीम रोटेट कर चुकी है, बट एडवर्ड गेमिंग इज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट बी साइड, जिसको कंप्लीटली खाली छोड़ दिया गया है। ये जो रीड आता है T1 का, उनको उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब साइड का कंट्रोल मिल चुका है, इजी स्पाइक प्लांट हो चुका है, ऑलरेडी स्मोक्स आर देयर ऑल द चोक पॉइंट्स। अब T1 वापस से रीटेक पे विद द नंबर्स डिसएडवांटेज। Nobody already यहाँ पर सीकर्स डिप्लॉय करके प्लेयर्स की पोजीशन रिवील कर चुके हैं एंड नाउ चोचो इज इन अ ग्रेट पोजीशन टू बी एबल टू टेक द फाइट। डबल पीक आया, अलग अलग एलिवेशन था प्लेयर्स का, तो बहुत जल्दी अपने आप को उस फाइट से यहाँ पर विड्रॉ करते हुए नजर आए। लेकिन अभी भी जो फाइट्स हैं वो T1 धीरे से एक एक करके अपने फेवर में लेता हुआ नजर आ रहा है। सो नाउ इट्स अ 2v4 रीटेक सिनेरियो, pretty difficult for the side of EDG. So I guess a round that they will give up in a matter of time.
इस बार काफी अच्छे तरीके से जेटा का 4K आता है। एम डुअल जो काम करना था टीवन को उन्होंने किया, रीटेक काफी अच्छे तरीके से अपने फेवर में लेके गए। फाइनली जो एक राउंड की उनको तलाश थी एडन, वो राउंड उनके फेवर में आते हुए, बट दूसरा राउंड में निकालना पड़ेगा क्योंकि स्कोर लाइन में अभी भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। स्कोर लाइन का डिफरेंस तो यहाँ जरूर से रहने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है टीवन के पास। तो अगर दोबारा से एक राउंड हारते हैं फिर से एक सेव पर पुश हो जाएंगे एंड दे वोंट बी एबल टू कवर अप फ्रॉम इट। अभी भी हाफ शील्ड्स में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इवन दो दे हैव द इकोनॉमी, एंड उसका एक मेजर रीजन ये रहने वाला है कि उनके पास अभी तक वो मोमेंटम, वो श्योरिटी नहीं आई है कि कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक राउंड्स निकाल पाएंगे। हाफ शील्ड्स में इन्वेस्ट करके दे कैन मेक श्योर कि एक और राउंड तक अपनी फाइट को खींच पाएं एंड उसके बाद में लॉस बोनस का कैप हिट कर जाएं ताकि दोबारा से वेपनरी एटलीस्ट एडवांटेजियस रह सके। बट फॉर नाउ इट्स गोना बी अ डिश पुश जहां पर ऑलरेडी नोबडी बहुत ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। डबल प्लेयर्स आ जाएंगे उनके सामने, थोड़ी सी दिक्कत की सिचुएशन बनेगी, बट फाइट्स इंडिविजुअलाइज करेंगे एंड ही विल बी एबल टू शट वन डाउन बिफोर लूजिंग हिज लाइफ। आइसोलेटेड फाइट्स क्यों ली यहाँ पर टीवन ने? नीड नहीं थी, साथ में पीक कर सकते थे। एग्री, बैन एंड साया प्लेयर अगर साथ में स्विंग करते तो शायद ट्रेड निकाला जा सकता था, बट रादर दे चोज की, और उनको पता था कि वहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है। काफ़ी अच्छे पिक यहाँ पे जो है एडवर्ड गेमिंग के द्वारा निकाले गए। अब टीवन रीटेक पे तो ज़रूर है बट मात्र 2 ही प्लेयर्स हैं। एंड अगर बात करें यूटिल्स की भी, जी हाँ, आफ्टर शॉक एंड फॉल्ट लाइन ज़रूर अवेलेबल रहेगा। किस तरीके से यूज़ करते हैं वो देखना पड़ेगा। इसके साथ अगर बात करें अटैकर्स का यहाँ पे लॉकडाउन आते हुए एंड शोजो विद 3K, T1 इज नॉट एबल टू स्टैंड टॉल। इसके बाद एक और राउंड एडवर्ड गेमिंग के हाथ में आते हुए एडवर्ड गेमिंग अपनी लीड को थोड़ा और स्ट्रेच करने में सक्सेसफुल हो चुकी है। अब जैसे कि आपने बात किया था, T1 अगर ये राउंड हारते हैं तो उनके लिए एक और सेव राउंड आ जाएगा। इनकी इकोनॉमी पे अब वापस से काफी बड़ा डेंट पड़ गया है। बहुत बुरी तरह से राउंड ब्रेक डाउन हो गया टीवन के लिए जब कार्पे की मॉली मिसप्लेस हुई। कार्पे की मॉली थोड़ा सा स्पेस छोड़ गई ऑन द बैक, जिसका पूरा फायदा यहाँ पे चोचो ने उठाया। उन्होंने प्लांट कर दिया मॉली के जस्ट पीछे एंड वो सस्पेक्टेड नहीं था टीवन के लिए। टीवन वॉज नॉट ऑफ गार्ड व्हेन दे फाउंड आउट कि प्लांट ऑलरेडी हो चुका है, ओपन में नहीं है, सेफ एरिया में जहाँ पर ऑलरेडी मॉली प्लेस्ड थी। साथ के साथ चोचो ने जब वहाँ पर अपना लॉकडाउन लगा दिया तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो गई। एंड उसके बाद में कार्पे जब वो गन फाइट हारे तो दोबारा से ईडीजी के पास एक विनिंग चांस आ गया। हाउएवर वॉकिंग इनटू द नेक्स्ट राउंड बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं सारे प्लेयर। 3 प्लेयर्स एक साथ इन पे आक्रमण करने वाले हैं। इंडिविजुअलाइज नहीं करेंगे फाइट्स को। पहला प्लेयर जरूर पिक ऑफ हुआ लेकिन बाद में डबल पीक लेके फाइट पे कैपिटलाइज करते हुए नजर आए। तुरंत ट्रेड आएगा एंड अभी मैन काउंट एडवांटेज दोबारा से ईडीजी के फेवर में दिखाई देगा। अब ईडीजी रोटेट करे टनल के थ्रू बी साइड को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करके रास्ते में इन्हें मात्र एक ही प्लेयर अड़ंगा बन सकते थे जो थे मंचकिन, उनको भी डील कर लिया गया। एट द सेम टाइम ऑर्बिटल स्ट्राइक का इन्वेस्टमेंट करके साइड का पूरा कंट्रोल यहाँ पे ले लिया गया एंड टीवन के पास मात्र 2 ही प्लेयर्स यहाँ पे बचे हैं ऑन द रीटेक। जी हाँ, उनके पास एक अल्ट अवेलेबल रहेगा, ऑर्बिटल स्ट्राइक जो कार पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी सारे यूटिल्स उनके पास है जिसके थ्रू स्टिल अ डुएबल राउंड, बट जिस तरीके से क्रॉस फायर सेटअप यहाँ पे किया गया है एडवर्ड गेमिंग के द्वारा इतना आसान नहीं रहेगा एंड इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है। सो T1 रादर यहाँ पे चूज करेंगे कि अपनी वेपनरी को सेव किया जाए, अल्टीमेट को सेव किया जाए एंड नेक्स्ट राउंड अपने फेवर में निकालने का प्रयास करें। एंड वही चीज़ यहाँ पे जो है T1 के प्लेयर्स करते हुए फिलहाल के लिए तो दिखाई दे रहे हैं। एंड एडवर्ड गेमिंग अपनी लीड को और स्ट्रेच कर देंगे एंड स्कोर लाइन में 1-6 का स्कोर यहाँ पे जो है होते हुए दिखाई देगा। पिछली बार अगर बात करें दोनों टीम्स का काफ़ी ज़्यादा इवन कंपटीशन किया था। फर्स्ट हाफ में 6-6 के स्कोर लाइन से सेकेंड हाफ में दोनों ने वॉक इन किया था, बट इस बार काया पलट चुकी है। एडवर्ड गेमिंग इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। एग्जैक्टली पिछली बार पहला मैप गया भी T1 के हाथ में था। T1 वॉज एबल टू कैपिटलाइज ऑन द मैप ऑफ फ्रैक्चर, बट इस बार लग रहा है कि पूरा होमवर्क एडवर्ड गेमिंग कर आई है। जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल लिया साइड का, सारी की सारी यूटिलिटी जो साइड पर थी वो मंचकिन की थी। उसके बावजूद यहाँ पर मंचकिन को जल्दी से शट डाउन करके किलजॉय यूटिलिटीज़ को डिसेबल किया, अपने लिए एक ईजी एंट्री बनाई एंड उस एंट्री के ऊपर कैपिटलाइज भी किया। साया प्लेयर हर बार डिश से आ रहे हैं, हर बार अकेले फाइट्स ले रहे हैं। जब 2 लोग एक साथ आते हैं तभी भी इंडिविजुअल फाइट्स ले रहे हैं एंड अपने प्लेयर्स को खो रहे हैं। इस चीज़ पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अगर साया प्लेयर डिश पुश करना चाहते हैं। अपने साथ में किसी एक प्लेयर को लेके आए, या तो फ्लैश की एबिलिटी उनके पास प्रोवाइडेड हो या फिर वो डबल पीक करें। अदरवाइज इस फाइट को जीतना साया प्लेयर के लिए मुश्किल हो रहा है एंड ही इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग ऑन दैट बैटल।
जी हाँ, बिल्कुल हार तो रहे हैं डेफिनेटली। एट द सेम टाइम जो रीड आ रहा है दैट इज ऑल्सो लिटिल प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि जब उनको लगता है कि ए साइड एग्जीक्यूटर है, एडवर्ड गेमिंग इंस्टेंटली रोटेट करके बी साइड पे जा चुके होते हैं। जब तक उनको वो चीज़ का इन्फॉर्मेशन आता है तो इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा यहाँ पे टीवन को काम करना पड़ेगा। बहुत इंस्टेंट रोटेशन आते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा होल्ड करने की ज़रूरत है एंड गेट अ इन्फो कि एडवर्ड गेमिंग एक्चुअली कौन सी साइड एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दे आर जस्ट प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ टीवन। अपनी प्रेजेंस दिखाते एक साइड पे एंड इंस्टेंट इमीडिएट रोटेट कर जाते हैं दूसरी साइड पे, एंड वो चीज़ यहाँ पे टीवन भाप नहीं पा रहे हैं। एंड फ्रैक्चर अपने आप में इज अ वेरी डिफिकल्ट मैप टू प्ले। नाउ हियर्स अनदर थिंग जहाँ पर टीवन को थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमेशा साइट बी पे मंचकिन को अकेला छोड़ रहे हैं। मंचकिन वहाँ पर अपनी यूटिलिटीज़ लगाते हैं। बीइंग अ सेंटिनल बहुत अच्छी पोजीशन है उनके पास, बट बिकॉज उनके पास कोई भी बैकअप सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, जैसे ही मंचकिन शट डाउन होते हैं साइट बहुत ईजी एंट्री मिल जाती है एंड साइट बी के ऊपर एग्जीक्यूशन एकदम आसान हो जाता है ईडीजी के लिए। सो टीवन विल हैव टू मेक श्योर दैट या तो मंचकिन की पोजीशन चेंज की जाए या फिर मंचकिन को बैकअप पे एटलीस्ट एक और प्लेयर दिया जाए, ताकि मंचकिन के शट डाउन होने के बावजूद वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का उनके पास टाइम रहे, because otherwise this is just gonna be a very easy one-sided swap for EDG and then defense में ज़्यादा मेहनत उन्हें करनी नहीं पड़ेगी। For now it seems like साइट ए की तरफ हल्का कमिटमेंट दिखाने की कोशिश है, थोड़ा शोर मचाया जाएगा नोबडी के द्वारा, लेकिन स्पाइक देखिए ऑलरेडी साइट बी की तरफ जा चुका है। स्पाइक तो बी साइड पे जा चुका है एंड वही चीज़ देखिए 4+ का स्टैक यहाँ पे टीवन का ए साइड पे दिखाई दे रहा है एंड अब रोटेशंस फाइनली आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट थोड़ा सा स्लो अप्रोच यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर बात किया जाए चोचो की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है जनरेटर के पास में, तो थोड़ा सा उनको भी संभलना पड़ेगा। येस द स्मोक्स आर देयर, जिसकी वजह से साइट में एंट्री तो ईजिली मिल जाएगा, टरेट से भी डील कर लेंगे फिलहाल के लिए एडवर्ड गेमिंग के प्लस, तो साइट एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अभी भी देखिए 3 प्लेयर्स यहाँ पे टीवन के मौजूद है ए साइड पे, उनको भनक तक नहीं है कि पूरी की पूरी साइड का कंट्रोल बी साइड का यहाँ पे ले चुके हैं। फाइनली द स्पाइक इज गोइंग टू प्लांट एंड अब टीवन की तरफ से रोटेशंस आएंगे ऑन द रीटेक, जिसमें एडवर्ड गेमिंग काफी अच्छे एंगल्स ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए हैं। बी मेन के एरिया को स्मोक ऑफ कर दिया जाएगा एंड थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे, जिस तरीके से प्लांट दिया गया है बी मेन के बाहर से इजीली यहाँ पे गार्ड किया जा सकता है इन केस अगर डिफ्यूजर का प्रोसेस आता है। एट द सेम टाइम एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो है इन्वेस्ट किया गया है मंच की तरफ से। देखिए बी मेन से यहाँ पर होल्ड करा जा सकता था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो इनके रास्ते में आने वाली दैट इज गोना बी द स्मोक। काफ़ी लंबे टाइम तक स्काई स्मोक्स अपने आप को मौजूद रखते हैं, जिससे काफ़ी टाइम बाय करने में आसानी हुई है यहाँ पर टीवन के प्लेयर्स को। लेकिन अगेन द टाइमिंग ऑफ द स्मोक वाज अ लिटिल ऑफ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी डिप्लॉय कर दिया एंड इसीलिए वापस से बिफोर द डिफ्यूजल कुड हैपन बहुत सारे फाइट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, जो सारे के सारे EDG के फेवर में गए। क्वाइट एन अमेजिंग गेम फ्रॉम द साइड ऑफ EDG, जिस तरह से अपनी लीड को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक राउंड टीवन को मिल सका है। दिस इज डेवास्टेटिंग, दिस इज डेवास्टेटिंग फॉर टीवन। इट इज पिछली बार के जैसा कुछ भी काम नहीं कर रहा है टीवन के लिए, स्पेशली इन द मैच ऑफ फ्रैक्चर। फर्स्ट हाफ तो पूरा यहाँ पे जो है एडवर्ड गेमिंग के हाथ में जाएगा। सेकंड हाफ में किस तरीके से कमबैक स्टोरी रचने का प्रयास करेंगे वो देखना पड़ेगा, बट अभी भी चांस है एक अच्छे स्कोर लाइन के साथ टीवन जो है वॉक इन कर सकते हैं सेकंड हाफ में। इस बार उनकी तरफ से एक अच्छा बाय आते हुए दिखाई दे रहा है, फुल बाय है, ऑपरेटर रहेगी बैन के हाथ में एंड इस बार 2 प्लेयर्स की मौजूदगी है टुवर्ड्स द बी साइड, बट चोचो को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वापस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पोजीशन पे आ चुके हैं, ट्रेल ब्लेजर का यूज करके यहाँ पे जो है आर्केड के एरिया का इन्फॉर्मेशन निकालने का काफी अच्छे तरीके से प्रयास किया गया है। बट स्प्लिट देखिए जो एडवर्ड गेमिंग की तरफ से आ रहा है, 2 प्लस जो है ऑलरेडी ए साइड की तरफ मौजूद है, 1 प्लस स्पॉन में है एंड जिस तरीके से डिश की तरफ भी एक प्लेयर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो लर्क कर सकते हैं या डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो अप्रोच यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग की तरफ से आ रहा है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बटोरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है एंड लुक्स लाइक द स्पाइक इज मूविंग टुवर्ड्स द ए साइड एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कांटेक्ट इज गोइंग टू बी बैन, बट इंस्टेंटली यहाँ पे जो है जेटा को पिक ऑफ कर लिया गया है सैंड्स के एरिया में। कैन इज जस्ट अमेजिंग ऑन द ऑपरेटर। उनकी जो पोजीशन है बहुत क्रूशियल रहने वाली है। उन्होंने ऑलरेडी एक पिक निकाल लिया है, दूसरे पिक के लिए भी रेडी है। अब हियर्स द थिंग, इस पिक के बाद में टीवन वुड सस्पेक्ट कि साइड ए के ऊपर प्लांट हो सकता है, लेकिन साइड बी के ऊपर प्लेयर्स हैं एंड हर बार इस तरह से टीवन को फूल किया गया है, लेकिन दिस टाइम दे नॉट गोना गेट फूल्ड इजीली। सारे के सारे प्लेयर्स साइड बी की तरफ मूव कर रहे हैं एंड पहली बार मंचकिन के पास रिक्वायर्ड सपोर्ट रहने वाला है, लेकिन उस सपोर्ट को भी इतनी जल्दी धराशायी करेंगे दैट यू कैन नॉट बिलीव इट। मंचकिन हाउएवर यहाँ पर नंबर इक्वलाइज करने में कामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल में दिखाई दे रही थी EDG के, अनलेस कार पे शोड अप, टुक डाउन 2 मोर, प्लांट जरूर हो जाएगा, 300 एक्स्ट्रा क्रेडिट जरूर मिल जाएगा, बट राउंड नहीं मिलने वाला। देयर इट गोस, द डिफ्यूज विल हैपन एंड इट्स डन फॉर टीवन अपना दूसरा राउंड जीतते हुए।
बहुत ज़रूरी भी है। फर्स्ट हाफ में एक अच्छे स्कोर लाइन के साथ ख़त्म करना है। इस बार दूसरा राउंड जी हाँ T1 के पास में ज़रूर आया है। बी साइड का जो उनका सेटअप था फाइनली टेस्ट होते हुए इस बार पूरी की पूरी टीम ने जो है बी साइड की तरफ यहाँ पे स्टैक किया एडवर्ड गेमिंग के, जो शायद नेक्स्ट टाइम हमें होते हुए नहीं दिखाई दे। एम डुएल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे निकाले गए, मंचकिन विद द 2K, कारपे विद द 2K, वो चीज़ यहाँ पे फेवर में करी, बट 3 वेपन्स यहाँ पे खुद भी T1 के ड्रॉप हो गए थे, तो इकोनॉमी पे अभी भी झटका तो रहेगा, बट स्टिल इट्स अ डूएबल राउंड इन द नेक्स्ट राउंड। कारपे के पास यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्राइक रहेगा, साया प्लेयर के पास शो स्टॉपर रहेगा एंड ऑपरेटर तो बैन के हाथ में है ही है। 3 अल्टीमेट्स यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग के पास भी रहेंगे। इस बार देखिए डिश की तरफ यहाँ पे पिंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट 2 प्लेयर्स यहाँ पे टावर एंड आर्केड के थ्रू मूव कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर बटोरना चाहेंगे एंड एडवर्ड गेमिंग की अगर बात करें ZM, उनके पास भी ऑपरेटर है एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी मंचकिन। मंचकिन अगर फर्स्ट पर्सन ऑफ कांटेक्ट बने तो दोबारा से सेम इशू हो सकता है। एंड अगेन यू नो कौन कौन जिस तरह से खेलते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है उनको फाइट ऑफ कर पाना, एंड मंचकिन माइट जस्ट नॉट बी एबल टू पिक अप द पीसेस फ्रॉम हियर। जिस तरह से कल खेलते हुए नजर आए थे बहुत ही शानदार गेम प्ले इनका था, बट मंचकिन की पोजीशन बहुत शानदार है, क्राउच करके बॉक्सेस के पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल किया गया एंड कॉन विल बी एबल टू शट हिम डाउन। हाउएवर इन द मीनवाइल टीवन ने 3 फ्रैग्स निकाले इन 4 पोजीशन। नाउ दोबारा से प्लांट करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसको होल्ड ऑफ कर पाना मुश्किल है। Ooh, nobody flashes one, takes one more down, makes it a 2v3, makes it a doable situation, makes it possible. And अब बहुत confused position में साया player थे, लेकिन फ्रैग निकाल लेंगे। Now it's a 1v3, almost done for already. एडवर्ड गेमिंग के हाथ से ये राउंड तो गया। ऑपरेटर यहाँ पे ज़रूर सेव करना चाहेंगे जेट। एंड अगर T1 की बात करें साया प्लेयर के पास अभी भी शो स्टॉपर है जिसका इन्वेस्टमेंट तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, बट फ्रैग निकालने का प्रयास किया जाएगा। एंड अभी भी ZM को देखिए अपनी ऑपरेटर से शॉट लेने का प्रयास करते हैं, उससे पहले साया प्लेयर आएंगे अपनी वैंडल से उनको भी यहाँ पे फिनिश ऑफ करके ईजी डिफ्यूज आते हुए। तो तीसरा राउंड भी यहाँ पे जो है T1 के हाथ में आते हुए अभी भी देखिए 2 राउंड बचे हैं फर्स्ट हाफ में। अगर दोनों राउंड्स T1 अपने हाथ में ले जाते हैं तो 5-7 के स्कोर लाइन से सेकंड हाफ में वॉक इन करेंगे। एंड इट्स स्टिल अ डूएबल सिचुएशन फॉर T1, इतना बुरा डिफरेंस नहीं है स्कोर लाइन में, इट्स अ वेरी गुड स्कोर लाइन इन द मैप ऑफ फ्रैक्चर। बट वही बात आज देख, अगर वो 2 राउंड यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग के हाथ में गए तो T1 के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फाइनली एक टाइम आउट आते हुए एंड कोच डेफिनेटली अपनी टीम को गाइड करेंगे किस तरीके से रिमेनिंग 2 राउंड्स में अप्रोच किया जाए। कौन एक बहुत बड़ा वेपन यूज कर रहे थे, इट वाज द ऑपरेटर। बैरल बहुत लंबा रहता है, स्मोक के थ्रू बैरल स्पॉट हो गया, बहुत ही जल्दी बली हो गया, अदरवाइज फाइटिंग चांस उनके पास अभी भी था। पर वेल T1 के लिए एक सुनहरा मौका जरूर बना वो, एंड दे वर एबल टू कन्वर्ट द स्कोर लाइन इनटू अ 3-7। अभी भी 4 राउंड्स की लीड रहने वाली है EDG के पास में। दे कैन कैपिटलाइज ऑन इट। अगर 8-4 का भी स्वैप होता है तो EDG के लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा, बट इफ इट गोज टू 5-7 then EDG has to be scared, quite scared, because T1 again एक बहुत strong team है, साया player बहुत strong player है, whether it is defense or attack, and well attack में actually एक next level player है साया player, so you just need to be very very careful of that situation. But EDG is doing pretty well today. आज का दिन जिस तरह से EDG का जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बहुत अच्छी पोजीशन अपने लिए पाएंगे। पिछली बार फर्स्ट हाफ का जो स्वैप था उसमें सिर्फ 5 राउंड मिले थे EDG को, इस बार ऑलरेडी 7 राउंड मिल चुके हैं, सो दे आर डूइंग प्रीटी गुड फॉर देमसेल्व्स। और यार अभी भी 2 राउंड बचे हैं। अगर हम देखें ऑर्बिटल स्ट्राइक यहाँ पे रहेगा, T1 के पास में शो स्टॉपर रहेगा, एक और कलेक्ट कर लेते हैं तो लॉकडाउन भी आ जाएगा। तो अभी भी उम्मीद है कि T1 ये राउंड अपने फेवर में ले जा पाए। इस बार 2+ का प्रेजेंस रहेगा T1 की साइड से टुवर्ड्स द बी साइड। थोड़ा सा सेटअप में चेंजेस भी है, जिस तरीके से मंचकिन ने अपने पूरे के पूरे यूटिल प्लेस किए हैं वो आर्केड के थ्रू टावर के पास में प्लेस किए हैं, क्योंकि बार बार कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं एडवर्ड गेमिंग जो है टावर के थ्रू रोटेट करते हुए दिखाई दे रही है। बट इस बार ई साइड को ऑलमोस्ट कंप्लीटली खाली छोड़ दिया गया है। लॉकडाउन यहाँ पे जरूर इन्वेस्ट किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ एडवर्ड गेमिंग, जो कि फोर्स कर देगा प्लेयर्स को थोड़ा सा पुशबैक करने में। बट ए साइड की तरफ एग्जीक्यूशन है एंड अभी तक T1 के पास उसका रीड नहीं है। 2 प्लेयर्स यहाँ पे जरूर आ चुके हैं सैंड्स के एरिया के पास, बट हॉल्स का पूरा कंट्रोल एडवर्ड गेमिंग के हाथ में आ चुके हैं। जैसे ही आपके पास हॉल्स का कंट्रोल आता है, कहीं ना कहीं स्मोक्स का यूज करके आप इजीली साइड का पूरा कंट्रोल ले पाते हैं।
इस बार थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, दैट इज के रोलिंग थंडर इस्तेमाल करके साइड क्लियर जरूर कर लिए, प्लांट करने का मौका मिलेगा, स्मोक्स भी डाल दिए, लेकिन द थिंग इज के सैंड्स वाले एरिया का जो स्मोक है वो स्मोक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है, वहाँ से निकलना आसान रहेगा बिकॉज वो एरिया अभी तक ओपन है एंड उस स्मोक को क्रॉस ओवर करते ही टीवन के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, बट दे विल नॉट बी अलाउड टू डू दैट। मॉली का इस्तेमाल किया जाएगा, चोक पॉइंट को कंसील कर दिया जाएगा, स्मोक के थ्रू पास ऑन करने का मौका नहीं मिलेगा। साई प्लेयर इज गोना गो ऑन दैट शो स्टॉपर, शायद एक फ्रैग निकालने में कामयाब हो सके, बट दैट इज ऑल ही विल बी एबल टू डू क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स एक साथ खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं ईडीजी के। वैल्यू कम रहने वाली है, बट द फाइट्स, द डबल स्विंग्स, दे आर गोना कंज्यूम क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स फ्रॉम द साइड ऑफ ईडीजी। जी हाँ बिल्कुल, ट्रेड्स भी आते हुए कार्प एंड मंचकिन की ये जो वैंडल्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से बोलते हुए दिखाई दे रहे, काफी अच्छे पिक निकाले हैं। आखिरी प्लेयर को भी यहाँ पे जो ऑपरेटिव के द्वारा फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, काफी अच्छा रीटेक यहाँ पे जो है टीवन की तरफ से देखने को मिला। तो प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो चीज यहाँ पे टीवन को बखूबी आती है। जिस तरीके से ये राउंड निकाला है, 4-7 का स्कोर लाइन हो चुका है एंड आई थिंक 5-7 का भी हो सकता है फर्स्ट हाफ में। फाइनली टीवन ने दे आर एबल टू हैव अ रीड, रीटेक पे ज्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं एंड रीटेक में जिस तरीके से एम डुअल प्रेसिपिटेट होने का वेट करते हैं और उसके बाद जिस तरीके से पोजीशन होता है प्लस का एक अच्छा क्रॉस फायर सेटअप होता है टीवन की तरफ से एंड एडवर्ड गेमिंग के लिए अब दिक्कत आ सकती है सेकेंड हाफ में, क्योंकि अगर इस तरीके से डिफेंस में थोड़ा सा एग्रेशन लेके आ रहे हैं, एम डुअल्स यहाँ पे जीत रहे हैं टीवन के प्लस, तो सेकेंड हाफ में एडवर्ड गेमिंग के लिए दिक्कत हो सकती है। बट फिलहाल डिश के एरिया में ऑपरेटर का शॉट यहाँ पे जो है बैन मिस करते हुए दिखाई देंगे। एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि डिश एरिया में 2 प्लेयर्स मौजूद हैं एंड इंस्टेंट रोटेशन यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग के थ्रू आते हुए अब बी साइड को कमिट करने का प्रयास किया जा सकता है, बट बी साइड पे देखिए वापस से 2 प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। साइड बी पे नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक मूव रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ टी1। इट इज़ हेल्पिंग देम एज वेल, जो भी कमबैक उन्होंने क्रिएट किया है वो साइड बी के प्लेसमेंट्स को चेंज करके कर पाए हैं एंड दैट्स वर्किंग आउट प्रीटी वेल अभी के लिए। लेकिन आप देखिए टनल्स के थ्रू मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे हमें एक प्लेयर फ्रॉम द साइड ऑफ ईडीजी, दैट इज स्मॉगी, बट वापस से फ्लैश ले लिया है उन्होंने, वापस बाहर निकल के आएंगे एंड साइड बी पे एग्जैक्टली कमिट करेंगे फ्रॉम द मेन इटसेल्फ एंड कौन को देखिए दोबारा से 2 फ्रैग्स निकालने। इस बंदे के फ्रैग्स एक के बाद एक लेफ्ट एंड राइट आते ही चले जाते हैं। ही जस्ट डज नॉट स्टॉप, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स टू स्टॉप एंड आई डेस्परेटली वांट टू सी ईडीजी वॉकिंग इनटू द प्लेऑफ्स, क्योंकि मुझे देखना है कि आसपास एंड कौन का कैसा मुकाबला रहने वाला है। हाउएवर कमिंग बैक इनटू दिस स्पेसिफिक राउंड, he has already done all that needed to be done from the side of EDG। अब बस एक प्लेयर बचते हैं from the side of T1 जिनको शट डाउन करने के लिए ऑलरेडी कौन अपने ब्लेड स्टॉप निकाल चुके हैं। वैल्यू नहीं निकलेगी लेकिन अच्छा बेट, बिकॉज स्मॉगी विल बी एबल टू ट्रेड दिस ऑफ। जी हाँ, काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे निकाला गया एंड इसी के साथ यहाँ पे फर्स्ट हाफ तो हमारा खत्म हुआ। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो टीवन ने वापसी करने का प्रयास करा था एंड काफ़ी अच्छे राउंड्स यहाँ पे फर्स्ट हाफ में बटोर भी लिए जिस तरीके से। जी हाँ, बी साइड पे थोड़ा सा प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, 2 प्लेयर्स को वहाँ पे प्लेस किया। स्टार्टिंग में मात्र एक ही प्लेयर रहता था जिसके वजह से यहाँ पे टीवन काफ़ी सारे राउंड्स लूज करते हुए स्टार्टिंग में दिखाई दी थी फर्स्ट हाफ के, बट फर्स्ट हाफ के टुवर्ड्स द एंड काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है रिकवर किया है टीवन ने। आई लाइक हाउ मैच T1 एंड EDG का चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर NRG विन सॉम का हमें एक बोर्ड देखने को मिला है। लाइक सपोर्ट तो NRG के पास है, दे हैव ऑलरेडी वॉक्ड देमसेल्व्स इनटू द प्लेऑफ्स, लेकिन अभी भी सपोर्ट कायम है। सो विल सी हाउ दैट वर्क्स आउट। कॉन्गकॉन्ग, येस ही इज क्वाइट एन अमेजिंग प्लेयर एंड उनकी ऑपरेटर के साथ में जो यहाँ पर पोस्टर देखने को मिला है, दैट्स प्रीटी एक्यूरेट, ऑन पॉइंट कंप्लीटली। जी हाँ, बट सेकेंड हाफ इम्पॉर्टेंट रहेगा। पिछली बार दोनों टीम ने वापस से रिपीट करूँ 6-6 के स्कोर काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहा था दोनों के बीच में मैचअप, जहाँ पे एडवर्ड गेमिंग काफ़ी सारे राउंड्स बटोरने हो गई थी। इनफैक्ट उनका जो इको राउंड था वो भी उन्होंने अपने फेवर में निकाला था। पिस्टल राउंड तो इवन में गया था, बट उसके बाद जिस तरीके से कमबैक कर रही थी एडवर्ड गेमिंग, दिस टाइम इट्स लिटिल डिफरेंट। टी1 ज़्यादा प्रिपेयर्ड यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है, बट प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा अगर राउंड्स आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं। तो एडवर्ड गेमिंग डेफिनेटली अपने हर एक राउंड पे काम करके आई है। इकॉनमी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे फिलहाल के लिए नज़र आ रही थी। फर्स्ट हाफ में तो डेफिनेटली दिक्कत एडवर्ड गेमिंग ने पैदा कर दी। मात्र 4 ही राउंड्स यहाँ पे जो है जिस स्कोर रन के साथ यहाँ पे T1 वॉक इन करना चाहती थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। उम्मीद थी 5-7 के साथ जाए, बट 4-8 भी T1 के लिए इतना ज़्यादा खराब समाचार तो नहीं है। एडवर्ड गेमिंग के एक प्लेयर ऑलरेडी थोड़े से बीमार नजर आ रहे हैं। ही इज बिन कॉफिंग कॉन्स्टेंटली, इसके बावजूद एडवर्ड गेमिंग लीड पे चल रही है इन द फर्स्ट हाफ। सो
Good job there. Second half में पिछली बार पता है Shadow Story was like 4 rounds लगातार T1 जीत चुकी थी. बहुत ज़्यादा गंभीर स्कोर लाइन बन गई थी उसके बाद में. They only had 3 rounds to win. डबल डिजिट हिट कर लिया था उन्होंने सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही. So let's see क्या इस बार एडवर्ड गेमिंग उन्हें वो मौका देने वाली है या this time they have different motives for the game. क्योंकि again सिमिलर मैप पिक्स रहे हैं. फर्स्ट 2 मैप्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं. अगर एडवर्ड गेमिंग भी सेम चीज़ रेप्लिकेट कर पाती है, फर्स्ट 4 राउंड निकाल पाती है सेकेंड हाफ में, लिटरली अपने आप को मैच पॉइंट पे पाएगी. एंड अगर T1 सेम चीज़ कर पाती है तो दे विल फाइंड देमसेल्व्स ऑन द इक्वलाइजर एंड थिंग्स विल बिकम ईजियर. जी हाँ, पिस्टल राउंड यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है. अगर आप जीत जाते हैं उसके बाद आपका बाय राउंड आता है तो इको राउंड निकालना इतना ज़्यादा ओपोनेंट टीम के लिए आसान नहीं होता है. तो पिस्टल राउंड पे प्रेशर दोनों ही टीम की तरफ रहेगा. एडवर्ड गेमिंग यहाँ पे मैच अगर जीतना चाहते हैं कोशिश करेगी ये पिस्टल राउंड अपने फेवर में लेके जाए. पहला पिस्टल राउंड तो डेफिनेटली एडवर्ड गेमिंग के हाथ में गया था, तो वापस से कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से. इस बार अगर बात करें एडवर्ड गेमिंग ऑन द डिफेंस, 2+ का प्रेजेंस यहाँ पे सैंड्स के एरिया में रहेगा एंड 2+ डिश के आगे काफी ज्यादा फॉरवर्ड आके खेल रहे हैं. काफी अच्छे ट्रेड्स दोनों साइड से निकाले गए बट ज्यादा डैमेज यहाँ पे T1 को आया है. 2+ जेट उनके जो है डुअलिस्ट यहाँ पे जो है एलिमिनेट हो चुके हैं. बट 3+ का काफी अच्छा प्रेजेंस ए साइड पे अभी भी साइड एक्सिक्यूट करने में दिक्कत दिला सकते हैं. स्मोक्स आर देयर एंड स्मोकी अंडर हेवन एरिया से 1 नहीं 2 नहीं 4+ को पिक ऑफ करेंगे. एंड इसी के साथ पूरा का पूरा राउंड यहाँ पे जो है टीम अपने लिए निकालते हुए ऑल द क्रेडिट गोज टू स्मोगी. पहला पिक अपना डिश के एरिया में निकाला एंड उसके बाद में वहाँ से लौट कर गए. तुरंत 3 फ्रैग्स अंडर हेवन एरिया से भी निकाले. क्या ही शानदार क्लोज किया है यहाँ पर स्मॉगी ने, कोई मौका ही नहीं दिया. सो हियर्स द डिफरेंस. हमने T1 को देखा कंप्लीटली रीटेक पे खेल रहे थे. साइड में एंट्री का मौका तो दिया, साथ ही साथ प्लांट करने का भी मौका दिया, उसके बाद एंटर हुए. द डिफरेंस इज कि एडवर्ड गेमिंग साइड में एंट्री का मौका दे रही है, लेकिन जिस तरह का अंदर प्लेसमेंट है प्लेयर्स का, आपके एंटर होते ही आपको धराशायी कर रहे हैं, प्लांट का मौका नहीं दे रहे. तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बूस्ट आपको मिल सकता है, 300 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स आपको मिल सकते हैं, वो भी छीने जा रहे हैं T1 से. सो T1 ना अभी थोड़े गरीबी के साए में है. एक और बार दोबारा से नो इन्वेस्टमेंट राउंड आएगा उनकी तरफ से. एंड सामने की तरफ से अगर आप देखें तो एडवर्ड गेमिंग यहाँ पर एंटी इको पे चलती नजर आ रही है. ऑलरेडी स्मॉगी थैंक्स टू दोज 4 किल्स अपने लिए फैंटम अफोर्ड कर पाए. सो द नेक्स्ट राउंड इज गोना बी सुपर इजी फॉर देम. इट्स नॉट गोना बी दैट मच ऑफ एन इम्बैलेंस इन वेपनरी. अगर अपना बोनस कन्वर्ट कर लिया EDG ने तो फिर तो T1 के लिए बहुत दिक्कत भरी सिचुएशन बन जाएगी. इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल टू कम बैक फ्रॉम दैट. अब देखिए मंचकिन को कुछ भी करके एक पिक निकालना पड़ेगा. पिन देके अपनी टीम को हेल्प तो कर दी है कि प्लेयर्स को इन्फॉर्मेशन दे देंगे यहाँ पे, बट पिक निकालते उससे पहले खुद ही यहाँ पे जो पिक ऑफ हो चुके हैं. ओह, फॉल टाइम का यूज यहाँ पे किया जाएगा. स्मोक्स आर देयर बट एडवर्ड गेमिंग बेटर वेपन होने की वजह से इजीली एम डुअल्स यहाँ पे जीतते हुए एंड पूरी की पूरी टीम 1 को धराशायी कर दिया. T1 यहाँ पे जो है ब्लूजर बोनस पे खेलते हुए दिखाई देगी. ऑन दी अदर साइड एडवर्ड गेमिंग के लिए तो चांदी ही चांदी है. काफ़ी अच्छी उनकी इकोनॉमी है, काफ़ी अच्छा स्कोर लाइन में यहाँ पे बढ़ोतरी मिल चुकी है. 10-4 का स्कोर लाइन है. अगर नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग जीत जाते हैं ना एडन, तो उसके बाद सीधा मैच पॉइंट पे दिखाई देगी टीम हमें. The read has been absolutely outstanding from the side of Edward Gaming. डिफेंसिव राउंड को अटैकर्स की तरह खेला है इन्होंने. सेम पिंच बनाया जो अटैकर्स बनाते हैं. 4 प्लेयर्स डिश से घुसे. डिश की तरफ से आने वाले इकलौते प्लेयर को ऑलरेडी शट डाउन कर दिया. साइट ए के अंदर एंटर करने वाले सारे के सारे T1 प्लेयर्स को घेर लिया गया और एक प्लेयर इनके सैंड्स वाले एरिया से रोटेट करके आए एंड उन्होंने बैकअप सपोर्ट दे दिया इस फाइट में. 2 प्लेयर्स को कौन पिक कर पाए उसके बाद में वो जरूर से बली हुए, लेकिन एक सिंगल प्लेयर के लॉस पे पूरा राउंड निकालने में कामयाब हो गए एडवर्ड गेमिंग. क्वाइट एन अमेजिंग गेम. बट अभी आ चुका है बाय T1 के पास में एंड ये T1 के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल राउंड रहने वाला है, जिसमें ऑलरेडी चोचो अपना कमाल दिखाते दे रहे हैं. ऑलरेडी यहाँ पर 4 फ्रैग्स निकल चुके हैं. इट्स अ 1v5 ऑन द बोनस. हाउ डज दैट हैपन? मंचकिन आई डोंट नो, गो फॉर इट. आई गेस मर्जी है आपकी. 100 क्रेडिट्स बचे हैं, बचा लो गवा दो, एक ही बात है. सेव पर तो पहुंच जाओगे. एक प्लेयर को तो पिक ऑफ कर लिया मंचकिन ने. अपने वेपन सेव करना चाहिए, एट द सेम टाइम वेपन ड्रॉप कराने का प्रयास भी करे, बट क्या ही फायदा. 11 का स्कोर लाइन यहाँ पर आ चुका है एंड एडवर्ड गेमिंग काफ़ी अच्छा लीड अब उनके पास आ चुका है स्कोर लाइन में. तो ये मैप जीतने से एडवर्ड गेमिंग को तो कोई भी नहीं रोक पाएगा. ये इको राउंड था T1 के लिए, बट फाइनली उनके पास एक अच्छा वेपनरी शायद हमें आते हुए इस बार दिखाई देगा. बट क्या राउंड आते हुए दिखाई देगा?
उसकी संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम के बीच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी यहाँ कम दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से एम डुअल्स हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट हाफ में कोशिश अच्छी करी गई टीवन की तरफ से, बट अब वो कोशिश बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। प्लस थोड़ा सा अपना जो है कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। दूसरी साइड एडवर्ड गेमिंग दे आर प्रीटी हैप्पी जिस तरीके से राउंड्स उनके फेवर में आ रहे हैं, पूरा का पूरा मोमेंटम उनके हित में जाते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ये मैप भी मुझे जो है एडवर्ड गेमिंग के हाथ में ही आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट राउंड में क्या आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे टीवन करेगी अपने फेवर में राउंड जाने के लिए, कोई एक हिस्टोरिक कमबैक आज हमें देखने को मिलेगा? आई डोंट फील लाइक यहाँ पर कोई कमबैक हो सकता है एट दिस करंट सिचुएशन। 11-4 का स्कोर लाइन चल रहा है। सेकेंड हाफ में घुसते ही एडवर्ड गेमिंग ने जिस तरह से अपना गेम प्ले दिखाया है, टीवन को रीड करने तक में तकलीफ हो रही है एंड दे जस्ट आरंट एबल टू पिक देयर पीसेस अप। काफ़ी अच्छे स्ट्रैट्स लेके अंदर घुसते हैं, लेकिन एडवर्ड गेमिंग अपने एम डुअल्स तक पे इतनी ज़्यादा फर्म है कि इन द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ 2 प्लेयर्स पिक ऑफ कर लेती है, सारे के सारे स्ट्रैट को धराशायी कर देती है, कुछ भी नहीं हो पाता। उसके बाद फिर आपने कितना भी कुछ सोचा, अगर आपके 2 प्लेयर्स जा चुके हैं तो फिर आपके पास से बहुत सारी यूटिलिटीज़ मिसप्लेस हो जाती है एंड देन यू आर जस्ट रिलायंट ऑन वॉट एवर इज रिमेनिंग फ्रॉम योर टीम। इस बार ज़रूर से बुलडॉग्स और एक वैंडल देखने को मिलेगी फ्रॉम द साइड ऑफ टीवन, एंड वैंडल बहुत सही प्लेयर के हाथ में। साया प्लेयर अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम द साइड ऑफ टीवन टू एक्चुअली go ahead and take the initial duels, so pretty good for them कि साया प्लेयर को चूज किया वैंडल के लिए। लेकिन here's the thing, वैंडल है पर साथ में शील्ड नहीं है, not even half shield। difficult situation, very difficult situation। थोड़ा सा डाइसी हो रहा है मैच यहाँ पे, but I think Edward Gaming has all the odds towards themselves। अगर इसके बावजूद एडवर्ड गेमिंग ये राउंड हारती है तो टीवन के पास एक मोमेंटम बिल्ड करने का मौका आ जाएगा, और अगर क्रेडिट्स की बात करें तो बहुत अमीरी है एडवर्ड गेमिंग। सैंड्स के एरिया से यहाँ पे जो पुश करने का प्रयास किया जा रहा है, बैन ने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे 1 प्लेयर नहीं 2 प्लेयर पिक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहा है एडवर्ड गेमिंग के। एंड मे बी ये राउंड जो है टीवन कन्वर्ट कर पाए, अपने हित में साइड का कंट्रोल मिल चुका है। स्पाइक भी प्लान करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। साया प्लेयर इज गोइंग फॉर द प्लान एंड बैन को पता है कि एग्जैक्टली प्लेयर का एग्रेशन नहीं दिखा सकते, मात्र 5 HP हैं, उनको भी यहाँ पे जो है पिक ऑफ कर दिया। जो सिनेरियो फॉर द एडवर्ड गेमिंग, जी हाँ एक मॉलोटॉव यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया अंडर हेवन एरिया में, बट एडवर्ड गेमिंग यहाँ पे जो है एक और पिक निकालेंगे, बट मंचकिन इंस्टेंट ट्रेड भी निकालते हुए 1v1 सिनेरियो सैंड्स के एरिया में अभी भी मंचकिन मौजूद रहेंगे। अगर डिफ्यूज का प्रोसेस यहाँ पे कोशिश की गई तो प्लेयर को इजीली पिक ऑफ किया जा सकता है। चूचू भी यहाँ पे थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बट क्या पिक ऑफ हो जाएंगे? बट नहीं, डैमेज दिया, बट चूचू ने काफी अच्छे तरीके से वॉल बैंक के थ्रू रिटेलिएट किया एंड मंचकिन को पिक ऑफ कर लिया एंड ये राउंड भी एडवर्ड गेमिंग के हाथ में आते हुए। ब्रिलियंट चोचो के जो माइंड गेम्स हैं उनकी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। द प्रेजेंस ऑफ माइंड हैज बीन अमेजिंग, द वे ही डिसाइडेड। सो हियर्स द थिंग, बॉक्सेस के थ्रू स्पॉट हुए एंड जो एक्सपेक्टेशन रही होगी यहाँ पे फ्रॉम द साइड ऑफ टीवन दैट वाज कि एक बार जिगल आएगा। मंचकिन अगले जिगल का वेट कर रहे थे, तब तक बॉक्सेस के थ्रू मंचकिन की सेम पोजीशन पे यहाँ पर शॉट्स ले लिए गए एंड मंचकिन ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया था, बिल्कुल ए लिंक के डोर के राइट एज पे खड़े हुए थे, वहीं खड़े रहे। हल्का सा भी हिलते तो बच सकते थे एंड दोबारा से जिगल करने पे चोचो को मजबूर कर सकते थे। चोचो की एचपी बहुत लो थी, उनको पिक ऑफ किया जा सकता था, लेकिन चोचो जस्ट टर्न्ड आउट टू बी द वन प्लेइंग ऑल द ब्रेन गेम्स हियर एंड उस राउंड को भी कन्वर्ट किया। मैच पॉइंट पर ईडीजी आ चुकी है एंड टीवन अभी तक 4 राउंड्स लेकर खुश हो रही है। मात्र 4 राउंड्स, मैच पॉइंट आ चुका है। अब तो एडवर्ड गेमिंग का जीतना ऑलमोस्ट कंफर्म है। मंचकिन भी यहाँ पे पिक ऑफ हो चुके हैं, ऑर्बिटल स्ट्राइक भी यहाँ पे जो है टीवन की तरफ से इन्वेस्ट की गई, जिससे कोई वैल्यू फिलहाल नहीं निकली है एंड एडवर्ड गेमिंग कार पे को भी पिक ऑफ यहाँ पे कर मात्र 3 प्लस फॉल्ट लेन का यूज हो सकता है एंड प्लेयर्स में यहाँ पे जो है पिक निकालने का प्रयास एंड हॉल्स में ही प्लेयर्स को पिक ऑफ कर दिया गया है। टीवन का प्लेयर ऑल्सो गोज डाउन, बैन बचे थे, बैन को भी धराशायी कर दिया जाएगा। इसी के साथ पहला मैच फ्रैक्चर का यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग अपने फेवर में एडन ले जाते हुए, वो भी काफी अच्छे स्कोर लाइन के साथ। ना सिर्फ एडवर्ड गेमिंग ने अपने साथ में ये मैप रखा है, बल्कि उन्होंने साथ ही साथ जिस तरह का डोमिनेशन दिखाया है, टीवन को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया होगा कि किस तरह से यहाँ से वापस आया जाए, किस तरह से इस फाइट को परिणाम दिया जाए, बिकॉज करंटली इट जस्ट सीम्स लाइक दे हैड नोवेयर टू गो, नथिंग टू डू, no scope at all of actually making a comeback. I mean, ठीक है, पिछली बार ये मैप टीवन जीती थी, यहाँ पर हरा दिया। अगला मैप तो वैसे भी ईडीजी जीती थी, तो उनके पास अपर हैंड वैसे ही रहने वाला है एंड जिस तरह का चेंज इन गेम दिख रहा है, ईडीजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आई है। टीवन को बहुत सोच समझ के अपना एक कदम रखना पड़ेगा अपने अगले मैप में, वरना उस मैप से सीधा घर का सफर तय करते हुए दिखाई देंगे।
हेवन में जीतना पड़ेगा। T1 यहाँ पे जो है डिफेंस में दिखाई देगी एंड एडवर्ड गेमिंग का पिक है तो अपने पिक हुए मैप पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एडवर्ड गेमिंग की तरफ से आते हुए दिखाई देगा। एंड पिछली बार अगर बात करें दोनों टीम्स जब हेवन के मैप पे खेली थी तो 13-7 के साथ एडवर्ड गेमिंग ने जीत हासिल करी थी। अगर वही हिस्ट्री रिपीट होती है जैसे कि आपने मेंशन किया तो एडवर्ड गेमिंग ओवरऑल जीत हासिल करेगी एंड T1 घर का रास्ता देखते हुए दिखाई देगी। बट T1 यहाँ पे प्रिपेयर होगी तो आई होगी। पिछली बार हार का सामना करना पड़ा तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे स्ट्रैट्स प्रिपेयर करके T1 की टीम लेके आई होगी ऑन द मैप ऑफ हेवन। फ्रैक्चर पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर रहा होगा, पिछली बार जीत हासिल हो गई थी बट दोनों ही टीम से कैपेबिलिटी है बट थोड़ा सा T1 को अपना कॉन्फिडेंस भी वापस लाना पड़ेगा। Well, T1 के लिए this has definitely been a sad news, लेकिन जिस तरह से एडवर्ड गेमिंग प्रिपेयर करके आई है फर्स्ट मैच को, हो सकता है T1 के पास भी कुछ ट्रिक्स अप द स्लीव हो सेकंड मैच के लिए। तो देखते हैं हेवन के मैप पे यहाँ पर क्या धमाका देखने को मिलेगा दोनों ही तरफ से, बिकॉज अगेन दिस इज द लास्ट एवर मैच ऑफ ग्रुप स्टेजेस। यहाँ से हमारी आखिरी टीम डिसाइड होगी जो प्लेऑफ्स का सफर तय करेगी, जिनके लिए प्लेऑफ्स में काफ़ी सारी टीम्स ऑलरेडी इंतजार कर रही हैं। यहाँ से 3 टीम्स जा चुके हैं विच हैज बीन इविल जीनियसेस, NRG एंड DRX। साथ ही साथ ऑलरेडी वहाँ पर 4 टीम्स रहने वाली हैं विच इज़ फनाटिक, लाउड, टीम लिक्विड एंड HyperX। दिस इज gonna be quite amazing. I mean, I cannot believe the way the game is going. मैंने एक्सपेक्ट किया था EDG का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा बट मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग फैशन में फ्रैक्चर को अपनी तरफ लेके जाएंगे। हाउएवर दिस हैज़ ऑलरेडी बीन अ टाइम जहाँ पे हम बहुत ही फैशन में इस चीज़ को एक ब्रेक की तरफ लेके जाए बट विल बी बैक सून इनफ।
Hey guys, I'm here with Coach After, and we're gonna just dive right into this real fast. And of course, Iris is here as well. You guys have had a quick turnaround time to get ready for the game that's on the stage, and the results speak for themselves. How has this experience been for you? 因为其实从昨天到今天，你们是有一个非常快速的调整嘛，然后包括说目前现在这样一个结果还是不错的，所以你整体来讲你是怎么做到的，以及说对目前这样的一个情况感觉怎么样子的？第一次对战到 T1 的时候，我感觉我们的状态跟战术内容都没有呈现出来，可能因为环境太紧张了。然后今天我们把所有的东西都发挥出来了，对。I think the first time when we met T1 on stage, we didn't play on our strength, so we didn't perform at the best form that we can have. But today, I definitely think that we play on the best peak of our form. So we were playing on our strength, pretty satisfied. Well, I mean, the results speak for themselves, Coach. Good job, brother. Anyway, back to you guys. Thank you very much, Golden Boy. Indeed, the results speak for themselves. I'm Yingsu. I'm back here with Kakuka and Mimi. That was actually the most dominant victory EDG have ever shown in international stage. Previously, it was a 13-5 against HyperX, and Mimi a 13-4 against T1. This is crazy. Yeah, it was just incredible. The second half, they didn't let T1 get a single round. It is such a turnaround from the last time we saw these two teams play. And whereas T1, I feel like we're trying a lot of the same ideas, a lot of the same things. They really got caught off guard by EDG throwing in more aggression, throwing in more reclears in the mid-round, and throwing in Kong Kong playing incredibly. Just this head-to-head between the Jets, it's I don't even know how to describe it because of what we just saw on the server. We talked at the beginning of the day, are the nerves going to be there? Is Kankan just going to keep improving on that performance? And he definitely delivered. He keeps up this performance, they're already in playoffs. I mean, Ban said that they were going to shut him down. They had a plan, but it doesn't look like they did. Yeah, I mean, they were not able to shut him down. And I love the way that this team uses Kong Kong on this map. On their defensive side, he's almost always just holding hands with Smoggy, pushing together to get space on an extremity, to get them that information to set up for the retake that they want to play. And on their attack side as well, they also just get so much value out of him. He's allowed to just play alone with an operator on the other side of the map, and he still gets value out of it. It's insane. I'm glad you mentioned Smoggy because let's check him out here in the Verizon high-speed moment from round 13. I saw a tweet saying that Kong Kong and team, Kakuka, I am offended. Like, do they watch EDG play? Yeah. Because how are you going to do Smoggy like this? I can justify Kong Kong just having a lot of fans out there just by the performance this he's been having during this tournament. I can see people getting excited by the plays that he gets on the stage. But, you know, I think that we should, you're being fair. We need to give everybody a piece of the cake because everyone from EDG has been to the best of the performance. Yeah, and even when you watch this team play in China, a lot of the time Smoggy can even overshadow what Kong Kong does. He's such a good player, despite the fact that he's switching between so many different roles for this team. He used to play Jet way back in the day, and you still see the flashes of brilliance from him. Yeah, it's a great start for EDG, but can they keep this up? Map 2 is coming up. It's going to be Haven. This is where they did actually, the one map they beat T1 the last time we saw them. But Kakuka, after this 13-4, I am really worried about T1. Oh yeah, completely. They definitely have to have some quick conversations if they want to bring it back. I think that they did not expect this level of confidence coming from EDG. This, you know, coming to step in like this. And Haven is definitely going to be a very difficult one. We were talking about them not being able to get a single round on that second half. And last time that they played against each other, that second half, they actually only got one round, which means if EDG is feeling comfortable, if they're getting the rounds, if they're getting the momentum, they're very easy. It's very easy for them to snowball onto. Well, let's hear from Coach Autumn of T1 and see what they got for us in map 2. Hey guys, I'm here now with Coach Autumn, and Autumn, you guys have played a lot of rounds over the last few days, and it's only going to continue to get more challenging. How are you going to keep the boys focused as you get ready for this map 2? Hold on. 항상 가장 중요한 거는 그 모든 라운드들에 배우는 게 있고 저희가 실수한 게 있고 상대방들이 잘한 게 있는데 이제 그런 거를 정확히 객관화를 해가지고 어떤 게 문제점인지를 파악하고 언럭키한 건 언럭키하게 넘길 수 있으면서 결국 다음 게임을 잡으면 되니까 그런 멘탈적인 그런 준비 그거를 가장 우선시하고 있습니다. So every round there's going to be mistakes and things that we overlook. So we have to catch those errors and trial and errors and develop our skills and gameplay according to that. And there may be some mistakes and things that we cannot control, but we have to overlook that as well and try to
improve ourselves throughout the round. Yeah, well, you know, I've had the pleasure of seeing those boys kill it across a variety of different games, and I have no doubt that they could turn it around. Looking forward to seeing what you can do in map 2. Back to you guys. Well, thank you very much, GB. In map 2, they don't have a choice here, Mimi. They have to turn this around, otherwise they're going home. It's going to be difficult to do so, though. EDG right now are on a 7-0 win streak thus far this year on Haven. It is their home map. It's one where they beat T1 last time they played, and T1 honestly looked out of ideas in that game. The second half just pushing through mollies, trying to go for these executes, and not having a fallback plan that we've been able to see from them in other matches. Well, let's have a look at the Prime Gaming agents select Kukuka, of course. I don't expect any changes here. No, I think that in this moment of the competition is वेल हेलो एंड वेलकम टू VCT मास्टर्स टोक्यो, जहां पे आप लोग देख रहे हैं T1 वर्सेस एडवर्ड गेमिंग, जहां पे एडवर्ड गेमिंग ने पहला मैच जो फ्रैक्चर का था काफी अच्छी स्कोर लाइन के साथ जीत लिए है। अब दूसरे मैच में ये जो हेवन का रहेगा, एडवर्ड गेमिंग का पिक है T1 ऑन द डिफेंस। आना क्या लगता है कौन सी टीम यहां पे जीत सकती है? A very tough question which has a very simple answer. Edward Gaming. ओके, एडन थिंक्स यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग जीतेगी, एंड कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि एडवर्ड गेमिंग का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी एडवर्ड गेमिंग यहाँ पे जो है जीत हासिल करी थी। जहाँ हमारा ओपनिंग डे था वहाँ पे T1 वर्सेस एडवर्ड गेमिंग हुआ था। हेवन का मैप था, एडवर्ड गेमिंग ने काफ़ी अच्छे तरीके से 13-7 की स्कोर लाइन से मैप अपने फेवर में किया था। बट एडन, अगर वो हिस्ट्री रिपीट हो जाती है ना, तो आज एडवर्ड गेमिंग जीत जाएगी एंड T1 घर का रास्ता नापेगी। एग्जैक्टली एंड T1 को अगर घर लौटना पड़ता है तो जो पहली बार ये चीज़ होने की संभावना थी कि 2 कोरियन टीम्स हमें मास्टर्स टोक्यो में देखने को मिले, वो दोबारा से धराशायी हो जाएगी एंड वी विल सी जस्ट 1 कोरियन टीम इन मास्टर्स टोक्यो विच इज़ गोना बी TRX, जो कि आज ही क्वालिफाई करके पहुंची है। वी हैड NRG एंड Evil Geniuses बिफोर दैट, बट या this definitely looks like one good day for them and I'm hoping to see a great match from both the sides. दोनों के लिए बहुत ज़रूरी मैच रहने वाला है, बट कहीं ना कहीं I feel like मैं कॉन्ग को आगे जाते हुए देखना चाहती हूँ सबसे पहले। मेन प्रॉब्लम है T1 बहुत ज़्यादा रिलाई करती है रीटेक पे, जो कि कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इस बार देखिए काफ़ी अच्छा रिकॉन यहाँ पे हमें आते हुए दिखाई दे रहा है जेटा की तरफ से, एंड ए मेन के बाहर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ए लॉबी में इन्फॉर्मेशन तो उनको मिल चुका है कि आउटराउंड जाएगा ए शॉट की तरफ, जिससे कोई इन्फो निकलेगा नहीं, बट अभी भी ए लॉन्ग को स्मोक ऑफ कर दिया गया एंड एडवर्ड गेमिंग के प्लस ए साइड पे खेलते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए वापस से पूरी की पूरी T1 की जो टीम है वो रीटेक पे रिलाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से पिंस आ रहे हैं, मे बी शायद हमें यहाँ पे चोचो ए शॉट की तरफ से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हेवन का एरिया को स्मोक ऑफ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जेटा के पास कोई विजन ही नहीं है। अब साइड का पूरा कंट्रोल एडवर्ड गेमिंग के हाथों में, एंड साथ ही साथ प्लान करने की एक पोजीशन भी आ चुकी है, बिकॉज जो डुअल्स हैं उनमें पूरा का पूरा भरोसा एडवर्ड गेमिंग अपने प्लेयर्स पे करती हुई नजर आती है एंड दे हैव बीन एबल टू कैपिटलाइज क्वाइट अ बिट, लेकिन बैन के प्रेजेंस का अंदाजा नहीं था। चोचो पीछे से आएंगे, एक पिक निकालेंगे, दूसरा पिक भी निकालेंगे एंड अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। ही वाज इन एन अनडूएबल सिचुएशन बट ही कन्वर्टेड इट क्लियरली। पहले प्लेयर को तो कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लिया, दूसरे प्लेयर को कंप्लीट अंदाजा था उनकी पोजीशन का। उसके बावजूद इस फाइट को संपूर्ण तरीके से अपनी टीम के हक में करने में चोचो कामयाब रहे। Spike down A. Do gotta make sure that बैन को उनका क्लीन किया जाए। बहुत ही प्यारे 2 फ्रैग्स यहाँ बैन ने निकाले थे, but then सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल रह गया। जी हाँ, T1 के लिए ये पिस्टल राउंड हारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी टीम जो है कॉन्फिडेंस लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में T1 का इको राउंड है, एडवर्ड गेमिंग का बाय राउंड है। डेफिनेटली एक अच्छा वेपनरी है। वापस एक अर्ली रिकॉन यहाँ पे ए लॉबी में आएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगा। स्पाइक को देखिए अभी भी जो है ड्रॉप किया गया है एंड टीम इन्फॉर्मेशन बटोरने का प्रयास कर रही है, जहाँ पे चोचो जो है गिराज का इन्फो निकालना चाहेंगे। एक अर्ली रिकॉन ए शॉट की तरफ से आएगा फ्रॉम द साइड ऑफ एडवर्ड गेमिंग एज वेल। ए शॉट में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर देखिए कितना फॉरवर्ड आके साया प्लेयर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमीडिएटली टेलविंड का यूज करके डैश करेंगे एंड अपने आप को बचाने में सफल तो हो चुके हैं, बट मात्र 56 HP पे हैं। See, here's the thing. पिछली बार 6 राउंड लगातार एडवर्ड गेमिंग हारी थी ऑन द फर्स्ट हाफ इन द मैप ऑफ हेवन ऑन द अटैकिंग साइड, जहाँ पर T1 डिफ्यूज कर पाई थी। सो जो कमजोरी यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग की तरफ से रही थी पिछली बार, दैट वाज कि अपने प्लान्स को होल्ड नहीं कर पा रहे थे। इस बार देखते हैं कि वो चीज़ को कवर अप कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज सो फार इट सीम्स लाइक प्लान करने का अभी तो मौका ही नहीं मिल पाया था। सो विल फाइंड आउट हाउ इट गोज फॉर देम।
अभी के लिए तो हांगकांग अभी भी साइट ए के ऊपर कंप्लीट निगरानी रखे हुए, उनके फिलहाल रास्ते में आने के लिए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर साथ ही साथ यहाँ पर स्मॉगी की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके क्लियरेंस बनाया जाएगा। जेटा की पोजीशन थोड़ी सी डरावनी रहने वाली है, बट सून इनफ प्लेयर्स विल फाइंड आउट वेयर ही इज एंड गो इन फॉर द रिटेलिएशन। शॉर्ट्स का एरिया कवर्ड है, लॉन्ग का एरिया कवर्ड है, जेटा की पोजीशन को कंसील करने के लिए स्मोक डाला हुआ है। अब तो कोई चांस ही नहीं बचता, ग्राफिटी के एंगल पे भी हमें देखने को मिल सकते हैं हाउडम। रीटेक पे T1 के प्लस, जहाँ पे साया प्लेयर काफ़ी लो HP पे है एंड मात्र पिस्टल शेरिफ है, शेरिफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। शॉर्टी भी नजर आएगी इन द हैंड्स ऑफ बैन एंड क्या कुछ कर पाएंगे। फॉल्टलाइन का यूज़ यहाँ पे किया गया है एंड मंचकिन एंड साया प्लेयर दोनों यहाँ पे जो है शटडाउन हो जाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पे नोबडी इन्हें काफ़ी अच्छा क्रॉसफायर सेटअप किया है, उसको ब्रीच करके आगे बढ़ना तो इम्पॉसिबल सिनारियो है T1 के लिए। बैन की देखिए थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहे हैं, बट टाइम नहीं है, स्पाइक प्लांट हो चुका है, डिफ्यूज भी करना है एंड आई डोंट थिंक ये राउंड T1 के हाथ में जाते हुए किसी भी तरीके से दिखाई देगा कि स्पाइक इज अबाउट टू डेटोनेट। एग्जैक्टली, स्पाइक डेटोनेट होगा एंड लॉस्ट बोनस यहाँ पर कैपिटलाइज करते हुए दिखाई देगी T1 की टीम। तीनों प्लेयर्स अपने आप को कुर्बान करेंगे स्पाइक के नाम विद द होप्स कि इस सेक्रीफाइस का कोई एक अच्छा रिजल्ट आए। वेल, द स्पाइक गॉड्स मे नॉट बी इन देयर फेवर राइट नाउ। बोनस राउंड आने वाला है एडवर्ड गेमिंग की तरफ से, सिर्फ एक प्लेयर का लॉस हुआ था तो वहाँ पर भी वेपनरी की कमी नहीं रहने वाली है। दे माइट बी एबल टू कन्वर्ट अनदर वन एंड अगर ये बोनस भी जीतते हैं तो दोबारा से 4-0 की स्टार्टिंग मिल जाएगी। पिछली बार एडवर्ड गेमिंग फर्स्ट 2 राउंड तो ले गई थी, लेकिन उसके बाद 4 राउंड लगातार T1 के हक में गए थे। संभल के चलना पड़ेगा इस राउंड में, हर एक कदम संभल के रखना पड़ेगा एंड अपने प्लांट्स को होल्ड करना पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक फॉल्ट लाइन यहाँ पे जरूर सी साइड की तरफ, स्मोक्स आर देयर, क्लाउड बस्ट का यूज किया जाएगा, नैनो साउंड पूरी यूटिल्स यहाँ पे डंप कर दी जाएंगे टुवर्ड्स द सी साइड एंड सी साइड का पूरा कंट्रोल यहाँ पे मिल चुका है। स्मोगी अगेन गोइंग फॉर द प्लांट, डिफॉल्ट प्लांट यहाँ पे करेंगे। अगर सी लॉन्ग का एंगल होल्ड करते हैं तो भी स्पाइक को गार्ड कर पाएंगे। गैराज के ऊपर कड़ी नजर यहाँ पे स्मोगी बना के रखे हैं जहाँ से मंचकिन आने का प्रयास कर सकते हैं। आउटड्रोन से कोई इन्फॉर्मेशन तो फिलहाल के लिए नहीं निकलेगा। सी लिंक के थ्रू 3 प्लेयर्स शायद यहाँ पे T1 के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। डार्क कवर जाएगा एंड उसके यूज करके यहाँ पे काफी अच्छा पिक निकालेगी, बट नो मंचकिन 2 प्लेयर्स यहाँ पे पिक ऑफ हो चुके हैं, मेक इट 3। बट एडवर्ड गेमिंग अभी भी अगर बात करें एक ही प्लेयर के साथ जीवित है। जेटा इज गोइंग फॉर द डिफ्यूज, हाफ डिफ्यूज हो चुका है एंड जो कुछ कर पाएंगे। जी हाँ, 3 के कमिंग इन, आखिरी प्लेयर को यहाँ पे लड़के कुछ उससे पहले डिफ्यूज हो गया था एंड ये राउंड T1 के हाथ में आते हैं। हल्का सा यहाँ पर टाइमिंग छिन गया चोचो से, अदरवाइज ही कुड हैव लिटरली कन्वर्टेड हिज 4 फ्लैग्स एक के बाद एक लगातार निकाल के। ओह माय गुडनेस, द गेमप्ले हैज बीन मोर देन इंप्रेसिव। द 1 थोड़ा सा वेट, द 2, द 3 एंड द 4 थोड़ा सा ढीले हो गए। अगर आधे सेकंड भी जल्दी आ जाते तो ये राउंड के नाम। बट वेल, इन एनी केस द गेमप्ले हैज बीन कमेंडेबल बट द प्रॉब्लम हैज़ बिन द टाइमिंग। इसके बावजूद जो होल्ड करने में दिक्कत आ रही थी ना, वो अभी भी दिखाई दे रही है क्योंकि पूरे 5 प्लेयर जिंदा थे आपके प्लांट के बाद। आपने 4 प्लेयर्स जिस रफ्तार से गंवाए हैं, उसके बाद फिर आपका सहारा सिर्फ चोचो बन सकते थे एंड उनके पास भी टाइम होना ज़रूरी नहीं था। उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि वो आपको सपोर्ट कर सकें। जितना जल्दी प्लेयर्स गए फ्रॉम द साइड ऑफ EDG, चोचो कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट। अगर प्लेयर्स के मरने के बीच में भी थोड़ा सा गैप होता तो चोचो तब तक पहुंच जाते। दिस वॉज जस्ट डेवस्टेटिंग फॉर द साइड ऑफ चोचो, बट लेट्स सी। एक राउंड मिल चुका है, क्या अब लगातार 4 राउंड की लीड बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, बिकॉज कॉन्ग आ जाएंगे, पहला प्लेयर पिक ऑफ करेंगे, मैन काउंट एडवांटेज दिलाएंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर फाइट्स को इनिशिएट करने के लिए जो क्रॉस फायर आ रहा है सामने से, उसको भी फाइट ऑफ करने में कामयाब रहेंगे। इंडिविजुअलाइज करी जाएंगी फाइट्स बहुत आसानी से, 3 प्लेयर्स पिक ऑफ करेंगे एंड क्लासिक के निशाने से अपने किल्स पर सील लगाएंगे। मंचकिन बचे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, पिस्टल है उनके हाथ में, तो T1 के लिए तो ये राउंड जाते हुए फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है एंड एडवर्ड गेमिंग अपनी लीड को और स्ट्रेच करने में यहाँ पे सफल हो जाएगी। काफ़ी अच्छा प्रयास, एक फ्लॉलेस राउंड यहाँ पे जो है एडवर्ड गेमिंग निकालते हुए दिखाई देगी। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में उनके पास न्यूरल थेफ्ट रहेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है एज अटैकर। ब्लेज स्टॉर्म रहेगा एडवर्ड गेमिंग के पास में, तो स्मोकी की अगर बात करें उनके पास भी अगर एक और कलेक्ट करते हैं तो रोलिंग थंडर यहाँ पे आ जाएगा जिसको इन्वेस्ट करके पूरी की पूरी साइड क्लियर आउट किया जा सकती है, चाहे वो सी साइड और ए साइड। काफ़ी ज़्यादा रोलिंग थंडर हेवन के मैप पे यूज़ होता है, बट फिलहाल के लिए अगर बात करें मंचकिन क्या करेंगे? कुछ नहीं, स्पाइक डेटोनेट हो एंड नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे।
EDG जिस तरह से इस बार अपने प्लान्स पे होल्ड रख रही है, थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है गेम। पिछली बार सिर्फ एक बार डेटोनेशन विक्ट्री मिली थी, तो इस बार 2 बार ऑलरेडी मिल चुकी है एंड द गेम हैज जस्ट स्टार्टेड। सो इट फील्स लाइक कहीं ना कहीं अपने टैक्टिक्स पे पॉलिश तो किया है EDG ने एंड इस बात का प्रभाव गेम प्ले में भी दिखाई दे रहा है, उनके स्कोर लाइन पे भी दिखाई दे रहा है एंड इवन के चेहरों पे भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा शिकन देखने को मिल रही है इनके फोरहेड पे। इस बार हंटर्स फ्यूरी है, जेटक के हाथ में साया प्लेयर ऑपरेटर पे आ चुके हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे T1 जो है शायद ये राउंड निकालने में सफल हो चुके हैं। काफ़ी अगर बात करें 2+ का प्रेजेंस दिखाई देगा टुवर्ड्स ए साइड। एक शॉट की तरफ रिकॉन जाएगा एडवर्ड गेमिंग की तरफ से, आउलरॉन भी आएगा एंड आउलरॉन यहाँ पे प्लेयर का इन्फॉर्मेशन तो निकालेगा, साया प्लेयर का एट द सेम टाइम काफ़ी इन्फो अब आ चुके हैं एडवर्ड गेमिंग के हाथ में। इसी के साथ हंटर्स फ्यूरी यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर दी गई है बट उससे कोई वैल्यू नहीं निकली है अनफॉर्चुनेटली। बट साया प्लेयर की ऑपरेटर यहाँ पे जो है जेट वेव करते हुए एंड इसके साथ अगर बात करें गिराज में यहाँ पे जो है एडवर्ड गेमिंग मंचकिन को भी पिक ऑफ कर लेंगे एंड इसके साथ 2 प्लेयर्स यहाँ पे जो हैं दोनों साइड से गिर गए। ट्रेड काफी अच्छा निकाला गया है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जिससे काफी इन्फॉर्मेशन है। एट द सेम टाइम वापस से अगर बात करें दिक्कत में सिचुएशन थोड़ी सी खड़ी हो चुकी है एडवर्ड गेमिंग के लिए, क्योंकि बी साइड का कंट्रोल लेना चाह रहे थे बट वो कंट्रोल कंप्लीटली डिनाई कर दिया गया। बट इन द प्रोसेस ए साइड को कंप्लीटली खाली छोड़ दिया था। अब ए साइड का कंट्रोल आ चुका है एंड रीटेक पे T1 की टीम दिखाई देगी। स्पाइक इज गोइंग फॉर द प्लांट, नोबडी यहाँ पे प्लांट कर देंगे। हेवन के एंगल पे अगर बात करें यहाँ पे प्लेयर मौजूद रहेंगे, क्या कुछ कर पाएंगे? थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे चूचू को हो सकता है क्योंकि ए राउंड का एंगल गार्ड कर रहे हैं बट उनका भी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। वॉल बैंक के थ्रू यहाँ पे साया प्लेयर को पिक ऑफ किया जाएगा। साया प्लेयर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, ऑपरेटर यहाँ पे खरीदी गई थी। हाउडोंग का यहाँ पर आप ट्रिगर डिसिप्लिन देखिए, एक प्लेयर को ऊपर जाते हुए देखा, उसके बाद में यहाँ पर बैन को शट डाउन किया। अब इस्तेमाल करेंगे पैरानोया का, जल्दी से ऊपर जाएंगे एंड कारपे को भी पिक ऑफ करते हुए नजर आएंगे। वॉल बैंक्स करके क्लियर करेंगे एंगल, कारपे को ल्योर किया जाएगा एंड अब बाहर एक क्रॉस फायर बन चुका है, लेकिन पीछे से जो जेटा का एक मूव आ रहा है वो यहाँ रिस्की रहने वाला है। जेटा आ चुके हैं बट अभी भी राउंड हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जेटा फाइट नहीं कर पाएंगे, नोबडी को ट्रेड जरूर किया है लेकिन दैट इज इट। ऑपरेटर बचाने के अलावा और कोई चीज यहाँ पर T1 एक्वायर नहीं कर पाएगी। T1 के हाथ से एक और राउंड जाते हुए दिक्कत में सिचुएशन है। हेवन के मैप पे एडवर्ड गेमिंग का पहले भी दबदबा था, अगर वापस से दबदबा है तो दिक्कत है। बट T1 अभी अगर देखें डिफेंस में आप ज़्यादा राउंड हेवन के मैप पे नहीं निकाल पाते हैं। अगर कुछ राउंड एक अच्छे स्वैप के साथ भी, अच्छे स्कोर लाइन के साथ भी अगर सेकेंड हाफ में वॉक इन करती है T1 की टीम तो स्टिल और डुएबल सिचुएशन रहेगा। बट एडवर्ड गेमिंग जिस तरीके से लीड पे लीड अपने लिए बनाते हुए दिखाई दे रही है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उसके बाद T1 के लिए वापसी करने के लिए इतने राउंड्स ही नहीं रहेंगे। It's a devastating situation for T1 to be very honest। पिछली बार हेवन का जो फर्स्ट हाफ था वो 6-6 जाता हुआ दिखाई दिया था एंड उसके बाद सेकेंड हाफ में बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया था एडवर्ड गेमिंग ने। एडवर्ड गेमिंग का जो डिफेंस है हेवन के मैप पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी 8 में से 7 राउंड जीते थे उन्होंने पिछली बार। सो इस बार देखना पड़ेगा कि क्या डिफेंस में एडवर्ड गेमिंग को फेस ऑफ करने का बूता रहने वाला है T1 के पास में, बिकॉज T1 फिलहाल तो बहुत बुरी तरह अटैक में ही शिकस्त पे शिकस्त झेले चले जा रही है। अगर अटैक में स्कोर 8-4 होता है T1 के पास कोई मौका नहीं रहेगा एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ, क्योंकि 4-1 ऑलरेडी चल रही है। स्कोर लाइन बहुत ज़्यादा फेवर यहाँ पर EDG के पास दिखाई दे रहा है एंड हर बार अपने फेवर पे कन्वर्ट कर रही है। ये वाला राउंड भी EDG के पास जा सकता है। ऑपरेटर ज़रूर है लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा बाय ब्रोकन है। एक शेरिफ है, एक पिस्टल रहने वाली क्लासिक एंड 2 स्टिंगर्स। नॉट अ ग्रेट थिंग टू लुक एट। रोलिंग थंडर जरूर है, फ्रॉम द शैडोज डिफेंस में इतना यूज होता नहीं है एंड साया प्लेयर जितनी जल्दी पिक ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, उनकी ऑपरेटर या ब्लेड स्टॉर्म किसी पे भी फिलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता। इट जस्ट सीम्स लाइक EDG विल हैव वन मोर टू देयर फेवर इन द मीनवाइल। एक और राउंड आ सकता है बट साया प्लेयर अगर अपनी ऑपरेटर से अच्छा वैल्यू निकाल सकते हैं तो शायद एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे T1 कैपिटलाइज करे। काफी अर्ली यहाँ पे जो है डार्क कवर जाएगा इन केस अगर ए साइड की तरफ एडवर्ड गेमिंग के प्लस आने का प्रयास करे हो, उसको डिले करें। अब ये जो रीड है T1 का आई डोंट थिंक उनके हित में जाएगा। 4+ का हेवी प्रेजेंस, हेवी स्टैक यहाँ पे ए साइड की तरफ यहाँ पे रहेगा। काफी फॉरवर्ड आके खेल रहे हैं, आउटड्रोन का यूज भी यहाँ पे किया गया है जिससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकले है। बट थोड़ा सावधान यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग को रहना पड़ेगा, स्पेशली नोबडी को। एंड एडवर्ड गेमिंग यहाँ पे जो है अपना दबदबा बनाते हुए जिस तरीके से प्लेयर्स को किया है, मात्र एक ही प्लेयर बचा है साया प्लेयर जो कि सी साइड को गार्ड कर रहे थे। जी हाँ, आपने स्टैक किया, अब डिफेंस में इतना फॉरवर्ड आके नहीं खेल सकते।
especially when you are lacking behind इतना ज़्यादा with too many rounds. And Edward Gaming अपने aim duels पे तो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है आज. मेरे ख्याल से साया प्लेयर भी यहाँ पे पिक ऑफ हो सकते हैं, लेकिन जाने से पहले चोचो को ले जाएंगे बिकॉज चोचो कम्प्लीटली अनसस्पेक्टेड अपने नाइफ पर वॉक कर रहे थे एंड उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि साया प्लेयर यहाँ पर रहने वाले. साया प्लेयर ने अपनी ब्लेड स्टॉर्म ऑनलाइन कर रही है, लेकिन अब वो जीत पाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि चोचो ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं. ग्राफिटी के एंगल से आया एक क्रॉस फायर जो कि बना हुआ था यहाँ पर सोवा के साथ में. Howdon will be able to capitalize the kill. Saya player again without any value. अपना operator भी lose करेंगे, अपनी blade storm को भी गवाएंगे. And I mean अभी तक पूरे गेम में 2 frags मिले हैं. And it has already been 6 rounds. Sad news for a Jet, I guess. Very sad. पूरी की पूरी टीवन के लिए 4 राउंड्स का लीड आ चुका है एडवर्ड गेमिंग के हाथ में. 7वें राउंड की तरफ आगे बढ़ते हुए 3 अल्टीमेट्स रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा, फ्रॉम द शैडोज रहेगा, रोलिंग थंडर रहेगा. ये राउंड किसी भी तरीके से टीवन को कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2 प्लेयर्स यहाँ पे जो है बी लिंक के पास में मौजूद नजर आएंगे. मात्र एक ही प्लेयर साया प्लेयर की पोजीशन इस बार जो है ए साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं. ए लॉन्ग के एंगल को अपनी ऑपरेटर के साथ गार्ड ऑफ करते हुए दिखाई देंगे. सी साइड पे मात्र एक ही प्लेयर बैन यहाँ पे है. गिराज की अगर बात किया जाए वहाँ पे मंचकिन राव मौजूद रहेंगे, बट जिस तरीके से एडवर्ड गेमिंग यहाँ पे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी पिंस के अकॉर्डिंगली शायद एक गिराज का कंट्रोल यहाँ पे लेना चाहेंगे जहाँ पे जो टरेट है उससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा. फॉल्ट लाइन कम्स इन, जैसे कोई भी वैल्यू नहीं निकला. थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे जेड को जरूर मिला है एडवर्ड गेमिंग के, बट डार्क कवर के अंदर है कि शॉट्स आगे जाएंगे. मंचकिन के ऊपर उनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है. सीलिंग के थ्रू आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गिराज के थ्रू ही फिलहाल यहाँ पे प्लेयर्स आगे बढ़ना चाहेंगे. मंचकिन यहाँ पे जो है प्लेयर को पिक ऑफ कर लेंगे चूचू को, एंड नैनोसॉम दिक्कत देंगे थोड़ा सा. अल्टीमेट्स आर बीइंग डंप्ड टुवर्ड्स सी साइड का काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है, बट नंबर्स नहीं है, मात्र 3 प्लेयर्स. अब जो एम डुएल है वो T1 के फेवर में आते हुए दिख रहे हैं. वेल नंबर्स एडवांटेज यहाँ पर जरूर से एक्वायर कर लिया है T1 ने, लेकिन फाइट ऑफ कर पाना अभी भी मुश्किल हो रहा है. 2 प्लेयर्स एक साथ पीक कर रहे थे, उसके बावजूद हाउडॉन को पिक नहीं कर पाए. इक्वलाइज करने की कोशिश थी नंबर्स को, लेकिन 2 प्लेयर्स को मीनवाइल गवाएंगे. पर अभी भी सिचुएशन डिफिकल्ट रहने वाली है. देयर कम्स अनदर शॉट फ्रॉम द ओडिन, क्रिस्प ऑन द हेड. हाउडॉन को यहाँ शट डाउन करेंगे एंड एक राउंड फाइनली T1 के हित में आता हुआ. They needed it, they got it, but will they continue getting rounds after this? I am not sure. I am really not sure. क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक अपने प्लेयर्स को गवाते हुए नजर आए इतने सारे राउंड्स में, कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगेगा. जी हाँ, टाइम तो लगेगा. एंड 3 राउंड्स का लीड अभी भी एडवर्ड गेमिंग के पास है, उसको रिकवर किया जा सकता है. अगर T1 अपने बाकी के राउंड सावधानी से खेले, रिकवर किया जा सकता है. इक्वलाइजर तक आया जा सकता है. अभी भी 3 अल्ट्स अवेलेबल रहेंगे. अगर बात करें साया प्लेयर इस बार बी साइड पे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से पिंस आ रहे हैं, मे बी एक बी साइड को एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जा सकता है एडवर्ड गेमिंग की तरफ से. बट 2 प्लेयर्स का पूरा प्रेजेंस T1 के ए साइड पे है, वहीं पे मंचकिन का पूरा सेटअप भी रहेगा. एंड आउटराउंड का यूज करके ए लॉन्ग का इन्फॉर्मेशन तो एडवर्ड गेमिंग ने निकाली है, एंड ऑलरेडी द पिंस आर कमिंग टुवर्ड्स ए लॉन्ग. सावधान रहना पड़ेगा. कार्पी के साथ साथ मंचकिन भी हैं. लॉकडाउन अगर इन्वेस्ट किया गया तो पुश बैक कर दिया जाएगा पूरी की पूरी टीम को एडवर्ड गेमिंग की. एंड बैक एंगल को भी यहाँ पे गार्ड ऑफ करते हुए आगे सावधानी से बढ़ रहे हैं, बट अभी भी कोई भनक नहीं है. T1 को कोई भनक नहीं है कि ए लॉन्ग में इतना आगे प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं. लोकेशन रिवील होगा एंड इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा T1 के प्लेयर्स भी पुश बैक करेंगे. लॉकडाउन इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट अभी तक किया नहीं गया है. शायद रीटेक पे पूरा का पूरा T1 की टीम खेलना चाहिए, या फिर मंचकिन के यूटिल्स पे. मंचकिन की यूटिलिटीज डेफिनेटली यूजफुल रहने वाली है, बट पिछले मैप में हमने देखा था मंचकिन को बहुत जल्दी पिक ऑफ किया जा रहा था एंड कहीं ना कहीं इस बात का भुगतान भी भरना पड़ रहा था T1 को. बट क्या इस बार अभी भी कमिट करने की कोशिश रहेगी ऑन टू साइड है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स साइड पे आ चुके हैं. अगर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं भाग जाना एक बेटर ऑप्शन रहेगा. ओडिन का स्पैम आने वाला है, फिलहाल के लिए कोई डैमेज नहीं दिखाई देगा, लेकिन कॉन्ग यहाँ पर मंचकिन को पिक ऑफ कर चुके हैं. द लॉकडाउन इज आउट ऑफ द पिक्चर, ऑल द यूटिलिटी इज आउट ऑफ द पिक्चर. क्लियर एंट्री साइड पे मिल जाएगी, मैनकाउंट का एडवांटेज भी मिल जाएगा. एंड नाउ द फाइट्स आर ऑल इन द फेवर ऑफ EDG. छठा राउंड EDG का ऑन बोर्ड आता हुआ दिखाई दे सकता है. ओडिन का इन्वेस्टमेंट धरा का दिख रहा है. Zeta with the Orden wall bank के थ्रू हेवन के एंगल से यहाँ पे प्लेयर को पिक ऑफ करने का प्रयास करे. डार्क कवर रहेगा जिससे ज्यादा विजन यहाँ पे Zeta को नहीं मिलेगा. बैन की भी अगर बात करें, अपने स्मोक में थे, शॉट्स काफी ज्यादा मिस किए. हाउ कैन यू डू दिस बैन एंड इंस्टेंट पनिश भी यहाँ पे होंगे. एंड एडवर्ड गेमिंग एक और राउंड अपने फेवर में ले जाने में सफल हो गई. बैन वहाँ पे इजीली अंडर हेवन प्लेयर को पिक ऑफ कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा यहाँ पे शॉट्स मिस किए उन्होंने. दैट इज शोकेसिंग की T1 के अंदर थोड़ा सा एक यहाँ पे पैनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुके हैं. प्लेयर्स जो है काफी ज्यादा प्रेशर में आके खेल रहे हैं.
एक क्रॉस फायर भी क्रिएटेड था, अगर पिक निकाल भी लेते तो भी बैन यहाँ पे शट डाउन होते, लेकिन उन्हें पिक निकालने का ही मौका नहीं मिला। द वे ही वाज मिसिंग हिज शॉट्स completely shatter हो चुका है T1 का कॉन्फिडेंस। यू कैन सी इट ऑन देयर गेम प्ले, यू कैन सी इट ऑन देयर स्कोर लाइन। एक हीरो वैंडल के साथ इस बार मूव इन कर रहे हैं, साया प्लेयर को वैंडल दिए, साया प्लेयर अभी तक तो वैल्यू ही नहीं निकाल पाए गेम में, बट देखते हैं इस बार क्या करने वाले। पोजीशन अच्छी एक्वायर की है अपने आप के लिए, बॉक्सेस के ऊपर अपने आप को प्लेस कर रखा है, तो बहुत अच्छा एंगल उन्हें मिल जाएगा, बट साइड ए के ऊपर कमिटमेंट होगा तब। फिलहाल तो पिंग्स से यही लग रहा है कि साइड ए पे कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन नाउ हियर्स द थिंग, इस बार जो डिफेंसिव पिंग्स हैं वो उन पोजीशंस को मार्क कर रही है जहाँ पे जनरली एंटर करते हैं कॉन्ग, सीधे डैश करते हैं, इन एरियाज को एक्वायर करते हैं, क्लियर करते हैं एंड उसके बाद में प्लांट किया जाता है। तो इस बार जो पिंग्स हैं उन पे अगर नजर रख के बैठे हुए होंगे प्लेयर्स टी1 की तरफ से, तो कॉन्ग के लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती है। बट इन द मीनवाइल चोचो थोड़ा सा शोर मचाएंगे साइड सी की तरफ, जिसकी वजह से डिफेंडर्स जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मंचकिन फ्रैग निकालने में कामयाब होंगे। इतनी कम एचपी पर भी शेरिफ का एक शॉट मोड़ देने लग रहा है। वेपन भी रिकवर किए मंचकिन ने, लॉकडाउन उनके पास रहेगा एंड एडवर्ड गेमिंग वापस से अपने एम डुअल्स यहाँ पे जीते हुए दिखाई देगी। 3+ बचे टीवन की तरफ से, ए शॉट से एडवर्ड गेमिंग के नोबडी आएंगे, साया प्लेयर को भी पिक ऑफ कर लिया जाएगा एंड लिंक से 2 प्लेयर्स यहाँ पे आते हुए, बट एडवर्ड गेमिंग यहाँ पे एक और बैन को पिक ऑफ कर लिया जाएगा। मंचकिन भी काफी ज्यादा लो एचपी पे आ चुके हैं, उनको भी धराशायी करके एडवर्ड गेमिंग काफी इजीली एडन अब राउंड्स अपने में करते हुए दिखाई दे रहे। जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टेड है। दूसरी साइड टी1 बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट कर चुकी है। कॉन्ग विद अ 4K इन अ सिंगल राउंड, बहुत ही प्यारा गेम प्ले इस बंदे का। ऑलरेडी जो फाइट्स थी थोड़ी सी डिफिकल्ट रही थी फर्स्ट 2 फ्रैग्स में, उसके बावजूद अगली 2 फाइट्स में एंटर हुए विद अ लोअर एचपी एंड फिर भी उनको कन्वर्ट करते हुए नजर आए। काबिल तारीफ गेम प्ले इस बंदे का, ऑलरेडी अपने आप को एक लीड पर ला चुके हैं। अब फर्स्ट हाफ किसी भी हालत में एडवर्ड गेमिंग ना तो इक्वलाइजर पे खत्म कर रही है, ना तो ड्रॉबैक पे। सो कहीं ना कहीं ये जो एक एडवांटेज है इसको नेक्स्ट हाफ में बहुत हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज नेक्स्ट हाफ ऑलरेडी एडवर्ड गेमिंग का स्ट्रॉन्ग हाफ है ऑन द मैप ऑफ हेवन। दिक्कत टी1 के लिए बहुत बड़ी दिक्कत एंड उसी प्रेशर को डील करना पड़ेगा टी1 को, अदरवाइज यहाँ पे हार उनके हिस्से में आते हुए दिखाई देगी। हंटर्स फ्यूरी रहेगा जेटा के हाथ में, इस बार काफी ज्यादा फॉरवर्ड आके वापस से साया प्लेयर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही एक प्रॉब्लम आती है, टी1 के प्लेयर्स या तो बीटेक पे खेलते हैं या काफी ज्यादा फॉरवर्ड आके खेलते हैं एंड पिंस आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आया था टी1 के पास, बट इंस्टेंट रोटेशन देखिए सी लॉन्ग की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। डार्क कवर थोड़ी सी दिक्कत देगा, बट उससे पहले यहाँ पे बैन एंड मंचकिन दोनों को पिक ऑफ कर लिया गया। मंचकिन गिराज में पिक ऑफ हुए, बैन इन द सी साइड अब पूरा का पूरा कंट्रोल साइड का आ चुका है। मात्र 3 ही प्लस बचे टी1 की एंड सी लिंक से अगर आना चाहेंगे तो डार्क कवर है, बट फाइनली यहाँ पे एक और प्लेयर को पिक ऑफ करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं एडवर्ड गेमिंग के प्लस प्लेयर अभी भी काफी ज्यादा ट्रिकी स्पॉट में है। मंचकिन के मरते ही चोचो ने अपना न्यूरल थेफ्ट लॉन्च कर दिया, बहुत जल्दी बैन की पोजीशन रिवील हो गई, तुरंत पिक ऑफ भी हो गए एंड साथ ही साथ अब आप देखिए कॉन्ग को कोई रोक ही नहीं सकता। पहला फ्रैग निकाल लिया यहाँ पे चोचो ने एंड कॉन्ग इज लाइक कूल, द टीम्स वर्क इज डन, नाउ आई एम गोना गो फॉर माय ओन रन। 3 फ्रैग्स निकाल चुके हैं एंड अब जेटा अकेले बचते हैं, जो मुझे नहीं पता फाइट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, जो भी करें गेम का रिजल्ट तो सिमिलर देखने को मिल रहा है। 8-2 हो जाएगा, उसके बाद 9-2 हो जाएगा, बट क्या 9-3 कर्स लग पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। आजकल हम देख पा रहे हैं कि हमारा कर्स जो है वैलिड नहीं है वीसीटी पैसिफिक में, तो एक भी बार हमारा 9-3 कर्स वैलिड नहीं दिखाया तो कर्स हैज बीन अपलिफ्टेड, लुक लाइक इट, बट एडवर्ड गेमिंग with curse or no curse they are looking very strong. T1 they are terrified and वो चीज़ से उनको डील करना पड़ेगा। इस बार भी एडवर्ड गेमिंग जिस तरीके से क्लच मोमेंट्स लेके आ रहे हैं, फ्रैग्स निकाल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इस बार मंचकिन के पास यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा, ब्लेड स्टॉर्म टुवर्ड्स द साइड ऑफ एडवर्ड गेमिंग, बट इस पर देखिए कौन सी साइड पे एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हेवी स्टैक यहाँ पे गैराज एंड सी साइड की तरफ देखने को मिल रहा है। ए साइड पे मात्र एक ही प्लेयर है मंचकिन जो कि अपने लॉकडाउन पे इन्वेस्ट करेंगे इन केस अगर ए साइड पे कोई प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा उनका यूटिल फिलहाल ए साइड पे दिखाई दे रहा है, बट एडवर्ड गेमिंग यहाँ पे जो है बी विंडो के थ्रू आगे बढ़ने के प्रयास यहाँ पे करते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड बी साइड पे मात्र एक ही प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कार पे, उनके साथ यहाँ पे इजीली डील किया जा सकता है। बट लुक एट द पोजीशन ऑफ हाउ डॉन्ग, उनका जो पोजीशन है अगर कोई लेट लक आता है उसको इजीली नलिफाई कर देंगे। राइट नाउ इट जस्ट सीम्स लाइक कंप्लीट नजरें चोचो की रहने वाली हैं पूरे एरिया पे। ही इज़ मेकिंग श्योर कि कोई भी अगर पुश करता है तो उनकी नज़रों से बच के कहीं ना जा सके। जिस तरह का गेम प्ले चोचो दिखा रहे हैं, मुझे तो इस बात का हल्का सा अफसोस है कि चोचो लर्क पे खेल रहा है। अगर चोचो अपनी टीम के साथ खेल रहे हो तो मज़े ही आ जाते, बिकॉज
जिस तरह का उनका गेम प्ले है, सीधे साइड में घुस के सबको सफा करने की ताकत रखते हैं अलॉन्ग साइड कॉन्ग। बट इस बार मंचकिन अपना लॉकडाउन डिप्लॉय करने वाले, ये हो गया प्लान, ये आ गया लॉकडाउन। लेकिन अब इस लॉकडाउन को फाइट करने में दिक्कत आएगी। कॉन्ग ने जाके सीधे जेटा को सफा चट तो कर दिया है, लेकिन अभी भी पोजीशंस एक्वायर करना मुश्किल रहने वाला है। इन द मीनवाइल बहुत ही शातिर तरीके से लॉकडाउन को शट डाउन किया जाएगा एंड नाउ इट्स अ 4v4 रीटेक सिनेरियो, जिसमें एंट्री पॉइंट्स ही नहीं बचे हैं T1 के पास में। ट्रेड जरूर निकालने में कामयाब हो पाएंगे, बट दैट इज ऑल दैट दे कैन डू, दैट इज ऑल दैट दे कैन डू। इंडिविजुअल फाइट्स क्यों लेनी है, आइसोलेटेड फाइट्स क्यों लेनी है, क्रॉस फायर्स के बीच में क्यों जाना है, 4 फ्रैग्स नोबडी के लिए एंड नोबडी विल बी शट डाउन बाय नोबडी एट ऑल। ही टेक्स अनदर वन फॉर हिज नेम, फॉर हिज टीम, एंड देयर इट इज the 9-2 that I was telling you will happen. You should run. 9-2 भी हो चुका है, 10-2 अगर हो गया तो दिक्कत है। उसके बाद तो T1 कुछ भी करके अपने लिए कमबैक स्टोरी नहीं क्रिएट कर पाएगी एंड जिस तरीके से सिनेरियो लग रहा है इट कैन बी अ 10-2 को स्कोर लाइन इन द फर्स्ट हाफ एंड T1 को थोड़ा दिक्कत ये है कि वो कॉन्फिडेंस उनको लाना पड़ेगा जो कि एडवर्ड गेमिंग के पास में है। येस, एक मोमेंटम बिल्डअप हो चुका है। इस बार अगर बात करें एक अच्छा वेपनरी जरूर रहेगा T1 के हाथ में, इट्स स्टिल अ डूएबल सिचुएशन फॉर देम, बट एडवर्ड गेमिंग के पास में ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर के साथ यहाँ पे बी साइड पे आगे बढ़ेंगे। अगर कार पे एक रॉन्ग पीक एंड इंस्टेंट यहाँ पे जो है पिक ऑफ हो चुके हैं, थैंकफुली वो गिराज विंडो की तरफ यहाँ पे मूव कर गए हैं एंड सेव्ड हिज लाइफ। बट अभी भी T1 को कोई भनक नहीं है, कोई आइडिया नहीं कि प्लेयर्स यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग की किस तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। स्पॉन के एरिया के पास में स्पाइक दिखाई देगा, फाइनली स्पाइक इज मूविंग टुवर्ड्स द मिड विंडो एंड वहां से बी साइड को एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जा सकता है। जिस तरीके से पिंस आ रहे हैं, अगर बी साइड का एग्जीक्यूशन होता है उसके लिए T1 और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आउटड्रोन को यहाँ पे शट कर दिया जाएगा। अब T1 को पता है कि बी साइड पे कमिट करने का प्रयास किया जा रहा है, बट द ऑपरेटर एंड मंचकिन शॉर्टी पे रिलाई करेंगे एंड मंचकिन यहाँ पे जो है अपनी बुलडॉग से जेट को पिक ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, बट इंस्टेंट ट्रेड यहाँ पे आएंगे जेटा। वेल मंचकिन ने यहाँ पर 2 प्लेयर शट डाउन किए जरूर है, लेकिन नंबर्स को बैलेंस करने की कोशिश हाउडॉन की रहने वाली है। ही विल बी एबल टू कन्वर्ट द नंबर्स अराउंड, नोबडी भी यहाँ पर साथ निभाते हुए नजर आएंगे। इट्स अ 1v1 विच विल बी शट डाउन। मंचकिन का एस डिनाई किया जाएगा एंड राउंड दोबारा से EDG ले जाएगी। 10-2 का स्वैप भावना, 10-2 का स्वैप। वाओ, ओके, दैट्स द स्टार्ट एंड इमेजिन कीजिए अगर दोनों पिस्टल एंड एंटी को मिल जाते हैं EDG को। अब तो मुश्किल है। 2-0 यहाँ पे जो है होते हुए हमें दिखाई देगा। हिस्टोरिक कमबैक्स हमने देखे हैं बट इतना आसान नहीं रहते हैं। जिस तरीके का पैनिक एटमॉस्फेयर T1 के आ चुका है उसमें एक कमबैक स्टोरी क्रिएट करना अपने लिए इट्स इम्पॉसिबल। तो ये तो पूरी की पूरी जीत यहाँ पे जो है एडवर्ड गेमिंग के हाथ में आते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट पिस्टल राउंड क्रूशियल रहेगा। अगर T1 जीत जाते हैं फिर भी एक उम्मीद की किरण उनके लिए भाग जाएगी। अगर वो पिस्टल राउंड उनके हाथ से चला गया फिर तो इट्स ऑलरेडी डन फॉर एडवर्ड गेमिंग। दे आर द विनर मेरी नज़रों में जिस तरीके से खेल रहे हैं। बट क्या गलतियां आना आपको लग रहा है कि T1 की टीम यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही थी फर्स्ट हाफ में? एक सबसे बड़ी और बेसिक गलती जो उन्होंने की है दैट इज इंडिविजुअल फाइट्स। लिटरली साथ खेलते हुए सेम एंगल पे 2 लोग खड़े हैं, उसके बाद भी आइसोलेटेड फाइट्स ले रहे हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाई। डबल पीक्स कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ दे हैव बीन डूइंग दिस रिपीटेडली, पता नहीं क्यों। ये फ्रैक्चर पे भी ये सेम गलती करते हुए नजर आए थे। उसके बाद में अगर दूसरी चीज पे नजर डालें दैट इज कि चोक ऑफ हो रहे हैं इन द लास्ट फ्यू रीटेक सेगमेंट्स, जहां पर इनकी एक्चुअली स्ट्रेंथ थी। पिछली बार रीटेक सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह इन्होंने एडवर्ड गेमिंग को धराशाही किया था। इस बार रीटेक सिचुएशंस में टिक नहीं पा रहे हैं, एंगल क्लियरेंस थोड़ा सा इनको मुश्किल पड़ रहा है। एंड when it comes to the aim duels, जितना पैनिक कर रही है right now T1, I don't know how they will cover up from that, क्योंकि aim duels हार रहे हैं, वो भी ऐसे aim duels जिनमें इनका हारना बनता नहीं है। बैन के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, हाउडॉन्ग को शट डाउन कर सकते थे, नहीं किया वहाँ पे, बल्कि हाउडॉन्ग के सामने खुद मरे, जबकि वहाँ पर एटलीस्ट एक मैन का डैमेज देने के बाद उन्हें टिकना चाहिए था फ्रॉम द ऑफ द जेट। कॉन्ग के हाथों मरना था, लेकिन नहीं, हाउडॉन्ग हिमसेल्फ से हार गया। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग किस तरह के एम डुअल्स चल रहे हैं। एंड अभी तो मैं स्ट्रैट लेवल पे जाना भी नहीं चाहती, बिकॉज बेसिक लेवल जो प्रॉब्लम्स है वही यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिख रही है T1 की तरफ से that I cannot even walk into the start stage for them. काफ़ी गलतियां आपने काउंट करवा दी T1 की एंड इसके साथ एडवर्ड गेमिंग तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। हेवन डेफिनेटली उनका स्ट्रॉन्ग मैप है, जैसे कि आपने मेंशन किया, डिफेंस भी उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बार किस तरीके से सेकेंड हाफ में डिफेंस सेटअप रहेगा
एंड उसको कैसे ब्रीच करेंगे T1 के प्लस, वो देखना पड़ेगा. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि the stars are aligned perfectly for the players of Edward Gaming. जिस तरीके से उनका गेम प्ले आ रहा है. फ्रेंजी यहाँ पे 3 फ्रेंजी हमें देखने को मिल रहा है एडवर्ड गेमिंग के हाथ में. एंड पिस्टल राउंड में फ्रेंजी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है. अर्ली शॉक डाउट यहाँ पे आएगा एंड साया प्लर्क मात्र 25 HP पे आ चुके हैं. ए लॉन्ग की तरफ परफेक्ट रीड था. ये जो लाइनअप था शॉक डाउट का बहुत ज़्यादा परफेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ नोबडी. फॉल्ट लाइन इन द ए शॉट, नोबडी को थोड़ा सा पुश बैक कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द साइड. अब देखिए जिस तरीके के 3 प्लेयर्स का स्टैक आ रहा है टुवर्ड्स ए लॉन्ग, फ्रेंजी से डील किया जा सकता है इजीली. एब्सोल्युटली. एंड अगर आप एक बार नजर डालें तो ये जो पोजीशनिंग रहने वाली है यहाँ पर नोबडी के साथ में स्मॉगी की, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगी. बट स्मॉगी को यहाँ शट डाउन किया, कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन अपने लिए बनाई. साइड का कंट्रोल तो मिल जाएगा, लेकिन अभी भी प्लांट को होल्ड ऑफ करना डिफिकल्ट रहने वाला है. लेकिन उस चीज़ को आसान करने के लिए मंचकिन यहाँ पर साइड बी में से हाउडाउन को पिक करेंगे, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल पिक. एंड अब कॉन्ग अकेले बचे. सो दिस इज वन राउंड दैट इज नॉट गोना बी इन द फेवर ऑफ EDG. इसका अगला राउंड भी उनके फेवर में नहीं आने वाला, पर बाय राउंड में आके EDG काफ़ी चीज़ें बदल पाएगी. तो आई थिंक 10-4 तक तो हम जा पाएंगे. उसके बाद चढ़ाई थोड़ी सी आसान हो सकती है T1 के लिए, लेकिन अभी भी आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. ग्राफिटी का एंगल चेक कीजिए. गुड फॉर यू, गुड फॉर यू. पहला फ्रैग यहाँ पर निकालने में कामयाब रहे. थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा अगर इनका टेलविंड रहता तो शायद कारपे से भी एक अच्छी फाइट ले पाते, लेकिन अपने आप को रीलोड करते उसके पहले शट डाउन हो गए कॉन्ग. वरना एक बेटर सिचुएशन. बट या दे स्टिल डिड व्हाट दे कुड. पर डिफेंसिव साइड पे होने का एक नुकसान रहता है, अगर आप राउंड हार रहे हैं मतलब आपके पास जो 300 एक्स्ट्रा प्लांट क्रेडिट्स का मौका है वो भी चला जाता है. सो EDG के लिए दिक्कत भरा राउंड होगा अगला. फोर्स बाय भी नहीं कर सकते, सो दे जस्ट गोना फेस इट ऑफ. टीको राउंड फॉर एडवर्ड गेमिंग. वहीं अगर बात करें T1 का बाय राउंड है एंड लेवल 2 भी मुझे यहाँ पे जो है फुल शील्ड भी यहाँ पे जो है जेटा की तरफ देखने को मिल रहा है. एंड इसी के साथ अगर बात करें ये राउंड T1 अपने हाथ में लेके जा सकती है. जिस तरीके से पिन सारे ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग की तरफ से आगे बढ़ना यहाँ पे चाहेंगे, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा. एडवर्ड गेमिंग के जो प्लस प्लेयर्स है काफी फॉरवर्ड आके खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट साया प्लेयर इंस्टेंटली यहाँ पे नोबडी को भी शट ऑफ करते हुए दिखाई देंगे. पिस्टल्स है, लॉन्ग रेंज फाइट में यहाँ पे जो है एडवर्ड गेमिंग इन्वेस्ट नहीं कर सकती, क्लोज रेंज में ही इन्वेस्ट करा जाएगा. एंड जिस तरीके से क्रॉस फायर सेटअप है बिटवीन हाउडॉन्ग एंड स्मोगी, उसके बीच में एक प्लेयर को पिक ऑफ करने की संभावना बन सकती है फ्रॉम T1. नाउ हियर्स द थिंग, EDG के जो प्लेयर्स है जनरली जब भी ऐसे राउंड्स में पहुंचते हैं जहाँ पे अपोजिट टीम एंटी इको पे हो तो थोड़ा अग्रेसिवली खेलते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन यहाँ पे अग्रेसिवली जाते ही नोबडी पिक ऑफ हो गए, तो अब बाकी की टीम थोड़ा संभल के खेल रही है, बिकॉज अगेन दे डू नॉट वांट टू गिव अ क्लाइंबिंग चांस टू T1 जस्ट येट. पर अभी भी थोड़ा फाइट ऑफ ज़रूर से करना चाहेंगे. साइड सी के ऊपर बहुत परफेक्ट रीड आता हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ EDG. नैनो स्वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा, होल्ड बैक करने की कोशिश की जाएगी कॉन्ग को. लेकिन चोचो को देखिए ऑलरेडी एक फ्रैग निकालने में कामयाब हुए, दूसरा निकालने में ZMK कामयाब हो जाएंगे एंड कॉन्ग एक फ्रैग निकालेंगे, नंबर्स बैलेंस कर दिए जाएंगे. बट स्टिल द पोजिशन वॉज वेरी गुड. 3 फ्रैग्स निकालना वॉज द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रॉम द साइड of EDG at this current situation. 2 निकाल पाए हैं, not as good, but still डैमेज बड़ा हुआ है. क्योंकि here's the दिक्कत, T1 ने बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए थे. They did not go for an anti-eco, they went for a full buy. उनकी तरफ से वैंडल्स एंड फैंटम्स थी स्टार्टिंग से. 2 फैंटम्स या 2 वैंडल्स का नुकसान इज अ बिग नुकसान. इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाएगी. इकॉनमी तो स्टेबल नहीं हो पाएगी, बट एडवर्ड गेमिंग के पास अब आ चुके हैं अच्छी वेपनरी एंड जो मोमेंटम उनको चाहिए था, जो राउंड उनको चाहिए था, वो आ चुका है. 15वां राउंड है. अगर 11वां स्कोर लाइन आ सकता है एडवर्ड गेमिंग का तो दिक्कत आ सकती है. अर्ली रिकॉन यहाँ पे ए लॉबी में ज़रूर आया था फ्रॉम द साइड ऑफ नोबडी, जिसको ब्रेक कर दिया गया. तो इन्फॉर्मेशन पास है कि ए लॉबी में प्लस की मौजूदगी है. अभी भी अब अगर देखें स्मोक में आके यहाँ पे जो है जेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ एडवर्ड गेमिंग. काफ़ी फॉरवर्ड आ चुके हैं, आउटड्रोन की सहायता से ए शॉट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोबडी निकालने की कोशिश करे, बट कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं आया. बट एडवर्ड गेमिंग को पता चल चुका है कि अभी भी ए साइड पे ही प्लस है, एक कमिटमेंट हो सकता है एंड एक रोटेशन हमें जो है स्मोकी की तरफ से आते हुए. अब 3 प्लस का स्टैक है ए साइड पे, तो इतना इजीली साइड का कंट्रोल तो नहीं मिल पाएगा. वेल सी हियर्स द थिंग, यहाँ पर लर्क नहीं कर सकती एडवर्ड गेमिंग, बिकॉज अगर कोई भी प्लेयर्स अटैकिंग स्पॉन की तरफ से पीछे से आकर पकड़ना चाहें प्लेयर्स को, तो उनके लिए दिक्कत बनने को 2 प्लेयर्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ T1. कॉन्ग को अभी पिक ऑफ कर लिया है, तो ऑलरेडी नंबर्स का एडवांटेज आ चुका है. पोजीशन पता थी स्मॉगी की, फिर भी फाइट को हार गई. क्या चल रहा है T1 के साथ में? यहाँ पर एम डुअल्स में फेल हो रही है कॉन्स्टेंटली. प्लांट करने का मौका मिला है, बट 2v3 रीटेक सिनेरियो रहने वाला है. नंबर्स का एडवांटेज T1 के पास है, लेकिन हाउडाउन के एम पर थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा रहने वाला है मुझे. चोचो ऑलरेडी एक पिक ऑफ कर चुके हैं, 2v2 पे कन्वर्ट करेंगे सिचुएशन को. इंडिविजुअलाइज फाइट्स नहीं ली इस बार. फाइनली T1 इज एबल टू कन्वर्ट देयर गेम प्ले इनटू गुड क्रॉस फायर्स एंड दे विन द राउंड.
So congratulations to them for that. And Edward Gaming दोबारा से reset economy पे काफी close आ गए थे, but reset economy दर्द देगी, बहुत दर्द देगी. एडवर्ड गेमिंग मुझे लगा था पिस्टल राउंड भी इनके फेवर में जाएगा, पिस्टल राउंड नहीं गया तो उसके बाद जो बाय राउंड आएगा उनके लिए वो इनके फेवर में जाते हुए दिखाई दे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया. एंड T1 को जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो सेकेंड हाफ में फाइनली डिलीवर होते हुए दिखाई दे रहा है. जैसे कि मैं बात कर रही थी, डिफेंस 3 साइडेड मैप पे इतना आसान नहीं रहता है, हम उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगी, एडवर्ड गेमिंग का रीड काफ़ी अच्छा रहता है T1 के ऊपर, बट अभी भी डिफेंस में थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रही है. बट नेक्स्ट राउंड में भी शायद हमें एडवर्ड गेमिंग की तरफ से अच्छा होते हुए दिखाई दे. ये टाइम आउट एडवर्ड गेमिंग की तरफ से आ रहा है क्योंकि 10 के स्कोर लाइन पे अटके हुए उसको किसी तरीके से 12 और 13 का करना है. एंड लेट्स सी क्या एडवर्ड गेमिंग वो चीज़ कर पाती है. कम से कम 13-6 तो हो रहा है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज अगेन T1 के पास में अभी विगल रूम थोड़ा कम रहने वाला है. लेकिन ये राउंड तो पक्का T1 को मिल रहा है क्योंकि एडवर्ड गेमिंग के पास अच्छी इकोनॉमी नहीं रहने वाली, वो अच्छी वेपन्स नहीं बाय कर सकते. पिछले राउंड में बिकॉज उनका मनोबल थोड़ा कमज़ोर था, उनके राउंड्स मोमेंटम कुछ भी फेवर में नहीं था, उन्हें हाफ शील्ड मेटा यूज़ करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, फुल शील्ड्स के साथ गए थे. तो इस बार स्टिंगर्स एंड स्पेक्टर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, शायद कोई एक प्लेयर बुलडॉग निकाल पाए, बट दैट इज़ द मैक्सिमम दैट कैन हैपन. शील्ड्स वीकर रहने वाली है तो अगेन इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगा. दिस इज डेफिनेटली लुकिंग लाइक वन राउंड जो कि अभी भी कैपिटलाइज करने की कैपेसिटी T1 के पास रहेगी, अनलेस कॉन्ग जस्ट गोज इन, टेक्स एन ऑर्ब, गेट्स अ किल, गोज ऑन द ब्लेड स्टॉर्म, एक्वायर्स वेपन फ्रॉम द ऑपोजिट टीम. थोड़ा लॉन्ग शॉट है बट कॉन्ग के लिए कुछ भी पॉसिबल है. स्टिंगर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्लोज रेंज में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है. अगर एक और कलेक्ट कर देते हैं तो न्यूरल थेफ्ट भी आ जाएगा एडवर्ड गेमिंग के पास, जो कि ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन सिक्योरिंग द राउंड. बट जिस तरीके से रोटेशन आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रीड एडवर्ड गेमिंग का है कि सी साइड को कमिट करने का प्रयास यहाँ पे किया जा सकता है. सी लॉन्ग में पूरे के पूरे 5 प्लेयर्स का स्टैक है T1 का. एंड इमीडिएटली डैशन करके साया प्लेयर को साइड को कंट्रोल मिल चुका, फॉल्ट टाइम आएगा, शॉकब्लड का यूज यहाँ पे किया जाएगा. एंड मंचकिन यहाँ पे जो है ऑलरेडी साइफर को पिक ऑफ करते हुए कार्पिंग यहाँ पे आएंगे, इनस्टेंट यहाँ पे ट्रेड्स निकालने में सफल हो चुके हैं. इन डुएल्स यहाँ पे एडवर्ड गेमिंग हारते हुए दिखाई देंगे. व्हाट इज हैपनिंग, एक स्लिवर ऑफ होप जो है T1 का कि ये राउंड अपने फेवर में कर पाए, नॉट जस्ट राउंड, एक कमबैक स्टोरी अपने लिए क्रिएट कर पाए, वो रूम बहुत ज्यादा दे दिया एडवर्ड गेमिंग ने T1 को. जी, यहाँ पर डुअल जरूर से आ रही है एडवर्ड गेमिंग, लेकिन उसके 2 रीजंस है. वन बीइंग कि T1 इंडिविजुअल फाइट्स नहीं ले रहे हैं, अब हमेशा डबल या ट्रिपल प्लेयर्स एक साथ पीक कर रहे हैं. जहाँ पर भी इंडिविजुअल फाइट्स की बारी आ रही है वहाँ पर एडवर्ड गेमिंग अभी भी स्टेप अप करती हुई दिखाई दे रही है. एंड सेकंड, वेपनरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. स्टिंगर्स एंड पिस्टल्स के सामने आपको फैंटम्स एंड वैंडल्स जब आएंगी तो दिक्कत तो देंगी, बट इस बार एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कॉन्ग कर रहे हैं. साथ में न्यूरल थेफ्ट रहने वाला है. चोचो अगर पिछली बार की तरह एक फ्रैग निकाल के अपना न्यूरल थेफ्ट यूज़ करता है, आराम से 2 और फ्रैग्स मिल जाएंगे एडीजी की टीम को. मैन काउंट का एडवांटेज वहाँ से जो कैपिटलाइज होगा वो बहुत शानदार रहने वाला है. 3 साइडेड मैप है. डिफेंस अगर थोड़ा भी बिखरता है, डिफेंस को अगर रीड करने में देर लगती है कि आप कहाँ से जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिचुएशन बन सकती है. नाउ देखिए, पोजीशन कॉन्ग की बहुत अच्छी है. ही विल बी एबल टू पिक ऑफ सम प्लेयर्स, लेकिन अभी भी हाउडॉन के ऊपर फाइट डिपेंड कर रही है. स्मॉगी एंड ओके, नोबडी विद दैट हंटर्स फ्यूरी, क्वाइट वेल डन. आ गया मोमेंटम ईडीजी के पास वापस. 1v4 हुआ था, 1v3 कर दिया गया एंड देन 1v3 कर दिया गया. ईडीजी 11वां राउंड ले जाते हुए अब 12वां भी आ जाएगा और फिर 13वां भी आ जाएगा, बिकॉज ईडीजी एक बार जब चालू हो जाती है तब फिर बस चलती जाती है. वो देखिए जोश जो चाहिए था एडवर्ड गेमिंग को फाइनली उनके पास आते हुए. दे आर वेरी हैप्पी ये नेक्स्ट राउंड अपने लिए सिक्योर करने के बाद, क्योंकि उनको पता है कि मैच पॉइंट तक का जो सफर है वो बहुत ज़्यादा नजदीक आ चुके हैं. जो जीत का सफर है वो बहुत नजदीक है. एंड दिस इज डू और डाई सिचुएशन. ओके वो प्रेशर जो T1 के ऊपर है उसको और बढ़ाते हुए एडवर्ड गेमिंग के प्लेयर. Kong is just crazy when it comes to doing all those actions and getting some reactions. But well, इस बार देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ चुका है. हाउडो पूरे का पूरा डिफेंस ए साइड पे एकदम आगे निकल के आ चुका है, ऑल द वे टू ए लॉन्ग एज. एंड अब यहाँ से ए लॉन्ग एंड ए शॉर्ट दोनों तरफ से एकदम एज पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं प्लेयर्स. काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहेगा T1 के लिए. मोस्टली जिस एरिया पे अभी कॉन्ग का आपको क्रॉसहेयर दिखाई दे रहा है उस एरिया तक ज़्यादा घबराते नहीं है प्लेयर्स, आ जाते हैं.
किलजॉय का यहाँ पर आया है लॉकडाउन, फाइट इनिशिएट होती है, 2 फ्रैग्स निकालते, तीसरा निकालने की कोशिश, लेकिन बैन बीच में आते हैं। 2 फ्रैग्स वो भी निकाल पाए क्रॉस फायर में, लेकिन नोबडी एंड चोचो पीछे से आए, 2 और प्लेयर्स उन्होंने पिक किए एंड अब 1v3 सिचुएशन हो चुकी है। न्यूरल थेफ्ट यूज भी नहीं करना पड़ा, मंचकिन अकेले बचे एंड अब नहीं हो पाएगा मंचकिन से। कैरेट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट दैट्स ऑल दैट कैन हैपन। स्पाइक कंट्रोल में नहीं है, साइट कंट्रोल में नहीं है, राउंड कंट्रोल में नहीं है, बैन काउंट नहीं है, खत्म मैच पॉइंट ईडीजी का एस्टैब्लिश। 13-6 स्कोर लाइन जो प्रेडिक्ट किया था वो का वो देखने को मिलने वाला है। हाँ, मंचकिन अकेले बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है और 1v3 सिनेरियो स्टिल डूएबल, बट इस सिचुएशन में एक प्लेयर को पिक ऑफ किया है, क्या दूसरे को भी पिक ऑफ कर पाएंगे? स्पोन में जो प्लेयर है उनकी पोजीशन को कोई आइडिया नहीं है। गोस फॉर द सेकंड वन, मात्र एक ही प्लेयर बचा है। 1v3 अभी भी पॉसिबल बट लुकिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में देख रहे थे, अदरवाइज यहाँ पे जो है पिक ऑफ किया जा सकता था एंड राउंड आ सकता था टीवन के फेवर में, बट अब आ चुकी है मैच पॉइंट। चोचो का डिसीजन मेकिंग इज आउटस्टैंडिंग। डिड यू नोटिस द टाइमिंग? उन्हें पता था कि इस समय पर इस एरिया को देख रहे हो सकते हैं प्लेयर्स। 2 सेकंड के लिए आगे आए, दोबारा से पीछे गए, फिर दोबारा से आगे आए एंड पिक ऑफ किया। ज़्यादा अपने आप को रिवील भी नहीं किया, कंसील्ड एरिया से फ्रैग निकाला एंड ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब, आउटस्टैंडिंग जॉब। 12-6 एंड नाउ इट्स डन फॉर द डे। 13-6 हो रहा है, खत्म है ये। काफ़ी अच्छा कोलैप्स हमें जो है देखने को मिला बिटवीन एडवर्ड गेमिंग एंड T1, जहाँ पे T1 ने शुरुआत काफ़ी अच्छी करी थी, फ्रैक्चर में एक मोमेंटम बिल्ड किया था, वो मोमेंटम कम्प्लीटली मिसिंग था इन द मैप ऑफ हेवन, जहाँ पे एडवर्ड गेमिंग जिस तरीके से कैपिटलाइज कर रही है राउंड आफ्टर राउंड, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शानदार। एडवर्ड गेमिंग के अंदर तो ऑलरेडी एक खुशी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है, बट T1 वो फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे ज़रूर नज़र आ रहा है प्लेयर्स के। देखिए, खौफ, भय, फ्रस्ट्रेशन सारी चीज़ें अभी के लिए आएंगी, बट दे डू नीड टू रियलाइज कि जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको कहाँ से फेल कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको अपने डिफेंडिंग हाफ में बहुत सारे नंबर्स ऑफ राउंड्स निकालने की ज़रूरत थी। उन्हें पता था कि अटैकिंग हाफ में बहुत बुरी तरह एडवर्ड गेमिंग हमारी 12 बजाती है। सो लाइक पिछली बार लिटरली अटैकिंग हाफ में एक इकलौता राउंड मिला है T1 को, तो T1 हैड टू मेक श्योर कि हर बार रीटेक सिनेरियो को एक अच्छी तरीके से कन्वर्ट किया जा सके। यहाँ पे आई गेट इट, स्टार्टिंग के 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड आप सरप्राइज होते रहे बिकॉज एडवर्ड गेमिंग ब्रॉट इन समथिंग रियली न्यू इनटू देयर फॉर्म, लेकिन 5 राउंड तक में रीड आनी चाहिए थी। अगले 7 राउंड कन्वर्ट करने की एबिलिटी रहनी चाहिए थी T1 के पास में, बट दे कुड नॉट, दे कुड ओनली गेट 3 राउंड्स इन द फर्स्ट हाफ। चीज़ें तो बिखरनी ही थी उसके बाद। डिफेंसिव हाफ वैसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एडवर्ड गेमिंग का, मैच पॉइंट पे है एंड अब खत्म भी करते हुए नजर आ सकते हैं। एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई इवन आफ्टर ऑल द इकोनॉमी दैट वाज रिक्वायर्ड, कॉन्ग इज गोइंग ऑन अ बकी एंड आई हैव सीन दिस गाय ऑन अ शॉटगन। ही इज जनरली वेरी गुड, लेकिन इस बार स्पेक्टर से हारे। लुक एट दैट, काफी अकेले बच्चे हैं, उनको भी फिनिश करके एडवर्ड गेमिंग ने जो है अपने लिए जीत हासिल करते हुए दोनों ही मैच पे फ्रैक्चर में भी इन्होंने अपने लिए होमवर्क करके आए काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से। एंड हेवन तो उनका स्ट्रॉन्ग था ही। 2-0 के साथ एडवर्ड गेमिंग इज मूविंग फॉरवर्ड इन अ प्ले ऑफ एंड T1 यहाँ से जो है अलविदा कहते हुए। T1 को तो घर का रास्ता नापना पड़ेगा। नाउ द ओनली वे यू कैन सी T1 इन मास्टर्स टोक्यो इज on the spectators. That's all they have now. But Edward Gaming, I mean, I cannot believe how they are getting to this stage. क्योंकि look at this. चाइना का जो रीजन है उनको ज़्यादा इंटरनेशनल गेम्स खेलने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो भी रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे, उसमें भी चाइना का एक कम्प्लीटली अलग सेक्शन चलता है जिसमें सिर्फ चाइना के प्लेयर्स खेलते हैं। तो जो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसकी कहीं ना कहीं कमी रहती है चाइनीज की। उसके बावजूद कमिंग ऑल द वे इनटू द ग्रुप स्टेज एंड देन विनिंग इट ऑल थ्रू वन आफ्टर द अदर, वॉकिंग राइट इनटू द प्लेऑफ्स, क्वाइट एन अमेजिंग जॉब। वो भी 2-0, आज भी 2-0 था, कल भी 2-0 था, कॉन्स्टेंट 2-0। EDG छा चुकी है, कॉन्ग हैज माई हार्ट एंड नाउ आई हैव वन मोर फेवरेट टीम इन मास्टर्स टोक्यो एंड दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड डिफिकल्ट। एक ऐसे टूर्नामेंट को विटनेस करना प्लेऑफ्स के टाइम पे जहाँ पर 3 टीम्स हैं हु हैव माई हार्ट। एडवर्ड गेमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश है फिलहाल
अपनी इस हीरोइक जीत के साथ जिस तरीके से स्मोगी का परफॉर्मेंस आया, माइंड ब्लोइंग, पूरी की पूरी टीम काफ़ी अच्छे तरीके से साया प्लेयर जैसे प्लेयर को बीट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, और उसके बावजूद जिस तरीके से एक अच्छा ओके गॉड्स ऑफ ऑल द टाइम यहाँ पे फैंस चीयर अप करते हुए एडवर्ड गेमिंग के, एंड डेफिनेटली करना भी चाहिए जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे आया है सभी प्लेयर्स की तरफ से एडवर्ड गेमिंग के, दे ऑल डिजर्व ऑल द प्रेजेस एंड ऑल द ग्लोरी, एंड प्ले ऑफ्स में भी आई होप एडवर्ड गेमिंग वही चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा पाए, क्योंकि दैट इज वेयर it matters the most. Absolutely, absolutely. Kong Kong, the king. And then nobody who stands against everybody. Hodong, who has head-on fights. And along with him, the rest of the team, which comprises of Chocho, jinke mind games have been just so brilliant. This is just outstanding. The way they play is completely rewarding, and इस reward को अपने हाथ में लेंगे सीधे Masters Tour के playoffs में भी enter करते नजर आएंगे. Cannot believe that they won in such a dominating fashion, all the way with the 2-0. जो revenge matchup यहाँ पे मैं कह रही थी, वो revenge यहाँ पर EDG ने ले लिया है. 2-1 से हारे थे पिछली बार. T1 की वजह से lower brackets में आए थे, और अब T1 को completely eliminate करते हुए दिखाई दिए हैं in the decider match, and they are walking all the way into the playoffs. The fourth and last team to walk into the playoffs from the group stage is EDG. Quite a great game, quite a great play, and this team is one to look out for. डेफिनेटली वन टू लुक आउट फॉर, एंड जिस तरीके से अगर बात करें टीवन की, उनके लिए उनका फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यू था, एंड उसके बावजूद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आया. कुडोज टू देम, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे आके पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट होता है. ओपनिंग डे पे हमने देखा था 2-1 पे स्कोर यहाँ पे जनरेट हुआ था, टीवन जीती थी. तो इट्स नॉट लाइक कि दे डोंट हैव द स्किल्स, इट्स जस्ट अबाउट द हैंडलिंग द प्रेशर, जो कि आज टीवन नहीं हैंडल कर पाई. फ्रैक्चर के मैप पे अगर बात करें, फिर भी एक अच्छा सिनारियो क्रिएट हो गया था इन द सेकेंड फर्स्ट हाफ, आई एम सॉरी, बट सेकेंड हाफ में एक भी राउंड टीवन के हाथ में नहीं गया, एंड वो चीज़ यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं टीवन का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर गई थी. हेवन के मैप पे व्हाट शुड आई से, मात्र 2 राउंड्स इन द फर्स्ट हाफ, और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. बट आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल स्टेज पे टीवन की टीम हमें नजर आएगी, उनकी तरफ से एक अच्छा कमबैक देखने को मिलेगा. बट फिलहाल द टीम दैट इज बेटर इज एडवर्ड गेमिंग. Absolutely, absolutely. T1 की तरफ से बहुत ज़्यादा बेसिक मिस्टेक्स हमें आज के मैच में देखने को मिली. I mean, मैं ऑलरेडी लिस्ट आउट कर चुकी सारी कमियाँ उनकी, तो लेकिन अगेन हियर्स द थिंग, वो कमियाँ T1 की कॉन्स्टेंटली नहीं रहती है. आज कहाँ से आई, आई हैव नो आइडिया, बट मैंने जनरली देखा है कि T1 उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करती दिखाई देती है. मे बी द प्रेशर गॉट टू देम, मे बी फाइटिंग अगेंस्ट EDG वॉज क्वाइट स्कैरी विद द परफॉर्मेंस जो कल EDG ने डिलीवर किया था. बट वेल, इवन विद ऑल द फियर, दे डिड परफॉर्म क्वाइट अ बिट. कोशिश ज़रूर से की थी, बट अगली बार शायद उनके लिए एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है. फॉर नाउ दे आर डन फॉर, एंड वी आर गोना बी सीइंग EDG वॉक इनटू द प्लेऑफ्स. हमारे प्लेऑफ्स शुरू होंगे परसों. कल का दिन आप आराम कर सकते हैं, एंड परसों हम आपको दोबारा मिलेंगे VCT मास्टर्स टोक्यो में. सी यू सून.